One of the oldest museums in the world, the Louvre is home to almost 500,000 pieces of artwork. But yesterday, modern-day masterpieces were created here in the Accor Arena. First, the collision of the new wave, where team synergy trumped raw firepower. GamerLegion's the one to craft an incredible overpass to cut off more than just Monte's ear and send them out of the quarterfinals. Then the brutalists of Apeks, painting the arena orange and washing out Team Liquid. Two decisive maps and Kingston leading by example, dissecting the NA squad and paving the way to the top four. That sets up what is going to be an incredibly emotional semi-final Saturday here at the Blast TV Paris Major. And joining myself, Freya Spears, to open up a historic day in Counter-Strike. I've got Mary Snake and Pimp joining me down on the desk. Gentlemen, we've had a DJ hyping ourselves up for the past 15 minutes. I'm so excited to dive into this one. Yeah, we got the hive going crazy already. I'm surprised that they're in here 5 hours, 6 hours potentially before their own team is playing, creating a good atmosphere. But as you so perfectly said, Freya, two massive dogs coming into these semifinals and two underdogs coming into the semifinal. It couldn't be any better, could it? I was considering getting angry on this desk. I was considering getting mad at what we witnessed from Liquid, but I'm just going to celebrate the underdogs, Freya. I'm just going to be happy for the stories that they are writing for themselves here at this major. Nobody would have considered Apeks and GamerLegion to be in the semifinals. Where is this power coming from? It's coming from the depths of Tier 2 Counter-Strike. We absolutely love to see it. That's what we love about the major, right? The fact that it can be such an open circuit, and it really is do or die time when you enter this arena. We've got to talk about some of the results from yesterday, though. Obviously Liquid later on, but first starting off with Monte versus GamerLegion. It was an interesting first map, and then we went to overpass, and then Monte unfortunately just fell asleep. Yeah, it was a dominating performance coming out of GamerLegion. I think going into the game, most of us had Monte actually as the small favorites, or at least you'd say it's a 51-49 game where it's hard to call out a clear favorite. I was surprised by the fashion GamerLegion won that game in. It did feel like Monte never really got to play their own game. We spoke about it in the group stage as well, maybe a bit too one-dimensional. They rely a lot on the individual powers of Boros, of Some Young, of DimQQ for that matter as well, but they never really got going yesterday. And then GamerLegion just looked like a much better team, looked like a cohesive unit who basically just had a walkover in a quarterfinal of a major. If you took away the nameplates in that matchup, you would have thought that GamerLegion was a Tier 1 team, polished, the better overall teamwork, better overall coaching, and then you would have looked at Monte on the other side of things, and you would have said, man, this looks really puggy. This is like one guy trying to do everything. We couldn't stop saying his name yesterday, and we're going to say it again even more today. The fact that Boros was such a monster for Monte on map number 1, but still, it wasn't enough to get them over the line on Mirage, and then moving into GamerLegion's map pick of Overpass, it was not even a competitive affair. GamerLegion looked so much cleaner on that one. Boros had pretty much an event worse map there, and when he's not firing, then there's really no win condition for Monte. And it really is such a shame, right? Because we were kind of prefacing the scales of the competition, if you will. We were talking about the firepower that could potentially come out of Monte, and Boros was a huge chunk of that, right? It's a shame that we don't see him continuing, but you kind of aptly put it, Jacob, the fact that there's sort of auditioning, I guess, maybe for a Tier 1 team. I think he, overall, looking at the tournament in its entirety, he's done a phenomenal job. Yeah. He's been playing way better than anyone could have anticipated. He did it at the RMR with a breakout performance. I think he lived up to the expectations here as well. Played fantastic throughout the vast majority of the games. Yeah. You can't fault a player for not being there in the first game on a big stage like this. You can't fault a player for being on a team that, it wasn't only about Boros, right? It was not only him playing bad yesterday, it was the entire team of Monte as well. So, yes, I know yesterday he didn't perform as well as he has done so far, but overall, I think his audition went pretty well. We're talking about a hell of a lot of debuts for young guns coming onto that first major stage as well. We cannot, understate how emotional, how much pressure you're going to be experiencing in this arena. We were able to kind of witness that, actually, even against on GamerLegion's side. We saw Ema, who ended up being the best player in the server that day, actually having a bit of a slow start for himself, having a couple uncharacteristic misses, but then everything settled for GamerLegion. Even Isaac, the player that really did the worst for them yesterday, started having his moments later on in that series. Took a while for some of them to shake off the nerves, but that's why it's so important in these kinds of situations to, one, either have experience, or two, have a captain that you can trust. And that's what GamerLegion had. They had Shuhei, they had the game plans. They knew if they just followed what they were instructed to do, that they were going to be able to be carried by their leader to the promised land. It was the perfect performance from GamerLegion yesterday. As you said, you could mention every single player and you could put a positive towards that guy's name. They all had moments in the game where they were the deciding factor, and you so rightfully said it, right? Emma in that game, a 1.78 rating over 2 maps in a quarterfinal.
final, in his first ever quarterfinal at a major. That is just nothing but impressive. So yeah, I think GamerLegion yesterday played the best Counter-Strike they have ever played, and that's something that should scare Heroic later on today. Of course, we do have to talk about the game that was Liquid versus Apeks going down yesterday. You want to talk about Maui? Yeah, Maui, you can take center stage with this one, because we were all hyping up Liquid. We were saying, you know, Elige has never touched a major trophy. Maybe this is his time to shine, and then they just absolutely crumbled in the face of Apeks. Yeah, Apeks just played better CS through and through. They looked like they had better nade protocols, they had better teamwork, they anti-stratted Liquid better, and going into this matchup, we had Liquid, or I had Liquid as the favorites for a couple of reasons. One, the pedigree on some of their players. The fact that this is not NAF's, Nitro's, Elige's first big tournament stage. You would have thought that they would have been able to come out swinging, a little bit more fight, but Apeks just cornered them at every single turn. Every single time, Liquid thought, let's do something proactive. Let's try to actually find some space. It was Apeks that was meeting them head on, and Kixan on the side of Apeks was a monster as an individual, as a caller, and usually also when teams meet each other again in a rematch, which these teams had an initial match in the Challenger stage, it was Liquid that lost then. Usually you come back swinging harder. Usually you look at what went wrong, and usually you try to fix all those errors, but it was actually Apeks, that is, who actually won up themselves. They looked like they were even more ready to play Liquid this time. They looked like they had more reads on what Liquid was doing, and so they comprehensively destroyed them. I said it yesterday, and I'm going to say it again. We've been talking about JKim, we've been talking about JL so far in the tournament, being the two players on Apeks that makes the difference, being the two players that you can, I guess, rely on in these big games against the better opponents. They were the two worst performing players for Apeks yesterday. It was all about Kixan, it was all about Nog with that fantastic clutch. Styko on the first map as well was the highest rated player coming out of Apeks. So again, we're talking about a team that yesterday played the best Counter-Strike game that team has ever played. I don't care about any of the online results, I don't care about what they did in the group stage, because that in itself was impressive. But on this stage yesterday, some of those players had the life game, right? And that was what powered them through Team Liquid, who, after all, played quite terribly. I'm not gonna lie. Yeah, no, it wasn't the Team Liquid that we were hoping to see, you know, ramping up into the playoff stage. We're talking about a team who were down 0-2 in the Challenger stage, no less. They had to run it all the way back. I thought we were going to be seeing a Liquid that was, you know, fired up, full of momentum, ready to take on their major stage. You would have hoped so. It did feel like they turned a page after they were down 0-2 in the hole in the Challenger stage, but that just simply didn't carry over. In some ways, Liquid is a team that's all about momentum. We saw this kind of happen to them when they, off the back of their Grand Slam run, when they went into that Berlin Major in 2019, how they lost so much of that in the quarterfinals against Astralis. And we kind of see that again, where we get this just hope, this glimmer on our eyes that we believe in Liquid, that we believe in North American Counter-Strike, and then it's just stolen from us. It's just ripped away. Our eyes are just pitch black after that, and Liquid, once again, they're reeling from this loss. That's the thing, right? Because that loss against Heroic in the group stage right here, 2-1, we all agreed that was a very competitive game. It was a game that, it was incredible, yeah. It was a game that put Liquid on the map, where we spoke about them as being a team that, okay, if you are facing Heroic once more in this tournament, you have actually shown us that you can beat them on a good day. And then they go in and deliver that performance yesterday on the stage. It's disappointing. There's no ways around it. Yakinda was the only one who I felt lived up to the expectations. The rest of the team fell flat. Yeah, unfortunately, end of the line for Liquid here at the Blast TV Paris Major. But we can take a look at what else is on the cards. Is, of course, Apeks going to be taking on none other than home crowd favorites Vitality. But first, it's time for the big dogs of Heroic to take on GamerLegion.
Not all heroes wear capes, as GamerLegion stole the show and arguably the hearts of the crowd yesterday. The deepest run the Dark Horses have ever made at a major, and now for the ultimate test. Heroic, a team who seldom falter to teams below their level. Jacob, talk about the biggest challenge that GamerLegion have ever faced fast coming at them. I mean, what they've done so far at the major has been nothing but incredible. I don't think anyone would have expected GamerLegion to be part of the conversation of teams who could even make it to the playoff, but they did, especially considering their terrible start to the tournament where they went 0-2. Now, ever since, it's a team that's been getting better and better and better every single game they play. And as I said yesterday, it looked like a proven tier 1 team, as Maui said. Yes, and just to touch on GamerLegion, the story of this organization, they've been in CSGO for about 4 years. They never even accomplished a qualification to a major until they brought aboard this new captain, Shuhei. He has such a great story before him, and GamerLegion themselves, I mean, really, this org was kind of just in the doldrums, just spinning their wheels in Tier 2, just kind of picking players from different regions here and there, maybe getting a Swedish lineup here, getting just a Euro mix, but it took until Shuhei before they were relevant. Alongside Shuhei, there was a real standout name in that series versus Monte yesterday. Emma. We're going to say his name a lot. I'm sure the cast is going to say his name a lot, but Emma yesterday played some absolutely outstanding Counter-Strike, and he's done that throughout the entire tournament so far. He's punching above right now. He's playing way better than you could have expected from him. The best event he's ever had is at the major. He's been around for quite some time. He's been playing Counter-Strike at the sub-tier levels, Tier 2, Tier 3, and we never really saw this potential. You see it right here. This major versus the last, this major versus 2023 and the last 3 months. It's amazing that a player that have shown glimpses of potential all of a sudden steps up at the biggest stage and play remarkably better than he's ever done in his career. I don't know what they're feeding him right now, but that player right there, he could very well be the difference maker. They're feeding him good utility. They're feeding him good strats. Ema is looking just so sharp in terms of when he's playing in the system and when he has to make his own decisions in the mid-late rounds. Well, we've seen some impressive stats from Ema, so let's put some pictures to our words with the Mahone Zone. Something that's very underrated about Ema is actually his ability to use the geometry of the map to the biggest advantage. So let me take a look at this round right here against Monte. So round 21, it first starts off B push. Now take a look at the way he finds his kill into SDY towards Cat. Notice here that he kind of curves into this corner towards this upper B position. By curving into this upper B corner, what it does is it allows him to cover himself from anyone who could be peeking from this backside area. For anyone who's playing towards bench or backside, they're not going to be able to see him as he peeks towards cap. What that does is it allows him to then isolate the fight towards bench if he needs it. That's the first part. Second thing is that after he throws his flash, notice that when he goes on top of Van, he actually jumps across to the site. Now this may seem rather a small detail, but it actually makes a big difference, because if you are this person towards catwalk, having a player jump across is actually very hard to catch, because typically when you're towards cat, you're expecting this player to come in down low, but with the player crossing over up high, it's an impossible shot to hit. This allows them to cross over towards bench, take this deep angle against Boros, allows them to work the angles of this bench area and find Kresno as well. Now the next thing you want to pay attention to here is in this post plant, 3v2 situation. Look at how he uses this pillar here on the left side. That pillar right there. He's going to use it to perfection, because this spot, what it allows him to do is it allows him to use this wall to cover himself from anyone peeking from window. What it does ultimately for him is it allows him in this post plant to peek towards cat and to also peek towards door at the same time without exposing himself to window. From DemQ's point of view, he's trying to find him towards bench. He can't see him. And what that does is it puts IM in a situation where he's in a great advantage, because as soon as he tries to come out towards that window side, he can spot his gun coming out, and it allows him to react in time and find this kill. So this is one of the reasons why Ema is so good on the T side, especially, is his ability to kind of work these angles, use the map geometry to its absolute fullest, and find these kills. I love how Danny picks up on what are seemingly, tiny details, but how Ema manages to use them to his advantage in that game versus Monte. He looks very mature on the server. That's what I note when I watch him play. You spoke about it. It's not just the Boros type of player who's out there in your face aiming. Either he's winning the duel or he's not, and that's end of story. It does feel like there's more substance to what Ema is doing on the team, and as you said as well, he's getting help from the teammates.
Yeah, we were able to see just in that clip right there, great use of movement, great use of angle management, great use of just understanding what the opponents are going to expect. And I think that Danny right there really nailed why Ema has been a transcendent player at this event. Right, gentlemen, the map conversation is an interesting one because coming up against Heroic, it's maybe a struggle to see any path that GamerLegion can kind of get an upper hand here. What's weird about this matchup is that both of these teams like to ban Anubis. And so it's a bit concerning because we don't know, is Heroic going to be going for a float at one point, and so Vito's here, they're rolling in, and actually Heroic, they ban Overpass. That was basically the map that GamerLegion would have wanted to pick in most circumstances, so they're forced onto Ancient, which isn't necessarily their first pick, but Heroic, Pimp, going with Inferno that early. I thought GamerLegion actually would have been fine playing that map too. There's very few teams in the world of Counter-Strike right now who can afford to ban out one of their own best maps in the first round of bans, and it speaks strengths to Heroic's map pool. We get Mirage as a potential decider. That excites me a lot. I think it's the best decider whatsoever. We saw it even Heroic beat FaZe Clan quite convincingly at that map as well. But back to the point I was trying to make here, Heroic have such a strong map pool that they're going into a major semifinal and they can allow themselves to ban one of their own strongest maps just to make sure the opponents are not feeling comfortable. And this is where we simply start the conversation about Heroic strengths coming into this matchup. Sure, we've been highlighting, you know, the strengths we've seen from GamerLegion thus far, but as we were talking about, Heroic literally never played to the level of an opponent below them. It's been only, what, a handful of times we've seen Heroic this year lose out to basically anybody. I think the one that stands out was in the Blast group stages where they lost to EG. Again, how that happened, I have no idea, but EG ended up winning that game. But it's also off a break. It's also coming off, you know, a period where you didn't play Counter-Strike whatsoever. You cannot forget, for context as well, that Stown took a prolonged week of break. He wasn't with them in Abu Dhabi at the World Finals, so it was a not so great period for Heroic. Kind of like a scheduled loss. Yeah, exactly. You'd say like that. But you're right. Like, Heroic never lose to someone they're not supposed to win against. They have a couple of losses throughout the year, one being EG. I'm just going to discredit that. It doesn't matter. Then I lost to, I think it was Vitality and Ariam Rio. Lost to Big. But outside of that, they beat their opponents, and they do it convincingly. Right now, to me, Heroic are, and I know I sound like a broken record because we said this before, they are the best and most consistent team we have to offer on Counter-Strike. Heroic are the team with the highest floor in Tier 1 CS. And that is because Cadian and company have revolutionized the meta of how CS is played today. So many teams at the end of last year, before the player break, said to themselves, how can we be a consistent Tier 1 team? How can we punch to the level of teams up there at the very top? They looked at Outsiders, they looked at G2, and they looked at Heroic. And time has told us now that it is Heroic's meta that has been adopted by so many different teams. Cadian is right now calling the best CS in the world. He is the best in-game leader in the world. It's just about whether his players will be able to contribute in that system. I know we're doing a bit of a step challenge, us talents and the players throughout this event together with the AFK episodes, but what we should do is put a step counter on Heroic when they're playing Counter-Strike, especially on the CT side. I think if you did that, Heroic is one of the teams that is moving around the most in a game of Counter-Strike, constantly doing something, constantly being proactive, constantly going somewhere to open up a space of the map, to shut down a space of the map, and always being one step ahead of their opponents. So the movement and the way they maneuver around the map is something unique for Heroic, and that's what everyone else is trying to copy. And this is where it's really interesting to kind of compare and contrast, you know, teams that we would regard as Tier 2, Tier 3, obviously GamerLegion in that category as well. How much do you think Shui has, you know, been mimicking, maybe making a pastiche off of his game style, his in-game leadership, based off of Cadian? Because we all know that Heroic have, you know, the most distinct game style in the current state of Counter-Strike. I think everyone with ambitions of being a great in-game leader right now would look towards Cadian, would look towards how Heroic play Counter-Strike. I think one thing is copying everything they do. You don't understand the inner workings, you don't understand why they're doing as they're doing. You have to be part of the team. But I would say so, Mari, that if you're an in-game leader right now on the 2-tier scene, you would be foolish not to be inspired by Cadian in some senses. It is easy to say that Shuhei has become a disciple and a pupil of Cadian's style. However, I think that GamerLegion are incorporating a little bit of everything from the successful in-game leaders right now. Shuhei himself has talked about that he looks up to Kerrigan for a lot of inspiration, but you can even see shades of just kind of some more unorthodox styles. Stuff from Eastern Europe, including even Cloud9 style. Dare I say it, I have seen GamerLegion run strategies similar to what Cloud9 have done too. But I will say the majority of how GamerLegion plays is definitely off of a Heroic style framework. I think it's really interesting as well when we look at how Shui isn't afraid to also get down and dirty in the server, right? Kind of echoing Cadian's sentiment, also Kerrigan as well. It's an in-game leader that isn't afraid to be putting up the firepower when his team needs to. He leads by example. I've always said that the best thing to have in an in-game leader is a guy that is willing to go in and get the
the job done, either creating the space for himself or creating the space for the teammates. And Shuhei does that. He is not afraid to take the duel, and he has quite successful with it. The rating of 106 at a major tournament for an in-game leader that is playing his first major ever at this stage, going so deep into the tournament, that is impressive from Shuhei. So yeah, I cannot say anything negative about what he's been able to deliver so far with GamerLegion. It's been nothing but impressive. Flipping back to Heroic, obviously, you know, we talk about them being such a well-drilled, synergized team, and we obviously, you know, we're talking about the star power of Starn shining through as well, and he's been showing that so far on the stage, right? We spoke about it. Coming into 23, Starn has been a little bit quiet. He hasn't been playing up to par, but he's done that at this major, and I think that's the key to victory for Heroic. We spoke about it. They needed just one more guy to be a little bit better than just good, and that's the thing with Heroic. There's no bad players, but there's only good players, and now they have two great players in Starn and in Yabi who can make the difference at all times. The fact that Starn is powered up into this major, and you compare it to what he's done at LAN, the fact that he's performing above his normal LAN averages at this one is so needed, because Heroic, they do need that extra bit of firepower. They needed to show at this event that it's not just a system, because the system, even though it serves Heroic so well in those big games, you need people to step up, because the systems can get countered. Sometimes plan A and plan B do fail, and you need an individual to win a clutch, to get a multi-frag, and Starn has proven at this event that he can do that. I mean, so far, we haven't seen Heroic systems faltering, though, right? Shush was a name that you were saying, you know, you want to put under the microscope more, because I feel like he really is, you know, the unsung hero for the side of the Danes. Shush is just one of the stable pillars of this Heroic lineup. It feels like he's never creating a losing condition for Heroic, despite frequently playing on extremities, despite the fact that he's playing some of the hardest bomb sites to anchor. It's Shush that is looking very strong in terms of just making sure that the system doesn't crumble, because playing in a Heroic system that is all about gambling, all about stacking on one side, all about being proactive, you do need a foundational element, a keystone, in order to support the rest of the moving pieces that are moving on Heroic, and Shush has been that guy for me. Well, we've been talking a lot about the strengths of Heroic, so I want to see if you guys put your money where your mouth is in our unicorn predictions. Has anybody gone with GamerLegion? Oh yeah, we've got some standouts, of course. The Madman of Anders, now actually following along with him. But across the board, we're expecting the Danes, right? You'd be a fool not to be completely honest. Yeah. Heroic have looked like a world-class team throughout this tournament. They look like the best team in the world right now, together with Vitality. And all due respect to GamerLegion, we spoke about it, they haven't beat anyone within the top 10 for quite some time. So going from playing good Counter-Strike, going from playing Counter-Strike above what they normally do, to beat a team like Heroic on this stage in a semi-final, that's tough for GamerLegion. I will say though, all these games, they live their own life, so it's not impossible that we're seeing a competitive game. It's not impossible we see GamerLegion perhaps put pressure on towards Heroic, but there's nothing statistically speaking, there's nothing historically speaking, there's basically no arguments I can come up with for why Heroic should lose this game. And with the veto and the way that Heroic played in it, banning out Overpass when they had that option to ban, you know, what basically GamerLegion's best map, that's why it also shifts a little bit more heavily into Heroic's favor. In some ways, I actually think if GamerLegion played Vitality, they'd have a better chance. Even though both of those are such heavy favorites, I just think that Heroic's style on top of it, like, they're just not going to get caught off. They're the ones that are going to catch GamerLegion off guard. And that's something that is, for Tier 1 teams, really held them back at this event. That's why we've seen so many upsets, because people like G2, people like FaZe, they like to play back so much. And that's when people like Shuhei are just in their bag. They're crafting up a good strategy, because people like Kerrigan and Hooksy, they weren't calling to disrupt. But Cadian is a master of disruption. He's always making things so uncomfortable for the opposing team. I mean, Vitality, they were the last top 10 team the GamerLegion beat, but that was, 7 months ago. So the story not looking so hot for GamerLegion. But man, they've had a lot of fans in the arena. We saw yesterday, obviously, Kios hailing from the French scene. He's graced the lineups, you know, LDLC, Falcons. Shuey learned some French as well to kind of gas up the crowd. I think there's two sides to it. One thing is being Kios, of course. He's making these guys jump for him. Not only with his Belgian roots and the fact that he speaks French, but also the fact that he's been playing well so far this tournament. 3 of Kios' best LAN performances of all time in his entire career has been at this major. That in itself speaks volumes to how much he's overperforming as well compared to what we normally see. I'm sure these guys are going to root for Kios, because Vitality would love for GamerLegion to beat Heroic. And if I know one thing about what they're going to do, they're going to boo Heroic. Everybody is choosing them to be their villains, and that's exactly the ovation, or what should I say, booing, that's going to come out when they're actually walking out. You can't win every crowd, but apparently Heroic can't win any crowd. Not Unfortunately. even in Denmark. Not even in Denmark. Well, it truly is do or die time. We are ready for our first semi-final to get underway, so it's time to welcome the teams into the arena. Accor Arena, and to all of the Counter-Strike fans around the world,
watching wherever you may be. This is the semi-finals day for the last CSGO major ever. And yesterday, the winners came through of GamerLegion and Apeks, and they put up one hell of a fight. But now, the toughest test stands for both of these teams. Are you ready for some great Counter-Strike? You sound really ready, and I'm excited to see it. Now that trophy placed on the front there, that is what these teams are fighting for. And today we will discover which two teams remain. Yes, you can say Heroic or Vitality are favored in this, but the favorites have not always been winning so far here in Paris. Now, for anyone who is watching at home as well, you can jump in on blast.tv and watch in 4K and with no adverts as well. And also, for our show match taking place tomorrow, you can get yourself a chance of banning a map in the final veto part. And also choosing some of the players you want to see in the show match. I'm pretty sure you guys want to have a say in which players will be taking part in that show match, that's for sure. But are we ready to see our first teams? No, come on, Paris. Are you ready? That's more like it. It's time for our first semi-final game. It's time to see Heroic take on GamerLegion. Well, come with me one more time, guys. And bring the hype! Let's go! This is GamerLegion. Isaac, don't doubt him. He never gets tilted, never desperate for frags. And he doesn't just play for stats, he plays for the team. He's delivering in his role, and now he's gone into a semi-final at a major. Imma, the most exciting prospect coming out of the major. He's put up numbers that go beyond the best players in the world. He has been set up for success and delivered on the biggest stage of his career. Shuhei, nurtured in the Academy League, he was destined to be next. He got a taste for what the championship mentality requires, and it was instilled in him. Now he must go pound for pound and round for round with one of the greats that could seal his fate. Accor, reaching his peak major performance and going deeper than ever before. The senior of the roster has stayed precise, even in the most chaotic matches. Here, he will have to do it with all of the opportunity given to him, but he cannot miss. Kios, with the crowd on his side and a smile on his face. He has never felt so good. He has never looked so good, putting up his best numbers on LAN since 2019. Home field advantage, or just a hype-up lad with a dream. Either way, Kios has been unleashed in Paris. Let me hear it for GamerLegion!
Heroic, and they don't care about your boos. Yabi, less than 1 year on the team, he's elevated and developed his skills far beyond the Flames, fitting into a core team that has always got his back, knowing that he can trust and believe in the heroic way. Shush, in a similar fashion, this addition to the core has excelled and opened up, being anything but mad from a lion to a hero. He offers up the greatest support whenever they call for him. Cadian, the journeyman, the hero of his own story. He wears his heart on his sleeve and gives everything to his team, everything to this game. He is the leader that always brings out the best in his players, but you better be ready to work for it. Stown, taken to the stage in Paris, he's shown that he's ready to deliver his best ever major performance. He understands what awaits him, and he understands what he can do for his team. Now is the time for him to be the real frag star. Tesses, the final core member of this epic roster. He has never backed down from a challenge. He has answered Cadian's calls, always with no fear in his eyes. And as long as he believes, you better apprehend that there's still hope. Make some noise for Heroic! Heroic's story is one that many teams envy, but they still want to lift that major trophy. And for them, they have not fallen to an underdog just yet. But could it now be the time? These games have been tough for many of the teams. These games have shown us that the experience only matters on the day. Exist, Ash, they're joining me on the stage. And Ash, this is your toughest challenge yet by far. How did you get the guys ready for this? How did you prepare for this kind of a game? Parlez-vous français? Uh-oh. No, you're English, mate. You can talk to me. Yeah. Well, I guess these guys are probably the hardest team out of anyone we've ever prepared for it. So I think it's kind of testament the way they play that they're clearly really good at what they do. And it's going to be a tough one for sure. And how do you plan to get under their skin? How do you plan to throw them off? They don't get upset, it seems. Well, we'll give it our best. We've got our own game plan. We'll just try to stick to it, and hopefully it's enough. And how proud are you just of your team so far, to be on this stage, to be so many inexperienced players who've been able to deliver in such a big way? Oh, I'm unbelievably proud. It's just amazing the things we've done. We believe in ourselves, and hopefully this isn't the end of the road for us. We're going to keep going. One game at a time, we're going to give it everything we've got. That's what it's all about. Now, Exist, underdogs have had a lot of success so far at this major, but you guys, you've not fallen to them. You've done very well when it comes to it. Why is it for Heroic that you can do that? Well, I mean, I think like this like Tier 1 CS, you need to be very careful with that. I think there's only a few Tier 1 teams, a few elite teams out there right now. So, but I mean, GamerLegion and Apeks, for example, they're two good, they're really good teams, and they're on an upswing lately. So looking forward to it. And when you've been preparing for GamerLegion, what have you noticed that's different to some of the elite teams you're usually facing? I mean, that's the thing. We don't really prepare any different from if we would play like Navi or FaZe, right? It's still a very good team, and we do as we normally do, and that's it. But is there much difference in GamerLegion compared to the other best teams you normally face? I would say like the biggest difference is that we're not used to playing them that much. If we play like FaZe, we already have a game plan, right? Yeah. Now it requires, maybe we need to watch a little bit extra, you know, because we don't play them on a regular basis. But I would say like in-game stuff, it's mostly the same. I'd say most teams play very similarly. Okay, well, let's see how it goes. Guys, shake hands, take your position. It's time for our opening semi-final matchup. Exist seems to think he has the answers. They seem to think they've got the plan. But GamerLegion, they've been doing it time and time again, and they certainly have this crowd on their side. Guys, one last time before we go into this game, make some noise! David versus Goliath, the Titans versus the underdog. But turns out the French connection of Kios Jacob makes him the only hero in this arena. Beautiful scenes in that intro. I think by Vitality, they get it. The Hive, they get it. You know, they want to make sure that Heroic is getting a top
गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का पेरिस मेजर 2023 के पहले सेमीफाइनल में। मेरा नाम है रंजीत मावा सीनियर पटेल, मेरे साथ जुड़ने वाले हैं सैम, लूसिफर, कुमार। एंड सैम से मैं अभी बात कर रहा था, हम देख रहे थे किस तरीके से ऑडियंस इस बार हाइप अप करिए कियोस्क को, खास तौर पे जो उनका फ्रेंच कनेक्शन है। इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सैम, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing, how would I put this? At a point where this feels unreal. मतलब चर्चा डेस्क पे भी हो रहा था जिस हिसाब से ये टीम आई है। I think this is going to be a phenomenal semi-finals to start it off, and I think expectations हमें बाहर रखना चाहिए and हमें सिर्फ इस मैच का लुत्फ उठाना पड़ेगा अभी के लिए। देखिए, एक्सपेक्टेशंस की जो बात कर रहे हैं, तो फिर तो जो ऑडियंस बैठी है उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस? आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर। केडियन को जिस तरीके से बू किया जा रहा था और केडियन उनको हाइप अप कर रहे थे कि और बोलिए बिकॉज ही इज गोइंग टू फीड ऑफ दैट एनर्जी। लेकिन स्टोरी लाइंस की बात करें, दोनों टीमें 4 मैच की विन स्ट्रीक के ऊपर आ रही है। गेमरलीजन अंडरडॉग जरूर बुला रहे हैं उनको, हीरोइक देखिए मैंने हॉट फेवरेट्स इन द टूर्नामेंट, लेकिन आज ये कोई भी तरफ जा सकती है ये मैच, बिकॉज जिस तरीके का प्रदर्शन दोनों टीमों ने दिखाया है। खास तौर पे मैं गेमरलीजन की चर्चा करना चाहूंगा, बिकॉज हीरोइक के जितने चर्चे करे उतने कम है। गेमरलीजन ने जिस तरीके का कंपोजर दिखाया कल, ईमा खास तौर पे जिस तरीके से खेल रहे थे, सराहनीय गेम प्ले। एंड मुझे नहीं लगता कि वैसा प्रदर्शन कोई भी प्लेयर ने इस मेजर में दिखाया है। I agree with you. कल 2 प्लेयर्स ऐसे छाते हुए नजर आए, वन वाज ईमा एंड दूसरे और नॉक। उनका भी बात करेंगे सेकेंड मैच में, बट ईमा आई थिंक इज स्टैंडिंग टॉल एज ऑफ नाउ। एक बड़ा चैलेंज बनते हुए नजर आ सकते हैं हीरोइक के लिए। आई थिंक थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बट you saw Karian, he's like bringing all those challenges. Analytics पे बताते हुए नजर आए थे that he's ready to break all the things that GamerLegion are preparing for, and वो changes लेके आते हैं Karian, and I think उसी की वजह से GamerLegion को दिक्कत हो सकता है आज। Absolutely possible, लेकिन देखिए Karian जिस तरीके से प्रिपेयर करता है, हमारे एनालिस्ट भी कह रहे थे कि Karian एग्जिस्ट ने भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्टेज पे कहा कि हीरोइक जिस तरीके से प्रिपेयर कर दिया, उनको फर्क नहीं पड़ रहा सामने कौन सी टीम खेल रही है, G2 खेल रही हो, नावी खेल रही हो, गेमरलीजन खेल रही हो, उनका प्रेपरेशन उसी तरीके से होता है। लेकिन स्नेक ने भी कहा कि हीरोइक का जो प्ले स्टाइल है वो बहुत ज्यादा अलग है बाकी सारी टीमों से। केडियन जिस तरीके से अपनी ट्रूप्स को लीड करते हैं, अपनी टीम को आगे लेके जाते हैं, डिसरप्ट करते हैं सामने वाले टीम के डिफेंस को, अटैक को भी, जब टेरेस साइड पे होते हैं उस हिसाब से उनका सेटअप होता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा बनाते हैं। बट लेट्स हैव अ लुक एट द नंबर्स राइट नाउ। Shuhei versus Kadian Mamba. Shuhei versus Kadian, लेकिन मैं कहूंगा Stavin versus Ema. Stavin ने जिस तरीके का प्रदर्शन दिखाया आज, बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला उनके लिए स्टेप अप करना। बात करें उनकी पुरानी मैचेस के लिए, दोनों टीमों में लास्ट मैच में जब हीरोइक भी खेला था, हर एक प्लेयर पॉजिटिव केडी पे था। गेमरलीजन में सिर्फ एक प्लेयर थे जिनका पॉजिटिव केडी नहीं था, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, ईमा 1.78 की रेटिंग थी उनकी आखिरी मैच में। 51-28 प्लस 23 का किल डेथ डिफरेंस, पूरी टीम ने स्टेप अप किया था वहां पे। लेकिन बात करें यहाँ पे हीरोइक की, तो एक स्टोरी लाइन जिसके ऊपर मैं जरूर गौर करना चाहूंगा वो है केडियन की स्टोरी लाइन। इस साल मार्च 2023 में एक टूर्नामेंट में वो गेस्ट कमेंटेटर थे, पिछले साल अप्रैल में भी गेस्ट कमेंटेटर थे, 2016 में भी इवेंट्स किए, 2015 में ESL 1 कलोन जब हुआ था, जब मेजर हुआ था, वहां पे एनालिस्ट थे वो, और आज वो एक मेजर की सेमीफाइनल में खेल रहे हैं। पहली ट्रॉफी उठाने की कोशिश आखिरी मेजर में काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव के, क्या वो यहाँ पे जीत पाएंगे? प्रेशर बहुत ज्यादा होगा उनके ऊपर, सारी की सारी नजरें उनके ऊपर होंगी, क्राउड उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, पूरी अरीना उनके खिलाफ। अब देखना ये बनता है कि ये प्रेशर के अंदर क्या ये परफॉर्म कर पाएंगे। इज दिस गोइंग टू क्रम्बल, और या फिर यहाँ पे अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएंगे वो हमें? देखिए, ऐसे सिनारियोज पे बहुत सारी टीम्स भी आती हुई नजर आती है। इनटू द ब्रीच आई थी, दे स्टूड टॉल बट थोड़ा पीछे हटते हुए नजर आया, एंड इवेंचुअली दे कुडंट मेक इट सो फार। तो जैसे आपने बोला, यहाँ पे हीरोइक की तरफ सपोर्ट नहीं नजर आ रहा है, बट दे माइट जस्ट टर्न दैट इनटू देयर फेवर, जिस हिसाब से वो फंक्शन करे, मेकिंग श्योर कि जो यहाँ पे पेरिस के ऑडियंस है, दे फॉल इन लव विद द प्लेयर्स दैट हीरोइक एंड अप मेकिंग। एंड कहीं ना कहीं उसके वजह से आज का जो पहला मैच है और भी एक्साइटिंग है। एक तरफ पूरा सपोर्ट नजर आ रहा है गेमरलीजन की तरफ, एंड दूसरी ओर इट इज ऑल हीरोइक लुकिंग लाइक दे आर अबाउट टू चैलेंज गेमरलीजन, बट इट्स द अदर वे अराउंड। इट्स गेमरलीजन राइट नाउ चैलेंजिंग हीरोइक। यहाँ पे हीरोइक का जो सफर है रोकना चाहते गेमरलीजन, एंड कल के दिन में वो करके एक टीम को दिखा चुकी है, एंड गेमरलीजन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग इट अगेन, बट क्या कर पाएगी? मैप्स के बारे में
क्विकली हम बात कर लेंगे माम्बा यहाँ पे. वी आर गोइंग टू बी सीइंग ब्रिलियंट मैप्स. हमने बैन का कल के दिन में भी बात किया था. GamerLegion जिस हिसाब से खेली थी, ओवरपास नीड्स टू बी क्विकली क्लोज, एंड हीरोइक का भी प्रदर्शन वहाँ पे इतना ज़्यादा बेहतर नहीं था, सो दे डू बैन इट आउट. बट जो पिक्स हमारे पास रहने वाले, इट्स गोइंग टू बी एंशिएंट, इन्फर्नो एंड मिराज. अभी बात करेंगे एंशिएंट being the first map of the day. उसके बाद इन्फर्नो देखने के लिए मौका मिलेगा. We see it is GamerLegion's pick coming through, but Mamba 100% win rate रख के चल रही है heroic on this map. Legion के पास 80 जरूर है, but I think this is going to be a very close matchup. And अभी तक तो हम सोच रहे थे कि overtime कहीं ना कहीं जा सकता है, टीम्स नजदीक आ रही थी, but I think today might be that day. Today might absolutely be that day, लेकिन वो सिर्फ वक्त बता पाएगा हमें. और बात करें हेरोइक के बारे में तो 100% विन रेट जरूर है, लेकिन GamerLegion की मैं दाद देना चाहूंगा यहाँ पे. ज्यादा सोचा नहीं उन्होंने, ज्यादा नंबर्स को एनालाइज नहीं किया, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहते हैं. और मैं ये मानता हूँ ये बहुत जरूरी चीज होती है. कई बार आप ओवर एनालाइज कर सकते हैं चीजों को, और वही ध्यान में रखते हुए यहाँ पे GamerLegion ने डिसाइड किया कि नहीं, हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहते हैं. हमें फर्क नहीं पड़ता सामने वाली टीम कौन सी है, किस स्तर पे खेल रही है, कौन से मैप्स के साथ वो ज्यादा कंफर्टेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता. We'll play on our own strengths. और यही अप्रोच रख के हीरोइक भी इतनी ज्यादा आगे बढ़ पाई इस टूर्नामेंट के अंदर. एग्जिस्ट ने बताया था स्टेज के ऊपर, उन्हें फर्क नहीं पड़ता. उनका जो मेथड होता है, उनकी जो मेथोडोलॉजी होती है, वो सेम रहेगी पूरी टूर्नामेंट में. बट KDN ऑफ कोर्स, उनकी वो इमोशनल स्पीच किस तरीके से हम भूल सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को बढ़ावा दिया था. Ancient. देखेंगे आज के दिन में क्या वो दोबारा रिपीट करते हुए नजर आ सकता है, अपनी टीम को लीड करते हुए नजर आ सकते हैं. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. मैं टीम्स के स्टैट्स के ऊपर भी जब ध्यान दे रहा था, लाइक कितने बार खेली है आज के दिन से पहले एंशिएंट. परसेंटेज जरूर है, स्टैट्स एक टीम को फेवर कर रही है, बट अगेन क्विकली वांट टू अंडरस्टैंड जिस हिसाब से खेल के जीती है. दोनों टीम्स ने मेजर में अभी के लिए एंशिएंट एक बार खेला है, दोनों ने जीतते हुए नजर आया, बट इट वाज GamerLegion हैविंग अ बेटर विक्ट्री, एंड वो एपेक्स के अगेंस्ट थे. दूसरी ओर इट वाज हीरोइक प्लेइंग अगेंस्ट लिक्विड, जहां पे इट वाज अ डिसाइडर मैप जिसको जीतते हुए नजर आया. इट वाज कंटेस्टेड वेरी वेल फ्रॉम लिक्विड. अनफॉर्चुनेटली लिक्विड कल के मैच में अगेंस्ट एपेक्स हारती हुई नजर आई थी. अभी के लिए वी विल सी व्हाट दीज टीम्स कैन डू. मेजर में सिर्फ मैंने जैसे बोला, एक ही बार दोनों ने एंशिएंट को खेला है. जैसे आपने भी बोला, इट्स अप टू देयर प्ले स्टाइल. वो अभी ओपोनेंट के विन परसेंटेज या स्टैट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, अपने जो प्ले स्टाइल से उसको ओपोनेंट के ऊपर डाल के प्रेशराइज करने के लिए यहाँ पे मौका ढूंढेंगे माम्बा. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. अपनी स्ट्रेंथ पे खेल के सामने वाली टीम को परेशान करने की कोशिश होगी यहाँ पे, लेकिन हर एक प्लेयर के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा का सारा दारोमदार हर एक प्लेयर को उठाना पड़ेगा. जब भी उनको मौका मिलेगा, दे विल हैव टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी. KDN लॉक्ड इन. उन्हें भी मालूम है कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते अपने आप को, ना कैमरा से कोई खिलवाड़. रेजर शार्प इनका फोकस, लॉक्ड इन. और ये देखिए, हमेशा मैं बात करता हूँ इनकी पैशन के बारे में, इनकी एनर्जी के बारे में. कियोस जिस तरीके से यहाँ पे दिखा रहे थे अपनी एनर्जी. शुरुआत होगी लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले सेमीफाइनल की राउंड नंबर 1 और मैप नंबर 1. GamerLegion शुरुआत करेगी टेरेस साइड पे, हीरोइक ऑन द CD साइड. देखना ये बंदा पहला राउंड कौन लेके जाता है यहाँ पे. सैम बहुत तेजी से GamerLegion बी की तरफ इशारा बनाते हुए, दे गो फॉर अ टू साइडेड प्रॉन्ग्ड अप्रोच मिड कंट्रोल लेने के लिए, बट दूसरी ओर ए को पुश करते हुए नजर आ रही है हीरोइक. दे माइट मीट देम हियर एट बॉटम मिड. वो दूसरी ओर वापस कैट की तरफ रिट्रीट करते हुए नजर आ रहा है. कियोस इज ओनली द अलोपन पर्सन. बॉटम मिड की तरफ आ रहे हैं, वो भी कैटवॉक की तरफ जाने के इंतजार कर रहे हैं, बट इट्स गोइंग टू बी KDN विद द फर्स्ट, मेकिंग इट सेकंड. ईमा को निकाल चुके हैं, एंड दूसरी ओर देखिए टी साइड से रोटेट करते हुए बैक स्टैप करने के लिए पहुंच चुके हैं. स्टैवन विद अनदर. आखिरी दो खिलाड़ी रहने वाले, थोड़ा ट्रबल हो जाएगा यहाँ पे. इज़ैक पुट्स स्टैवन डाउन, प्लान करने के लिए जरूर जा रहे हैं, एंड इट इज इज़ैक हु इज ट्राइंग टू कवर राइट नाउ. शुहे यबी को यहाँ पे जरूर डाउन करेंगे. Isaac with 1 on Shush. 2v2 all of a sudden, but KDN with a third for him. Tessas, he closes it. क्या ही नजदीक लेके आया माम्बा. It was a 5v3 or a 5v2 as well.
3-5, yeah. Came down to the almost edge of becoming a 1v1. शानदार तरीके का क्रॉस प्लेसमेंट था जो इन्फॉर्मेशन निकाली हीरोइक ने यहाँ पे, परफेक्ट रीड। और स्नेक ने कहा था कि हीरोइक कितना ज्यादा प्रेशर बनाते हैं सामने वाली टीम के ऊपर, बिल्कुल अनकंफर्टेबल बना के रखती है उनको, और वही चीज करते हुए, वही चीज दर्शाते हुए यहाँ पे पहला राउंड निकाला उन्होंने। गेमरलीजन C4 जरूर प्लान किया था, उसकी वजह से फोर्स कर पाएंगे। यूटिलिटी काफी ज्यादा अच्छी इनके पास, लेकिन हीरोइक चुप नहीं रहने वाली। इस बार देखिए किस तरीके से स्विच अप किया है। बी साइड पे प्रॉपर सेटअप केडीएन यूटिलिटी के साथ सेटअप करेंगे अपनी टीम को जब भी जरूरत पड़ेगी। स्टैवन MP9 लेके बैठे हैं, फ्लैश का भी कॉल आउट दिया जरूर जाएगा, लेकिन स्टैवन को जिंदा रहना पड़ेगा। वहां पे क्रॉस फायर मीट ग्राइंडर बना के रखा है, लेकिन तुरंत ट्रेड निकलते हुए अब बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। 2-3 रीटेक आसान नहीं होने वाला है। ईमा क्रीप अप करते हुए, लेकिन क्या एक्सपेक्ट करेंगे प्लेयर को, वहां पे स्मोक के अंदर जरूर जाएंगे एंड शुश शायद बच निकल पाए वहां पे, लेकिन ओ माय गुडनेस फ्लैश जरूर आया। थोड़ा सा ओवर कमिट करते हुए वो प्ले बनाने की मुझे नहीं लगता जरूरत थी वहां पे, क्योंकि मैन एडवांटेज था उनके पास और प्रेशर बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन याबी इज नॉट गोइंग टू मिस दैट। इकलौते प्लेयर एक और ईगल है उनके पास, याबी 9 HP। शुश वहां पे जिनके पास डिफ्यूज किट, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, याबी फिर भी उनको टेक डाउन करेंगे। दूसरा राउंड निकालते हुए हीरोइक यहाँ पे गलतियां नहीं कर रही है, नॉट नहीं यहाँ पे। अगर नंबर्स खो भी रहे, दे आर स्टिल कॉलिंग आउट व्हाट्स हैपनिंग। आई थिंक वो बहुत बेहतरीन है, एंड स्पेशली जब वो ऑलरेडी साइड टेक ओवर हो चुका था, होल्डिंग दोज लास्ट 2 प्लेयर्स की आप अभी पुश मत कीजिए, एंड स्पेशली रीडिंग दैट फ्लैश प्ले जो आया था, ईमा का जो पुश को उन्होंने तोड़ दिया था, दैट वाज जस्ट ब्रिलियंट। अगर ईमा का पुश नहीं आता, ही वुड हैव जस्ट हेल्ड लॉन्ग। आई थिंक ये राउंड हो सकता था गेमरलीजन का, बट नॉनदलेस हीरोइक विल बी सुपर हैप्पी। 2 राउंड अपने तरफ निकाल चुके हैं, अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट फॉर देम। दूसरी ओर अभी के लिए एक सेव के ऊपर खेलते हुए गेमरलीजन नजर आएंगे। दोबारा बहुत तेजी से बी की तरफ इशारा बना रहे हैं, but there's a molly to put a stop on the ramp, but they're just looking for a crossing over। साइड के अंदर आ चुके हैं। It is only one player अभी तक जो ट्राई करे थे रोकने के लिए। केव की तरफ से अभी के लिए स्टैवन लड़ रहे हैं, एंड फाइनली याबी along with his teammate सीडी को गार्ड करते हुए नजर आएंगे। प्लांट वापस हो जाएगा, but it's only Kios eats up a grenade damage। हीरोइक हर एक चीज के लिए प्रिपेयर है यहाँ पे, हर एक चीज एक्सपेक्ट कर रही है। इस बार पीछे खेला उनको पता था शायद एक क्विक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसा लगता है जिस तरीके से हीरोइक तैयारी करके आए, एग्जिस्ट उनके कोच केडीएन, उनके कैप्टन किताब की तरह पढ़ रहे हैं, उनको हर एक चीज का जवाब है उनके पास, हर एक प्ले का जवाब है उनके पास। और उनके जो ट्रूप्स, उनके जो प्लेयर्स है, बिना कोई सवाल पूछे जिस भी चीज को करने की जरूरत वो करके दिखा रहे हैं। खुशी देखे उनके चेहरे पे। हीरोइक का डिसिप्लिन देखिए, वहां पे जैसे रश आ रहा था, दे वर इनिशियली प्लेइंग ऑफ कॉन्टैक्ट, थोड़ा डैमेज करने के लिए या किल निकालने के लिए ट्राई कर रहे थे, बट व्हेन दैट डिड नॉट हैपन, दे डिड नॉट रीअग्रेस। अपने टीममेट्स के लिए वेट किए, एक्सचेंजेस किया, उसके बाद वो राउंड को जीतते हुए नजर आए। अभी के लिए जरूर भाई देखने के लिए मौका मिल रहा है। देयर इज एन AWP आउट, दिस इज फ्रॉम गेमरलीजन। एक और बॉटम मिड में लड़ाई चल रहा है, मॉली करके यहाँ पे फोर्स ऑफ किया जाएगा एंगल को, एंड मिड का पूरा कंट्रोल लेते हुए हीरोइक। जी हाँ, काफी ज्यादा यूटिलिटी का इस्तेमाल किया उन्होंने यहाँ पे, लेकिन सामने यूटिलिटी बेटा और नहीं कर पाया। अब दिक्कत हो सकती है उनको होल्ड करने में, बिकॉज इंसेंडियरी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। कोशिश जरूर करी उन्होंने वो किल निकालने की, मैप कंट्रोल लेने की, लेकिन फ्लैश आया, केडीएन यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं कर पाया उस चीज के ऊपर। अब भारी पड़ने वाला इनको। एग्रेशन काफी शानदार था, स्ट्रैटेजी बेहतरीन थी, बस वो उनके लिए काम नहीं कर पाई। तो अगर ये राउंड वो हारते इसकी वजह से, लैक ऑफ यूटिलिटी की वजह से, तो बुरा नहीं मानना चाहिए उनको। लेकिन अभी भी द राउंड इज फार फ्रॉम ओवर येट, शुरुआत नहीं हुई है। एक हल्का सा भी कोई किल नहीं निकला यहाँ पे, कोई ज्यादा डैमेज नहीं मिला ईमा को। शू अंदर पुश करने की कोशिश, स्टैवन अब स्पॉट हो चुके हैं। शूश बैकअप दे रहे जरूर उनको, लेकिन क्या किल निकाल पाएंगे? जी हाँ, परफेक्ट बेट एंड स्विच, बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं यहाँ पे हीरोइक। याबी अभी भी इंतजार कर रहे हैं, फ्लैश आया जरूर है, उनके ऊपर पीछे हटना पड़ेगा, स्मोक भी फट जाएगा। आइजैक के अंदर ओवर कमिट करेंगे, सबसे बड़ा सवाल जी नहीं अंदर नहीं जरूर डालेंगे, डैमेज तो नहीं पड़ने वाला, इतना ज्यादा पड़ेगा। फाइनली गोलियां चलाई, टेसिस को टेक डाउन किया जाएगा। याबी के पास उतनी ज्यादा एचपी नहीं है, रीटेक नामुमकिन सा लग रहा है यहाँ पे। केडन एंड याबी बहुत कम एचपी में बचे हुए हैं, जैसे आपने बोला। आई थिंक ये वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। दे माइट नॉट गो फॉर दिस रीटेक। नाइस सिक्योर कमिंग इन फ्रॉम गेमरलीजन, बट जिस हिसाब से इनको थोड़ा डिनाई करने के लिए इरादा बनाया था, लुक गुड, बट एक और
finding the opening towards CT was just brilliant. अभी के लिए एक exit frag ढूंढने के लिए तैयार है शुश. बहुत नजदीक रहने वाले खिलाड़ी. It's all about the timing. Accor will go down to the blast, but Kios शुश को take down करते हुए नजर आएंगे. That's another rifle being dropped. Ooh, GamerLegion. आप देखिए एक राउंड जीता है, but that energy, that aggression वो दिखा रहे हैं. मिला एक राउंड, इसको कैपिटलाइज करते हुए नजर आएंगे. We'll build this momentum from here. जी हाँ, लेकिन देखना ये बनता है हेरोइक क्या वापस एग्रेशन के लिए कोशिश करते हैं. यहाँ पे टाइम आउट दिया है उन्होंने बहुत जल्दी. आई बिलीव कुछ डिस्कस करने के लिए होगा उनके पास. जिस तरीके से यहाँ पे पुश करने की कोशिश करी थी. एक्सिस्ट तो कुछ बोल नहीं रही है फिलहाल के लिए. मे बी रीसेट करने के लिए लिया है. केडियन कुछ बोल रहे हैं. जी नहीं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं. लेकिन यहाँ पे स्टैवन देखना ये बनता है उनके पास क्या शब्द है. प्रॉब्लमैटिक हो सकता है ये सामने वाली टीम के लिए, बिकॉज इतनी जल्दी यूजुअली आपको टाइम आउट नजर नहीं आता. एक राउंड नहीं देना चाहते हेरोइक. जिस तरीके से गेम का अप्रोच रहा है उनका, द ब्रांड ऑफ काउंटर स्ट्राइक दे प्लेइंग, बिल्कुल भी वो उनको जगह नहीं देना चाहते कि वहां पे वो मोमेंटम बिल्ड करे. लेकिन ऑफ कोर्स सामने वाली टीम भी खेलने के लिए आई है. पूरी कोशिश होगी जितना मोमेंटम बिल्डअप कर सके, जितना प्रेशर बिल्डअप कर सके. यहाँ पे ऑफ निकाली है केडियन ने. अब देखते हैं क्या गुल खिलाते हैं. पिछले बार इट वाज Accor, इस बार केडियन इंटरव्यू निकाल चुके हैं. लेट्स वेट वॉच. या भी अभी के लिए मिड पे रहेंगे. स्मोक ऑफ जरूर हो चुका है, सो ही हैज नो विजन एट टॉप मिड. स्टैविन केव के कंट्रोल जरूर रख रहे हैं, बट GamerLegion का इरादा जो है C4 लेके वो वापस A के तरफ ही नजर आ रहा है. बहुत नजदीक थे वहां पे शुए doesn't fire his rifle. बहुत सारे क्रॉसओवर्स हो रहा है अभी के लिए. What a cheeky angle coming in from Shush. चेक करना पड़ेगा, but Accor was ready. Shush is down. सीधी पे जरूर यह भी तैयार है. टीममेट्स को बुला चुके हैं. Understanding there's a util drop coming through, but oh, quick on the trigger. Accor याबी को भी डाउन करके दिखा देंगे. And the situation immediately turns down to become a 3v5 and a save called. प्रेशर इतने बड़े सेज का प्रेशर हीरोइक के ऊपर नजर आता हुआ. याबी थोड़ा सा प्रीमेच्योर पिक किया था. वहां पे फ्लैश अवेलेबल था उनके पास, लेकिन एक और का ये जो पिक था वो बेहतरीन. पहला पिक निकाला, उसको कन्वर्ट किया, और ये देखिए फ्लैश. मैं कह रहा था प्रीमेच्योर पिक वहां पे. ऐसा अभी भी उनके पास अवेलेबल होगा. हीरोइक बहुत साउंड फाइनेंशियल डिसीजन यहाँ पे कर रही है, खास तौर पे सीटी साइड पे, जहाँ पे इकोनॉमी आपकी उतनी फॉरगिविंग नहीं होती. M4 की बात करें तो $3100 की आती है M4 A4. इंसेंडरी की बात करें वो भी महंगी आती है. मॉडल से $200 ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है. तो आसान नहीं होता. आपको डिफ्यूज किट खरीदनी होती है जो $400 की होती है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वहाँ पे आप इकोनॉमी उस तरीके से मैनेज करें. पर देखना ये बनता है हीरोइक क्या करती है यहाँ पे. इंतजार करें स्टैमिन बेचारे. These forms are crucial. You cannot leave a bro hanging. जी हाँ, लेकिन केडियंस लॉक्ड इन. आई थिंक सबसे ज्यादा प्रेशर यहाँ पे केडियन के ऊपर है. अपनी जिंदगी का पहला ट्रॉफी होगा मेजर का. लेकिन अगर आपने एक चीज नोटिस करी, 5 राउंड हुए, 5 के 5 राउंड में C4 जरूर प्लांट हुआ है. 3 राउंड डिफ्यूज हुआ था, रीटेक हुए थे, 2 राउंड C4 फटा है. GamerLegion हर बार साइड तक पहुंच पा रही है. 2 राउंड बैक टू बैक A पे ही उनको सक्सेस मिला है. एवरी पोजीशन दे पीकिंग. जब A की तरफ से एंट्री लेते नजर आ रहे हैं थ्रू A मेन, उनको पता है उस हर एक एंगल में एक ना एक खिलाड़ी खड़े हैं. बट अभी के लिए GamerLegion आर चेंजिंग देयर स्ट्रैटेजी. मिड के थ्रू जाना चाहते हैं, होल्ड आउट करते हुए. याबी एंगल इज नॉट चैलेंजिंग. अगर नजदीक आता है, याबी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लोज अप फाइट, जिसकी वजह से वो अभी तक पीक नहीं कर रहे. याबी इज गोइंग टू बी सुपर क्रूशियल. अकेले है मिड पे, एंड अगर वो अपने पोजीशन बता दिए, मिड का पूरा कंट्रोल छीन लेंगी GamerLegion. From A to B, I mean mid to B जाते हुए. Both the teams माबाबी के लिए बहुत strategic, slow, looking forward to some kind of information खेल रही है. And especially after full buys, अभी तक कोई भी एक quick aggression के लिए नहीं गया है.
केडियन इकलौते प्लेयर होने वाले एक ही तरफ, यहाँ पे पूरी तरीके से फेक किया, लेकिन रीड बहुत जल्दी आ गई है हीरोइक के पास। कमिट नहीं किया ये साइड पे प्लेयर, धीरे धीरे वापस हटने की कोशिश। 21 सेकंड बचे, केडियन को ये किल निकालना पड़ेगा, लेकिन नहीं, मोलोटोव की वजह से वो नहीं देख पाए प्लेयर को। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन शुश वो शॉट नहीं मिस करेंगे। एक और किल निकालने की जरूरत, लेकिन ईमा इज गोइंग टू मिस दैट शॉट। नो माय गुडनेस, 3K स्प्रे डाउन किया यहाँ पे ईमा ने। हर बार टीम के लिए परफॉर्म करते, जितनी भी बार जरूरत पड़ी है हर बार उन्होंने वो फ्रैग्स निकाले, लेकिन केडियन कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन उनकी। जब मोलोटोव आपके नजदीक होती है, आपको आसानी होती है उसके थ्रू देखने में, जो धुआं होता है इस गेम में इस तरीके से होता है। अगर मोलोटोव आपके बहुत नजदीक है तो आप दूसरी ओर देख पाएंगे, लेकिन मोलोटोव दूर है आपसे तो आप नहीं देख सकते। उसी चीज का भरपूर फायदा उठाते हुए GamerLegion यहाँ पे ट्राइंग टू सेव द वेपन। शुवे जरूर उनको चेज करना चाहते हैं। दूसरी ओर AWP विल बी ग्रीटिंग, नो वेपन्स एट ऑल केप्ट अलाइव, एंड GamerLegion इक्वलाइज करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद जी हाँ, वाइटैलिटी का भी मैच होने वाला है आज के दिन में, एंड अभी तक ज्यादा लोग जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, दे आर थिंकिंग इट शुड बी हीरोइक एंड वाइटैलिटी जो ग्रैंड फाइनल्स की तरफ आना चाहिए। एंड कोई आप ही के ये एक और फ्रेंच लेजेंड आई थिंक 9 बार मेजर खेल चुके हैं, काफी ज्यादा प्यार उनके लिए। मेजर में बहुत सारी चीज देखने के लिए मौका मिल रहा है, एंड आई थिंक हम हर दिन ये बात कर रहे हैं, द CSGO कम्युनिटी। बेहतरीन कोशिश थी वहां पे केडियन की इनिशियल पिक निकालने की, जो हीरो ऑफ है उनके पास, लेकिन ज्यादा HP नहीं है दिक्कत की बात हो, और प्रेशर में जरूर महसूस हो रहा है। आप देख सकते हैं केडियन के मुंह पे कितने ज्यादा सीरियस है, ही डजंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग। फिलहाल डोनेट की तरफ रोटेट कर चुके हैं। C4 B की तरफ जा रहा है, तो जो फेक है वो बहुत अच्छी तरीके से सेल किया GamerLegion ने A की तरफ, और अब B पे एग्जीक्यूट करेंगे। मुझे नहीं लगता रीटेक की कोई पॉसिबिलिटी होने वाली है यहाँ पे। ईमा लेकिन तुरंत ट्रेड हो जाएंगे, अब शायद पॉसिबल होगा। एक और पिक की जरूरत, एक और किल। क्या केडियन यहाँ पे डिलीवर कर पाएंगे, क्या ये एंगल होल्ड कर पाएंगे, ये जरूर देखने बनता है। लेकिन ये बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है उनको, लेकिन केडियन कुछ करना चाहते हैं, जी नहीं वो नहीं कुछ करना चाहते। एक और बार ऑफ सेव करेंगे, एक AK भी सेव करने की कोशिश, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होने वाला है हीरोइक के लिए कि GamerLegion की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है अब। एग्जिट ट्रैक के लिए स्टैवन तैयार, सोच रहे कि कोई ना कोई खिलाड़ी आ सकता है कैट की तरफ, बट देयर इज अ गार्ड। एक और उनको पता है कोई ना कोई खिलाड़ी एग्जिट ट्रैक के लिए तैयार रहने वाला है, एंड जब ये बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है तब जाके वो वापसी करते हुए नजर आएंगे। सो नथिंग बीइंग फाउंड फॉर स्टैवन, एंड यहां से GamerLegion लीड भी ले चुकी है। हीरोइक अभी तक GamerLegion को इनिशियल राउंड्स में जिसे होल्ड ऑफ कर रहे थे, ब्रिलियंट रीटेक्स कर रहे थे, इज ऑल फॉलन डाउन, कुछ अभी तक नहीं कर पा रहे। Another timeout being used from Heroic. Exist ऑफ कोर्स ये बात है, यहाँ पे अपनी टीम को गाइड कर रहे हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि GamerLegion के कोच क्या कह रहे हैं फिलहाल, बिकॉज जो भी कर रहे हैं उनके लिए काम कर रहा है। एग्जिस्ट अपनी टीम को दिलासा देते हुए प्रोसेस पे फोकस कीजिए, अपने आप पे भरोसा करिए, भरोसा रखिए, क्योंकि GamerLegion बेहतरीन काउंटर स्ट्राइक खेल रही है, अभी उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी है कि हीरोइक काफी क्रूशियल किल्स नहीं निकाल पा रहे, जो पिवटल मोमेंट्स होती है वहां पे कोई भी कारण की वजह से वो किल नहीं निकाल पाया। मोलोटोव को अनफॉर्चुनेट कह दीजिए, या फिर केडियन जब बूस्ट लिया वो शॉट मिस कर दिया उन्होंने। लेकिन हीरोइक ये राउंड बहुत क्रूशियल होने वाला। वापस मिड कंट्रोल की तरफ एक और मोलोटोव आया यहाँ पे। ईमा थ्रू द स्मोक एज वेल, बहुत बढ़िया यहाँ पे GamerLegion को एडवांटेज मिल चुका है। बी की तरफ कंट्रोल भी ले चुके हैं, केव की तरफ पुश कर रहे हैं। ये फंसने वाले खिलाड़ी बहुत बुरे फंसने वाले हैं। जी हाँ, स्टैवन गेट्स टेकन डाउन, आखिरी खिलाड़ी बचेंगे केडियन।
Again with the AWP, इस ऑप को वापस बचाने के लिए इरादा बनाएंगे, but it's a 5v1. ए की तरफ ऑलरेडी खिलाड़ी तैयार है. He's waiting. आइजैक, अगर केरियन उस तरफ आते हैं उनको पनिश किया जाएगा. शुए also right now on the hunt. सारे खिलाड़ी अभी कहीं ना कहीं हंट के लिए निकलना चाह रहे हैं to find this AWP. शुए को जरूर सेट डाउन करेंगे. पोजीशन पता चल चुका है. जिस तेजी से गेमर लीजन के खिलाड़ी केरियन का पीछा पड़ना चाहते हैं, देखिए मामा. Nothing being allowed. दाद देनी पड़ी GamerLegion की. यहाँ पे जिस तरीके से हीरोइक ने पहले राउंड में, पिछले राउंड में कंट्रोल लिया था, मुझे लगा था कि ये गेम की पेस को डिक्टेट करना चाहते हैं, लेकिन GamerLegion वो भी पूरी तरीके से तैयारी करके आए. यहाँ पे हर बार मोलोटोव की वजह से उनको किल नहीं मिल रहा है. एंड सामने देखिए जिस तरीके से किल्स निकालते जा रहे हैं, दिक्कत देने वाले हीरोइक की सीडी साइड में हमेशा से कहता हूँ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन अभी स्ट्रगल कर रहे हैं. बट सिर्फ 8 राउंड हुआ है. द गेम इज फार फ्रॉम ओवर येट. बाय अभी भी मौजूद उनके पास. बस 2 राउंड की जरूरत. 2 राउंड मिलेंगे, मोमेंटम वापस लेके आ सकते हैं अपने आप के लिए. शुश को इन्फॉर्मेशन जरूर मिले क्योंकि ग्रेनेड टकराई थी सामने वाले प्लेयर के साथ, और यहाँ पे बूस्ट करेंगे अपने प्लेयर को. MP9 लेके काफी खतरनाक साबित हो सकता है ये टेररिस्ट साइड के लिए, लेकिन एक ही तरफ काफी हैवी प्रेजेंस GamerLegion दिखा रही है. C4 छोड़ा हुआ डिफॉल्ट करने की कोशिश. केडियन बहुत एग्रो खेल रहे हैं बी की तरफ. उनको वो इन्फॉर्मेशन की जरूरत. शुश क्या यहाँ पे पेशेंस रख पाएंगे? थोड़ा सा ईगर होते हुए, जो मुझे लगता है एक दिक्कत उनको जरूर दे सकता है, लेकिन उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बैठे रहने की जरूरत. और ये देखिए कितनी मेथोडिकली मैप कंट्रोल ले रहे हैं. C4 बी की तरफ मूव करता हुआ. केड निकलौते प्लेयर है यहाँ पे, पूरी तरीके से फेक सेल किया है. हुक, लाइन एंड स्लिंकर. केडन क्या यहाँ पे किल निकाल पाएंगे? बहुत जरूरी. जी आप पहले निकालेंगे, तुरंत ट्रेड हो जाएंगे. दूसरे किल के साथ स्टैवन भी एक और ट्रेड. 3 वर्सेस 3 प्रिस्टीन डाउन हो सकता है ये, लेकिन सुई उनको सर्वाइव करना पड़ेगा यहाँ पे. वापस पुश करना चाहते स्मोक के अंदर. एग्रेशन देखिए, लेकिन टेस्ट स्टिल फाइंड्स अ फ्रैग. हीरोइक हरक्यूलियन एफर्ट दिखाते हुए यहाँ पे GamerLegion मोमेंटम को पकड़ के रखना चाहती है. जिस कॉन्फिडेंस से वो खेले, जितना एग्रेशन दिखाया, उसके ऊपर कैपिटलाइज करना चाहती है, लेकिन Accor यहाँ पे ऑप लेके खड़ी है. ये बर्बादी का मंजर हो सकता है सीटीज के लिए. टेस्ट ये फ्लैश उनके मुंह पे फटेगा, लेकिन कियोस बैकअप देने के लिए बैठे. शुश एक जरूर करेंगे, लेकिन एक और शॉट मिस करने वाले. हीरोइक वंस अगेन सो क्लोज बट येट सो फार. और GamerLegion की जितनी तारीफ करे उतनी कम. मैं तो नहीं मानता किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा फर्स्ट हाफ में. देखिए ये मेजर आखिरी मेजर है, बट ये मेजर में बहुत सारे अपसेट अभी तक हमें देखने के लिए मौका मिला है. आई थिंक ऑडियंस एंड प्लेयर्स को इसके ऊपर ध्यान रखना है दैट दे हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड ऑल्सो वेरी कॉशियस. जो जहाँ पे भी जो भी करना चाहते हैं, अगर अग्रेशन भी दिखा रहे हैं, दे हैव टू बी बेटर. शुरुआत में एटलीस्ट ट्रेड हुआ था, बट उसके बाद जिस हिसाब से कंट्रोल लिया गया था, कंट्रोल लेके GamerLegion ने एडवांटेज लिया. आई थिंक दैट्स समथिंग GamerLegion are doing wonderfully for now. बट इस बार बी को पूरा डिनाई करते हुए डोर पे ही रोक देंगे. शुए ट्राइंग टू डू समथिंग. स्मोक के थ्रू जरूर स्प्रे डाउन किया, बट ही गेट्स नथिंग. टेम्पल से होल्ड आउट करते हुए अभी के लिए शुश. कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा डीगल का, बट दूसरी ओर याबी विद हिज पिस्टल टेक्स डाउन ईमा. उसका ट्रेल जरूर आइजैक निकालेंगे. दूसरे खिलाड़ी को भी देख चुके हैं. टेसिस एट डोनट राइट नाउ बहुत तेजी से रोटेशन देना चाहता है, बट लुक एट द फ्लैंक कमिंग थ्रू. आई थिंक ये बैक स्टैप का कोई आइडिया नहीं है. स्टैवन ही नीड्स टू प्ले वेरी स्मार्ट एंड डज नॉट नीड टू मेक एनी साउंड. किल मिल जाएगा उनको, जिसके वजह से उनका पोजीशन पता चल चुका है. वन टैप का ट्राई कर रहे थे, बट स्टैवन, ओह माय गॉड, ही पिक्स अप शुए एज वेल. कियोस साइड के अंदर फंस चुके हैं. And that becomes a round for none other than Heroic. जिस तरीके से यहाँ पे राउंड निकाला, जिस कॉन्फिडेंस से राउंड निकाला है, तारीफ करनी होगी उनकी, बहुत तारीफ करनी होगी. लेकिन वो जो MP9 से 2 किल निकाले, शोल्डर पीक जिगल करके एक शॉट ले रहे थे. स्टैवन पिवटल किल्स निकाल दो अपनी टीम के लिए, ये जरूरी था. इंडिविजुअल ब्रिलियंस जरूर, लेकिन उसकी जरूरत है यहाँ पे. बिल्कुल भी जगह नहीं दे सकते सामने वाली टीम को. और कियोस की डिसअपॉइंटमेंट आप देख सकते हैं. काफी इमोशनल प्लेयर है कियोस. या
बहुत ही ज्यादा. जब राउंड उनके तरफ मिल जाता है, he's at its peak, चिल्लाते हुए नजर आते हैं. दूसरी ओर जैसे अभी देखा, एक राउंड जरूर हारे, अफेक्ट हिम, बट यहाँ पे देखिए टाइम आउट लेने के बाद हीरोइक का कोच बता रहे हैं, इट्स ओके, ज्यादा हाइप अप मत हो जाइए, राइल अप मत हो जाइए, एक ही राउंड मिला है, कीप इट स्लो एंड स्टडी, ट्राई टू बिल्ड मोमेंटम. ऑडियंस चीयर करते हुए पूरी तरीके से यहाँ पे, लेकिन ये शायद वो मौका हो सकता है जहाँ पे हीरोइक मोमेंटम वापस अपनी तरफ स्विंग कर पाए. लेकिन क्या गेमरलीजन थोड़ा एग्रेशन दिखाना पसंद करेगी यहाँ पे? क्या वो पहली फाइट फोर्स करेगी? एक और बार खड़े ऑफ लेके स्टैवन आवाज करके प्रेजेंस जता चुके हैं अपनी, ताकि वो वॉक इन ना कर पाए. लेकिन केरियन बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं ऑफ लेके. हम अभी तक उनका जो ऑफ है चला नहीं है. एक और हैज बीन हैविंग अ बेटर टाइम. एंड कल के दिन तो हम चिल्ला रहे थे एक और एंड अभी तक वैसे फटे नहीं है. दैट्स समथिंग टू बी वरीड अबाउट. रैम का कंट्रोल लेते हुए नजर आए, बट आइजैक फाइंड्स वन थ्रू द स्मॉल बॉटम मिड पे, एंड एक और, यही हम बता रहे थे. बट ये मिड एडवांटेज जो अभी पुश करके दिखा चुके हैं. लुक एट ईमा, स्टक एंड सिटिंग इन. इसका कोई अंदाजा नहीं रहेगा हीरोइक को. स्टैवन काफी ज्यादा नजदीक खेल रहे हैं. एक और वो एंगल होल्ड करेंगे, एक पिक की जरूरत. ईमा क्या वो पिक निकाल पाएंगे? लेकिन नहीं. याबी इन द मीन टाइम पहला पिक निकालते हो अपनी टीम के लिए. अभी मैन डिसएडवांटेज है उनके पास, लेकिन नीमा देखिए पेशेंस इसको वहां पे टेक डाउन करते हुए. लेकिन स्टैवन कैन ही होल्ड द साइड? जरूरत है उनको, लेकिन दूसरे प्लेयर पिक करने की कोशिश करेंगे, स्प्रे डाउन की कोशिश सक्सेसफुल नहीं होगा. याबी के पास ग्रेनेड जरूर है, लेकिन क्या वो कमिट करना चाहते हैं इस रीटेक पे? जी नहीं. डिसीजन यहाँ पे उन्होंने अपना मन बना लिया है, बिल्कुल कमिट नहीं करना चाहते. आई डू बिलीव शायद ऑफ बचाने की कोशिश करें, लेकिन आइजैक जिस तरीके से वो किल निकाला शुश के ऊपर, कैसे जवाब देंगे आप इस चीज को? कंप्लीटली स्मोक्ड ऑफ. उसके बाद एक और, फाइंडिंग द राइट टाइमिंग ऑन केरियन. आई थिंक गेमरलीजन बहुत अभी के लिए हीरोइक को परेशान कर रही है इन टर्म्स ऑफ नॉट गोइंग इन फॉर अ फास्ट एग्जीक्यूट. ज्यादा इन्फो नहीं दे रही है, वेयरएज हीरोइक जब वो सोच रही है कि ठीक है अभी आएगा एक पुश, बट वहां पे सिर्फ यूटिल आ जाता है एंड देयर नो पुश ऑफ अ प्लेयर. आई थिंक वो टाइमिंग बहुत शानदार है अभी के लिए गेमरलीजन की तरफ से. इस हिसाब से दे आर मेकिंग स्लो क्रीप अप्स, जिसकी वजह से हीरोइक उसको पढ़ नहीं पा रही है. उसके बाद द सेटअप्स जो लेके आ रही है, थोड़ा ऑफ गार्ड एक खिलाड़ी जरूर पकड़े हुए थे आइजैक, बट आई डोंट थिंक दैट्स समथिंग टू बी वरीड अबाउट फॉर गेमरलीजन एज ऑफ नाउ. हीरोइक को बहुत ज्यादा तंग बैक टू बैक कर रहे हैं. एंड केरियन का हुडी taken off, he is now playing only with jersey itself, तो इंटरेस्टिंग रहेगा यार. अभी तक हुडी पे खेल रहे हैं. Clearly the hoodie nerf. Yeah. अपने आप को बफ किया है उन्होंने. लेकिन दाद देनी पड़ेगी, गेमरलीजन की बहुत ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे. क्रेडिट वे क्रेडिट इज ड्यू, इवन दो हीरोइक हॉट फेवरेट से, लेकिन इस तरीके से उन्होंने टेरिस साइड को अप्रोच किया, इतनी बार C4 प्लांट किया, इनिशियल पिक निकाला, कन्वर्जन रेशियो भी उनका, कन्वर्जन रेट गॉड टियर कन्वर्जन रेट है उनका. ओह एक और पता नहीं बचे कैसे, बट बचे जरूर है अभी के लिए विद जस्ट 1 HP. स्लो क्रीप अप कमिंग इन. स्टैवन एक खिलाड़ी जरूर रहने वाले. ही फाइंड्स द फर्स्ट डोर से पुश आएगा. जी ने इट्स स्मोक्ड ऑफ, सो देयर इज नो पुश कमिंग थ्रू. फ्लैश के साथ ट्राई किए थे, बट लुक एट दिस मिड एग्रेशन एज वेल. कैच से बॉटम मिड का कंट्रोल लेना चाहते हैं. डोर का स्मोक क्लियर होगा, दे आर गोइंग टू कम अप विद अ फ्लैश. एंड जी हां, स्टैवन अपने आप के लिए सेटअप करेंगे, कियोस को डाउन करेंगे. देयर आर आइसोलेटिंग ऑल द फाइट्स. केरियन पिक्स अप 1. आखिरी 2 खिलाड़ी बचने वाला है. एक और इज इन नो सिचुएशन ऑफ गोइंग इन फॉर द फाइट. इट्स ऑल ऑन ईमा राइट नाउ, एंड अभी के लिए तो ये सेव करना पड़ेगा.
GamerLegion अभी तक जिस हिसाब से खेल रहे थे, they were taking the clock right at the edge, and तब जाके उनका executions नजर आ रहा था। जब Heroic सोच रहे थे कि A पे आएंगे, B पे आएंगे, वो खुद फोर्स कर रहे थे, but this play coming in from Staven was just brilliant. Smoke off हो चुके थे, he had the confidence to peek, picked up the first, and then जैसे smoke off clear हो गया, he knew कोई ना कोई आएगा बाहर, देख चुके थे, and उसके बाद फ्लैश किया, सीधा फाइट लिया, and उसके बाद KDN ने भी एक पिक जरूर निकाला। This brings the team another round, 5-7. It was hoodie, I'm telling you. Yeah. लेकिन मजाक से हटकर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, हेरोइक ने फाइनली उनका तोड़ निकाला है। अंदाजा लगाया जिस तरीके से खेल रही है, बहुत मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2016 की बात है, जब नावी ने सबसे पहले ये मेटा लाए थी ये टीम, कि आखिरी 30 सेकंड में वो एग्जीक्यूट कर रहे थे, पहले मैप कंट्रोल ले रहे थे, इनिशियल पिक निकाल रहे थे। लेकिन एक चीज समझनी होगी यहाँ पे GamerLegion के लिए, जो अप्रोच है फिलहाल उनका ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच है, डिफॉल्ट उनके बेहतरीन है, इनिशियल पिक निकाल पा रहे हैं, कन्वर्जन रेट उनका शानदार है, कोई सवाल नहीं उसमें। लेकिन अब हेरोइक जिस तरीके से खेली वो समझ पा रही कि एक एक करके उनको पिक ऑफ कर सकते हैं आप। इनिशियली मैप कंट्रोल डिनाई करने की कोशिश करें, लेकिन मिड राउंड पिक्स जो निकाल रही है हेरोइक, ये राउंड में निकालती है, वो अगर रेप्लिकेट कर पाए वो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि GamerLegion के पास उसका कोई जवाब होगा, अनलेस ऑफ कोर्स यहाँ पे एक चेंज ऑफ पेस दिखाए। मुझे फॉर सम रीजन एक हंच यहाँ पे आ रहा है कि शायद एक चेंज ऑफ पेस दिखा सकते हैं GamerLegion। देखिए अभी तक हीरोइक जैसे राउंड्स वापस लिए है, वो 2 राउंड, वो अर्ली कंट्रोल डिनाई होने की वजह से, दे डिनाई आइदर A, दे डिनाई आइदर B, जिसके वजह से वो एंट्रेंस में ये फंसे होते हैं, एंड मिड पे स्लोली पुश आउट करके या कैट पे पुश आउट करके एक एक पिक निकाल लेते हैं, एंड द फर्स्ट ब्लड गोस आउट। आई थिंक उसी का कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा हीरोइक को, बट जैसे आपने बोला पेस बदल सकता है। अभी के लिए GamerLegion की तरफ से वो नजर नहीं आ रहा है, दे स्टिल स्लोली ट्राइंग टू टेक मैप कंट्रोल। बी की तरफ नहीं मिला बिकॉज डोर्स हैव बीन स्मोक्ड आउट। एंटी फ्लैश खेलने का इरादा स्टैवन सोचे कि कोई ना कोई क्विक फ्लैश के साथ बाहर आ सकता है, बट अभी के लिए नहीं। बॉटम मिड का पूरा कंट्रोल है, देयर इज नोबडी हु कैन पुश अप। अगर पुश करेंगे यहाँ पे एक और तैयार है, एंड उनके साथी भी, सो देयर इज अ क्रॉस फायर ओवर देयर। आइजैक भी आ रहे थे, स्लोली यहाँ पे आगे आना चाहते हैं वापस बॉटम मिड का कंट्रोल लेने के लिए। GamerLegion इट्स अ ट्रैप, अगर वो आ जाते हैं वो भी शिकार बनेंगे एक डबल पीक का। Isaac is going to be the first one, but he takes the first. Looking forward to challenge in the duel. Shush अपने मॉली के साथ सिर्फ फायदा उठाएंगे, but GamerLegion picks up number advantage. वो इंडिविजुअल फाइट्स जीतनी पड़ेगी, यू कांट लेट द प्रेशर गेट यू। यहाँ भी शुश दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं फिलहाल वो पिक्स निकालने के लिए। 7 इकलौते प्लेयर जिनको मौका मिल रहा है हर बार कैपिटलाइज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टेस्टिस पोजीशन, स्टैवन किल जरूर निकाला, C4 उनके सामने गिरा हुआ है, लेकिन उनको जिंदा रहना होगा। यहाँ पे एक फ्लैश डालेंगे अपने सामने, लेकिन क्या वो ब्लाइंड होके किल निकाला, एक और वो नहीं रुकने वाले। देखिए अभी के लिए हीरोइक के तरफ से प्लेयर्स नजर ही नहीं आ रहे, वैसे बोल सकते हैं टेस्टिस इज नॉट एट ऑल फीलिंग दिस गेम। बाकी सारे खिलाड़ी 1-2 किल ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट टेस्टिस उनको आसानी से पकड़ा जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है ड्यूल, एंड टेस्टिस इज लूजिंग ऑल ऑफ इट। बट एक और इनसेन कमिंग इन फ्रॉम हिम, हर एक एंगल पे कोई ना कोई ड्यूल लेने के लिए तैयार है, एक और उसका फायदा उठाते हुए नजर आ रहा है। वी आर राइट नाउ एट द 14th राउंड। इसके बाद एक और राउंड सिर्फ रहने वाला है माम्बा, एंड GamerLegion ऑलरेडी हैव अ लीड। बहुत बड़ा लीड नहीं है, बट दिस इज स्टिल गुड फॉर GamerLegion। Definitely good for GamerLegion, but let's not forget मेजर का सेमीफाइनल है, आखिरी मेजर काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव का, और यहाँ पे शोश क्या वो एग्जीक्यूट रोक पाएंगे? एंटी फ्लैश जरूर खेला, पहला पिक निकालेंगे, दूसरा पिक निकालने की कोशिश, लेकिन गोलियां खत्म हो जाएगी वहां पे। M4A1 कम गोलियां होती है उस वेपन में, शायद M4A4 होती तो वो किल निकाल पाते, क्या मालूम, लेकिन इनिशियल पिक जरूर निकालो। अब देखना ये बनता है क्या हेरोइक इस पिक को कन्वर्ट कर पाएगी। ईमा एंटी फ्लैश खेल लेते हैं, लेकिन दूसरा फ्लैश है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक और ईमा, दोनों प्लेयर्स, और ईमा की पोजीशनिंग इम्पेक्टेबल पोजीशनिंग थी उनकी वहां पे, लेकिन आएगा यहाँ पे प्लान डिनाई करते हुए। बहुत क्रूशियल KDN को ये किल निकालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी। क्या वो ये पिक निकाल पाएंगे? आइजैक बक्सा होल्ड कर रहे, जी हाँ, बेहतरीन पोजीशनिंग,
GamerLegion आउट क्लास करते हीरोइक को यहाँ पे। बहुत ज्यादा मैप कंट्रोल लिया गया था। केरियन राइट नाउ ट्राइंग टू सेव द AWP। शुए को डाउन करेंगे बट वहीं पे एक और चैलेंज आ सकता है, इस बार एक और। सो इट कैन बी एन ऑप वर्सेस ऑप। दूसरी ओर सराउंड करने के लिए मिड के तरफ से भी खिलाड़ी बहुत जल्दी आने वाले। ही स्लोली ट्राइंग टू क्रीप अप। एक और क्या यहाँ पे केरियन को डाउन करेंगे? केरियन इज हेडिंग बैक टूवर्ड्स डोनट। एक खिलाड़ी रह सकते हैं फॉर द चैलेंज। नाइस टाइमिंग विद फ्लैश, जहां पे सोच रहे थे कि केरियन कुछ कर सकते हैं। नाउ ही हैज टू बैक ऑफ, ही डज नॉट हैव टाइम। मिड पे भी कंट्रोल लेते हुए नजर आ रहे खिलाड़ी। आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू सेव दिस ऑफ। एंड जी हां, ईमा उनको डाउन करते हुए नजर आएंगे। नो वेपन्स लेफ्ट। GamerLegion गेट द 9th ऑन द बोर्ड। डबल डिजिट्स लेने का यहाँ पे मौका है GamerLegion के पास इन द फर्स्ट हाफ। देख सकते हैं दांत तक चबाने की जरूरत पड़ रही है उनको, लेकिन ईमा वहां पे फ्लैश होने के बावजूद किल निकाल के दे रहे हैं अपनी टीम को। एंड हीरोइक केरियन को प्रॉबेबली अपने करियर की सबसे मोटिवेटिंग स्पीच देनी पड़ेगी इस हाफ टाइम में, अगर उनकी टीममेट को थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस देना चाहते। क्योंकि देखिए, आप उम्मीद नहीं हार सकते, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर 15-0 डाउन, उम्मीद नहीं हार सकते, क्योंकि अगर आप मेंटली हारेंगे तो फिर 90% गेम आप वहीं पे हार जाएंगे। एग्जैक्टली ये मेजर्स अभी तक बहुत सारे बड़े बड़े टीम्स को अपसेट कर चुका है। GamerLegion slowly heading towards the close-up, तैयार है P9 के साथ, but Shoes gets taken down। एक और is always good for this first shots। शुए यहाँ पे अपने टीममेट को ही जरूर निकाल देंगे, but nonetheless he finds one। आइजैक यहाँ पे याबी को डाउन करेंगे, but Tessus finally looks like he's popping off। दो खिलाड़ियों को साथ में निकाल चुके हैं। शुए and आइजैक are down। Tessus in a 1v2 situation, it is doable for him। C4 प्लान नहीं हुआ, बहुत तेजी से GamerLegion C4 को रिकवर करके भाग रही है। They're running right to B। Tessus को इसका अभी तक अंदाजा नहीं लगा है, but after even getting the plan down, Tessus अगर बहुत शार्प खेले, he should still have this clutch in his favor। Kit जरूर नहीं है, so he needs to be a little aggressive। Bomb plant B पे हो जाएगा। ईमा playing little aggressive, he's pushed up long, but Tessus का इंतजार करेंगे पुश अप करने के लिए। दूसरी ओर एक और वो बैक स्टैप को चेक कर रहे हैं, so this can be isolated 1v1s, but ईमा checks it। What a play coming in। GamerLegion इस हाफ में 10-5 का स्कोर लाइन बनाते हुए नजर आएंगे। They will have double digits in this first half। इनके चेहरे कितने ज्यादा, लेकिन पाशा ये देखिए, आई डू बिलीव, ये तो पिंप है, लेकिन आई डू बिलीव पाशा की स्टोरी भी कवर की जाएगी वहां पे। पिंप के ऊपर एक अच्छी खासी पिंप एक मूवी बनाई गई है, जो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा हमारे दर्शकों को देखने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम आप हीरोइक के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके ऊपर, उनके मुंह के ऊपर, उनके चेहरों के ऊपर प्रेशर देख सकते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं डिफीटेड लुक ऑन द फेसेस, वो लेके बैठे फिलहाल। I mean, जो भी अभी तक करने के लिए ट्राई कर रही है इज नॉट वर्किंग आउट। GamerLegion कल के दिन पे भी मॉन्टी के अगेंस्ट ऐसे ही किया था। मॉन्टी लॉस्ट एवरीथिंग, नॉट जस्ट मैप बट द कॉन्फिडेंस टू गेट बैक इनटू द गेम। पूरा डोमिनेट करके सेकेंड मैप को जीता है। अभी के लिए GamerLegion फर्स्ट मैप में ही शुरू कर चुके हैं। फर्स्ट हाफ पूरा कंट्रोल में रख के खेल रही है, बहुत मेथोडिकली अप्रोच किया जा रहा है। They're not keeping any loose ends open, हर एक एंगल को चेक किया जा रहा है। एंड हीरोइक जो भी राउंड जीती है ना अभी तक, इट वॉज द इनिशियल राउंड जहाँ पे उन्होंने फोर्स करके ड्यूल्स लिए, क्लोज किया। उसके बाद देवर अ सरप्राइज जहाँ पे उन्होंने सीधा कंट्रोल लेके एक पोजीशन, एक साइड की एंट्री को डिनाई करके दूसरी ओर से कंट्रोल लेते हुए आइदर इट वाज मिड पुश कमिंग थ्रू, मिड टू बी कवर किया या मिड टू हेयर होल्ड आउट करते हुए नजर आया, जिसके वजह से इट वाज दोस 5 राउंड्स वी सॉ कमिंग इन फ्रॉम हीरोइक। बट GamerLegion, they have had brilliant conversion in this T side।
जी हाँ, एंड जितने भी एक्सपर्ट्स, जितने भी लोग काउंटर स्ट्राइक बहुत गौर से फॉलो करते हैं, अगर आप ट्विटर पे भी उनके रिएक्शन चेक करेंगे, एवरीवन इज सरप्राइज्ड जिस तरीके का सीटी साइड हीरोइक ने खेला है, क्योंकि हीरोइक ऑन डिफेंस बेहतरीन टीम है, लेकिन यहाँ पे गेमरलीजन जिस तरीके से उनको एक एक करके पिक ऑफ कर रही है, दाद देनी पड़ेगी। लेकिन अब बारी आती है हीरोइक की, सेम ट्रीटमेंट देने का मौका मिलेगा उनको टेररिस्ट साइड पे, लेकिन क्या उनके पास वो एक्स फैक्टर होने वाला है जिसकी उनको जरूरत। 10-5 की स्कोर लाइन, 10-5 गेमरलीजन की फेवर में, एंड ईमा हमेशा जब भी जरूरत पड़ती है उनकी टीम को स्टेप अप करते हैं, लेकिन हर एक प्लेयर उनके लिए स्टेप अप कर रहा है फिलहाल। यस, एंड यहाँ पे केडियन नर्वसनेस नजर आ रही है उनके चेहरे पे। मामा अभी तक सिर्फ और सिर्फ स्टैवन ही है जो लग रहा है कि हीरोइक की तरफ से खेल रहे हैं। It has not been a great game from anybody else from Heroic. I mean, वो यहाँ पे फुली सरप्राइज हो चुके हैं इधर गेमरलीजन से, या उनके जो प्लेज है उनको बनाने थे वो काम नहीं कर रहे। I'm not too sure what is going on. सारे ड्यूएल्स हार रहे हैं, उनके सामने खिलाड़ी आ रहे हैं, उसका भी फाइट यहाँ पे कहीं ना कहीं ले नहीं पा रहे हैं। एंटी फ्लैश खेलने के लिए इरादा बना रहे हैं, बट दैट इज आल्सो नॉट वर्किंग आउट। दैट्स हाउ क्विक गेमरलीजन आर। गेमरलीजन अगर प्लेयर को खो बैठते हैं, दे आर क्विक ऑन दिस ट्रेड्स। जो भी गेमरलीजन अभी तक करना चाहती है, द लेट एग्जीक्यूशंस कमिंग थ्रू, द फास्ट पुशेस कमिंग थ्रू, कंट्रोल जब लेना चाहती है, स्लोली क्रीप इन करती है, हर एक चीज में वो फायदेमंद हो रहा है। शॉक्सी यहाँ पे जितने भी उनके फैंस हैं उनको अपना प्यार देते हो, और ये ट्रॉफी बेहतरीन ट्रॉफी है। जितनी 4 टीम बची है, हर एक टीम कोशिश कर रही होगी कि वो उठा पाए, लेकिन दूसरा हाफ देवी और सचनो गेमरलीजन वर्सेस हीरोइक। इस बार केडियन के पास मौका होने वाला, लेकिन 3-man पुश, 2 किल्स निकाले थे केडियन somehow पिछले राउंड में हमेशा डिलीवर करते हैं। अब जवाब देना होगा हीरोइक को, क्या किल्स निकाल पाएंगे जीनी। स्टैमिन चाटा मारते हुए आइजैक को, एक गोली, सिर्फ एक गोली की जरूरत थी, एंड गेमरलीजन नाउ ऑन द बैक फुट। लेकिन एक चीज में समझ नहीं पाया, 3 प्लेयर्स जब पुश करे 1 वर्सेस 3 में केडियन कैसे 2 पिक निकाल सकते थे वहां पे। Getting a plan done. 1v4 situation. शुएब impossible task रहने वाला है, but he's still going to try his best. शुश को निकालेंगे, उसके बाद तुरंत तेजी से सीधी की तरफ से आ रहे हैं to head over to A, but उससे पहले टेम्पल चेक करने का इरादा बना रहे थे, but I think बूस्ट की तरफ चेक कर रहे हैं। जंप पिक मिल चुका होगा इन्फॉर्मेशन स्टैवन को, जिसकी वजह से वो दोबारा जंप पिक नहीं कर रहा है। शुए अंडरस्टैंडिंग की फ्लैंक करते हुए कोई ना कोई खिलाड़ी आ सकता है, टेसिस के साथ चैलेंज होगा, टेसिस को बहुत ज्यादा डैमेज करेंगे, बट स्टैवन पुट्स अ बुलेट एंड स्टॉप्स शुए। हीरोइक दोबारा पिस्टल राउंड को अपने नाम कन्वर्ट करते हुए नजर आएंगे, बट दिस इनिशियल स्क्रिमिश फाइट जो आए थे जहां पे केरियन ने डबल निकाला था, आई थिंक दैट गेव a little more oomph and energy to the team, जहां पे ये पिस्टल राउंड को अपने तरफ पूरा प्रेशराइज करके मोड़ते हुए नजर आए। केरियन बहुत क्रूशियल किल्स निकालते हो अपनी टीम के लिए। उनके 10 किल में से 4 किल 2 राउंड के अंदर आए थे, दोनों हाफ का पहला राउंड। उसके बाद ज्यादा किल्स नहीं निकाल पाए, ऑप उनकी एब्सेंट थी, खामोश करके रखा था, लेकिन अब बंदूक उनके पास बड़ी बड़ी, लेकिन ए के ऊपर पूरी टीम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्टैक करके बैठे। दिस कुड बी डिजास्ट्रस फॉर हीरोइक, लेकिन नहीं, एक एक करके किल्स निकालेंगे। केडियन बैक स्टैप के ऊपर एक प्लेयर को स्पॉट जरूर कर चुके, पहला किल निकालेंगे, दूसरा यहाँ पे फुल ऑन फार्मिंग चलते हुए उनके लिए, एंड मौका नहीं मिलेगा और पैसा बनाने। $1200 बना चुके, खुश होंगे काफी ज्यादा। क्विक राउंड कमिंग इन, हीरोइक बहुत ज्यादा खुश रह गया अभी के लिए। आई मीन इट्स टाइम टू कवर अप ऑल द मिस्टेक्स दैट दे मेड। राउंड्स निकालने के लिए डिफरेंस जो अभी तक क्रिएट हुआ था उसको और भी ज्यादा कम करना पड़ेगा, एंड दे हैड टू स्टार्ट इट समवेयर। बट गेमरलीजन इसको बहुत ज्यादा आगे या बहुत ज्यादा बड़ा होने के लिए मौका नहीं देना चाहते। दे वांट टू चेंज सम थिंग्स, एंड आई थिंक गेमरलीजन का ये टाइम आउट बहुत क्रूशियल रहेगा।
Heroic, can they actually make use of this timeout and again get another round in their favor? अभी तक तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रही है साइड स्विच होते ही अपने टी साइड पे. We'll see. ऑडियंस आप देख सकते हैं कितनी एक्साइटेड है. 10-7 दोनों टीम्स के पास पैसा जरूर होगा लेकिन सीटी साइड के पास यूटिलिटी नहीं होती ज्यादा. एक ही मॉल्ट हाउस, स्मोक्स बहुत है, डिले कर पाएंगे लेकिन रोक नहीं पाएंगे उनको वापस मिड कंट्रोल लेने की कोशिश. और केडी इकलौते प्लेयर है यहाँ पे स्मोक के अंदर जाना चाहते हैं. फ्लैश आया जरूर है यहाँ पे, किल का हो नहीं. सो क्लोज एक किल निकाल सकते थे वहां पे. काफी अच्छा एग्रेशन दिखा था, फ्लैश भी आया था लेकिन थोड़ी सी गलती, छोटी गलतियां. और ये देखिए जो M4 की मैं हमेशा बात करता हूँ, वन टैप हेडशॉट नहीं होता, उसका भुगतान अब गेमरलीजन करेगी. एंड ईमा उनके सबसे क्लच प्लेयर को टेक डाउन किया गया है. एक और कैन यू फाइंड दिस फ्रैग, दैट इज अ क्वेश्चन. यहाँ भी आ रहे हैं, गोली चल चुकी है, पहला किल जरूर मिलेगा लेकिन ट्रेड नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पे. शुश जाने नहीं देंगे, छोड़ने नहीं वाले उनको पूरी तरीके से साइड का कंट्रोल लेते हुए. क्रॉसिंग स्मोक फ्लैश एज मैटर ऑफ फैक्ट आएगा सबसे पहले और मोलोटोव से उनको डिले किया जाएगा. तो काफी अच्छा कंट्रोल लिया उन्होंने. लेकिन एक चीज नोटिस करिए आपने, सिर्फ एक स्मोक अवेलेबल है सीटीज के पास रीटेक के लिए. आसान नहीं होने वाला, उनको पिक निकालने की जरूरत है. एग्जैक्टली वही करेंगे आइजैक, 2 किल निकालते हुए. Steven fighting for his team. 1v2 सिचुएशन में C4 जरूर रहने वाला है. He can go towards B and वही कर रहा है. जी हाँ, डोनट की तरफ से मिड जाएंगे, वहां से कैट एंड देन हेड्स ओवर टू B. बट शुए he's closer, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी रोटेशन दे सकते हैं. बट राइट नाउ प्रिडिक्टिंग कि अभी तक प्लांट हो सकता है. गेमरलीजन जो 2 खिलाड़ी है कियोस एंड शुए, वो पुशअप करके चेक करना चाहते हैं. दे वांट टू टेक कंट्रोल बट दूसरी ओर स्टाइवन इज ऑलरेडी रोटेटेड. ही शुड गेट दिस प्लान डाउन. पहले फेक के लिए जाएंगे एक्सपेक्टिंग कि कोई ना कोई खिलाड़ी बहुत नजदीक अगर आ गए हो तो आफ्टर द चेक ही इज गोइंग टू गेट दैट प्लान डन. एंड अभी के लिए एक 1v1 हो सकता है बिकॉज सिर्फ और सिर्फ शूहे जो है वो ही क्रॉस करके साइड की तरफ आया है. बट स्टाइवन बैक ऑफ करेंगे एंड दोबारा कहीं ना कहीं कैच जाके ही वांट्स टू एंटर फ्रॉम केव. ये बहुत बड़ा माइंड गेम खेले फिलहाल के लिए, उनके लिए प्लान भी नहीं किया गया. एक्सपेक्ट करेंगे सीटीज की मेन की तरफ गए होंगे लेकिन कियोस स्मोक करके स्मोक के बाहर खड़े, गोली जरूर चलाई लेकिन स्टाइवन क्या ये राउंड निकाल पाएंगे. बहुत क्रूशियल पहला किल निकालेंगे जरूर, हम पीछे हट जाएंगे. बहुत बड़ा प्ले यहाँ पे स्पैम करते हुए लेकिन नहीं गोली सुन ली उन्होंने लेकिन डिफ्यूज करने की पूरी कोशिश. ओह माय गुडनेस, नो टाइम. जिस तरीके से खेला उन्होंने 200 IQ मूव दाद देनी पड़ेगी. उनको पता था वॉल बैंग कर सकते थे, वहां पे स्पैम कर सकते थे, स्पैमेबल मटेरियल था. प्लांट किया मेन के लिए और फिर घूम के आए. शानदार तरीके से खेला उन्होंने. आई थिंक फर्स्ट भी जो पिक उन्होंने निकाला, पहले ही उन्होंने वॉल बैंग करने का इरादा नहीं बनाया. वहां पे स्मोक को पुश किया, ड्यूल लिया एंड उसके बाद वो स्मोक के अंदर दोबारा चले गए गो फॉर दैट वॉल बैंग. रियली गुड प्ले कमिंग इन फ्रॉम गेमरलीजन. माय बैड हीरोइक. गेमरलीजन ऑन द अदर एंड एक एक करके ऐसे राउंड अगर खोएंगे मुश्किल हो सकता है. वहां पे उनके पास बाई भी था एंड इट वाज अ 2v1 सिचुएशन. हीरोइक बहुत तेजी से मिड पुश करके डोनट की तरफ से बाहर आएंगे. दे फाइंड एक और, अभी के लिए एक और खिलाड़ी रहने वाले टेंपल की तरफ. बट ही स्मोक्ड, ही मॉलिड, ज्यादा मौका नहीं मिलेगा उनको. टेसिस बहुत तेजी से प्लान जरूर कर लेंगे, एंगल को होल्ड करते हुए. स्टाइवन मेकिंग श्योर सिटी से जब भी खिलाड़ी आएंगे उनको निकालेंगे. बट आइजैक एंड कियोस पिक 1, स्मोक ऑफ किया जाएगा उसके बाद. बट नंबर एडवांटेज 3v2 सिचुएशन. वेपन्स इतना ज्यादा बेहतर नहीं है बट अभी भी पुश करके अगर खेलेंगे दे गो फॉर गुड ट्रेड्स, दे माइट बी एबल टू पुल इट ऑफ. ईमा डज पुट टेसिस डाउन. 3v2 सिचुएशन बन चुके हैं. एक स्प्रे में 2 खिलाड़ी याबी एंड शुश पुट्स द लास्ट वन डाउन. हीरोइक ये जो राउंड खो सकती थी उसको वापसी करते हुए नजर आएंगे. एंड हीरोइक अगेन गेटिंग क्लोजर टू दोस डबल डिजिट्स देमसेल्व्स इन द सेकंड हाफ. कोशिश करी थी, पिक्स भी निकाला था इनिशियल पिक लेकिन बाद में कैपिटलाइज नहीं करने दिया. अब जो प्रेशर हीरोइक फील करी थी पहले आपने गेमरलीजन फील करते हुए, महसूस करते हुए. 10-9 का स्कोर लाइन. टीटी साइड पे एक और ने ऑफ जरूर उठाई लेकिन क्या वो किल निकाल पाएंगे. एक और बार फाइट लेने की कोशिश और वो नहीं मिस करने वाले ये शॉट्स.
बहुत क्रूशियल ये राउंड मांबा। अगर ये राउंड गवा देंगे डबल डिजिट भी हो जाएगा एंड आई एम प्रीटी श्योर लीड भी लेते हुए नजर आएंगे हेरोइक। एक और विद AWP केलियन, उनके पास भी अपने ऑप रहने वाला है, बट कौन बेहतर रहेगा? अभी तक इट हैज बीन एन एवरेज परफॉर्मेंस कमिंग इन फ्रॉम बोथ। थोड़ा बेहतर एक और थे, और अभी के लिए एक चैलेंज देखने के लिए मौका मिल रहा है केव की तरफ, बट दैट स्मोक विल प्रिवेंट हीरोइक फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। केव का कंट्रोल अभी भी रख के चल रही है गेमर लीजन। स्मोक किया वहां पे मैप कंट्रोल डिनाई करने के लिए, लेकिन टेसिस की पोजीशन देखिए, रोटेशन काटने के लिए परफेक्ट पोजीशन में बैठे हुए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं टेसिस के लिए, अगर एक पिक मिल पाए तो। लेकिन अब एग्जीक्यूट करेंगे एक ही तरफ, बहुत समय लगा पिशुश को किल निकालने के लिए, लेकिन टेसिस परफेक्ट पोजीशन में यहाँ पे जरूरत है उनको ये रोटेशन काटने की। होल्ड करेंगे, 9 कमिट नहीं करने वाले, एंड सीटी साइड ने रियलाइज कर लिया यहाँ पे पुश करके बिल्कुल भी मतलब नहीं है। 7 he will get taken down। थोड़ा सा ज्यादा ईगर होते वहां पे गन्स गिराने के लिए, ऐसा उतना ज्यादा नहीं है टेरिस साइड के पास, लेकिन ये 2 प्लेयर्स के लिए गन जरूर ड्रॉप कर पाएंगे अगले राउंड। तो अब हीरोइक को थोड़ा पैसे खेलना पड़ेगा, पैसे बचाने पड़ेंगे। They were trying to press where it hurts। गेमर लीजन के पास पैसा ज्यादा नहीं है, उनको पता था, इसलिए गन्स गिराने की कोशिश थी उनकी, लेकिन बैकफायर हो सकता है बहुत ज्यादा, इसलिए they're not going out of the way to force this। हीरोइक अभी के लिए मांबा दे प्लेइंग अ बेटर ट्रेड गेम, आई थिंक उसके वजह से दे आर गेनिंग राउंड्स वन आफ्टर अनदर, एंड फाइनली उनके पास डबल डिजिट्स देखने के लिए मौका मिल चुका है। जो इतना बड़ा गैप बन गया था उसको रिकवर करके दिखा चुके हैं हीरोइक, मेकिंग इट सीम पॉसिबल दैट दे कैन क्लोज दिस मैप नाउ। पहले ऐसे नहीं लग रहा था, पहले ऐसे लग रहा था दिस इज गेमर लीजन आउटस्मार्टिंग देम, प्लेइंग बेटर, हैविंग बेटर ड्यूल्स, बट इस बार एटलीस्ट इस टी साइड पे दे आर हैविंग बेटर ड्यूल्स, एंड आई थिंक बहुत ज्यादा यहाँ पे रोक के रखी है गेमर लीजन को। गेमर लीजन आप देख सकते थे अनेबल टू गेट एनी अग्रेसिव पोजीशंस फॉर देमसेल्व्स। केव की तरफ से अगर बाहर आके कैट को चेक करना चाहते हैं, देयर इज जस्ट आइदर अ फ्लैश और स्मोक कमिंग थ्रू, जिसकी वजह से वो भी पुश आउट नहीं कर पाते, या खुद को एक स्मोक ले डाउन करना पड़ता है चाहे बिकॉज ऑफ द वॉल बैंक पोजीशंस जहां पे वो इनिशियल स्प्रेस करते हैं। सेम गोज एट मिड, जब तक वो मिड कंट्रोल लेने के लिए आ जाता है, स्मोक आ जाता है, एंड ऑल्सो बिकॉज उनके पास जो कैश फ्लो है बहुत कम है। Cobblestone, historical map, उसका जो स्पेलिंग है वो DE_CBBLE है। बचपन में जब मैं खेलता था, 9-10 साल का था, मुझे अंदाजा नहीं था उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो मैं उसको सीबल या केबल बुलाता था। टेसिस काफी अच्छा पिक था वो स्मोक के थ्रू। Lack of util, lack of control, जिसकी वजह से they're only able to kind of just hold the angles, and उसकी वजह से बहुत आसानी से हीरोइक यहाँ पे एक पिक निकालते हुए नजर आ रहे हैं। They're just going in for raw challenges, and सारे duels पे वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। And heroic right now are on a streak. They're looking for to getting another round in their favor. एक और रीमा क्या कुछ कर पाएंगे? डीगल से एक शॉट जरूर निकाला है, will be able to recover a weapon for himself, but already गार्ड करते हुए टेसिस इस ऑप को गिराना चाहते हैं। टेसिस पुट्स एक और डाउन। ईमा जो ए के रिकवर किए थे, ही इज बैकिंग ऑफ, कैट की तरफ बाहर निकाल रहे हैं, बट गेमर लीजन जैसे ही साइड्स बदले हैं, दे आर अनेबल टू डू एनीथिंग। एक राउंड भी अभी तक नहीं मिला गेमर लीजन को इस हाफ में। बुली करते वहां पे ईमा को फ्लैश किया, चैंट मच नीडेड एनर्जी फॉर गेमर लीजन, उनको ये चाहिए ऑडियंस की तरफ से। आपने देखा पिछला जो भी राउंड वो हारते हुए नजर आ रहे थे, इट वेंट कंप्लीटली साइलेंट ओवर देयर इन द अरीना, बट फाइनली चीयर करते हुए नजर आएंगे। बट क्या इसका फायदा उठा सकती है गेमर लीजन, ये जरूर देखना पड़ेगा। पुश को रोक दिया जाएगा अगर रैम्प से पुश आना वाला तो। लैंडन को चेक करते हुए वहां पे रहने वाले शुई, Kios on the side,
फ्लैश आएगा उनकी तरफ, ब्लाइंडली स्प्रे कर रहे हैं टू फाइंड सम वैल्यू, बट कुछ नहीं मिलेगा उनको। दूसरी ओर एक केव की तरफ पुश आएगा एंड स्टैवन वाज जस्ट परफेक्ट। वो स्मोक पॉप ऑफ हो रहा तभी जाके उन्होंने एक पिक निकाला। विल बी गेटिंग कियोस एंड देखिए तुरंत गेमर लीजन दे आर जस्ट बैकिंग ऑफ। मौका ही नहीं मिल रहा है, दे आर ट्राइंग टू कंपोज देमसेल्व्स, बाई करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, यूटिल बाई करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट हर वक्त हीरोइक ऐसे ही खेल के हर एक पोजीशंस पे सीधा चैलेंज करके गेमर लीजन को आगे बढ़ने के लिए डिनाई करते हुए जस्ट विनिंग इट आउट। एक और अभी के लिए जो हंट के लिए खिलाड़ी आ रहे हैं उनको पनिश करना चाहते। फ्लैश आया था बट फिर भी खिलाड़ी को डिनाई करते हुए नजर आएंगे, बट दिस विल पुट हीरोइक ऑन 12। जिस तरीके से हीरोइक यहाँ पे डोमिनेट कर रही है टी साइड को, बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी। ईमा को भी वहां पे शट डाउन किया, C4 क्रॉस रखने वाला है। एक और उनकी पोजीशन पता चल जाएगी, लेकिन कैप्टन यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, जरूर कुछ करने की कोशिश करेंगे। ओ लेकिन गन गिरा देंगे अपने उस प्रोसेस में। ऐसा बहुत ज्यादा है उनके पास अवेलेबल, लेकिन अब इनके चेहरे पे थोड़ा कम प्रेशर नजर आ रहा है। देख सकते हैं पहले तो इतना ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर कि उसको आप अंडरस्टेट नहीं कर सकते। अभी तक इट हैज ऑलवेज बीन द इश्यू ऑफ टाइमिंग। जब वो इनिशियली ड्यूल लेने के लिए जाते हैं या यूटिल ड्रॉप करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ यूटिल टू चैलेंज, बट अभी देखिए दे आर फोर्सिंग दिस चैलेंज। मॉली करेंगे, बैक ऑफ करने के लिए केरियन को अपना स्मोक इस्तेमाल करना पड़ा एंड तब जाके केरियन रिट्रीट करेंगे अपनी टीममेट के साथ, बट तब तक बहुत ज्यादा हेल्प हो गए थे। चैलेंज आएगा रैंप के तरफ। याबी वांटेड टू पिक अप दैट किल बट मौका नहीं मिलेगा। सामने जो रहने वाला इट्स गोइंग टू बी कियोस विद डीगन। ग्रेनेड आएगा बट ही इज ऑलरेडी बैक्ड ऑफ, जिसकी वजह से कोई डैमेज नहीं खाएंगे। एंड जिस हिसाब से गेमरलीजन बैक ऑफ किया, थोड़ा स्पेस दिया है, बट एटलीस्ट हैव रेड की क्या हो रहा था। दे हैव स्टैक्ड 3 प्लेयर्स एट बी। इट कैन बी अ चैलेंज हियर फॉर हीरोइक अगर आगे आएंगे। वेरी चीकी स्पॉट लैंटन की तरफ। शुए कैन ही डू एनीथिंग विद दिस MP9? एक और बहुत इंपॉर्टेंट पिक, वहां पे बहुत क्रूशियल किल निकाला है। वेपन्स उनके पास इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन अब देखना ये बनता है क्या हीरोइक वो कमिट करती है। यहाँ पे थोड़ी सी डेस्परेट होती है। लग जरूर रहा है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत कर रही है बी के ऊपर एक पिक निकालेंगे, जिसकी बहुत जरूरत भी है उनको, लेकिन सुई इतने नजदीक ए के लेके बैठे हैं। एग्जीक्यूट जरूर होगा बी के ऊपर, लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन रिले की जाएगी? टेसिस अगर वहां पे जाते हैं, अगर कनेक्टर की तरफ जाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। सुई आप बी एंगल होल्ड करे, बट नहीं, फेक है। इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगा। केडियन मुंह पे गोली खाएंगे लेकिन सर्वाइव करेंगे वहां पे। एंडीमा पहला किल निकालते हैं, दूसरा भी निकालेंगे जरूर। 5-7 लेके डिस्ट्रॉय करते हुए सामने वाली टीम को। It was not a great buy इस राउंड पे, but they still make it work, Mamba. पहले ये जो चैलेंज आया था एक और साथ देते हुए अपनी टीममेट का, उनको डाउन करेंगे। ही देन गेट्स बैक टू लॉन्ग, वहां पे एक पोजीशन। देन ईमा कमिंग थ्रू विद 2 ऑफ हिज ओन। आई थिंक बहुत क्रूशियल फैक्ट्स जब निकालने थे उन्होंने निकाला। एंड गेमरलीजन, now you can see they're getting back. Shue is feeling it. वो इमोशंस वापस बाहर आ रही है। एंड हीरोइक इस बीच यहीं पे टाइम आउट कॉलिंग करेंगे, क्योंकि अभी तक तो स्ट्रीक चल रहा था हीरोइक का। 7 राउंड्स विदाउट अ ब्रेक चल रहे थे हीरोइक, एंड तब जाके यहाँ पे फाइनली एक स्टॉप पुल करना पड़ा, जहां पे एक राउंड गेमरलीजन जीतती हुई नजर आई है। फॉर नाउ इट हैज बीन हीरोइक्स टी साइड कंप्लीटली डोमिनेटिंग, जिस हिसाब से गेमरलीजन ने खेला था। लेट्स वेट एंड वॉच। गेमरलीजन ज्यादा लीड बनाने के लिए मौका नहीं दिया हीरोइक को, ज्यादा राउंड जरूर ले लिए, बट नाउ दे आर ऑल्सो बैक विद गुड फ्लश यूटिल्स। कैश रहेगा उनके पास, दे कैन गो फॉर हेड ऑन चैलेंजेस, जिसकी वजह से आप मिड कंट्रोल अभी के लिए देख सकते हो। ईमा हैज पुश्ड अप, सिटिंग एट बॉक्स, वहां से कैच जाने का इरादा बना रहे हैं, बट स्टैविन ही फाइंड्स वन थ्रू द फ्लैश। आइजैक को डाउन करेंगे, लुकिंग फॉर द स्प्रे डाउन, बट एट द एज ऑफ द स्मोक टेसिस ईमा को पनिश करते हुए नजर आएंगे। बॉक्स के ऊपर प्रॉप अप हुए थे, एंड दैट ब्रेक्स दैट एंटायर मिड प्ले। या अभी व्हाट अ टाइमिंग! प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कोई ना कोई खिलाड़ी पुश आउट करेंगे रैंप की तरफ से, बट कैन दे प्रेडिक्ट शुए आल्सो? नो, याबी गोज डाउन।
3. शुए इंतजार करना चाहिए था उनको, थोड़ा और एग्रेस किए एंड नाउ ही गेट्स पनिश्ड. नाउ इट्स ऑल अप टू एक और ऑप रहेगा उनके हाथ में. पॉसिबिलिटी ऑफ क्लचिंग दिस राउंड हो सकता है क्योंकि जो C4 है ना वो अभी मेन से एंट्री लेने वाला है एंड एक और इज रेडी टू ग्रीट हिम. बट ये देखिए फाइनली पूरा टेंपल चेक करके वापस आ रहे ट्रिपल को चेक करने के लिए एंड शुश ही फाइंड्स एक और स्कोप्ड इन एट मेन. अनदर राउंड फाइनली वो जो अभी तक लग रहा था कि मोमेंटम चल रहा था उसको ब्रेक डाउन किए थे गेमर लीजन. तुरंत वापसी रहते हुए नजर आएंगे राउंड हीरोइक. राउंड तो जरूर वापस लेकिन यहाँ पे याबी का जो किल था वो बहुत क्रूशियल था. एक एक करके डिसमेंटल कर रहे डिफेंस को, सीटी साइड को पनिश करते हुए. जितना भी एग्रेशन दिखाया उन्होंने उसके लिए बार बार पनिश कर रहे हैं. हीरोइक 3 और राउंड चाहिए उनको पहला मैप क्लोज करने के लिए. और ये जो स्मोक था बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से लाइन अप करना, लेकिन उन्होंने किया. यहाँ भी स्पैम करेंगे यहाँ पे प्रॉपर एग्जीक्यूट करने की कोशिश ये की तरफ. सॉरी, और स्मोक्स अभी भी कमेंट नहीं कर रहे. एग्जीक्यूट जरूर किया है पूरा वक्त लेते हुए अंदर जाने से पहले. टाइमिंग या भी शुए वांट्स टू ट्रेड. एक और AWP के साथ खड़े थे बट ही आल्सो डजंट फाइंड एनीथिंग. बट लुक एट दिस अगेन, टेसिस रोटेशन पे खिलाड़ी को देख चुके हैं. अनदर प्लेयर पुशिंग फ्रॉम मिड. शुए इज गुड विद याबी, उनको टेक डाउन जरूर करके दिखा देंगे. कैट को स्मोक कर देंगे एंड शुई रीगेन्स कंट्रोल ऑफ इट. बट दूसरी ओर C4 जो है शुश की तरफ से प्लांच होता हुआ नजर आ रहा है. टेसिस इज पुशिंग अप. व्हाट अ स्विंग, व्हाट अ स्विंग. टेसिस शानदार तरीके से स्विंग किया उन्होंने. सैम, आई एम सॉरी, आई नो यू आर टॉकिंग बट मेरा रिएक्शन आई जस्ट कुडंट होल्ड इट. इट वाज सो क्लीन, इट वाज सो क्लीन. मामा अभी तक टेसिस ऐसे नजर आ रहे थे दैट ही वाज नॉट हैविंग द गेम इन हिज फेवर. ही वाज अनेबल टू डू एनीथिंग. बट अभी जितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं टेसिस, ही इज रेडी फॉर ऑल ड्यूल्स. अभी सामने उनको पता था ऑप है बट ही वाज रेडी फॉर द चैलेंज. लुक एट टेसिस स्टैट्स, सिर्फ 6 किल्स पे थे जब फर्स्ट हाफ था बट अभी के लिए 13 पे आ चुके हैं. ही इज हैविंग अ बेटर हाफ राइट एज ऑफ नाउ. हीरोइक इज हैविंग अ बेटर हाफ राइट एज ऑफ नाउ इन दिस टी साइड. हीरोइक शानदार कमबैक करते हुए यहाँ पे. कमेंटेटर्स कर्स तो नहीं लगाना चाहूंगा मैं, कास्टर्स कर्स नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खेला है दाद देनी पड़ेगी. 11-14. सोचो जब एक राउंड पैसा मिल चुका था, दे वर आल्सो विद यूटिल्स. आई थिंक वहां पे और ज्यादा कंटेस्ट नजर आएगा बट अभी के लिए एक की तरफ एक बैक हो सकता है. ब्रिलियंट फ्लैश, एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे. चैलेंज इज अनदर. टेसिस एंड स्टैविन क्लियर आउट मेन. केव की तरफ ये फाइट एंड कियोस स्टैंड्स टॉल विद हिज MP9. याबी को फाइनली पनिश किया जाएगा. दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस नंबर्स. 3v4 सिचुएशन रहने वाला है बट गेमर लीजन के जो खिलाड़ी है वो सीटी के तरफ फंसे हुए हैं. एंड केडियन he finds one. जो खिलाड़ी कैट की तरफ से बाहर आने वाले थे कहीं ना कहीं एक बैकस्टैब करने के लिए, he punishes that player and के लिए becomes a 2v4 situation. एक खिलाड़ी के पास पिस्टल, एक खिलाड़ी के पास M4. टेसिस punishes the player with the pistol. M4 जो है खिलाड़ी ईमा वो सेव करने का इरादा बना रहे हैं बट केडियन इज ऑन द हंट. बट हीरोइक देखिए जिस हिसाब से वो पीछे चल रही थी, all of a sudden that team right now is going to be at map point. जी हाँ, ऑल ऑफ अ सडन एट मैप पॉइंट. लेकिन नॉट ओवर येट. 9-15 से कम बैक होते हुए देखे इसी मेजर के अंदर. FaZe वर्सेस नावी गेमर लीजन. वही एनर्जी चैलेंज करने में भेजना है तो हीरोइक जो हॉट फेवरेट्स है इस मेजर के अंदर. शुरुआत बहुत ज्यादा शेकी थी उनकी. सीटी साइड पे काफी ज्यादा स्ट्रगल किया लेकिन टेररिस्ट साइड पे इट लुक्स लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट टीम. नो ट्रबल फॉर देम. जैसे हम बात कर रहे थे गेमर लीजन न्यू कैसे खेलेंगे हीरोइक अपने सीटी साइड पे, जिस हिसाब से वो चैलेंज कर रहे थे, एंगल्स के एडवांटेज उठा रहे थे, ड्यूल्स के एडवांटेज वो उठाते हुए नजर आ रहे थे. हाउ दे वर रीडिंग देम एज अ बुक. नाउ इट्स हीरोइक ऑन देयर टी साइड जो गेमर लीजन को पढ़ती हुई नजर आ रही है.
जहाँ पे भी उनको यूटिल डिप्लॉय होता हुआ नजर आ रहे हैं, दे नो देयर इज सम काइंड ऑफ शेनानिगन बीइंग पुल्ड आउट फ्रॉम GamerLegion एंड उसके लिए इंतजार करते हैं। अगर स्मोक लगाया गया, स्मोक क्लियर होने के लिए तैयार करते हैं या स्मोक की गैप ढूंढते एंड दे पनिश द प्लेयर। अ नाइस बूस्ट सेटअप कमिंग थ्रू, बट बी की तरफ अभी तक कोई प्ले ही नहीं बन रहा है। खिलाड़ी सिर्फ डबल डोर्स को गार्ड कर रहे हैं, सो आई डोंट थिंक दिस एक और सेटअप कमिंग थ्रू विल वर्क आउट। बहुत देर तक खड़े रहना पड़ेगा तब जाके कोई वैल्यू मिल सकता है, बट आई डोंट थिंक वो रहेगा। रोइक, जो चीज सीटी साइड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो टी साइड पे दिखाते हुए पिक्चर परफेक्ट कॉलिंग, पिक्चर परफेक्ट पिक्स, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा खुद की काबिलियत में। अब राउंड धीरे धीरे करके स्लो डाउन कर रहे हैं, कोशिश करें कुछ रिएक्शन वेट आउट करने के लिए। डिफॉल्ट करेंगे 2 प्लेयर्स बी की तरफ, 2 मिड की तरफ, 1 ए की तरफ। फ्लैश वगैरह डाले जरूर है यहाँ पे, लेकिन बूस्ट मिस करते हैं, मिस्टेकन चेसेस वहां पे टेक डाउन हो जाएंगे, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उनके लिए। C4 गिरा दिया उन्होंने। It is going to be a big problem. Out in the open, चैलेंज करने के लिए वापस जा रहे ईमा। C4 रिकवर करके वो तुरंत डोनट की तरफ बढ़ने के लिए आगे मौका ढूंढ रहे हैं। Shu and his teammates are waiting to greet them. Kadian पहले पिक बनते हुए, Isaac with 2 and Yabi will not at all expect Shu's aggressive position. शुश ईमा को जरूर पनिश करेंगे, बट इट्स 3v1 सिचुएशन एंड शुश के पास सिर्फ 4 HP बचा है। रिकवर करना पड़ेगा C4, उसके बाद लोगों से लड़ना पड़ेगा, बट वहां पे ऑलरेडी C4 को गार्ड करते हुए खिलाड़ी नजर आएंगे एंड दैट्स अ राउंड। आपने बताया था वी हैव सीन ओवर टाइम फ्रॉम इवन स्कोर लाइन्स व्हिच हैड मोर राउंड्स इन बिटवीन, बट दिस प्ले कमिंग इन फ्रॉम ईमा जहां पे वो C4 कैरियर को डाउन करते हुए नजर आया एंड दिस Isaac एज वेल एज Shuhe प्ले कमिंग थ्रू वाज जस्ट ब्रिलियंट एंड स्पेशली Isaac टू गेट 2। GamerLegion वहीं पे बहुत खुश हो चुकी थी। तीन और राउंड की जरूरत है यहाँ पे KDM, ये मैक 10 लेके थोड़ा एग्रेशन दिखाने की कोशिश करेंगे। फ्लैशेस जरूर आ रहे हैं, लेकिन Isaac दूसरा किल भी निकाल लेंगे। 1 सेकंड के लिए तो शायद नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन पिस्टल लेके अंदर चले गए। Yabi ऑलमोस्ट बीइंग टेकन डाउन, फाइनली वो किल निकाला उन्होंने। एंड KDM बैकस्टैब होते हुए, जी हाँ, स्मोक के थ्रू किल निकाला। इट्स गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। 13वां राउंड निकाल सकते हैं अनलेस ऑफ कोर्स Stavin एक चमत्कार यहाँ पे कर पाए। C4 उठाने की जरूरत, पिक्स निकालने की जरूरत, इतना आसान नहीं होने वाला इनके लिए, कोशिश भरपूर होगी। Stavin अपने साइड पे हीरोइक के लिए एक बेहतरीन गेम जरूर निकाले। ही इज सिटिंग विद 23 किल्स एज ऑफ नाउ एंड अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। इट इज अ 1v3 सिचुएशन, ही डज हैव अ लॉट ऑफ हेल्थ, ही कैन प्ले अराउंड। Shuhe वाज लुकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, पनिश हो जाएंगे। वहां से सीटी की तरफ से बाहर निकल के आगे जाना चाहते हैं, बट इट्स गोइंग टू बी अ 1v3। 1v4 से 1v3 जरूर किया है, बट ही हैज टू आइसोलेट ऑल दिस फाइट्स। क्रॉसफायर जरूर सेटअप किया जाएगा एंड he was trying to find somebody जो डोनट की तरफ रहने वाला है, but before that ईमा itself has spotted him। जरूर उनको किल करके जरूर नजर आएंगे, but अभी के लिए GamerLegion have turned the cards। देखिए अभी तक मोहम्मद जो देखने के लिए मौका मिल रहा था, it was just a fight randomly happening and it was heroic taking a challenge, but अभी के लिए GamerLegion are fighting util with their guns। GamerLegion धीरे धीरे करके कोशिश करेगी वापस आने की गेम में, लेकिन यहाँ पे KDM को अपनी टीम को संभालना होगा। छोटी सी गलती उनको वो टाइम में बेच सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग बाय यहाँ पे हीरो ऑप ली गई है, पसंद की गई है। KDM को पिक निकालना होगा, लेकिन क्या वो निकाल पाएंगे? पूरा का पूरा दारोमदार अपने कंधों पे लिया है उन्होंने। ये बहुत रिस्की मैन्यूवर, बहुत रिस्की प्ले, लेकिन देखना ये बनता है क्या ये काम करेगा उनके लिए। दोबारा एक ही तरफ से इशारा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिलियंट स्मोक जो लाइनअप किया गया था।
बस एक सेल करने के लिए, लाइक दे वांट टू मेक इट फील लाइक कहीं ना कहीं बी हो सकता है, बट इतना प्रेशर करके ए की तरफ आ गए. There was only one that Isaac could pick. Plant भी कर लेंगे, and I think this is going to be a tough one to retake. It's a 4v3 situation. ऑप का शॉट लगना चाहिए था. That fast Ferrari peak coming through, उसको चैलेंज नहीं कर पाए ठीक तरीके से, जिसके वजह से टेम्पल का कंट्रोल थोड़ी देर के लिए हार जाएंगे. But they're still trying to contest this. Smoke रहने वाला है. Carrion finally pops off, picks the player Kiosk. Shue on the other end, trying to equalize the numbers, and Shue does. He takes 2. Yabi एक और को down करेंगे. It comes down to a 1v2 situation. 2 खिलाड़ी अलग-अलग डायरेक्शन से रहने वाले, and Yabi closes it for the team. Heroic pull the map back in their favor. Can you believe it? Hero ऑफ लेके Heroic ये राउंड निकाल के जाएगी. Quick execute, quick trades, quick picks. Carrion, उनकी टीम को उनकी जरूरत पड़ी और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्रूशल राउंड निकाल दो. Heroic के फैंस बहुत ज्यादा खुश, Carrion बहुत ज्यादा खुश. उनके चेहरे पे देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है उम्र 5 साल बढ़ गई एक मैच के अंदर, जितना प्रेशर था उनके ऊपर. He's feeling it, he's happy. हुडी जरूर पहनेंगे, बट I'm sure अगली मैच के पहले उतार देंगे वो. I mean, जब वो था, it was not a great show, but उसके बाद he started building momentum, and that Hero op last round, जैसे आपने बोला, it worked out in their favor. बहुत खुश रहेंगे हीरो अभी के लिए, but I think they know GamerLegion are going to put up a big challenge. बहुत तकलीफ जरूर महसूस हुआ है यहाँ पे. The first half was nowhere close. मतलब जिस हिसाब से हीरोइक ने सोचा था, it did not at all come in their favor, but at least ये एक चीज़ है अभी हीरोइक जिसके लिए खुश रहेंगे. The pick was not theirs, it was GamerLegion's. GamerLegion के pick पे हरा दिया गया है उनको. And Heroic, surprisingly they've chosen a map Inferno, जो second अभी होने वाला है, जहाँ पे उनका winning percentage कम नजर आ रहा है compared to GamerLegion. So वाइजा वर्सा अभी भी हो सकता है, इंतजार जरूर रहेगा. 100% विन रेट जो हीरोइक का एंशिएंट के ऊपर था वो बरकरार रहेगा. मांबा जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. लेकिन GamerLegion अब डिस्कस करना होगा, उनको समझना होगा, सोचना होगा क्या गलत हुआ था. इनका मैप पिक था इन्फर्नो की बात करें, हीरोइक का पिक, जहां पे हीरोइक का विन परसेंटेज कम है. अगर आप नोटिस करें GamerLegion का विन परसेंटेज कम था कंपैरेटिवली हीरोइक के ये मैप में. एग्जैक्टली देखना जरूर बनता है किस तरीके से आप इस चीज को अप्रोच करेंगे. I mean, interesting choice of maps, जैसे हम अर्ली बात कर रहे थे वीटो के बारे में. सो इंतजार जरूर रहेगा जब ये सेकेंड मैप शुरू होगा इन्फर्नो में, स्पेशली इतनी टाइम के बाद इन्फर्नो, आई मीन यहाँ पे चैंपियन स्टेज में देखने के लिए मौका मिल रहा है. सारे टीम्स एंशिएंट, अनूबिस, मिराज, ओवरपास खेलते हुए नजर आ रहे थे, वर्टिगो, बट अभी फाइनली इन्फर्नो. मैं भी थोड़ा खुश रहूंगा इन्फर्नो को देखने के लिए. बट हीरोइक दे नो जीता जरूर है मैप को, बट इट हैज बीन टफ. बट अब चलेंगे, सुनेंगे हमारे एनालिस्ट क्या कहने वाला है एंड क्या हो सकता है अगले मैप में. What began as a masterful T-side for GamerLegion was firmly answered back by the Danes in that second half. The punchback too little too late for Shuhei as Heroic deliver the finishing blow. An essential bounce back, Jacob, from Heroic after a first half where arguably GamerLegion, they were dictating the pace. I was starting to get very, very worried on behalf of Heroic. Very worried. They won the pistol round, they converted, they went up 3-0. We think to ourselves, it's normal business for Heroic. They'll cruise their way through this game, but GamerLegion and Shuhei wanted it very, very differently. Some stellar calling coming out of him. Very good pacing as well, I would argue, on that T side. They found the loopholes in the defense of Heroic, and it felt like a lot of the rounds they were winning their round with ease, you know. They didn't have to fight for them. They didn't have to necessarily, you know, go into a clutch scenario, 1v1. A lot of the rounds Heroic just opted to save because they simply got outplayed on the server. And to me, that was all down to Shuhei.
I think that what GamerLegion showed in that first half was the class in terms of the depth, in terms of their T side, the way that when they were setting the pace, they were able to call fast ones, they were able to kind of trick Heroic with some of the plays a little bit, or just work off of the timings that Heroic were throwing out there. And then also when Heroic actually kind of punched back in that half, we saw that GamerLegion just had the protocols necessary in order to kind of play against the tempo that Heroic was trying to set. They still were able to take mid control late. They were still able to go for late crunches onto bomb sites. So even though that happened, it was Heroic that just ran away with it when they were on the offense. Yeah, trying to look on the bright side here for GamerLegion. I'm really glad that we did get to see some incredibly well-drawn executes in that first half. We were hoping that GamerLegion could be putting it up to the big dogs. Unfortunately, not enough to be sealing it out, but that was a really good first half that we saw from them. It was a really good first half. I think GamerLegion deserves credit for that first half, and against any other opponent at this tournament, I think that would have been enough to get a victory. Unfortunately, they're facing Heroic right now, who are playing some stellar Counter-Strike as well. Well, let's put that GamerLegion T side under the spotlight as we move on over to the Mahone zone. That's right. What I want to talk about today was GamerLegion's ability to just read the game, and that's why they're so successful on the T side. So let's take a look at this round here. Round 8. It first starts off with a timeout from Heroic. Now, typically, whenever the CT team makes a timeout, what do you expect? You expect aggression. Heroic, they go for aggression here towards this lane side, and look at the way that GamerLegion respond to this. First thing, Shui, when he comes in, he tosses an immediate flash over towards that ruin side. The flash pops right about here. Now what that does is it actually splits apart this double peek that Heroic had planned, because what was supposed to happen here was that Stan, he was supposed to peek with Yabby here towards that lane side, but because that flash pushes him away, that flash forces Stan away. That allows Shui to then take an isolated fight against Yabby. Now at the same time, Ime, towards this mid position, he gets comms that this mid push is coming through. He jumps up, he doesn't see anybody. So what does he do? He spams. Now this looks like a lucky spam, but if you look at the placement of the spam, it's actually very calculated. It's right next to the shelf positions, right next to these boxes where typically CTs will want to come up towards here to reinforce that side. So this spam, very calculated. On top of that, Accor. As soon as he sees that there's no Molotov there, he takes the opening towards this B site. And the moment that he sees these nades flying over, he knows for sure it's an aggressive play towards mid. This has to be the only person towards the B site. He catches Shush. And look at the way that Accor does it as well. Because the floor is actually sloped, he actually crouches across towards the other side. And what that does is it lowers his elevation in such a way where he can actually pop his head up on the left side like this, as opposed to this right corner. That allows them to find this kill onto Tessus. And as soon as they find these kills, they're able to take the B site, and it's just like that. So this is the reason why GamerLegion was so successful on that T side, is because they're reading Heroic's moves, and they capitalized on it perfectly. Danny is so correct. They were just reading Heroic like a damn book, and I love that we get to see just one of many examples of Accor actually managing to open up the bomb site for his teammates. Yeah, he did well, exceptionally well with the AWP. The fact that he was finding the opening kills, the fact that he was being set up with the utility, the fact that he delivered as an individual. Great to see Accor also find some footing in this game. We've spoken a lot about Imma, we've spoken about a little Shuhei, but Accor has also had, you know, in all his silence, almost a very, very solid tournament. Gentlemen, let's do some counting. What comes after 8? 9. We're going to put that one under the spotlight as well, because man, this is just so ballsy coming out of GamerLegion. Yeah, it's another GamerLegion where they walk up towards this bomb site and they trade their way out of the problems. Back and forth right here. It's a 3v3, but look at this from Shuhei, just charging down CT spawn. At this point, when he's throwing the smoke right here, even if you were to stop the clip, that's it, that's done, that's dusted. But Shuhei, he wants to go all the way down into CT spawn, and that was a little bit of an overstep. It speaks volume to the confidence that he's playing with right here, but that could have been a game changer. That could have been a round for Heroic. So I will argue that even though they played a very, very good first T side, they also played with an awful lot of confidence. Otherwise, Shuhei wouldn't have done what he did right there. Yeah, you could see in that play right there that Shuhei just felt like anything he could do at that point was he was untouchable. And maybe that was to his detriment in some ways, but with how that half went for him and how it went for GamerLegion, you have to respect the fact that he wanted to take the fight right to them, because if he doesn't take the fight to them and he just kind of runs those strats, then Heroic are just going to think, okay, this is we're going tit for tat, blow for blow. This is more or less expected. But once he throws little curveballs like that into Heroic's face, then they're going to actually start to rethink, wait a second, who is it we're in the server against? And it paid off, right, in dividends, because that was a 6-round streak for Heroic on that first half, but for GamerLegion rather. Yeah. Then Heroic answering back with round number 10 subsequently coming.
Yeah, they look very solid in round number 10. I'm not going to lie. A force buy coming in for Heroic right here. You see some of that individual skill, and maybe one of the first times where GamerLegion couldn't quite put up the efficient and the clean executing towards the bomb side. It starts out pretty well for them, getting a couple of trades, but at this point, they're just fighting for no reason whatsoever. This duel right here is really just shocking to me. The fact that Stown is able to find 2 with an MP9, I'm pretty sure we thought in the green room that Shuhei had heard him, and he should have alerted his team to the fact that Stown was there, and I think that's a little bit of the class difference between these two teams. Even though GamerLegion can call excellent strategies, even though they can put some great plans together, sometimes it's just individual quality which is going to lift Heroic above GamerLegion. We saw much more of that in the second half. When the GamerLegion players, when they're spread out on that CT side, it's a lot harder for them to actually just fight one-on-one against Heroic when there is a flash that's popping right in front of their faces. GamerLegion getting 6 in a row. Heroic says, I'll raise you one. I'll give you 7 off of that second half. And it was kind of incredible to get to see that bounce back, as Maui was saying, down to some really incredible individual form coming out of the Danes. Yes, incredible form coming out of the Danes. I highlighted 2 players going into this game. 2 players that have the potential to be a superstar on the server. That will be Yabi and that will be Stown. And they were the 2 highest rated players on the T side on the entire server. Not necessarily only them, you know, powering Heroic through that second half, but when you have players with the caliber of a guy like Stown, when you have an individual who's playing so well and who's so stable in his decision making and his output on the server, it is hard not to imagine that at some point in this game, Heroic were bound to wake up, and they did that in the second half. I think right now, when you look towards Heroic, what is the difference between them now and half a year ago? It's the fact that Stown has a playmate in Yabi. Those 2 as a duo right now is making a case to be very strong, and a duo you have to fear regardless of who you are. What's scary now for GamerLegion is that they've woken up the beast. Heroic were tested there in that first half. What GamerLegion was trying to throw there was a haymaker, but it ended up just being a glancing blow. If you get 10 rounds against a tier 1 team like that, in a stadium event like this, you're supposed to close. You need to close. On your map pick, switching to the second half, you need to do better than what GamerLegion did. They couldn't get it done. Heroic now feel like they are the ones that are in charge, and when you let a favorite have momentum, the series is likely over. And that's exactly what we were prefacing coming into this, right? As much as there have been so many incredibly discovered positives coming out of GamerLegion, if you are going up against Heroic, you better damn close if you have that advantage, because the Danes, they are just going to destruct you if you even give them an inch, right? Yeah, I would agree with that. I think the game is sort of following the path that we kind of expected. GamerLegion, they remain competitive. I think the mini comeback they did in the second half as well to make the score 16-13 also looks better on paper than it perhaps were on the server. It did feel like Heroic already had one ancient, you know, halfway into that second half. So yes, GamerLegion, they're putting up a good fight, but in terms of whether or not they're able to take down a team like Heroic, I think we prefaced it already. They shouldn't be. Yeah, and I think it's Heroic again showing why they're just the most consistent team in Tier 1 CS, that they're not necessarily momentum driven. Like, they used a couple plays themselves to get some of those individuals activated. People like Stown peeking from Cave off of a support flash from one of his teammates. There was always some kind of plan that was in place, whereas you see a team like FaZe maybe against a team like GamerLegion, and they're just going to play back. They're going to say, oh, we're going to wait for that mistake that's going to come. The thing was, GamerLegion wasn't making many mistakes. It was up to the individuals from Heroic to go above and beyond by just hitting nasty shots and having good plans on top of it. We're talking about a second map coming into things. Heroic's pick, obviously, it's going to be Inferno, and things just not looking, you know, any brighter for GamerLegion to turn this series around, potentially. Not at all, not at all. Heroic have played Inferno twice at this tournament so far. They beat FaZe quite convincingly 16-7. They beat Team Liquid as well 16-11, so they're already taken down 2 of the best teams in the world on the map of Inferno. Now, take nothing away from GamerLegion. It's not a bad team on Inferno. They played a lot as well the past 3 months. They have a lot of records on it, which means there's a lot of material for Cadian and Exist to dive into. So, again, I'm struggling finding an argument as to why Heroic were to lose Inferno. They've looked solid so far. Even against FaZe, they were down 5-2 and ended up winning 16-7. It was dominating coming out of Heroic. So I can't tell you. I can't lie. I can't tell you why GamerLegion could win Inferno right here against Heroic. Yeah, I'm having a pretty hard time also. I think this is where the series ends. For me, GamerLegion had to win Ancient if they wanted to have a chance in this series. It didn't happen. I think this is already why Heroic has kind of flexed into the map pool, forcing GamerLegion off of their perma pick in Overpass. Like, that itself was such a strong move already in the veto that Cadian exists. The rest of Heroic, they probably thought in some ways we had already won once that veto came in. Well, speaking of maps, you guys can have your say in the show match over on Blast.tv. If you're not watching over there already, make sure you switch on over to that platform and get your votes in, because you just have one more ban left, and my heart is broken because they decided to ban out Anubis. What is wrong with these people? Why would you do that? The fans have betrayed me. So we've got, what have we got left? Inferno, and I always struggle with the third. Nuke.
Love that. Ooh, Okay. I think Nuke would be fun. I like Nuke. Please, no, Yeah. Inferno, please. If I you think like Nuke. us, I think Nuke. Give us Inferno. Nuke. Yeah, Please. please. Play But we do have Inferno now. Maui, you've been saying you don't feel like there's hope for GamerLegion to be turning this one around. You were also saying a similar sentiment, Jacob. Anything that we should be looking out for? Do you feel like, Shui might have some cheeky teakles on this one? It's going to be tough for him. I think one of the things that Heroic does so well is the banana control they always do. They have Yabi over there, they have Tessus over there, they have Cadian sometimes chiming in as well. That trio is always controlling banana. So if I'm GamerLegion, I'm going to test Shoes in pit. I'm going to test that big bomb site to begin with. See if there's a bit of an opening and see if you can drag away Cadian from banana, which potentially could open that avenue for them. But it's tough. It's very tough for GamerLegion. With Inferno and how it's been playing out at this event, there's a couple of teams that seemingly have unlocked why it has become so much more T-sided. And to be frank, I just haven't seen GamerLegion prove to me that they know what Hooksy and G2 were doing to win over 80% of their T-side rounds on Inferno. Those were the people that were pushing forward the meta of what's possible. And Shuhei, despite the fact that I think he's such a phenomenal caller on Ancient, on Overpass, I haven't seen it on Inferno, unfortunately. It feels a little bit more typical in terms of what you would expect on this map, and I think Heroic actually play a very similar style. They're not necessarily pushing the meta in any serious direction, but they're both just trying something similar, and Heroic just has the higher quality players. There's one player you look out for here on Inferno, and that is Cadian. He's averaging a high rating in particular on this map of Inferno, and he likes to roam around. His average rating on the T side on Inferno is 1.12. For an AWP player who's calling as well, that is incredible high. He loves that map, so watch out for Cadian. Well, we are moving on to map number 2, and it is the pick of the Danes. We do see Inferno gracing our screens, and only one more map potentially separating Heroic from the coveted Grand Finals. Welcome back, ladies and gentlemen. एनालिस्ट ने तो जो कहना था वो कह दिया, लेकिन अब इन प्लेयर्स की बारी है सर्वर के अंदर जाके बोलेंगे, बात करें गेमरलीजन के बारे में। तो यहाँ पे क्राउड को हाइप करने की कोशिश। क्राउड को वापस लेके आना चाहते हैं गेम के अंदर। A good starter coming through, especially for GamerLegion, but Heroic अभी advantage के साथ खेल रही होगी मामा। They have the first map in their favor. This is going to be the second one, and यहाँ पे T side पे शुरुआत after a fiery T side victory। क्या Heroic Inferno पे replicate करते हुए नजर आ सकती है? बना के तरफ कहीं ना कहीं एक फाइट होता हुआ नजर आ सकता है। दो लोग तैयार है GamerLegion की तरफ से, शुए एंड Accor। USP and a dual Beretta player को already देख चुके हैं। They are looking forward to a flash coming through. Tessus खेल रहे हैं उसके लिए एंटी फ्लैश। फ्लैश के साथ तुरंत काउंटर फ्लैश आने वाले, बेहतरीन सेटअप यहाँ पे, एंड ये डिजास्टर्स हो सकता है सीटी साइड के लिए। शुश अभी भी फ्लैश नहीं करना चाहते, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। देखिए लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होता है बहुत जरूरी होता है। स्टैवन इस बार आएंगे ऊपर से पीक करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन उनको मिल चुकी है, फ्लैश आएगा जरूर। और दोनों प्लेयर्स कहाँ पे उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से आइडिया है। काउंटर फ्लैश जरूर है, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। Heroic पहला राउंड अपनी जेब में डाल दो। यहाँ पे दो प्लेयर्स बचे, लेकिन ईमा ड्यूलीज लेके याबी के ऊपर किल जरूर निकालेंगे। Does he want to go in for the retake? किट जमीन पे होगी, अगर होगी तो बनाना पे, वरना नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला उनको। यूटिलिटी के नाम पे एक स्मोक जिससे डिले कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता GamerLegion इसके लिए जाना पसंद करेगी। लेकिन जो काउंटर फ्लैश आया कोई मतलब नहीं है उसका। एंड आई डू बिलीव दिस वाज वेरी प्रॉब्लमैटिक बिकॉज जो सैंडबैग पे प्लेयर थे उनको जिंदा रहने की जरूरत थी। एंड जब वो फ्लैश आए वो बाहर खड़े थे, जिसकी वजह से while he was trying to go into cover वो ऑलरेडी देख चुके थे, and they knew that they had to clear that player off. उनको लेकिन दिक्कत ये थी, उनको एंगल पीक करने की जरूरत भी थी एट द सेम टाइम, क्योंकि उनकी टीम में जो थे वो पॉप फ्लैश का इंतजार कर रहे थे। शायद वो एंटी फ्लैश खेल सकते थे। जो प्लेयर पॉप फ्लैश का इंतजार कर रहे थे वो वैसे भी ब्लाइंड नहीं होते पीछे से जब फ्लैश आता, तो मे बी वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट हो सकते थे। लेकिन फिलहाल के लिए Heroic बेहतरीन तरीके से बनाना कंट्रोल लिया उन्होंने, एंड तारीफ उनकी करनी पड़ी। दो मैकटन इस बार Cadian मैकटन बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, काफी पैसा बना सकते हैं उस गन के साथ। यूटिलिटी बेहतरीन है उनके पास। अब देखना ये बनता है किस तरीके से वो कंट्रोल लेंगे। हिट पुश यहाँ पे, लेकिन शूट स्पीड डाउन करेंगे। 4K फॉर हिम, कैन ही गेट एन एस? नहीं, स्टैन उनको बिल्कुल मौका नहीं देने वाले यहाँ पे।
पीछे भगा रहे ईमा को 1 versus 5। इंफॉर्मेशन जरूर थी उनके पास कि भाई आखिरी प्लेयर एक ही तरफ था, लेकिन फिर भी देखिए डिसिप्लिन देखिए आप, या भी अभी भी इंतजार कर रहे हैं बेस की तरफ। खुशी याबी के चेहरे पे भी नजर आएगी आपको। आराम से इंतजार कर रहे थे, उनको जरूरत थी, लेकिन एक्सपेक्ट किया शुश ने सीधा स्प्रे डाउन, मेकिंग देम फॉल लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स। आखिरी फ्लैग भी निकालना था उनको, आराम से निकाला, एस दिया। काफी खुश होंगे, काफी ज्यादा खुश होंगे। Heroic, ये जो सेकंड मैप का भी स्टार्टेड है, it has been super fast coming through। बनार का अगर पुश का इरादा था गेमर लीजन का, उसको स्टॉप करते हुए नजर आ रहा है। दूसरी ओर मिड के कंट्रोल लेते हुए आगे आ रहे हैं, आर्चर्स को स्मोक ऑफ करने के लिए ट्राई करेंगे, बट देयर विल बी अ काउंटर स्मोक। मिड की तरफ से एंट्री लेने के लिए मौका बिल्कुल नहीं रहने वाला है। सो राइट नाउ दे आर रीअप्रोचिंग, बनार की तरफ से कंट्रोल ले रहे हैं। 2 खिलाड़ी रहने वाले गेमर लीजन की तरफ एट बी, एक छुपे प्लेइंग राइट इन द कॉर्नर। कॉन्टैक्ट की कोशिश यहाँ पे सैम, कॉन्टैक्ट प्ले पे जाने वाले हैं। जैसे ही फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है पहले फ्लैश पे सीधा एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन 3 प्लेयर्स आ चुके हैं बी साइड की तरफ। अच्छा रीड है गेमर लीजन के पास, यहाँ पे प्रॉपरली लॉकडाउन कर सकते, लेकिन सीटी कंट्रोल ले रहे हीरोइक। सीटी की तरफ भागते हुए सुई क्या किल पे निकाल पाएंगे? जी नहीं, 7 कूदते कूदते मैक 10 का इस्तेमाल, और केडीएन की बेहतरीन शानदार पोजीशन यहाँ पे कियोस अपनी टीम के लिए राउंड निकाल सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केडीएन स्मोक के अंदर पुश करने की कोशिश, लेकिन कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। Phenomenal stuff from Heroic, phenomenal stuff. भाई था यहाँ पे, and look at it, अभी तक प्लान करने के लिए नहीं जा रहे माम्बा। They're like trying to fake it and देखना चाहते हैं खिलाड़ी कहाँ से बाहर आ सकते हैं, but they for a fact know this is their round. वो गन्स गिराना चाहते हैं, वो हंट करना चाहते हैं, if I'm not mistaken. और ये देखिए लेट प्लांट करने का कारण ही यही है कि वो पूरी तरीके से आराम से इस एरिया को स्कैन कर पाए। ये शायद दिक्कत भरी बात हो सकती है अगर इकलौते प्लेयर साइड पे रुकेंगे और वहां पे वो टेक डाउन होते फॉर व्हाटएवर रीजन, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब हंट कर रहे हैं, पिरानास इन द वाटर, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते इन प्लेयर्स को। एक एक करके हर एक एंगल में मेथोडिकली खाली किया जाएगा। ईमा लाइब्रेरी के अंदर, आइजैक ग्रेवयार्ड में क्या वो किल निकाल पाएंगे? ईमा स्पॉट हो जाएंगे जरूर, लेकिन वो किल निकालेंगे सबसे पहला। ग्रेवयार्ड के अंदर एक प्लेयर जरूर है, उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उनको टेक डाउन कर दिया जाएगा। एंड लाइब्रेरी में आखिरी प्लेयर है, उनको ऊपर हवा बोल दिया जाएगा। शुश के पास आता एचपी है नहीं, दिक्कत की बात ये होने वाली है। फ्री फायर करते हुए शुश गेट्स हिम। बहुत ज्यादा दर्दनाक हो रहा है यहाँ पे गेमर लीजन के लिए। दे हैव नथिंग टू से। बहुत अर्ली है, मुझे पता है 3 राउंड सिर्फ हुए हैं, बट स्टिल जिस हिसाब से खेला जा रहा है हीरोइक की तरफ से, दिस पुश इटसेल्फ टुवर्ड्स सीटी कमिंग थ्रू, एंड उसके बाद रूइन को एंड 7 देखिए जैसे आपने बोला मुंह के सामने छलांग मार के शू बिफोर ही कुड डू एनीथिंग, हेडशॉट के साथ उनको टेक डाउन किया। तुरंत उनका वेपन उठा लिया, पैंट करने के लिए भी नहीं जा रहे थे। दे वर लाइक वेटिंग कि आए खिलाड़ी, आने दो उनको, उनके वेपन्स गिराएंगे। उसके बाद प्लांट करके हंट के लिए चले गए। नाउ विद सेव कमिंग इन ऑन गेमर लीजन, हीरोइक स्टिल डिसिप्लिन्ड इनफ। उनको पता है कि उनको एक एक करके राउंड ऐसे ले जाना पड़ेगा एंड जीतना पड़ेगा इस मैप को, एंड दे विल क्लोज दिस सीरीज आउट इन अ 2-0 फैशन। बहुत अग्रेसिव आ चुके हैं टेसेस, इसका आइडिया लग चुका था, लेकिन डिसिप्लिन देखिए बनाना बिल्कुल पुश नहीं किया। उनको पता था शॉटगन लेके बैठे रह सकते हैं, क्लोज रेंज बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते थे। टेसेस भले हाउस के अंदर हो, लेकिन बाहर कमिट नहीं कर रहे हैं। और ये चीज हीरोइक की मैं दाद देना चाहता हूं, जिस तरीके का अप्रोच है, इनसाइट्स रही है इनके पास। सामने वाली टीम की इकोनॉमी की गन्स बिल्कुल सेव नहीं करनी थी, डोमिनेट करना चाहते हैं। उनके दिमाग को, उनकी बॉडी को, उनके स्पिरिट को, आत्मा डोमिनेट करना चाहते हैं वहां पे, बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। हीरोइक एक एक करके हर एक एंगल क्लियर करती जाएगी। स्टैवन बी पे उनको पता नहीं है, लेकिन 4 सीटीज ने स्टैक किया हुआ है। अगर ये यहाँ पे सर्वाइव करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा गेमर लीजन को, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया पीछे हटने का। यहाँ पे एक ही तरफ एग्जीक्यूट, 35 सेकंड घड़ी के ऊपर, किल्स की जरूरत, लेकिन स्टैवन वापस जा रहे हैं बी पे। को पुश करने के लिए आए कि पनिश किए जाएंगे। स्टैवन स्टैक है, सीधा भी जा रहे हैं और they're heading right to the stack. मुश्किल हो सकता है। शुश पुश वन, but trades are working out.
3v3 सिचुएशन रहेगा। ईमा को एक और पिक निकालना था, कॉफिन के पास छुपे हुए खिलाड़ी, पोजीशन पता चल जाएगा। आइजैक ट्राइड हिज बेस्ट। एक और आखिरी खिलाड़ी रहने वाले जो ए से आ रहे थे, ए पे सिर्फ एक ही खिलाड़ी थे। व्हाट अ मूव कमिंग इन, हीरोइक। Heroic is on a different plane altogether. यहाँ पे जिस तरीके से पीछे जाने का आवाज किया, बेट करने की कोशिश, लेकिन GamerLegion दस से मस नहीं हुए। Heroic हार सकती थी वो राउंड। एक क्रूशियल किल की जरूरत थी जो C4 को डिफेंड कर रहे थे प्लेयर, जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन पीक किया। अगर वो किल मिल जाता तो शायद Heroic वो राउंड हार जाती। मतलब ऐसा है ना कि दो कदम आगे चल रहे लेकिन एक कदम पीछे चले गए थे इस प्ले के साथ। Heroic on a different plane altogether. Yeah. जिस हिसाब से वो खेल रच रहे यहाँ पे, जिस हिसाब से वो हर एक राउंड पे कुछ अनोखे करते हुए नजर आए, जस्ट ब्रिलियंट। एक दूसरे को देख लेंगे दोनों, एक दूसरे को एक्चुअली वो तो डैमेज नहीं करेंगे, बट दूसरी ओर टेस्टस एंड शूए वो डैमेज खाते हुए नजर आएंगे। बट अभी के लिए स्लोली क्रीप अप कर रहे हैं कैरियन। पिक्सल दिखा उन्होंने, फायर किया जरूर बट कोई फायदा नहीं मिला। दूसरी ओर लुक एट द होल्ड, ए की तरफ वहीं पे जाने का फाइनली इरादा बना रहे खिलाड़ी। Another smoke coming in, mid से अप्रोच बंद किया जाएगा अभी के लिए, but there might be flash and immediate push coming through, जिसका एक्सपेक्टेशन के लिए खिलाड़ी खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। ईमान फ्लैश खेलते हुए जिंदा रहना होगा उनको, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको टेक डाउन कर दिया जाएगा। अपार्टमेंट्स में से नीचे गिरते हुए Heroic, इतना ज्यादा डोमिनेशन टेरेस साइड पे आपको आसानी से देखने नहीं मिलता। इन्फर्नो पे व्हिच हैज प्रीडोमिनेंटली बीन अ काउंटर टेरेस साइड मैप, सिटी साइड मैप होता है ये एक और, लेकिन क्या एक और निकाल पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा स्टैंड के पास, पता था उनको पिक करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक और पिक मिलेगा उनको वहां पे कैसे स्मोक के अंदर। एलिमिनेट हो जाएंगे या भी अनफॉर्चुनेट, थोड़ा ज्यादा समय ले लिया Heroic ने वहां पे। साइड पे उतरने की जरूरत थी लेकिन मेथोडिकली अप्रोच करना चाहते थे, इसका भुगतान करना पड़ा उनको। GamerLegion also showed the similar discipline. उन्होंने भी जैसे स्मोक था पुश नहीं किया, फोर्स नहीं किया ड्यूएल को, इंतजार किया एंड Heroic finally made the wrong approach here. गलती किया, पनिश हुए, राउंड चला गया उनके हाथ से। Otherwise it could have been a streak as of now. खाता बिल्कुल नहीं खुला था GamerLegion का, बट फाइनली दिस वन राउंड माइट गिव देम एन एडवांटेज। रन बूस्ट के लिए जाएंगे, कोई खिलाड़ी नहीं नजर आया बिकॉज ऑफ द फ्लैश, बट अभी भी एक और विल होल्ड द एंगल। दूसरी ओर कैरियन वो AWP के साथ अपने टीममेट्स के साथ बी की तरफ जा रहे हैं। अगेन लुकिंग फॉर द सेम पोजीशन, कॉफिन की तरफ खिलाड़ी दिख चुके हैं बट नो कनेक्शन। देखना ये बंदा Heroic क्या कर दिया, बनाना कंट्रोल तो ले चुकी है ये टीम। एक और मॉलोटॉव दिख जाएगी उनको, गोली जरूर चलाई लेकिन एक ग्रेनेड भी आएगा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टेसिस वहां पे स्पॉट हो चुके थे, भी एक्सप्लोर करने की कोशिश होगी जरूर यहाँ पे, लेकिन क्या ये कर पाएंगे? दो ही प्लेयर है साइड के ऊपर। द फ्लोर इज लावा, सेकंड पिलर पे खेल रहे कियोस। शुश फ्लैश का इंतजार जरूर करेंगे, सुई उनको जिंदा रहना पड़ेगा। कियोस जरूर है बैकअप देने के लिए, ट्रेड निकालने के लिए कारगर साबित होंगे वहां पे। उनको एक और किल निकालने की जरूरत, लेकिन टेसिस वो नहीं होने देंगे। ये क्रॉसफायर बेहतरीन तरीके से काम कर सकता था लेकिन गलती करी GamerLegion ने वहां पे। Heroic एक और राउंड अपने खाते में डालते हुए। अगर शुए वहां पे तुरंत जब कियोस डाउन हुए थे ट्रेड निकालते तो ही कुड हैव फाउंड द सेकंड वन एज वेल, बट उन्होंने थोड़ा लेट निकाला and then there was no approach. ये 7 नेशन आर्मी का गाना गा रहे हैं सपोर्टर्स उनके। 7 नेशन आर्मी couldn't hold me back, वो ट्यून है, अगर आपने गाना सुना है, काफी आइकॉनिक सॉन्ग है। But anyway, GamerLegion बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको एंड नाखुश थे यहाँ पे। ये शॉट जब कनेक्ट किया उस
किल नहीं निकाल पाए थे, काफी ज्यादा नाखुश थे, लेकिन रॉय की दाद देनी पड़ेगी आपको। जिस तरीके से वो किल्स निकालते जा रहे हैं, जिस तरीके से राउंड्स निकालते जा रहे हैं, सामने वाली टीम को बिल्कुल मौका नहीं दिया जा रहा है। लेकिन टाइम आउट का इस्तेमाल यहाँ पे गेमरलीजन का, ये सिर्फ मैप विन के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, मौके के लिए लड़ रहे हैं। एक मौका चाहिए उनको, वन शॉट एट द फाइनल टू हैव द हैंड्स ऑन द ट्रॉफी। लेकिन हीरोइक उनका काम आसान नहीं करने वाली है। आज होगा आई थिंक मे बी ग्रैंड फाइनल्स कल के दिन, मे बी देयर कैन बी अ नाइफ जो हम देख पाएंगे। आई मीन वी विल विश, क्योंकि ये ऑडियंस ओपन कर रहा है उनके लिए एक नाइफ अगर ऑडियंस में निकल जाता है, बी अ गुड थिंग। एक 5 का स्कोर लाइन यहाँ पे। एक और ऑफ से जादू दिखाया था वो राउंड में, वो जादू वापस दिखाने की जरूरत। 3 मैन अपार्टमेंट पुश, ऐसा क्या इसके लिए तैयार होने वाले? जी नहीं, बहुत ज्यादा डैमेज पड़ेगा उनको। वॉल बैंक करने की कोशिश, सीधा फ्लैश बैंक भी लाइनअप किया जाएगा, लेकिन अब कमिट नहीं करना चाहते, धीरे धीरे वापस भागेंगे ये। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत जल्दी वापस भाग रहे। बनाना कंट्रोल लिया नहीं था उन्होंने, बनाना कंट्रोल वापस लेना पड़ेगा। डैमेज देके मिड की तरफ रोटेट किया तो है, जो अपार्टमेंट प्रेजेंस है उसके लिए तो चिंता करनी पड़ेगी इनको, लेकिन एट द सेम टाइम मिड पे प्रेशर बना रहे हैं। Bring down all utils. ए की तरफ जरूर जा रहे हैं, लॉन्ग का कंट्रोल लेना जाएंगे। एंड जी हाँ, चेक करने के लिए जाएंगे लाइब्रेरी एज वेल एज आर्चर्स हैज बीन स्मोक्ड ऑफ, बट एंगल को आइसोलेट करके आगे जा रहे हैं। वहां पे रहने वाला एक खिलाड़ी एंशू इज गोइंग टू बी बेटर विद अ वॉल बैंक, टेक्स डाउन स्टैवन। एंड दूसरी ओर ये सारे फेक करने के बाद बी की तरफ जाने के लिए इरादा बना रहे थे। एक और का ऑफ था बट चला नहीं, अभी उनको फोर्स किया जाएगा बैकअप करने के लिए। एंगल जरूर चेक कर रहे हैं, एंटी फ्लैश खेल रहे थे बट अभी अपना पोजीशन बता चुके हैं। एक और विद 2 मेकिंग इट 3 फॉर हिम, इज पॉपिंग ऑफ राइट नाउ। कियोस फाइनली पुट्स इवन द एक और गोस डाउन। गेमरलीजन अपने तरफ एक राउंड मोड़ते हुए नजर आएंगे। ब्रिलियंट प्ले एंड रीपोजिशनिंग कमिंग इन फ्रॉम एक और। जी हाँ, लेकिन वो जो स्मोक किया गया था वहां पे, वो मुझे थोड़ा डाइसी जरूर लगा, बिकॉज इंसेंडियरी था, उसके ऊपर स्मोक करने की जरूरत नहीं नजर आ रही थी मुझे, बट एट द सेम टाइम वो डिले करने की कोशिश, लेकिन शोश और टेसिस दोनों एक साथ पिक हो गए, उसका कुछ नहीं कर सके। लेकिन एक और बेहतरीन तरीके से अपने ऑप का फायदा उठाते हुए काफी क्रूशियल राउंड्स निकाल रहे हैं अपनी टीम के लिए। 2-5 Shui starts off with the first sandbag, डॉच कर चुके हैं मॉली को, स्मोक डाल के उस एंगल को क्लियर करके अपने प्लेयर को वापस बुला लेंगे। कियोस दूसरी ओर ट्राइंग टू स्पीड रन एंड गो इनटू अ डिफरेंट पोजीशन। हॉल की तरफ कंट्रोल जरूर अभी के लिए याबी के पास है, बट उस एंगल को चेक करके होल्ड कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। बट याबी इज क्विक, इमीडिएटली फाइंड्स द हेडशॉट ऑन आइजैक, पनिश करेंगे। बट दूसरी ओर वापसी आते हुए चेक करना चाहते हैं कि कोई ना कोई अगर पेट पे गिरा हुआ है कि नहीं। एज ऑफ नाउ कोई नहीं गिरा है, दे विल रीगेन कंट्रोल। बट दूसरी ओर लॉन्ग का जो कंट्रोल है वो खो बैठ रहे हैं, बट स्पीडवे की तरफ इंतजार है। आर्चर्स ओपन था, कियोस पनिशेस वन, मेक इट 2 फॉर हिम। कैरियन जरूर ट्रेड निकालेंगे, बट एक और वेलकम्स हिम, टेक्स हिम डाउन। दैट इज अनदर राउंड जो यहाँ पे अपने तरफ लेते हुए नजर आएंगे। गेमरलीजन स्लो ऑन द स्टार्ट, बट एक एक करके राउंड जरूर जीत रही है। फैंस कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी ये तो हमें पता नहीं, लेकिन एंटरटेनिंग मैचअप जरूर है इनके लिए। कियोस बेहतरीन तरीके से खेले पिलर के आजू बाजू, काफी आइकॉनिक मोमेंट्स देखे हमने इस पोजीशन से। लेकिन ये देखिए दहाड़ इनकी, 3 डाउन निकाल चुके गेमरलीजन यहाँ पे। अब पैसा नहीं है हीरोइक के पास, ये बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। अपार्टमेंट वाटरफॉल रश जिसे हम कहते हैं हमेशा, अब स्प्रे डाउन खोला जरूर है, लेकिन ओह माय गुडनेस, बेहतरीन शॉट मारा उन्होंने वहां पे। एक और यूएसपीएस पे शिफ्ट करते हुए जरूरत थी, और ये ग्रेनेड काफी ज्यादा डैमेज देने वाली। ईमा अपने लिए पिक निकालेंगे जरूर। 4v2 सिचुएशन, केरियन एंड टेसिस आखिरी 2 खिलाड़ी बचने वाले हैं। एंड केरियन हैड पिक्ड अप दैट M4, तो दूसरी ओर देखिए कवर करके आएंगे। ईमा पिक्स 1, मेक इट 2 अगेन। इस राउंड पे 3 किल उठाते हुए नजर आएंगे ईमा। गेमरलीजन एज अ होल बहुत हेल्ड अप नजर आ रही थी स्टार्टिंग में, बट अभी के लिए दे आर स्लोली क्रीपिंग अप एंड गेटिंग राउंड्स इन देयर फेवर। एंड थोड़ा चिंता अभी कोच की तरफ नजर आ रहा है। हीरोइक
जो भी करना चाहते थे अभी तक किया उन्होंने, इट वाज वर्किंग ऑल इन देयर फेवर, बट उसके बाद अभी काम नहीं कर रहा है। जो भी अप्रोच करना चाहते, GamerLegion आर क्विकर, GamerLegion आर इनिशिएटिंग द ड्यूल्स इस बार। फर्स्ट पिक ले रहे हैं, उसके बाद तुरंत बैक ऑफ करने के लिए यूटिल भी है उनके पास, एंड फाइनली ये टाइम आउट फोर्स ऑफ करके हीरोइक देखेंगे क्या अलग करते हुए नजर आएंगे अभी। जी हाँ, देखना जरूर बनता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं जरूर कहूंगा, हीरोइक जितना एडवांस काउंटर स्ट्राइक खेल रही है, आई डोंट नो GamerLegion वो प्रिपेयर करके आई है या फिर वो रीड नहीं कर पा रही इसलिए रोटेट नहीं करे, लेकिन जब भी हीरोइक को इनिशियल डैमेज देने का मौका मिल रहा है वो डैमेज दे रहे, बस उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरा ये मानना है टेरेस साइड पे जो 5 राउंड निकाले, 2 और राउंड की जरूरत, सिर्फ और सिर्फ 2 और राउंड की जरूरत। उसके बाद इन्फर्नो में सीटी साइड पे वो आतंक मचा सकते हैं, लेकिन देखना ये बनता है इस राउंड में जो बनाना कंट्रोल डिनाई किया गया, क्या वो वापस लेने की कोशिश करेंगे वो। दो खिलाड़ी ऑल्टमेट एंड ऐप से अभी तक कंट्रोल की कोई एग्रेशन नहीं आना चाहिए GamerLegion की तरफ से। पीक आएगा, थोड़ा डैमेज खाएंगे चैलेंज करने की वजह से, बट नथिंग बीइंग रैटल्ड टुवर्ड्स साइड ऑफ GamerLegion। बनाना पुश करते हुए नजर आएंगे, फाइंड्स वन, लुकिंग फॉर द सेकंड शूट, लुकिंग फॉर द थर्ड एज वेल। केरन उसको स्टॉप करेंगे उस प्री को, बट वहां पे अभी भी AWP रहने वाला है। टेसस लुकिंग फॉर टू पुशिंग आउट फ्रॉम बॉयलर, खिलाड़ी आगे आने वाला है, ही सीज द शोल्डर, टेक्स टेसस डाउन। ईमा माइट लुक फॉर अनदर वन, या भी आ रहे हैं उसी एंगल को चैलेंज करने के लिए, एंड यस ही टेक्स एडवांटेज ऑफ द AK, तुरंत हेडशॉट निकालते हुए नजर आएंगे। इट्स 3v2 सिचुएशन, केरन क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे जरूर मार गिरा दिया जाएगा उनको। आई डोंट थिंक ही विल स्टैंड अ चांस अगर ड्यूल लेने के लिए आगे आएंगे, बट हु नोज, वंडर्स कैन ऑलवेज हैपन। टाइमिंग एक और, जब वो नीचे गिर के वापसी जाने का इंतजार इरादा बनाए, तभी वहां पे एक जंप पिक आया केरियन की तरफ से, एंड ही मिस्ड हिज अपॉर्चुनिटी ऑफ टेकिंग केरियन डाउन। बट अभी के लिए केरियन अपने टीममेट को बुला चुके हैं, या भी नाइस वॉल बैंक शॉट कमिंग थ्रू। केरियन आखिरी खिलाड़ी बचेंगे, एंड एक और स्वीप्स हिम फाइनली। व्हाट अ राउंड, GamerLegion इक्वलाइजिंग द स्कोर। एक और की ऑप घातक साबित हो रही है टेररिस्ट साइड के लिए, और डिफेंस पे आपको सीटी साइड पे इस चीज की खास जरूरत होती है। लेकिन मुझे ये एग्रेशन बहुत ज्यादा पसंद आया। GamerLegion कॉन्फिडेंस के साथ खेले, भले वो शुरुआत के थोड़े राउंड्स हारी थी, लेकिन यहाँ पे हीरोइक के ऊपर प्रेशर बनाते हुए, एंड अब हीरोइक इज ऑन द बैक फुट, उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होने वाला है। ऐसा लग रहा है सामने वाली टीम का होम क्राउड है, इवन द क्योस उनके फेवरेट प्लेयर बनाना कंट्रोल नहीं लेना चाहते। एक और बार गन्स ने उनके पास इतनी अच्छी, अपार्टमेंट में वाटरफॉल करेंगे कि नहीं, ये देखना जरूर बनता है। वापस बनाना कंट्रोल लेती हुई नजर आ रही है GamerLegion। दिस इज लुकिंग रियली गुड। अभी तक तो थोड़ा कंट्रोल नहीं ले रहे थे, साइड के अंदर बैठ के खेल रहे थे, बट राइट नाउ यू कैन सी हॉल की तरफ भी जाके दे आर ट्राइंग टू वेटिंग इट आउट। बनाना का कंट्रोल ले चुके हैं, वो भी डीप। एक खिलाड़ी रहने वाला है who's going to act as bait, but उस कॉर्नर को चेक करने के लिए आएंगे। He's only good for make it 2 actually. Oh, it was chaos. अपने टीममेट का ट्रेड निकाले, and he also doubles another for himself. Good read coming in from Heroic, but ज्यादा कुछ फायदा उठाने के लिए मौका नहीं मिला उनको, सिर्फ एक खिलाड़ी को डाउन किया उन्होंने। स्विचिंग साइड्स मिड्स की तरफ से, देर अभी लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू अ बी एग्जीक्यूशन स्पॉट पे इंतजार करते हुए ईमा। अगर ऐप से अगर पुश करेंगे, खिलाड़ी रहने वाले हैं वहां पे भी गार्ड करते हुए एक और, बट एक और फाइनली स्विचेस पोजीशन मिड की तरफ। वेटिंग, या भी इज डाउन। आखिरी खिलाड़ी ही आल्सो गोस डाउन। ब्रिलियंट प्लेस कमिंग इन अभी के लिए GamerLegion का। हीरोइक थोड़ा चिंतित नजर आ रही है, बट अगेन जैसे आपने बोला साइड स्विच। Was that Chambers cosplay? I thought so too. But मैं जब पहले समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या कर रहा है वो। Well, it is 2023. तो क्या मालूम, शायद हमें इस दुनिया में वो दिखाई दे। लेकिन चलिए रुक करते हैं अगले राउंड की तरफ। 6-5 स्कोर लाइन GamerLegion के लिए, 5 राउंड जीत चुके एक साथ। हीरोइक ने शानदार शुरुआत करी थी। बैक टू द बेसिक्स मेरे हिसाब से जाना पड़ेगा उनको, लेकिन एक और यहाँ पे बूस्ट लेते हुए ईमा के ऊपर शॉट लेने की कोशिश, काफी क्रूशियल किल होने वाला। ये आइजैक उनको बैकअप देने के लिए तैयार, लेकिन हीरोइक स्ट्रगल कर रही है, अब बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है मैप कंट्रोल के लिए।
शूज का एज देख लिया था, ट्राई टू टेक अ शॉट बट नो कनेक्शन। बट दूसरी ओर देखे अपार्टमेंट का कंट्रोल विंडो से लेके अभी बॉयलर से बाहर आने का इरादा बना रहे हैं। एक और इज रीडिंग इट राइट बट वो फ्लैश का टाइमिंग, एक और फर्स्ट जाएंगे। देयर वाज नथिंग ही कुड डू। ही आल्सो स्कोप्ड आउट टू थ्रो डाउन हिज ओन यूटिल, जिसके वजह से ये किल आसानी से उन्होंने उठाते हुए नजर आए। अभी के लिए लॉन्ग का भी कंट्रोल लेते हुए नजर आएंगे, शॉट का भी होल्ड ऑफ करते हुए नजर आएंगे। दे जस्ट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। मे बी बैक ऑफ भी कर सकते हैं जिस हिसाब से बी बनाना का जो कंट्रोल मिला है अभी के लिए बिकॉज ऑफ याबी। एक ही खिलाड़ी रहने वाला है। ओह नाइस फाइंड फ्रॉम आइजैक टेसिस का। आर्चर्स की तरफ क्रीप इन कर रहे थे खिलाड़ी, उनको पनिश किया जाएगा। बट अभी भी देखिए साइड पे एक खिलाड़ी रहने वाला है। ईमा पिक्स अप वन विद क्विक फ्लैंक कमिंग थ्रू। एक एक करके खिलाड़ी बिखरते हुए नजर आए। शुए विद द वन, केरियन फाइनली समहाउ ट्रेसेस इट्स 1v2 सिचुएशन फॉर हिम। प्लांट करना पड़ेगा बट ईमा ही इज नॉट कमिंग ऑन द बैक स्टैब एनीमोर। अपने टीममेट के साथ रीग्रुप करना चाहते हैं बट वहां पे आई थिंक पोजीशन बता चुके हैं, फुटस्टेप दे चुके हैं, इसी के लिए लड़ाई करना चाहते थे केरियन। बट ईमा टाइम्स इट परफेक्टली, अपने टीममेट का साथ देने के लिए आ जाएंगे एंड दैट इज अनदर राउंड फॉर GamerLegion। एक और राउंड निकालते हुए, लेकिन दिस पुश फ्रॉम ईमा और उसके बाद तुरंत पोजीशन चेंज मांगा। ये खासियत होती है जो सबसे बेहतरीन प्लेयर्स होते हैं दुनिया में, उनको पता होता है कहां पे पीक करना है कहां पे नहीं करना है। लेकिन कियोस, मुझे तो डर लग रहा है उनका चेहरा देख के। ऐसा लग रहा है डांटने वाले राउंड जीतने के बाद। इकोनॉमी टूटता हुआ नजर आ रहा है हीरोइक की तरफ से। फ्लैश से आगे बढ़ना चाहते थे बट बहुत अब क्लोज है खिलाड़ी। एक ही दीवार से रहने वाला है। फ्लैश आएगा, एक पिक मिल जाएगा, तुरंत केरियर उसका ट्रेड निकालेंगे। बट दिस इज स्टिल अ मैन एडवांटेज फॉर GamerLegion। जो स्ट्रीक अभी तक हीरोइक का हो सकता था वो स्ट्रीक GamerLegion का बन चुका है और उससे भी बढ़कर स्ट्रीक बनाया इन्होंने। लेकिन कियोस केडिन के ऊपर किल जरूर निकालेंगे। फिलहाल ईमा देखना ही पड़ेगा कि वो किल ना करेंगे। जी हाँ, तीसरा भी निकाल लेंगे अपने आप के लिए। ट्रिपल किल फॉर हिम। वाज इट अ क्वाड किल? I think it was a triple kill. ट्रिपल दो लोगों को वहां पे शू एंड कियोस। आई थिंक ईमा बहुत सक्सेस मिला है उनको जब भी ये अपार्टमेंट से कोई भी पुश आता है। ही गोज फॉर अ चेक एट द बॉयलर एंड तुरंत उनको खिलाड़ी को गिराने के लिए एक मौका मिल जाएगा। हीरोइक कॉलिंग द सेकंड टाइम आउट। देखिए हीरोइक अभी भी मुझे एडवांटेज पे ही नजर आएगी बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ मैप इन हैंड। सीटी साइड का एडवांटेज उनको हाफ का मिलेगा साइड स्विच के बाद। स्कोर लाइन का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, पिछले बार भी ऐसे हुआ था। इट वाज GamerLegion इन द लीड। जैसे साइड बदला टी साइड में दे वर एबल टू इमीडिएटली शट डाउन GamerLegion। GamerLegion ने ट्राई किया स्कोर एडवांटेज रहने की वजह से बट इट स्टिल डिड नॉट वर्क आउट। अनदर ओपनिंग बटन नहीं दब रहा। ओके फाइनली So close. So close. यहाँ पे एग्रेशन दिखाते हुए पहला किल जरूर निकालेंगे। दूसरे प्लेयर की इन्फॉर्मेशन जरूर होगी उनके पास, लेकिन एक और बार एग्रेशन दिखाते हुए जी हाँ, दोनों टीम लेंगे। परफेक्ट फ्लैश था उनके टीममेट का उनके पीछे। शुश का फ्लैश है, ऐसा मतलब शुश का फ्लैश था वो। कंट्रोल वापस लेने के आ रहे हैं बट थोड़ा बुलेट मिल जाएगा एंड कियोस बिफोर द स्मोक रिवील्ड एनीथिंग। ट्राई किया वापस स्प्रे डाउन करने का एंड दोनों खिलाड़ियों को स्मोक के थ्रू ही मारते हुए नजर आएंगे एंड दैट इज अनदर राउंड फॉर GamerLegion का जो अभी तक प्ले बन रहा है, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है माम्बा। दिस इज ब्रिलियंट। लेट हुआ थोड़ा आने के लिए बट इज कमिंग बैक एंड आप देख सकते हो ऑडियंस कितना खुश हो चुके हैं, कितना सपोर्ट दिखा रही है। If you try to go back to what happened in the previous map, second half, audience almost silent हो चुकी थी। अपने आप को excite किया उन्होंने बीच में, but it's still not enough। but अभी के लिए GamerLegion still keeping the streak। Heroic को कोई मौका नहीं मिल रहा है अभी तक बनाना का। aggressive control Heroic डिनाई करेंगे। दूसरी ओर वो भी यहाँ पे ट्राई किए थे फ्लैश के साथ। ग्रेनेड्स अभी फेंका जा रहा है to try and push them off। काउंटर ग्रेनेड्स भी आ रहे हैं, मॉलीज भी आ रहे हैं, बट दोनों सिर्फ चैलेंज ही कर रहे हैं बनाना को। बट दूसरी ओर मिड को भी कंट्रोल पे लेते हुए खिलाड़ी आगे जाना चाहते हैं। फ्लैश आएगा एक और ईमा इस बार ऑप के साथ, एक और के साथ डबल ऑप सेटअप। विल एक्चुअली गो फॉर लॉन्ग एंड आर्चर्स की तरफ से कवर अप करके आ रहे। पोजीशन ऑलरेडी पता चल चुका है। ईमा
He's still good for one. आइजैक को बोल दिया था, but आइजैक एक ही किल उनको मिला. Staven actually doubles down, but still जो situation है, it's 3v3. Oh, Staven! Through the blast उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन किया. क्रॉसओवर देख लेंगे. पर चैलेंज अभी भी कर रही है GamerLegion. आखिरी राउंड में जरूरत है उनको चैलेंज करने की, लेकिन एक और स्पॉट हो जाएंगे वहां पे. छठा राउंड फाइनल निकाला. बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, बहुत मेहनत करी पड़ी यहाँ पे हीरोइक को ये राउंड निकालने के लिए. 96 इज नॉट अ बैड स्कोर लाइन टेरिस साइड पे. एक और के सपोर्टर्स वहां पे ईमा के भी सपोर्टर थे. आई डू बिलीव फैमिली मेंबर या फिर टीम मेंबर्स होंगे, लेकिन देख सकते हैं इतना ज्यादा सपोर्टर होती है. 9-6 स्कोर लाइन. पिछली बार 10-5 का स्कोर लाइन नजर आया था, बट स्टिल हीरोइक मेड इट हैपन. इस बार और भी बेहतरीन स्कोर लाइन है हीरोइक के लिए. धमाकेदार शुरुआत किया था जिसे उन्होंने टी साइड पे अंत किया था, बट कैन दे स्टिल मेक इट हैपन. ब्रिलियंट एज कमिंग इन फॉर शुश यहाँ पे, और उसके बाद एक बड़ा स्ट्रीक लेके दिखाए थे GamerLegion. बट एटलीस्ट द लास्ट राउंड कमिंग इन फ्रॉम हीरोइक वाज डिफरेंट, सरप्राइजिंग. डबल ऑफ सेटअप था, एंड डबल ऑफ सेटअप को आप इतने आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास इनिशियल फ्लैग नहीं मिलता है. देन यू नो देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी फास्ट पुश कमिंग टुवर्ड्स यू, स्पेशली जब आपका पोजीशन निकल जाता है. एंड वही हुआ लास्ट राउंड पे. दे फ्लैश्ड टुवर्ड शॉट एंड तुरंत लॉन्ग से भाग के आए खिलाड़ी, एंड they couldn't do literally anything. उसका काउंटर नहीं कर पाए, पिलर से छुपे हुए थे. ईमा was good for one. आइजैक ने एक किल निकाला, but they immediately traded both of them. but एक और का ये जो लक था, एक किल तो जरूर निकाल लेते, बट दूसरे किल भी उसी प्लेयर वो लाइन अप होने के टाइमिंग which is brilliant. But then chaos. I think GamerLegion individually खिलाड़ी थोड़े चमत्कारी परफॉर्मेंस दिखा दिए. They showed their improwess, mechanical skill, and I think वो टीममेट्स के अंदर भी आ गया. एंड इंडिविजुअली बाकी सारे खिलाड़ी भी चैलेंज करते हुए नजर आए हीरोइक को, जिसके वजह से ये एडवांटेज मिला उनको. लीड लेते हुए नजर आए GamerLegion. बट इज इट गोइंग टू बी एनफ? अभी उनको टी साइड पे खेलना पड़ेगा. हीरोइक दे विल ट्राई टू पिक दिस एडवांटेज ऑफ द सीटी साइड, जिस हिसाब से GamerLegion ने लिया था. जी हाँ, लेकिन 96 अब हीरोइक को सीटी साइड पे फ्लॉलेस राउंड चाहिए होंगे, खास तौर पे पहले 2 बाय राउंड्स, पिछले राउंड एंड पहले 2 बाय राउंड, फॉर देम टू बी एबल टू मेक अ कमबैक इन दिस मैच. लेकिन हीरोइक क्या वो कंपोजर दिखा पाएगी? ये देखिए चांस, देखिए सामने वाली टीम के लिए, GamerLegion के लिए. लेट्स गो लीजन. दोनों तरफ से चांस चलते हुए, दोनों तरफ से चांस. I think ऑडियंस वॉर्स भी जब देखने के लिए मौका मिलता है ना, इट्स रियली नाइस. लाइक who is going to be the loudest? He was still channeling in the energy. इनके कीबोर्ड पे वो जो रिस्टबैंड जैसा था वो बेहतरीन लगा देखने में. लेकिन यहाँ पे देखिए सुई, ईमा 15 और 13 फ्रैग्स. एक और ने जो मल्टीकिल निकाले थे ऑप लेके, वो भी कितने ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं. स्टैव एंड शुश दोनों परफॉर्म करे. अब केडियन की बारी है. जिस तरीके का इम्पैक्ट एक और ने दिखाया था अपनी ऑप के साथ, वही इम्पैक्ट यहाँ पे केडियन को जिताने की जरूरत. बोलिए. एक जो अभी परफॉर्मेंस नजर आ रहा है हीरोइक का, जिस हिसाब से हमने फर्स्ट मैप भी देखा था, ये मैप भी देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो अपने ऐप का जो प्ले है एंड उनका जो एनर्जी है वो बचा के रख रहे हैं फॉर द सेकेंड हाफ. सेकेंड हाफ में फटते हुए नजर आते हैं हीरोइक हर वक्त, एंड इट माइट जस्ट हैपन अगेन. राइट, लेकिन ये देखिए GamerLegion के सपोर्टर्स काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ इनको यहाँ पे. Chaos almost screaming his lungs out. I do believe थोड़ी सी एनर्जी बचानी पड़ेगी. बेस्ट ऑफ 3 मैच होता है, बचानी पड़ती है आपको. लेकिन ये देखिए केडियन का पुश मिड की तरफ, क्लासिक स्ट्रैटेजी ये, और बहुत कारगर हो सकता है ये बैकस्टैप. लेकिन ये फ्लैशबैंग के साथ देखना बनता है क्या किल निकाल पाएंगे. अभी ओह माय गॉडनेस, केडियन में बैकस्टैप के ऊपर आते हुए श्रेड कर दिया है इस अटैक को. यही एग्रेशन की मैं बात कर रहा था.
Sneakily क्रॉस किए थे माम्बा, but that was red from Tessus. अभी अपने टीममेट्स को बोल चुके केडियन बैकस्टैब के बाद राउंड निकालते हुए नजर आएंगे. यही मैं बात कर रहा था. हीरोइक आई फील लाइक जिस हिसाब से वो राउंड्स लेती है फर्स्ट हाफ में, देयर लाइक ओके वी नीड अ गुड हाफ जहाँ पे हमारे पास अच्छे राउंड्स रहने चाहिए. वी डोंट इवन नीड अ बिग लीड. सेकेंड हाफ आते देयर लाइक वी नीड द मैप. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा. लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है, ये आई स्टिल रिमेंबर काउंटर स्ट्राइक 1.6 में फनाटिक बहुत ज्यादा करती थी, जब कान, डीएसएन वगैरह सारे प्लेयर्स एक टीम के अंदर खेलते थे. बहुत पहले की बात. लेकिन ये स्ट्रैटेजी अभी भी इतनी ज्यादा कारगर, अगर अच्छी तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करें तो. लेकिन केडियन हाफ वॉल के ऊपर कूदना चाहते थे, मॉल्टॉफ की वजह से नहीं जा पाए. ऐसा नहीं है गेमर लीजन के पास इतना ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन अब देखना ये बनता है कि गेमर लीजन क्या गुल खिलाती है. I mean, there's nothing on the other end, but सिर्फ ये स्पैम करके ट्राई कर रहे, बुलावा देने के लिए. अगर आएंगे तो आ जाइए. We'll try for a challenge. फाइनली से आपने बोला, एक बहुत तेजी से रश आता हुआ नजर आ रहा है. They're just making all the sounds while they're doing that rush. बड़े से फेक करके कहीं और भागना चाहते हैं बहुत तेजी से. But it's not bringing in any kind of rotation from Heroic. वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि आप पहले आइए साइड की तरफ और तब देखा जाएगा. इट्स डबल फेक. वाटरफॉल जरूर करेंगे लेकिन उनके पास बिल्कुल यूटिलिटी नहीं है, तो कॉन्टैक्ट पे कूदना पड़ेगा उनको. जीरो यूटिल व्हाटसोएवर. डबल फेक करने की कोशिश, लेकिन क्या हीरो के पास वो पेशेंस है यहाँ पे. केडियन 7 श्रेडर बना चुके, मीट ग्राइंडर बना चुके, हॉर्नेट्स नेस्ट जिसे हम कहते हैं. वहां पे एक चोक पॉइंट ले लिया और बिल्कुल बाहर नहीं आने दिया. डिड नॉट फॉल प्रे टू द डबल फेक. हीरोइक एक और राउंड निकालते हो अपने आप के लिए. देखिए जिस मीट ग्राइंडर की मैं बात कर रहा था, बेहतरीन तरीके से होल्ड किया वहां पे. 9-8 का स्कोर लाइन. सीटी साइड बहुत ज्यादा मजबूत होती है इनकी, मैं हमेशा कहता हूं. ये राउंड बहुत ज्यादा क्रूशल होने वाला है. ये बाय राउंड और इसके बाद वाला बाय राउंड, जो टीम जीतेगी मुझे लगता है वो टीम ये मैच निकाल के जाएगी, अगर क्लीन तरीके से दोनों राउंड निकाल सकती है तो. बट ईमा इन द मीन टाइम ऑल टू मिड पे इंतजार करे, बनाना कंट्रोल लेने की कोशिश. C4 अभी भी पीछे पड़ा. ये चीज हमेशा गेमर लीजन के साथ नोटिस करते हैं, C4 लेके नहीं जाते वो कभी भी. They always look forward to the first pick and उसके बाद आगे जाने के लिए मौका ढूंढते हैं, या otherwise it's time and they're like we are going to force our way into the site. अभी के लिए 2 खिलाड़ी रहने वाले हैं. बी के एंट्रेंस को भी स्मोक किया जाएगा, इसकी वजह से थोड़ा और टाइम वेट करना पड़ेगा गेमर लीजन को, या टूट पड़ना पड़ेगा अपने यूटिल के साथ. बट अगर बात करेंगे यूटिल का, 2 फ्लैश सिर्फ रहने वाले, देन अ कपल ऑफ मॉली. ओके नॉट इवन कपल, एक ही मॉली एंड एक स्मोक रहने वाला है. फ्लैशेस के साथ टूट पड़ चुके हैं. नाउ देयर आर गोइंग टू बी नो मोर फ्लैशेस. वैल्यू नहीं मिला, थोड़ा वेट किया. एंड टेसिस विद अ रन एंड गन कमिंग थ्रू द MP9. याबी को एक मिल जाएगा. लुकिंग फॉर अनदर. जी हाँ, एक और उठा लेंगे, एक और विल फाइनली ट्रेड इट आउट. बट इन दोनों का हेल्थ देखिए. इट्स अ 2v3 सिचुएशन हियर फॉर गेमर लीजन. बैकस्टैप भी आ रहा है बनाना की तरफ से. देयर इज नो वे आई फील लाइक दे माइट एबल टू डू समथिंग. इसी के वजह से थोड़ा अग्रेसिव कंट्रोल लेने के लिए पुश कर रहे रूइंस की तरफ, कंस्ट्रक्शन की तरफ. कैन दे फाइंड एनी वैल्यू? जी नहीं. शुश पुट्स हिम डाउन. अभी आखिरी खिलाड़ी रहने वाला है, होल्डिंग द कॉफिन पोजीशन एंड शुश इटसेल्फ पुट्स हिम डाउन. इतने तेजी से यहाँ पे जीत चुके हैं. नाउ 9-9 की स्कोर लाइन. हीरोइक शानदार तरीके से काउंटर करते हुए, और बाय राउंड में आप सोचिए MP9 लेके घुस गए अंदर फ्लैश के साथ. बिल्कुल भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा था, सीधा सीधा चल देंगे और ऐसा भी नहीं रुक के फाइट ले रहे थे, सीधा घुस गए अंदर. एंकल्स निकाले. काफी ज्यादा खुश होंगे इस प्ले के साथ. लेकिन अब प्रेशर गेमर लीजन के ऊपर. हीरोइक रॉय के फैंस उनको चीयर करते हुए. टेरिस साइड के पास पैसा नहीं, अभी गेमर लीजन एक और स्काउट के साथ
केडीएन ऑप के साथ इको राउंड में ऑप लेने की जो ये इनका जो डिसीजन था, ला अगर ये हेडशॉट कनेक्ट होता तो कुछ बात ही कुछ और थी, लेकिन स्टैवन पहला किल जरूर निकालेंगे, दूसरा निकाल पाएंगे। जी हाँ, दूसरा भी स्प्रे डाउन किया वहां पे, आइजैक को टेक डाउन कर देंगे। एंड सुइन शुड हैव कनेक्टेड दैट शॉट, आई विल बी ऑनेस्ट। वो एक किल निकालने की जरूरत थी, लेकिन ईमान 1 वर्सेस 5, डीगल उनके हाथ में, बहुत पोटेंट वेपन, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन अब स्मोक की वजह से पीछे हटना पड़ेगा उनको। डीगल उनके हाथ में, ओपोनेंट उनके बाजू में, ही इज रीडिंग इट। आपने देखा वहां पे, उनको पता था खिलाड़ी बहुत नजदीक है, बट हैविंग जस्ट डीगल, अगर कोई और वेपन होता तो वो स्प्रे डाउन करने के लिए ट्राई करते। बट राइट नाउ एज सून एज ही पीक्स देयर 2 पीपल वेटिंग फॉर हिम। अगर एक भी शॉट कनेक्ट करेंगे, दूसरे से यहाँ पे उनको डाउन किया जाएगा, पता चल चुका है। बट दे स्टिल नॉट अनेबल टू टेक हिम डाउन। ग्रेनेड आएगा, बट फाइनली शुश पुट्स हिम डाउन थ्रू अ वॉल बैंग। डबल डिजिट्स हियर फॉर हीरोइक, लीड ले चुकी है। टाइम आउट GamerLegion लेते हुए यहाँ पे अब एग्जिस्ट सोच रहे होंगे, हाउ डू आई कीप माय ट्रूप्स टुगेदर। प्रेशर काफी अच्छी तरीके से हैंडल किया है हीरोइक ने। अब पहले मैप की बात करें, पहले मैप में पहले हाफ में भी स्ट्रगल किया था, यहाँ पे भी पहले हाफ में स्ट्रगल किया उन्होंने, लेकिन सेकंड हाफ में they've always come alive। ये बाय राउंड डिसाइड करेगा, इज दिस गोइंग टू बी अ 2-0 या फिर मौका मिलेगा यहाँ पे GamerLegion को तीसरे मैप के लिए पुश करने में। अगर GamerLegion ये राउंड हारती है, अगर हीरोइक उनको डोमिनेट कर पाती है, then I do believe it'll be a clear 2-0। अभी के लिए वैसे ही नजर आ रहा है। कैरियर ओपन्स इट अप विद टेकिंग डाउन एक और। ओह माय बैड, ये वापस रिप्ले था। फॉर अ सेकंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, जस्ट स्टार्टेड ऑफ अगेन। Happens to the best of us। लेकिन डिफ्यूज के देखिए 4 डिफ्यूज के लेके बैठी है सीटी साइड, इतने ज्यादा पैसे उनके पास। फिलहाल केरियन यहाँ भी अगर गलती से भी गोली चल गई ना तो उनके सिर पे चलेगी। आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। आई थिंक वहां पे ये बातचीत हो रहा है कि अगर आपको कोई गिरा सकता है वो मैं हूं, तो अगर आप गलती करेंगे, एक शॉट भी अगर मिस हो जाएगा एंड अगर रश आएगा, आई विल टेक यू डाउन, देन टेक डाउन द ओपोनेंट। कियोस इन द मीनटाइम मॉली करके, ये गलत टाइमिंग हो सकता है उनके लिए, लेकिन इंसेंडरी डालेंगे, फोर्स कर रहे उनको पीक करने के लिए, लेकिन डैमेज और भी ज्यादा दिया जाएगा। एक स्मोक ग्रेनेड और इस्तेमाल करना पड़ेगा टेरेस साइड को। अब उनके पास 3 स्मोक अवेलेबल है, 4 स्मोक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अवेलेबल है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर टेक करना है तो। लेकिन स्टैन ग्रेनेड है हाथ में, जैसे ही यूटिलिटी आई इंसेंडरी और ग्रेनेड काफी ज्यादा डैमेज देने की कोशिश, लेकिन आप देखिए यूटिलिटी डैमेज कितना ज्यादा दिया गया है। सूही, एक और कियोस, तीनों प्लेयर्स ने यूटिलिटी का डैमेज लिया है। एक और AWP के साथ कुछ कमाल करना चाहते हैं। जिस हिसाब से C4 जा रहा है वो A की तरफ ही जा रहा है, एंड इसका रीड बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ चुका है। कैरियर रोटेट कर चुके हैं, गो फॉर अ फ्लैश, डिनाइंग एनी शॉट, बट हॉल से जरूर कुछ आ रहा है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा पिट की तरफ। कंट्रोल जरूर ले चुके क्वाड की तरफ। इट्स ऑल अबाउट द टाइम अप्रोच। पिट की तरफ इंतजार कर रहे हैं ईमा का पुश या किसी और का पुश, बट साइड की तरफ सारे लोग छलांग मार रहे थे। 7 with 2, he's still standing on the boxes, कोई उनको निकाल नहीं पाएंगे। बट एक और नो स्कोप करते हुए 7 के ऊपर, देन एन हेडशॉट कमिंग ऑन केरियन, साइड को क्लियर कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली टाइम, रश था बट टाइम नहीं था। जी हाँ, वक्त की कमी उनको भारी पड़ने वाले, वहां पे C4 प्लान नहीं कर पाया, लेकिन ये शॉट जो था एक और का शानदार शॉट। हीरोइक ये देखिए कितने ज्यादा खुश। केरियन इज वेरी प्राउड ऑफ हिज टीम। दिखाई देता है उनकी नजरों में उनकी पैशन नजर आते हैं। ये देखिए एक और बार पहला पिक निकालने की कोशिश की, आउटमेंट को पिक निकाल पाएंगे। जी हाँ, एग्रेशन, कॉन्फिडेंस। केरियन यू गॉट स्टॉप दिस, लेकिन उनको जो करने की जरूरत थी, फर्स्ट हाफ में खामोश है काफी ज्यादा, सेकंड हाफ में बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हो सामने वाली टीम को। 6-7 किल्स के साथ थे, अभी 12 के पास आ चुके हैं। एक और नाइस वन, स्मोक जैसे डिसअपीयर हो रहा था, याबी को डाउन करेंगे, बट लुक एट द पोजीशनिंग कमिंग इन फ्रॉम हीरोइक। अभी भी रीड कर रही है खिलाड़ी को, फ्लैश आएगा बट किसी को पता नहीं है कि जिस हिसाब से शुश खेल रहे। ही पिक्स अप वन बाय आइजैक, क्विक स्नैप ऑन टू शुश's हेड,
C4 रिकवर कर लेंगे, प्लान करने के लिए भी मौका मिल जाएगा। बहुत तेजी से आ रहे पीछे से, बट एक और पुट्स एंड शट्स द प्लेयर डाउन। टेसिस डाउन जा चुका है, कैरियन अपने AWP के साथ खेलना पड़ेगा अगर उनको रीटेक करना है, बट ही डिसाइड्स दैट he'll back off, save it, एंड GamerLegion को इस राउंड में डबल डिजिट्स लेने का मौका मिल जाएगा। एक और sublime with that op, लेकिन आइज़ैक ने जो फ्लिक मारा वापस, मुझे तो स्क्रीन के थ्रू महसूस हुआ ये। वॉकिंग राइट इन, जी आइज़ैक, आई थिंक आइज़ैक वाज द की फैक्टर उस राउंड को GamerLegion की तरफ मोड़ने के लिए। अगर वो शॉट मिस कर देते इट कुड हैव बीन डन, बट क्या है बेहतरीन तरीके से खुद या हेयर स्टैक अभी के लिए अगर बोलेंगे उसके अराउंड खेला गया है। They do lose the round, but not much of a worry coming in. एक ही राउंड खोया, अभी तक एक बड़ा स्ट्रीक आ रहा था उनकी तरफ। अगले मैच का इंतजार कर रहे हैं ये लोग। It's going to be a big match, the next one as well. अभी भी ये मैच खत्म नहीं हुआ, this still can go to the third map. GamerLegion have to buck up. उनको कुछ अलग करना पड़ेगा. They should not fall prey to whatever Heroic want to do. टाइम आउट लिया गया था, बातचीत हो चुका है. Let's hope they utilize the best of it. जी हाँ, यूटिलाइज करना पड़ेगा. 10-11 का स्कोर लाइन हेरोइक. ये राउंड बहुत क्रूशल, बहुत ज्यादा क्रूशल. ऐसा नहीं है उनके पास इतना ज्यादा. अगर ये राउंड आते तो फिर दिक्कत होगी उनके लिए. एक और टाइम आउट हमें शायद नजर आ सकता है. आप देखने ये बनता है कि क्या इतना जल्दी अंदर घुसने की कोशिश. ओह नो, कियोस. अगर ब्लाइंड होकर ये किल निकालेंगे तो फिर यहाँ भी क्या ही कर सकते हैं आप. वो पुश को डिनाई करने के लिए अपने टीममेट की तरफ से वो फ्लैश आया था, बट फिर भी those kind of shots cannot do anything about it. कुछ नहीं कर सकते. बट अभी के लिए शॉट से आगे आ रहे हैं. स्टैक के पीछे एक खिलाड़ी रहने वाले हैं. पिट की तरफ क्रॉस ओवर करने वाले थे. दिख चुका है इनके पोजीशन. मॉले आया, he'll just immediately smoke himself off. इंतजार करेंगे उनकी तरफ एक और पुश आने का. आया था शुई, स्लोली क्रीप्स इन विद द गलील. एक और एक खिलाड़ी निकाल लेंगे. टेस्ट इज राइट नाउ इज बैक इन. पुश करके आए थे, एक खिलाड़ी को पिक करने के लिए मौका मिला. क्वाड की तरफ कंट्रोल लिया गया अभी के लिए हीरोइक की तरफ से. इट्स 2v3 सिचुएशन. लाइव भी जाके एक खिलाड़ी खींच पर रहते हुए, बट व्हाट एन एंगल फॉर शुई टू फाइंड. एंड ये राउंड जा चुका है. हीरोइक को ये पता चल चुका है. एंड आप बता रहे थे हाउ क्रूशियल दिस राउंड वाज. ज्यादा पैसे नजर नहीं आ रहा था. They should have done something about it. And GamerLegion अभी वो बाई करके अपना यूटिल बेहतर कर रहे थे, एंड तब जाके राउंड मिला. The next round should be a comfortable one for them. Staven reading it right. कोई ना कोई सीटी की तरफ पुश करेगा. It was Isaac. पनिश करेंगे उनको एंड वहां से तुरंत भाग रहे, बट बनाने की तरफ भी खिलाड़ी आ रहे हैं. ईमा wants to take this weapon down. उनको भी पता है पैसा इतना ज्यादा नहीं रहने वाला हीरोइक की तरफ. And Staven exchanges the weapon. Oh, nice shot coming in from Yuma. बेहतरीन शॉट वहां पे. गोल्डन हॉर्नेट्स, वाइटैलिटी के फैंस नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे. मैं चैट कर रहा हूँ ऑडियंस को चैट के अंदर. बट GamerLegion 11-11 का स्कोर लाइन. अब उनके पास मौका है, प्रिस्टीन मौका है कि वो बढ़त बनाए, लीड बनाए. इको राउंड पे क्या गुल खिला पाती है, ये जरूर देखना बनता है. कोई ज्यादा यूटिल नहीं है यहाँ पे. आई मीन एक स्मोक है सिर्फ. ट्रिपल स्टैक. ओ वेट, इज इट गोइंग टू बी अ फोर्थ? जी हाँ, ये गन डाउन करना मुश्किल होगा, बट आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोइंग टू कैच देम ऑफ गार्ड. एंड वहीं पे जा रहे हैं. 1-2 आई थिंक तीसरा चौथे खिलाड़ी को नहीं देखे थे वो, बट भाग जाएंगे. लुकिंग एट द डबल स्टैक. रिट्रीट करते हुए नजर आ रही है टीम. वो दूसरी ओर उसको रीड करके रोटेट भी कर रहे,
बॉयलर के अंदर छुपे हुए एक खिलाड़ी, आई एम नॉट टू श्योर, उसको चेक करेंगे एक और इज क्विक एंड स्नैपी ऑन द हेड। शुश को डाउन करेंगे, ईमा डाउन करेंगे एक खिलाड़ी को, मेक इट डबल, मेक इट अ ट्रिपल फॉर हिम, इज लुकिंग अनस्टॉपेबल एज ही पिक्स द फोर्थ एज वेल। ईमा राइजिंग अप फॉर GamerLegion जब चाहिए, एंड GamerLegion लीड को वापस लेते हुए नजर आएंगे। इट वाज एन इको, इट वाज अ सेव राउंड, बट स्टिल एवरी राउंड मैटर्स। हर एक राउंड मैटर करता है यहाँ पे, उसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन चेंबर भी खुश ये देखने के बाद ऑफ कोर्स। लेकिन हीरोइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड, अगर ये हारते तो फिर तीसरा मैप होने वाला, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। केडीएन के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर और है उनके हाथों में सबसे महत्वपूर्ण गन, डिफरेंस मेकर हो सकता है इस राउंड के अंदर। शुश एग्रेशन दिखा रहे फमास है, लेकिन GamerLegion इतनी बेहतरीन काउंटर स्ट्राइक खेल रहे फिलहाल। एक मैक 10, एक M4A1S, देखना ये बनता केडीएन। इंपॉर्टेंट पिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक यहाँ पे। इंफॉर्मेशन जरूर मिली है उनको, लेकिन ईमा इन डिफरेंस मेकर यहाँ पे। स्टैवन ने पीछे हटने का निर्णय लिया जो मुझे समझ में नहीं आया, बट केडीएन हैज नाउ स्टार्टेड टू रोटेट टुवर्ड्स बी। पिट की तरफ अभी भी एक खिलाड़ी रहने वाला है, एंड साइड पे एक खिलाड़ी छुपे हुए रहने वाला है। डे looks like they're also backing off. GamerLegion C4 है A की तरफ, बट ये यूटिल सेटअप के लिए बाहर जाएंगे, विंडो से अपने टीममेट को सारे यूटिल ड्रॉप करेंगे, एंड नाउ दे विल गो फॉर अ क्विक A एग्जीक्यूट। दो खिलाड़ी रहने वाले हैं, लाइनअप आ रहा है टू ब्लॉक ऑफ लॉन्ग, एंड तुरंत एक करके लोग छलांग मारते हुए नजर आएंगे। स्टैवन फाइंडिंग वन, नो मेक इट 2 फॉर हिम। एक और खिलाड़ी याबी जो बक्से के ऊपर थे, ही पिक्स वन। आइजैक ट्राइंग टू होल्ड दिस ऑफ, बट बहुत सारे खिलाड़ी हैं उनको जो जिसके साथ डील करना पड़ेगा। ही मेक्स इट अ सेकंड, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ थर्ड। बक्से के पीछे खड़े, C4 उनके सामने पड़ा है, देयर इज नथिंग दैट ही कुड डू। टेस्टिस कम्स इन एंड उनको क्लीन ऑफ करके दिखा देंगे। अ ग्रेट ट्राई कमिंग इन फ्रॉम GamerLegion, बट सारे खिलाड़ी एक ही डायरेक्शन से जंप आउट करना, दैट प्रूव्ड फेटल। इतना क्रूशल राउंड, स्टेप अप कर रही है टीम जब जरूरत पड़ रही है उनको, और ये दोनों टीमों को इतना ज्यादा प्रेशर देने वाला। लेकिन एक अच्छी चीज ये है सिटी साइड के लिए कि पैसा बचा पाते, यूटिलिटी खरीद पाएंगे आराम से इस बार। आप टेरिस है के पास पैसा नहीं होगा, ये राउंड हारेंगे तो। एक और स्मोक के ऊपर देखने की कोशिश, एक्सपेक्ट करे कि कोई ऊपर से पीक करेगा और फ्लैश बैंग लाइनअप करेंगे, बनाना में एंट्री निकालने की कोशिश, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली उनको। स्टैवन बहुत ज्यादा नजदीक खेल रहे हैं और ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है उनके लिए। फ्लैश बैंग जरूर डाला जाएगा। Sam, what do you think? A has been a problem अभी के लिए GamerLegion को, so I think they need to do something towards B. A की तरफ रोटेशन भी बहुत तेजी से आ जाता है हीरोइक का, उसके बाद दे कीप अ लॉट ऑफ क्रॉस फायर्स। आप एक के साथ डील करने जाएंगे, वहां पे दूसरे पोजीशन से एक खिलाड़ी पीक करता हुआ नजर आएगा। नाइस वे टू पुश बैक द ऑपर। फ्लैश आएगा एंड मजबूर किया जाएगा एक और को उस पोजीशन को छोड़ने के लिए मिड से जैसे आगे आ रहे थे, बट स्टिल ए की तरफ भी प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। डिफॉल्ट की तरफ एक खिलाड़ी रहने वाले, ऑल स्मोक्ड ऑफ लाइब्रेरी इज एंड लॉन्ग, बट स्टैवन अभी भी है। आइजैक इज डाउन, निंजा पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कैन ही फाइंड एनीथिंग? जी नहीं। ईमा पिट की तरफ जाएंगे, शुशन स्टैवन को टेक डाउन करेंगे। स्मोक के थ्रू पुश करने का किसी ना किसी का इंटेंशन होगा, इसका आइडिया है, बट टेसिस को कॉल मिलेगा कि खिलाड़ी अभी भी मिड पे रहने वाला है एंड कियोस गोज डाउन। 3v3 सिचुएशन पे आ चुका है। केडियन ऑन द अदर एंड इज गोइंग टू बी सुपर लो। C4 प्लांट हो चुका है, बट इट लुक्स लाइक हीरोइक माइट डिसाइड टू रिट्रीट। टाइम है उनके पास, एक किट भी है याबी के पास। It might be a little too late. यहाँ पे एक पिक नहीं निकाल पाए तो अब पीछे भागेंगे। एक पिक का इंतजार था, लेकिन हीरोइक वापस बहुत ज्यादा प्रेशर में। 13-12 क्या GamerLegion ये गेम क्लोज कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में चल रहा है। ये दिक्कत की बात यह है कि हीरोइक के पास अब पैसा नहीं होने वाला इतना ज्यादा। This is when you start figuring out
केडियन अपनी ऑप के साथ क्या गुल खिला पाते हैं? ये राउंड जो ईमा का था इज ब्रिलियंट. उनको समझ में आ गया था कि ये निंजा एंड बक्से के पीछे खिलाड़ी खेलेंगे, सो यू कैन नॉट गो फॉर अ रॉ एम ड्यूअल उनके साथ. ही गोस टू द पिट स्नीकली एंड जो खिलाड़ी सोच रहे थे कि शॉट से आएंगे उनके तरफ इशारा बना रहे थे. ईमा फाइंड्स देम बोथ ऑफ गार्ड. दैट वाज द ओपनर फॉर द राउंड. नाइस स्मोक एंड स्मोक के थ्रू पुशअप करना चाहते बट देयर इज अ गैप. हाँ, वो गैप को देखते आई थिंक उसी की वजह से हीरोइक के खिलाड़ी वापसी चले गए, वरना दे कुड हैव एक्चुअली ट्राइड टू गो फॉर अ पुश. शुएब अभी के लिए बनाना का कंट्रोल रख रहे हैं. बहुत यूटिल डंप दोनों साइड से हुआ है अभी के लिए. इंडियरी कमिंग थ्रू बट कियोस वाज रेडी. उनको पता था केरियन का ऑप या कोई ना कोई खिलाड़ी पीक करेगा एंड ही वाज ऑन टॉप ऑफ बैरल्स. ही टुक द एडवांटेज एंड खिलाड़ी को डाउन किया. स्मोक सुपर क्लोज. टाइमिंग देखिए एंड दे विल हैव नो आइडिया कि याबी छुपे हुए. साउंड आएगा, याबी गोज इनटू चेक द बैरल्स. पनिश कर जाएंगे. फ्लैश आया एंड लुक एट देम, दे गो एंड ट्राई फॉर अ नाइफ बट शूए डिनाइज दैट नाइफ. What a play coming in from GamerLegion, outsmarting Heroic as of now. थोड़ा और ग्रेडी हो गए अभी के लिए. नंबर एडवांटेज था जिसके वजह से वो ग्रेडी बन सकते थे, बट अभी के लिए that it should be another round in the favor of GamerLegion. What a game. Absolute madness मैं कहूंगा. Heroic के लिए प्रॉब्लमैटिक साबित होते जा रहा है ये. ऐसा नहीं होने वाला. ये 14वां राउंड, इसके बाद एक और राउंड निकालेगी आराम से GamerLegion की टीम. 15 राउंड्स हो जाएंगे उनके पास. सवाल ये होने वाला है क्या जवाब देगी Heroic इस चीज के लिए, because I don't think it's going to be an easy one. ये शायद थर्ड मैप जाने वाला है. Last 2 rounds GamerLegion के लिए super crucial था. Kios is opening and taking down the player as he was creeping out a smoke. ये 2 पिक्स मिलने के बाद ये नाइफ करने के लिए जो जाने वाले थे but they didn't want any kind of जैसे बोलते हैं ना कि स्नीक पिक्स या ब्लाइंड फायर्स जिसके वजह से खिलाड़ी डाउन हो सकते थे. so they made sure they put him down with a rifle. कोच देखिए कितना खुश हो चुके हैं. what a play coming in from GamerLegion अभी के लिए. back to back 2 rounds में he was all fired up. बहुत क्रूशियल होने वाला है ये, बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है. Heroic Herculean effort. लास्ट मैप उनका पिक नहीं था if I'm not mistaken. GamerLegion का पिक था, वो जीते. Inferno Heroic का पिक है. GamerLegion बहुत नजदीक, बहुत ज्यादा नजदीक यहाँ पे. Could go overtime, might not go overtime. ये हमें जल्दी पता चल जाएगा. लेकिन Heroic अगर ये राउंड निकालती है तो फिर GamerLegion को दिक्कत हो सकती है, बिकॉज कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा टूट जाएगा. पैसा नहीं है Heroic के पास यहाँ पे. देखते हैं ये राउंड निकाल पाते हैं. और नाइस चेक. दूसरे खिलाड़ी ट्रेड करने के लिए आए. ईमा इज ओनली गुड फॉर 2. शुशन को टेक डाउन करेंगे. फार्मर्स था बट उस फार्मर्स को क्विकली अपग्रेड करते हुए नजर आएंगे. अपने टीममेट को भी एक और वेपन दिला सकते हैं, बट यहाँ पे टूट पड़ने के लिए इरादा बना रही है GamerLegion एज दे चेक भी यूजिंग देयर यूटिल. जंप करते हुए नजर आ रहे हैं. स्मोक ऑफ करेंगे सीटी को. एक और स्मोक आया था साइड के तरफ, सो दे आर अ लिटिल बिट वरीड कि साइड में कोई अगर खिलाड़ी है तो मुश्किल हो सकता है. आइजैक फाइंड्स वन ऑन शुश. स्प्रे डाउन कर रहे हैं सीटी के तरफ एंड फाइनली द C4 विल बी प्लांटेड. 4v2 सिचुएशन रहने वाला है. एक वेपन उनको मिला था, दूसरा जाके वो शॉट के तरफ रिकवर कर सकते हैं उस वेपन को अगर चाहिए. बट दिस विल कंफर्म द 15th फॉर GamerLegion. बहुत बेहतरीन तरीके से खेला. पहले ईमास ओपनिंग कमिंग थ्रू, उसके बाद जैसे पता चला कि खिलाड़ी यहाँ पे एक ट्रिपल स्टैक था, दे अंडरस्टैंड मेजॉरिटी प्लेयर्स अगर यहीं पे है विल रन इमीडिएटली टू द अदर एंड ऑफ द साइड एंड सीधा बी चले गए. केडियन एज ऑफ नाउ गेट्स अ फ्री वेपन अग्रेशन के कारण एंड वो वेपन को रिकवर करके चले जाएंगे अपने साथी ए साइड के तरफ. एंड दैट विल गिव GamerLegion मैप पॉइंट.
आप बता रहे थे अगर ये राउंड जाता है गेमर लीजन के हाथों, it will look good for Heroic, but GamerLegion did not make that mistake happen. 2 ही saved rifles थे, एक को ईमा ने डिनाई किया, उसके बाद एक पिस्टल को. It was just the farmers which was there. बट जैसे वो फार्मर्स नजर आया, पता चला अगर कोई भी बी में अगर रहता भी है, उनके पास सिर्फ पिस्टल्स रहना चाहिए. सो दे रैन राइट इनटू बी. 15-11 माम्बा. GamerLegion मेकिंग श्योर हीरोइक को यहीं पे क्लोज करने के लिए कोई मौका ना मिले. सुपर क्रूशियल राउंड हियर, डू और डाई फॉर हीरोइक. अगर यहां से वापसी करने का मौका ढूंढती है, इट कैन बी देयर, वी कैन गो टू एन ओवरटाइम. बट अभी के लिए GamerLegion दे विल नॉट लेट दैट हैपन. एडवांटेज है, क्लोज आउट करना चाहेगी GamerLegion. ये एडवांटेज है जरूर, लेकिन अब हीरोइक को खेलना पड़ेगा एज इफ दे हैव नथिंग टू लूज. द बैक साइड अप अगेंस्ट द वॉल. 3 और राउंड अगर जीतते हैं, दे कैन पुश इट टू ओवरटाइम. फिर 0-0 मौका उनके पास यहीं पे अपना जो फाइनल का स्पॉट है गारंटी करने का. लेकिन बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी. इवन इफ इट गोस टू द थर्ड मैप, हीरोइक का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा रहा है मिराज के ऊपर, लेकिन क्लीन स्वीप यहां पे लेना चाहेंगे. बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहेंगे वो सामने वाली टीम को. सिर्फ 5v5 जब एग्जीक्यूशन होगा, आई थिंक सिर्फ 40 सेकेंड बचेंगे क्लॉक पे. एंड जिस डायरेक्शन पे यहाँ पे नजर आ रही है खिलाड़ी GamerLegion की तरफ, दे स्टेपिंग अप एट ए की तरफ 3 खिलाड़ी रहने वाले. इट्स गोइंग टू बी अ टफ वन. मिनी पिट एंड पिट की तरफ 2 खिलाड़ी रहने वाले. साइड पे एक खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी केडियन जो साइड पे है विद एन ऑप रेडी. अगर कियोस्क का स्विंग रॉ आएगा, जी हाँ, पनिश किया जाएगा उनको. हॉल से बाहर निकलने वाले खिलाड़ी ईमा इज गुड फॉर वन, टेक्स डाउन शुश. अभी मिनी पिट की तरफ एक खिलाड़ी रहने वाले केडियन को अभी भी चल रहा है. ही पिक्स अप अ नो स्कोप. It's do or die here. GamerLegion try कर रहे हैं. Kadian single-handedly shuts down the entirety of GamerLegion's force. क्या ही राउंड Kadian ने निकाला है यहाँ पे. Kadian कप्तान स्टेप अप कर दो. दूसरा जो नो स्कोप था वो शानदार था यहाँ पे. और फिर चौथा किल भी निकाला क्विक स्कोप करके एक और के ऊपर. ये देखिए, खुशी देखिए, पम्प्ड अप होंगे. मे बी एक टैक्टिकल टाइम आउट, आई डोंट नो इफ दे हैव इट अवेलेबल, बट जब ऐसे क्लचेस निकालते हैं आपके हाथ कांप रहे होते हैं, एड्रेनलिन आपके अंदर होता है इतना ज्यादा. Heroic have used all their timeouts. Then they don't have any timeouts left. ग्रेनेड काफी ज्यादा डैमेज देगा. ये देखिए, आइजैक की गोदी में जाके गिरेगा एक ग्रेनेड. रॉयक एक राउंड, ऑल दे नीड इज वन राउंड एंड वन राउंड ओनली. क्योंकि पैसा नहीं होगा टेररिस्ट के पास. अगर ये एक राउंड निकाल लेते हैं तो फिर हीरोइक शायद इसको पुश कर पाए ओवर टाइम में. बट मास्टर क्लास केडियन के द्वारा. ब्रिलियंट प्ले केडियन की तरफ से. GamerLegion थोड़ा टाइम वेस्ट किया है. दे वेंट राइट इनटू द हैंड्स, जहां पे बहुत बड़ा सेटअप था हीरोइक की तरफ से. दोबारा वही कर रही है. इस बार 4 खिलाड़ी रहने वाला है. ब्रिलियंट मॉली, क्लियर ऑफ करेंगे खिलाड़ी को. आर्चर्स की तरफ पुश करने में मजबूर करेंगे उस खिलाड़ी को. एंड अभी के लिए इंतजार किया जा रहा है. C4 अभी भी लेके अग्रेशन ही दिखा रहा है. फाइनली रिकवर करेंगे. एंड अगेन ऑल दीज एग्जीक्यूशंस हैव बीन अराउंड 40 सेकेंड्स लेफ्ट ऑन द क्लॉक. एंड इस बार ये एग्जीक्यूशन थोड़ा स्प्लिट नजर आ रहा है. They've still not found any opening, and ये हीरोइक का जो प्ले है ना मामा अभी के लिए, they're not going for aggressive control. इंतजार कर रहे हैं कि साइड की तरफ आने देंगे उनको, एंड उसके बाद एक एक करके उनको पिक ऑफ करेंगे. अभी पिट की तरफ रहने वाले. मिसिंग द शॉट केडियन इस बार. डैमेज जरूर किया है, बट ही डज नॉट पिक अप अ किल. हेड के अंदर जा चुके शूई विल बी टेकिंग डाउन शुश. बट अभी के लिए देखिए बहुत नजदीक जा चुके हैं स्टैवन. ही टेक्स डाउन द C4. ही लुकिंग फॉर अनदर. ही शट्स अनदर. Staven making it happen. Kadian साथ में आ जाते हैं. Staven with the third. He's looking for the last player. एक और ट्राई कर रहे थे, but Tessus आ चुके थे. Heroic making hero plays here. Staven unbelievable creep up. बक्से के ऊपर चढ़े, उसके बाद खिलाड़ी को डाउन किया, then pulling off an insane 3K. लेकिन उससे भी ज्यादा मैं दाद देना चाहूंगा पे केडियन की. जब पहली बार डैमेज किया, सीधा 5-7 निकाल के अंडर पिच चले गए थे, जिंदा रहे.
एंटी फ्लैश करे, जितनी देर जिंदा रह सकते थे जिंदा रहे, प्रेशर बनाया सामने वाले प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि वो प्रेशर की जरूरत थी उनकी टीममेट को ये प्ले बनाने के लिए. आई डू बिलीव दिस वाज अ ब्रिलियंट एफर्ट फ्रॉम बोथ द प्लेयर्स. ये राउंड कैन दे स्टेप अप? पैसा नहीं होने वाला उतना ज्यादा उनके पास, बिल्कुल भी पैसा नहीं होने वाला है. फोर्स बाय करना पड़ेगा, वेपन इतनी अच्छी नहीं होगी. केरियन एंड कंपनी, ये राउंड जीतना होगा, जरूर जीतना होगा ओवर टाइम भेजने के लिए इस गेम को. भेज सकते हो ओवर टाइम इसको. कितना शैबी भाई आप देख सकते हैं. Heroic fighting for a spot in the final. GamerLegion fighting for survival. एग्रेशन दिखाते हुए, काफी ज्यादा एग्रेशन दिखाते हुए यहाँ पे. भारी पड़ सकता है उनको अगर ये यहाँ पे टेक डाउन, तो बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है. लेकिन ग्रेनेड से डैमेज जरूर पड़ेगा कियोस को. 62 HP पे आ चुके हैं ये. स्टैवन क्या और आगे पुश करना पसंद करेंगे? मुझे नहीं लगता और आगे पुश करना पसंद करेंगे ये. लेकिन जंप स्पॉट करने की कोशिश. एक और स्काउट है उनके पास, शॉट कनेक्ट कर सकते हैं ये. Staven and Ema are the top fraggers for their teams. Staven has already started off. Ema क्या कुछ कर पाएंगे, क्या इसका बदला ले पाएंगे? He has a Galil on hands, but यहाँ पे केरियन को वापस बुलाया गया है कि बनाना की तरफ एक रेज पुश आ सकता है, ट्रेड करने के लिए खिलाड़ी पुश कर सकता है, and they've read it right. But केरियन अपने टीममेट को साथ देने के लिए ही comes up, repositions at coffin. सेटअप किया जा रहा है, but close up एक मॉल ले आएगा जिसकी वजह से जो GamerLegion का पुश था वो डिले करवाया जाएगा. दोनों प्लेयर्स एंटी फ्लैश के लिए, अगर आपने एक चीज नोटिस करी है तो दोनों प्लेयर्स एंटी फ्लैश करने के लिए. स्टैवन पहला पिक निकाला, केडी नीचे से अलाइव. बहुत क्रूशियल स्पॉट में, अगर केडी ना पे मार जाते तो बहुत दिक्कत हो सकती है. लेकिन टेसिस पहला किल निकाला कि तुरंत ट्रेड निकलेगा. ईमा कहां क्रीप अप करके बैठे, देखिए जरूर. 2 वर्सेस 3 केडियन के ऊपर सारा का सारा दारोमदार जिंदा रहना होगा. लेकिन मॉलसोव आएगी, याबी का ये किल निकाल पाएंगे? इतना क्रूशियल किल, धीरे धीरे स्नीक अप करने की कोशिश, लेकिन केडियन विल गेट टेकन डाउन. ये किल्स बहुत क्रूशियल होने वाले. 2 वर्सेस 1. What? Gets them through. Gets alive to fight one more day. Heroic. कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है इसके ऊपर. केडियन को अब बहुत ज्यादा जरूरत है जिंदा रहने की, लेकिन एक प्ले डाउन में दोनों प्लेयर्स को टेक डाउन करते हुए. Is this going to be the round? तो Heroic को भारी पड़ेगा. Almost लग चुका था माम्बा कि हम जाने वाले ओवर टाइम. They brought it to a 2v1 situation, but Isaac, what a spray down coming in from his end. And I think Ema को भी दाद देना पड़ेगा अपने टीममेट को बचा के, जब वो C4 रिकवर किया एंड प्लान करने वाले थे. केडियन ने जब पीक किया, प्लेयर मूव्ड आउट एंड तुरंत केडियन को डाउन किया, जिसकी वजह से आइजैक को प्लांट करने का मौका मिला. एंड ईमा बॉट टाइम फॉर द टीम. उससे पहले ईमा का वही इंटेंशन था कि सीटी से अगर पुश आएगा उसको होल्ड ऑफ करने के लिए गए थे, बट द प्लेयर ऑन साइड वो थोड़ा तकलीफ दे दी है, जिसकी वजह से ईमा को थोड़ा रिट्रीट करना पड़ेगा. बट what a game, what a round being pulled off. Incredible stuff, absolutely incredible stuff. जिस तरीके से उन्होंने खेला, जितनी तारीफ करे उतनी कम इनकी. लेकिन Heroic so close but yet so far, and now प्रेशर होगा उनके ऊपर. ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, Heroic का ट्रैक रिकॉर्ड मिराज के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अब GamerLegion पूरी कोशिश करेंगे उनको बाहर धकेलने के लिए. Heroic came in as a hot favorites, GamerLegion the underdogs. अब देखेंगे ये दोनों टीमें क्या करती है. I mean, मैं ऑलमोस्ट मामा तैयार हो चुका था उस ओवर टाइम के लिए. आपने Heroic फैंस के चेहरे पे भी चिंता देखा. They were not believing that kind of a move happened. वो 2 kills साथ में निकल गया एंड राउंड क्लच होता हुआ नजर आया. Till then Heroic and their fans were thinking ये तो ओवर टाइम जा चुका है. There's nothing to be worried about. GamerLegion as well, वो ऑलमोस्ट सोच चुके थे we'll just give it a all. And for a second, उस 3-4 सेकेंड में I'm pretty sure हम और सारे जो वहां पे अरेना पे ऑडियंस थे वो भूल चुके थे स्कोर लाइन क्या था, उस राउंड में क्या होने वाला है, उसके ऊपर ध्यान दे रही थी. एंड ईमा एंड आइजैक shine as the stars for that round.
मैं बात कर रहा था लाइक इट वाज स्टावन एंड ईमा अपने टीम से स्टार प्लेयर्स बनते हुए नजर आ रहे थे, टॉप फ्रैगर्स। अगर कुछ कमाल करना था इन दोनों प्लेयर्स को करना था। स्टावन ने इनिशियल स्टार्ट किया बट ईमा ने अंत में जवाब देते हुए नजर आए हीरोइक्स को। ये देखिए अब प्रिपरेशन टाइम, आखिरी मौका होने वाला इनके पास ग्रैंड फाइनल्स में अपनी जगह बनाने के लिए। जी जान लगा देंगे, जितनी भी मेहनत करी थी वो सारी मेहनत यहाँ पे रंग ला सकती है, लेकिन एक और मैच जीतना होगा। बेहतरीन कमबैक, गेमरलीजन की दाद देनी पड़ेगी। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि हीरोइक ये जो उनकी हार उसको कैसे कोप करेंगे, उसके साथ कैसे कोप करेंगे। बट नॉनदलेस लेडीज एंड जेंटलमैन, फिलहाल रुक करते हैं एनालिस्ट डेस्क की तरफ और देखते हैं हमारे एनालिस्ट क्या कहते हैं इस मैच के बारे में। Time had gone. I was convinced this was going to overtime. Somehow, some way, Maui, we are going to a third and final decider, and I am so happy about it. What an incredible string of composure there from GamerLegion, winning 7 of the last 10 rounds. When their backs were against the wall, they got even stronger. It did feel like that was Heroic's game to lose for the majority of it, winning such a great string to start off with, looking overall like just a great team. We've seen them play Inferno against some of the best competition in the world, taking down tier 1 opponents time and time again. But GamerLegion get it done. We didn't think that this was going to happen. We did not think we were going to be on a map 3 after Ancient went the way of Heroic. But props to Shue, props to Ima, and props to a guy who we never even talk about, Isaac. Yeah. I'm surprised. I'm not gonna lie. The way GamerLegion conducted himself in that game was just nothing but spectacular. The fact that they get off to such a poor start on their CT side, they then round up by winning 8 rounds in a row on the CT side, and then moving into the second half. You said it yourself. They win 7 out of the last 10 rounds, and I felt like Heroic had it in the bank, but I guess not. Once again, GamerLegion surprised us. They punch above their weight, and I guess we can't even keep saying we're surprised because they've done it throughout the entire tournament. They've done it so well. It's amazing. So much incredible resilience, mental fortitude to be hanging on into that one as well because of the rounds we saw happening at the tail end. We're going to run round 28, round 29 back to back because we thought Heroic had it in the bag after some individual heroics. It was 2 massive plays. First and foremost coming out of Cadian here with the AWPN. Don't forget that GamerLegion could have won this game 16-12 had it not been for Cadian right here. This kill, the third one with the no-scope right here, is fantastic from him. And you think to yourself at this point, all right, GamerLegion, it was a decent attempt. You get another shot right here, but then it's down, going inside the smoke, getting a nasty triple kill, and the time is of the essence right here. The bomb is down on the side, and the third kill right here is easy for Stown. And Heroic at this point, up 15-14, or down 15-14, I was sure. I almost felt like it was guaranteed that we were going into overtime, but I guess they wanted it differently. Yeah, I think also when you talk about fortitude, Freya, we have to talk about the fact that this was basically Heroics to lose because they won both pistols. They won the conversions. They even won the first gun rounds. I've heard some lazy interviews from people before where they're like, we just lost the pistol and we lost the first gun round. It's like, well, then you're probably the worst team. But GamerLegion did that, both halves, and they were still able to come back. So even though the scoreline was 16-14, you could argue GamerLegion were way better than Heroic because even though they lost the more random 50-50 pistols, they still fought back when it mattered with conditioning, with great calling, with great mid-rounds, and also just their players were they clutched up. Yeah, completely. We saw some incredible clutches going down, not least in round number 30. So let's hear the winning moment in this mic'd up moment. Anti-base. Pop. Top first. Top first. Let's go, coffee. CT one. Out CT. Not out. Not out. I'm to city. I'm to city. Care coffin. See that? Ruins. You have Molly. And could be dark, guys, still. I'm checking Yeah, banana. banana also. Let's see banana. Could still be Wait, I dark. need to load. Dark, yeah. Burning. Just plan. Out. Plan. CT one. CT. I can double pick. Two. Close. No! Legion, and man, it's just incredible that Isaac can pull that off in literally the 11th hour. Let's play it one more time. Let's break it down from your perspective, guys. Okay, we're getting into this one. 2 versus 3. I need to talk about this Cadian swing. Cadian, you're not the main character. You need to play within the structure of your team.
Everybody else is trying to get involved. They're trying to push up. And Cadian just goes for this hero swing through a Molotov because he wants to be the hero of his story. It came back to bite him here, and I'm getting sick of it. I don't want to see Cadian do anything like that because you can't just treat GamerLegion so lightly like that. Play with your team, trade off of them, and they would have went to overtime. And I could bet if it went to overtime, GamerLegion would have collapsed. I want to see it one more time because there's one more thing I want to point out right here. One thing is Cadian doing what he's doing, but look at the utility on the heroic players. There's so much to throw with. Molotov, flashes, everything you need in order to orchestrate a retake. So yes, there was a brain fart coming out of Cadian. There was no need whatsoever to keep applying the pressure. That is the way heroic play Counter-Strike sometimes. And I guess sometimes we give them the benefit of the doubt. It can't work out every single time, but in a situation like this where you're up against an underdog, in a situation like this, 15-14, you have all the utility in the world, you know where both of the players are, you are supposed to handle that better. And the thing is that Heroic can construct great retakes when they have utility. Yeah. They've got the procedures and protocols necessary Probably the best to put that back. Yeah, and the thing is that they know that it's just going to be so much stress on GamerLegion, but once they get that singular kill, then they start to believe. And if you give them a little bit of hope, then that's when Isaac can take it all. A guy who's just been so quiet for them. And even on the first map in the playoffs, he was nowhere to be found. Started ramping up in that series versus Monte when they beat them 16-3 and showing that he is worth having on this GamerLegion roster. I know people are going to look at some of these players, Ima, Shuhei, and say, get him on a better team, get him on a better team. Well, they're in the semifinals right now with a roster where you want to count out everybody else on this team, but they are contributing. They're showing that they can stick it to what we were calling the most consistent team in Tier 1. I think for my money, what makes this win so impressive is the fact that I felt Heroic played a decent game of Counter-Strike. Yes. It wasn't Heroic playing necessarily bad. Sure, they can be better. And sure, as you spoke about, they won the pistol, they converted both of them, so they got off to good start in both halves. In the buy rounds, GamerLegion were miles ahead of Heroic. They were by far the better team. And yes, I want to give all the credit in the world to GamerLegion because Stown had a fantastic showing. Some of the individual players from Heroic had fantastic moments, and yet GamerLegion was still able to power through that. So this is a win where you can take absolutely nothing away from them. We've been mentioning Isaac's name a lot for that final round, and rightly so, but there was another moment in this game where he proved instrumental. Let's go back to round 21, because this was kind of, I guess, a pivot round for GamerLegion to be staying in this in the second half. To me, that's when it started. The pivot is key, Freya. What you're saying right there, opening pick, going the way of Heroic. Accor able to find an evener right there, taking down Yabby, but then they've got this Halls pop coming out, Shush right here at the hay cart, and the kills are going the way of Heroic, but look at what Isaac does here. Boom, boom, bada bing, A, B, C, it's done, and he gets those two out of nowhere. A perfect 90-degree turn. Get your protractors out, because Isaac's got his. Without that round, without that play, they would not have won on Inferno right here. Heroic were on track to actually shut them down completely on that CT side, and as you said, when Isaac spun around right there, got the 180 kill, they ended up winning that round with Accor being on 15 HP as well, getting an additional kill in the middle. That was not a round they were supposed to win. For 2 seconds, it was a 4v2 for Heroic, and they lost out on that one, and I think that was one of the moments that really turned out to be the key for GamerLegion in order to believe they could come back. This is where the fairy tale fantasy, the dream for GamerLegion looks so damn beautiful. Obviously, we're going to be coming into the third and final decider, but the fact that we were prefacing this, Maui, saying there is no hope for GamerLegion coming into Inferno. They had to win their first map of Ancient. The fact that we see the fortitude, the resilience to carry it on through and actually close out map number 2, it's just beautiful from them. It was slim margins that got GamerLegion that victory. I would say that we saw the great performance from Stown. Even though Cadian had that one fumble on the last round, he actually played a pretty good game overall in my eyes. And so for GamerLegion, I have to credit a few things. I mean, Ima, obviously, Isaac for clutching up. Shuhei, though, was doing a great job of maneuvering around the map, taking banana control, taking A control, not just hammering B over and over and over again because it was working early. He actually was able to condition Heroic and keep them honest. When every time Heroic were in a defensive setup, it was almost always a 3-2. And if that's what you're playing against, that's actually almost to your favor on the T side, because so many teams have figured out the perfect nades, the perfect executes, that once you get a little bit of space, 3 guys on that A site, you can deal with it. Gentlemen, let's emotionally reset and refocus, because we are now knocking on the doorstep of the third and final map. That is going to be Mirage coming into things. Jacob, can you give us a summary of how we're expecting things to go down, given the team's history on this map? Yeah, I think Heroic right now are looking very solid overall on the map of Mirage. In the past 7 games, they've only lost 1 game, and that happens once in a while. Apart from that, they beat some of the best teams in the world. They did lose out to Team Liquid in a very good game by Team Liquid, so I don't necessarily want to worry myself too much with that. Whereas for GamerLegion, it's more of a mixed bag. In this tournament, they played it
5 times already. They beat Mouse, then they lost to OG, they lost to Navi, then they beat 9, and then beat Monte. So they're beating good teams, but they're also losing to teams that are nowhere near the level of Heroic. So I think when you look towards GamerLegion right now, we can throw out all the analysis, throw out everything we know about these two teams. This game is living its own life right now. It is a final decider, and we did see Heroic play Mirage against FaZe in the quarterfinal on the 3rd deciding map, and they absolutely destroyed FaZe Clan. It wasn't even a game. It will require one more surprise coming out of GamerLegion, and question remains, is there more in that tank? I feel like we've seen so many throughout this tournament, and they would need one more. Yeah, you look at the results, Freya, and it's impossible to say going into this anything other than Heroic are still the favorites. They fumbled the bag on Inferno. We saw some errors there, but we also saw, in my eyes, some overperformances from some of the GamerLegion players in key pivotal moments. On Mirage now, going into it, I think that just again, the results really speak to how strong Heroic are on this map. Their win rate in the past 3 months is exceptional, above 80%, and the fact that they defeated FaZe in such a convincing fashion where every time FaZe wanted to take any space on the map, they were shut down. Heroic always had an answer, always a way to upset them and disrupt their playstyle. So GamerLegion, they got to tighten up once again if they want to try to take anything from Cadian and company. When we spoke about Heroic taking on FaZe Clan on that 3rd deciding map of Mirage, we spoke about Kerrigan being a weak link. I'm looking at the stats for the GamerLegion players right here. The last 12 maps they played, Isaac and Chaos is on a 0.84 rating, both of them. So those are 2 weak links. Those are 2 players that I'm 100% sure Heroic will target in this game. Can they play a good game? GamerLegion has a chance. Will they fumble? They don't have. Well, the Cinderella story certainly continuing for GamerLegion, but it all comes down to Mirage. One more map separating either of these two teams from the grand finals. Welcome back, ladies and gentlemen, to map number 3 of the first semi-final. यहाँ पे Heroic GamerLegion के खिलाफ जाने वाले. GamerLegion 16-14 की स्कोर लाइन से जीता आखिरी मैप. So close, but yet so far. ये मैच शायद अभी खत्म हो सकती थी, लेकिन Cadian किसी को इशारा करते हुए, कुछ इशारा करते हुए, I'm not sure किस चीज के लिए, लेकिन क्राउड को थोड़ा हाइप करते हुए, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा क्राउड, बिकॉज क्राउड GamerLegion की तरफ पूरा का पूरा क्राउड. रहेगा माम्बा. आखिरी मैप. हम कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि हीरोइक क्लोज आउट कर जाएगी सेकेंड मैप में ही, जिस हिसाब से उन्होंने सेकेंड हाफ का शुरुआत किया था, बात किया था, एनर्जी सेव करते हुए नजर आ रहे थे. बट नाउ GamerLegion मीन बिजनेस. दोनों का पहले मैप का हम स्टैट्स के बारे में बात कर रहे थे. पिक पहले मैप अगर बात करेंगे, GamerLegion ने पिक करते हुए नजर आया, इवन दो दे वर लिटिल ऑफ स्टैट्स कंपेयर टू हीरोइक. हीरोइक के पास ज्यादा विन परसेंटेज था. देन वी मूव इनटू द सेकंड वन, जहां पे विन परसेंटेज ज्यादा GamerLegion का नजर आता, बट इन्फर्नो वाज पिक्ड फ्रॉम हीरोइक. एंड वो विन परसेंटेज काम आता हुआ नजर आया दोनों टीम्स के लिए इन दोस टू मैप्स. अभी आ चुके आखिरी मैप मिराज पे. दोनों टीम्स ने ये मुकाबले से पहले मिराज पे खेला है, दोनों ने जीता है. बट बेटर स्टैट्स, जिसे हम ओवरऑल स्टैट्स भी बात कर रहे थे अर्ली ऑन, इट इज हीरोइक हु हैव बेटर स्टैट्स ऑन द मैप. बेटर विन एज वेल इन टर्म्स ऑफ स्कोर लाइन. बट क्या अभी GamerLegion एक अपसेट पुल ऑफ कर सकती है माम्बा? I don't know if you'd call it an upset after this one, because GamerLegion ने dominate किया था आधे मैप के लिए हीरोइक को. अगर स्ट्रगल कर करके जीते होते तो बस ये चीज अलग थी, लेकिन अब GamerLegion शुरुआत की साइड, हीरोइक सीटी साइड पे, एंड जिस तरीके की यूटिलिटी है उनके पास भी एक्सप्लोड मुझे नजर आ रहा है. Cadian एक और बार इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालते हुए तुरंत रोटेशन आने वाला है. सबको एक गोली मारते हुए, लेकिन ज्यादा डैमेज नहीं दे पाएंगे. कैसेस विल गेट टेकन डाउन. या भी दो अभी भी व्हाट अ वन टैप. सब धर चालक करते हुए, लेकिन Cadian, what in the world? पता नहीं क्या शॉट मारा, लेकिन Cadian पिस्टल ऑन में हमेशा डिलीवर करता है अपनी टीम के लिए. हमेशा जो हेवी लिफ्टिंग वो कर रहे हैं. Cadian एग्रेशन दिखाते हुए ऑडियंस की तरफ.
जी जान लगा देंगे इस मैच के अंदर। मुझे लग रहा है, नजर आ रहा है जिस तरीके से केडन ने रिएक्ट किया, ऐसा रिएक्शन हमें देखने नहीं मिला है। What was that movement? हवा में मारा था, कुछ भी शॉट था वो। उनके टीममेट इंतजार कर रहे फिस्ट बम को एंड केडियन का जो अग्रेशन है उसको देख के एंजॉय कर रहे थे वो। लेट हिम हैव दिस। शुश बहुत खुश थे अपने टीममेट का जो वो अग्रेशन देखे। कैप्टन एंड उनके अंदर इतना अग्रेशन एंड कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। द एंटायर टीम विल फील इट। केडियन अगेन आफ्टर दैट राउंड मिड का पूरा कंट्रोल ले चुके हैं। आई एम नॉट टू श्योर इसका ध्यान रहेगा नहीं, एक फ्री फ्रैग मिल सकता है। ईमा उनको अभी तक स्पॉट आउट नहीं किया है। शुई might be a free frag. ईमा उनके शुई के पीछे आ चुका है। Kios is going to be the first one. Is there going to be many more? बच्चे के पीछे छुपे हैं। वन टैप स्ट्राइक, एक और को डाउन कर चुके हैं। केडन अभी भी वहां पे रहने वाले। पुट्स अप अ ट्रिपल। ग्रेनेड फेंकेंगे उनको बैक ऑफ करने के लिए, अपने टीममेट के बुलाएंगे। एंड जी हाँ, ग्रेनेड बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। यह भी आएंगे। ही पिक्स ऑफ ईमा, आखिरी खिलाड़ी रहने वाला है। एंड ही फॉल्स प्रे टू 7. Quick second round coming in for Heroic, dominating from the start. Leader literally leading in front. केरी ने जिस तरीके से शो ऑफ किया पहले राउंड में, दूसरे राउंड में इतना ज्यादा एग्रेशन, बेहतरीन कॉन्फिडेंस, शोमैनशिप, हर एक चीज नजर आ रही है यहाँ पे। लेकिन GamerLegion अब पहला बाय राउंड आने वाला है। अब देखना पड़ेगा हीरोइक के पास क्या इनका जवाब होगा, इस चीज का जवाब होगा। अगर पहला पिक निकालते, कन्वर्जन रेट हीरोइक का, सॉरी GamerLegion का बेहतरीन है। वापस मिड कंट्रोल डिनाई करने की कोशिश और अपने टीम को ब्लॉक करे थे वापस। बट टेसिस MP9 लेके अंदर बैठे हुए हैं, ये दर्दनाक हो सकता है उनके लिए। अंडर पास फ्लैश जरूर किया है, लेकिन कोई इन्फो नहीं, स्मोक था वहां पे। इन्फॉर्मेशन डिनाई कर रही है सीटी साइड पूरी तरीके से। टेसिस दोनों मैप्स में इन द फर्स्ट हाफ वाज नॉट हैविंग अ गुड टाइम, बट उसके बाद ही वाज देयर फॉर द टीम। इस बार देखेंगे कैसे होगा इनका पहला हाफ। अभी तक एक किल भी नहीं मिला है। सेम गोज फॉर शुश। दूसरी अगर बात करेंगे, सुई एज वेल एज कियोस अलोंग विद आइजैक हैव नॉट फाउंड एनीथिंग। कैट को स्मोक ऑफ किया जाएगा। भाई है, दिस इज अ सुपर क्रूशियल राउंड फॉर GamerLegion। आइजैक पुश अप कर रहे हैं मेन की तरफ से, ट्रिपल की तरफ छुपे हुए खिलाड़ी। नाइस मॉली। ईमा बेहतरीन तरीके से माइंड गेम्स के लिए यहाँ पे केडियन स्विंग करेंगे अपने टीममेट के लिए, लेकिन ईमा नहीं मिस करने वाले। वो शॉट क्या दूसरे निकालेंगे जरूर, एक और उनको मदद करेंगे। लेकिन एक चीज अगर आपने नोटिस करी, कनेक्टर स्मोक डाला था बी शॉट क्रॉसिंग के लिए। ए पे ना कोई इन्फो थी, कुछ नहीं था। एक मोलोटॉव किल निकाला, फेक किया GamerLegion को यहाँ पे। एंड शानदार माइंड गेम्स खेलते हुए GamerLegion, हीरोइक कोई जवाब नहीं दे पाई। GamerLegion जिस हिसाब से हर वक्त खेलती है, दे हैव ऑलवेज सरप्राइज हीरोइक उनके अप्रोचेस पे। टेसिस नोज अप क्लोज कोई ना कोई खिलाड़ी है। MP9 के साथ इंतजार कर रहे हैं, पहले जंगल को क्लियर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कहने की स्विंग करने का इंतजार कर रहा है। आइजैक इज होल्डिंग द एंगल एट मार्केट। क्राउच पीक रहने वाला है। ऑफ एंगल थोड़ा बैक ऑफ कर रहे हैं। इज देयर गोइंग टू बी दिस ड्यूएल? जी हाँ, आइजैक फाइनली पिक्स दैट अप। GamerLegion भी अपना पहला राउंड बोर्ड पे डालती हुई नजर आएगी। ये मोलोटॉव बहुत ज्यादा क्रूशियल है। क्रॉसिंग स्मोक था, डैमेज पड़ा गोलियों से, लेकिन ईमा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे वहां पे। सीधा सीधा चलते गए, इतने मौके मिले, हर बार किल निकाला उन्होंने। अब ये देखिए, अपनी टीममेट्स के लिए हौसला अफजाई ऑडियंस का इस्तेमाल करके। पहले राउंड से करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आई थिंक वो ऑडियंस भी रेस्पॉन्ड उतना ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। ईमा इन अ ब्रिलियंट पोजीशनिंग आ रहे हैं। अभी नीड्स टू बी स्मार्ट अबाउट इट। स्मोक आएगा उसके बाद क्रॉस करते हुए ईमा। He might try to push towards connector.
Ladder room. Oh, what a shot! I will never get over the fact. One tap headshot. एक जमाने में UMP वन टैप हेडशॉट हुआ करती थी, अगर आपको मालूम नहीं है तो उसको नर्फ किया गया था. तो एट दैट रेंज एन SMG जो सस्ती है M4 से, जो ज्यादा पैसा देती थी आपको किल के ऊपर, कुड हैव बीन मोर इफेक्टिव. ये बहुत सालों पहले चेंज कर दिया गया था, बट दिस अगेन मैं मानता हूँ कि ये M4 की एक सबसे बड़ी दिक्कत है, बट एट द सेम टाइम जरूरी है ये, क्योंकि आप इमेजिन करिए अगर सीटीज के पास ये रेंज में वन शॉट हेडशॉट होता तो डिफेंड करना कितना आसान होता. They would have enjoyed it. But अभी के लिए LV GamerLegion will be happy. बोर्ड पे दूसरा राउंड निकलता हुआ स्कोर अर्ली इक्वलाइज करते हुए नजर आएंगे. अगेन दोनों टीम्स इस मैप को डू और डाई के ऊपर खेलते हुए नजर आएंगे. Heroic as well as GamerLegion fighting to become the first grand finalist for the last major of CSGO. ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट था. हेडशॉट लगा था जरूर, लेकिन किल नहीं निकाल पाए. एंड ईमा स्टैंड के ऊपर इंपॉर्टेंट पिक निकाल दो कनेक्टर के अंदर. ऐसा है नहीं सीडी साइड पे केडियन ने जो 6 किल निकाले थे, पहले 2 राउंड निकाले थे, अब मिड की तरफ शायद एग्रेशन दिखाना चाहते हैं. ये फ्लैश का इंतजार करेंगे एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं. देखिए टेनिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. शानदार रीड था वो GamerLegion के द्वारा, बेहतरीन से बेहतरीन रीड. जैसे उनको पता चला कि सीटीज एग्रेस कर रहे हैं, इंतजार किया. अब फ्लैश बैंग अवेलेबल है. याबी का ये फ्री किल हो सकता है. स्मोक लाइनअप किया जा रहा है पहले तो. स्मोक के बाद शायद एक फ्लैश, या मिड स्मोक ऑफ किया जाएगा शॉर्ट क्रॉसिंग के लिए. लेकिन अगर ड्राई पिक करते तो दिक्कत हो सकती है उनके लिए. वो मेक अ डिफरेंस. लेज के ऊपर से गिर गए, लेकिन शुश एक और किल निकालेंगे. तुरंत ट्रेड हो जाएंगे 3 वर्सेस 3. जो मिड पे इनको एग्रेशन दिखाना था वो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ट्रिपल पे डबल स्टैक ये डेडली साबित हो सकता है उनके लिए. बैक ऑफ करेंगे. C4 अभी तक मिड पे रहने वाला है. दे शुड फाइनली थिंक अबाउट रोटेटिंग एंड लग रहा है कि मे भी एक की तरफ जा सकते हैं. बट लुक एट द पोजीशनिंग जो पुशअप किया गया था. Kios and Isaac both pushed at aggressive players. आखिरी खिलाड़ी टिकट बूथ की तरफ रहने वाला है. He is pushing towards default. But C4 रोटेट करता हुआ B की तरफ चला जाएगा and Kios puts the last player down. GamerLegion लीड लेती हुई. GamerLegion लीड जरूर लेगी. हमने देखा था और ये जो पिस्टल राउंड होता है जीतते हीरोइक, लेकिन बाद में उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर पा रही है. एंड GamerLegion बेहतरीन तरीके की प्रिपरेशन करके आई है. हर एक चीज उनको मालूम है सामने वाली टीम की. रीडिंग देम लाइक अ डैम बुक. ऐसा होने वाला है सिटी साइड पे. हमने ऑप नहीं देखी अभी तक केडियन के हाथों में. मैं ऑप देखना चाहता हूं, मैं वो इनिशियल पिक देखना चाहता हूं. लेकिन ओ भाई साहब ये फ्लैश के साथ पीक करे. 4 लोग ब्लाइंड को पीक कर रहे थे. क्या भी इज गोइंग टू गेट टेकन ऑन एज वेल. स्मोक तो गया जरूर है, लेकिन क्या वो वापस जाएंगे कि नहीं. वापस जाने का पैसा उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन इतना ज्यादा डैमेज पड़ रहा है स्मोक के थ्रू. एसएस का ग्रेनेड इक्वलाइज करेगा जरूर सिचुएशन को, लेकिन एडवांटेज मैं ये मानता हूं अभी भी GamerLegion के पास. पिछले बार टेसिस ने पुश किया था फ्रॉम बी, बट पनिश्ड. इस बार भी सोच रहे थे बट ही बैक्स ऑफ. शिष्य इन द मीन टाइम वो अग्रेसिव आना चाहते थे. ए की तरफ मेन गेट्स पनिश्ड. 4v4 सिचुएशन को जैसे आपने ऑलरेडी बोला डिसएडवांटेज था, खुद थोड़ा और अग्रेसिव होके डिसएडवांटेज बनाते हुए नजर आए हीरोइक. मतलब 4v3 टेसिस एंड याबी नीड टू डू सम काइंड ऑफ मिरेकल. अगर बात करेंगे केडियन का, वो पैलेस से कंट्रोल लेके टी साइड की तरफ जा रहे हैं. एक बहुत बड़ा बैकस्टैप हो सकता है. C4 कैरियर भी एक की तरफ ही आ रहा है. इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग. अगर एंट्री से पहले यहाँ पे केडियन उन दोनों खिलाड़ी को डाउन करेंगे देन देयर कैन बी अ सिनेरियो जहां पे ये जीत सकते हैं. बट इसका आइडिया कहीं ना कहीं नजर आ रहा है एक और को. केडियन इज क्रीपिंग इन लाइक अ वुल्फ. किसी को अंदाजा नहीं है. अ फॉक्स. Oh no, the sound! Audience! एक और का टाइमिंग. ऑडियंस का पिच फ्रॉम लो टू हाई होता हुआ.
What a moment. Heroic एक और बार बैकफुट पे उनके पास मौका नहीं होने वाला रीटेक ले बिल्कुल भी एचपी बहुत ज्यादा कम एंड GamerLegion वंस अगेन पहले 2 राउंड हारने के बाद जब सीधा डोमिनेट करना चालू करते हैं और मिराज एक ऐसा मैप है जहां पे कुछ भी हो सकता है इट कैन गो ईदर वे लेकिन फिलहाल के लिए GamerLegion एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग हेरोइक मैं ऑफ देखना चाहता हूं केडीएन के ऊपर लेकिन उनके पास पैसा नहीं आने वाला ऑफ का अभी भी by far so methodical. कहीं पे भी और aggression नहीं. Waiting for the opportunity. Check करते हर एक angle को. Expect करते हर एक play को. Literally a proper book in front of them. जैसे खेलती है Heroic उनको एक एक करके break down किया जा रहा है. Time out coming in again. सारे मैप्स में अभी तक हमने देखा है it has been Heroic calling the first time out. आप देख सकते हैं GamerLegion उतना प्रेशर बना रही है Heroic के ऊपर. Heroic के फैंस इतने ज्यादा है नहीं. Almost feels like कि GamerLegion हॉट फेवरेट्स है यहाँ पे. नहीं, मैं तो कल देखना चाहता हूँ. आज रात को दूसरी मैच भी होगी वाइटैलिटी इफ दे मेक इट टू फाइनल्स. कल पीला समंदर बन जाएगा ये टीम. लेकिन अभी के लिए फोकस ऑन दिस मैच. हेरोइक GamerLegion दोनों ने एक एक मैच जीता है. ये अभी बहुत क्रूशियल पोजीशन में फ्लैश आएगा. इनका ओपन सबसे पहला लेकिन ओह माय गुडनेस. आई एम 2 किल्स निकाल दो, 2 क्रूशियल किल्स निकाल दो वहां पे. एंड अब फाइनली एक ऑफ देखने का मौका मिलेगा. 7 उनको ड्रॉप कर पाएंगे अगर जरूरत पड़ी केडीएन को. बट ये 5वां राउंड होगा इन अ रो GamerLegion के लिए. मैक्स लॉस बोनस $3400 मिलने वाले हैं. $50 होंगे केडीएन के पास. अगर ऑफ लेना चाहे तो यूटिलिटी नहीं होगी उनके पास. बट प्रॉपर बाय जरूर देखने मिलेगा. इनिशियल कॉन्टैक्ट डैमेज जरूर पड़ चुका है. बट लुक एट द कॉर्नर जहाँ पे छुपे हुए हैं केडीएन. पोजीशन पता चल चुका है. He looks for a swing but headshot from Chaos coming in. आखिरी खिलाड़ी अपने M4A1S को बचाते हुए नजर आ सकते हैं. टेसिस super worried. Position already called out है उनका. But GamerLegion with 5th on the board. 7 rounds done. Lead 3 राउंड का रहने वाला है उनके पास. टेसिस will try to save but मौका नहीं देंगे GamerLegion. 5-2. अब आएगी ऑप. केडीएन के हाथ तुम्हें देखना ही चाहूंगा इनिशियल पिक मिलेगा कि नहीं. उनको बहुत ज्यादा प्रेशर बना सकते हैं ये ऑप लेके. मेरे हिसाब से एग्रेसिव पिक की कोशिश करेंगे. बिल्कुल एक अर्ली पिक निकालने की कोशिश होगी. लेकिन अगर वो नहीं निकाल पाए तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हेरोइक के लिए. ये देखिए एक और लेकिन GamerLegion की दाद देना चाहूंगा. उन्होंने एक्सपेक्ट किया ऑप होगी. बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी मिड के ऊपर. पूरी तरीके से डिनाई किया और IM अब क्रीप अप करेंगे कनेक्टर में. Up close and personal. Ema delivers on Stavin. Finds another on Yabi. Op Kaden does deliver. Isaac को down करेंगे Apeks की तरफ. 4v3 situation बन चुका है. But they are looking forward to running right towards B जहाँ पे Op था. Ema, IM स्नाइपर नेस्ट की तरफ जरूर देख रहे हैं. बट दूसरी ओर देखे इवन आफ्टर लूजिंग अ प्लेयर मेकिंग दिस कमिटमेंट. क्योंकि ईमा ने मिड पे 2 किल निकाला था. दे थिंकिंग दे माइट रोटेट टुवर्ड्स ए. बट केडन इज कमिंग बैक विद हिज ऑप. पोजीशन देख लिए थे बट इट डज नॉट कनेक्ट द शॉट. प्लेयर नीचे गिर चुके हैं. कैन ही डिलीवर अप क्लोज एंड पर्सनल. दोबारा आते हुए खिलाड़ी सुई डिलीवर्स बट ट्वाइस. 2 खिलाड़ी को डाउन करेंगे. आखिरी खिलाड़ी बचने वाले. दैट्स गोइंग टू बी शुश एंड ही वाज स्टिल एट ए. अनदर राउंड हियर फॉर GamerLegion.
लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दर्द देती है और ईमा ने जो 2 किल्स निकाले थे वहां पे जो 2 किल्स निकाले थे वहां पे वो काफी क्रूशल। पूरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। आई एम लर्क कर रहे थे मिड पे, लेकिन वो जो 2 किल्स निकाले, इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक वाज एन एंट्री फ्लैगर। नारियल की तरह तोड़ दिया डिफेंस को। आई थिंक एक चीज ऐसे अगर एक और इसको गिराना चाहते हैं। पिछले बार टेसेस बचाने के लिए इरादा बना रहे थे अभी शुश, बट ये अगर ऐसे ही चलता रहा मामला, इस फर्स्ट हाफ में एक बड़ा डोमिनेटिंग लीड मिल गया, देन हीरोइक उनका जो मेंटालिटी रहेगा गेम के अंदर, दैट माइट जस्ट ब्रेक डाउन। बट व्हाट वाज दिस मूवमेंट कमिंग इन, लिटिल 180 डिग्री स्विच, अनबिलीवेबल। शुई एज वेल, पहले स्विंग करके फायर किया उन्होंने, जिसके बाद तुरंत उस स्प्रे को करेक्ट करके फाइंड्स द सेकंड वन। Nice stoppage angle on the smoke connected की तरफ से, but doesn't find anything. Initial battle already छिड़ चुका है. Chaos eats up a lot of the damage and Tessus puts him down through a wall bang. But Isaac delivers. Yabi को down कर चुके हैं mid की तरफ. Nest की तरफ अभी भी एक खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं जैसे smoke clear होता है. ईमा को pick off करेंगे and Stavin helps with another. स्मोक एक और बार कनेक्टर की तरफ किया है, एंड ये हर बार हीरोइक दे फॉल प्रे टू दिस। शॉर्ट क्रॉसिंग स्मोक देके ए पे घुसने की कोशिश करते हैं, फ्री साइट मिलती है इनको हर बार। सुई अब बहुत ज्यादा नजदीक, लेकिन शोश क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस चीज को, पैलेस के ऊपर उनका ध्यान होने वाला, लेकिन एक और एक किल निकालने की जरूरत, लेकिन सुई शायद ये किल निकाल पाए। जी नहीं, स्पॉट हो जाएंगे। दोनों प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, अब रोटेशन आना चालू हो जाएगा। सुई वापस स्मोक के अंदर खेलना चाहते हैं। 2v4 जंगल पे रहने वाला, इसका पोजीशन पता चल चुका है। शुश शोल्डर दिख चुका है, बट ही डजंट फाइंड द अपॉर्चुनिटी टू टेक द ड्यूल एंड विन इट। फाइनली स्विंग करेंगे, बट टेसिस एक और को डाउन करेंगे। नाउ इट बिकम्स अ 1v3 सिचुएशन। इट्स गोइंग टू बी सुपर टफ। टेसिस रेड कर रहे, जैसे इस स्टेज से थोड़ा आ गया, ही लिटरली स्विंग्स एन इंच and down करते हुए नजर आएंगे, and Heroic finally get a round, a good one. टेसिस ने काफी क्रूशियल किल्स निकाले थे यहाँ पे। Yeah, and I think random duels लेते हुए नजर आए GamerLegion। यूटिल का टाइमिंग का ध्यान नहीं रखा, स्मोक्स डिसअपियर होते हुए नजर आए, टेसिस ने जैसे इनिशियल वो ड्यूल लिया, बहुत क्रूशियल, and won it. I have a feeling this is also a playstyle problem. जिस तरीके से GamerLegion रीड कर रही है Heroic को, Heroic need to change it up, because Heroic जो इनिशियल कंट्रोल ले रही है वो आराम से लेने दे रही है GamerLegion उनको। उसके बाद एक एक करके फ्लश आउट करो, जो कंट्रोल ले रहे हैं उसके बाद ट्रेडिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा कम होता है कई बार, उसकी वजह से Heroic गिरते जा रही है। लेकिन केडियन जी जान लगा रहे हैं। IM तो हम कल से देखते आ रहे हैं किस तरीके से खेल रही है। IM is performing exceptionally, like पूरे मैचेस में, हर एक मैप में he's been giving it his all, and I think teammates भी उनको साथ दे रहे हैं उसके लिए। अभी के लिए ग्रेनेड यूटिल एक्सचेंज आएगा, डैमेज खाते हुए नजर आएंगे, क्रॉस ओवर करेंगे जरूर बक्से के पीछे, बट स्टिल नॉट फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू। प्लेयर्स भी रिट्रीट करते हुए नजर आएंगे कनेक्टर की तरफ से। एप स्मोक डिनाई एनी काइंड ऑफ पुश कमिंग इन या एनी काइंड ऑफ ड्यूल जो आइजैक लेना चाहते थे। ईमा वापस क्रीप अप कर रहे हैं अंडर की तरफ से, सामने एक दो ग्रेनेड फटा था जिसकी वजह से वो इंतजार कर रहे हैं। हिडन डिजॉप खिलाड़ी है, पता चल चुका है, बट आइजैक इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग एंड द स्विंग। ईमा कनेक्टर के अंदर गोलियां जरूर चलाई उन्होंने, लेकिन अब देखना ये मतलब बी इतनी प्रेजेंस दिखाई है। केडन बी पे ऑप कर रहे हैं, कहां जाना चाहेंगे। जिस तरीके से मिड कंट्रोल लेती है ये टीम शानदार है, लेकिन यहाँ भी ही नीड्स टू स्टे अलाइव। काफी इंपॉर्टेंट किल निकाला है कनेक्टर के अंदर क्रीप करते हुए।
क्रॉसिंग स्मोक है नहीं, लेकिन सान के साथ उनके टीममेट फ्लैश जरूर आएगा जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, लेकिन आई एम ओह माय गुडनेस जी नहीं, ये गलती नहीं करनी थी अभी को, ये बहुत भारी गलती, बहुत भारी पड़ेगा इनको ये। Look at this. Kaden का ऑफ प्रेडिक्टेड है, Shui gets him down, brilliant late push coming through. आखिरी दो खिलाड़ी सीटी की तरफ रहने वाला है, picks up one, make it a double, रुक दिया उनको। ईमा looking forward to his fourth, नजदीक जा रहे ट्रिपल का। C4 on the other end, B पे plant हुआ होगा and Ema picks up the fourth as well. Big rounds coming in from Ema. Ema, he is right now taking down Heroic. सर्जिकल प्रिसिजन, जिस तरीके से डाइसेक्ट कर रहे हैं Heroic को यहाँ पे GamerLegion, they're doing the unthinkable right now. Kieran and company, जवाब देना होगा इस चीज का, बहुत ज्यादा जरूरत। Heroic, this can't be it for them, can it? But of all the three maps, इस मैप में जिस्ट उनका कोच, उनके चेहरे पे भी जो वरी है वो नजर आ रहा था इस टाइम आउट के बाद। केरन वापस ऑप उठाते हुए, हीरो ऑप, पहले मैप को भी एक हीरो ऑप के साथ क्लोज किया गया था, क्या इस बार करते हुए नजर आ सकते हैं? अंडर स्मोक, पैसा नहीं है Heroic के पास, देखना ये बनता है। अगर ये राउंड में Kieran अपना जादू कर पाए तो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आप GamerLegion के लिए, बिकॉज अगर इक्वल राउंड जीत रहे, पैसा अच्छा खासा होगा आपके पास, they're taking out guns from their hands, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि GamerLegion has too much money on their hands। और ये देखिए methodical control, this could be a massive problem, I don't know। अगर उनको पता है कि नहीं टेसिस क्रीप अप कर चुके हैं, लेकिन अगर टेसिस ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला। I'm sure ट्विटर पे आपको कॉन्वर्सेशन दिखने वाला है, जिस तरीके से क्राउड रिएक्ट कर रहा है उसकी वजह से आपको पता चल जाता है आपको कोई बैकअप कर रहा है कि नहीं। Kaden expecting Palace, but timing, oh he still finds Kios को डाउन करेंगे, another swing coming through, Kaden shutting any kind of shenanigans। Shui अकेले रहने वाले, कनेक्टर से उन्होंने पुश किया बट मेन की तरफ गार्ड ही नहीं है, he drops his guard and immediately gets picked off। It is seriously a hero round। अपने टीम के सिर्फ कप्तान नहीं है ये, अपने टीम का जान है, अपनी टीम का क्लच मास्टर है। एंड अगर कोई और शब्द भी जोड़ सकते तो जोड़ दीजिए, बिकॉज Kaden is brilliant as of now। GamerLegion ने टाइम आउट जरूर लिया है, लेकिन I'm not quite sure कॉन्वर्सेशन क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है वो। यहाँ पे Heroic प्रेशर जरूर आप महसूस कर सकते हैं। एग्जिस्ट इतने ज्यादा मेजर्स खेल चुके हैं, मेजर विनर है खुद, सोच रहे होंगे किस तरीके से मदद करे अपनी टीम के लिए। लेकिन यही चीज होती है व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल प्लेयर, जो इतने साल आपने अपनी जिंदगी के इस गेम को दिया है, कई बार आपको खुद को मन करता है कि मैं शायद खुद ही बैठ जाऊं वहां पे। यूटिल में गलती हुआ उस राउंड में एंड देन दे जस्ट ब्रोक अपार्ट। केडियन उसका एडवांटेज उठाया, अभी के लिए एडवांटेज उठाने के लिए स्टाइवन आगे जा रहे हैं, उनके साथ देने के लिए 3 खिलाड़ी रहने वाले हैं, एक अंडर को गार्ड कर रहे हैं, 2 खिलाड़ी आगे ट्रेड करने के लिए तैयार है मिड की तरफ। Shui हैज द रीड, C4 अभी भी टी बेस की तरफ रहने वाले हैं, दे विल रिकवर एंड हेड ओवर टू ए पे सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, बी विंडो पे एक,
So I think if they go for a fast execute, A का पूरा control लेते हुए नजर आ सकते हैं. It will be only Tessus who might try to cause trouble from connector, जो अभी under guard करते हुए नजर आ रहे हैं. But finally जब एक lineup आता हुआ नजर आएगा Utel का, they will surely call it कि ये A push हो सकता है. Shush guarding Palace. Molly आएगा close up check करने के लिए, and now there will be a fall of utilities. Angle को smoke किया जाएगा. First jungle. Oh, it'll be both jungle as well as connector, and उसी के साथ ticket booth की तरफ. Entire side taken over. Oh, flash! Shui, he goes down. अपने teammate के flash की वजह से, but nonetheless this C4 has been planted. And Ema, can you stop making such moves? रुकने का नाम नहीं ले रहे. He goes super aggressive. Tessus finally punishes him. Oh no, things are falling apart. 2v4 situation. Bettering Molly. Accor trying to save but defuse. Stick किया गया था. Good try coming in. ईमा का ओवर एक्सटेंशन बहुत भारी पड़ सकता है और ये शायद एक प्ले होगा जो मोमेंटम दे सकता है हीरोइक को. आई एम श्योर उनके कोच, उनके टीममेट्स बहुत ज्यादा दुखी होंगे उस चीज से. उन्होंने पिक निकाला था, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ओवर एक्सटेंशन, भावनाओं में बहना जिसे कहते हैं, वो चीज हुई यहाँ पे. कियोस फॉर्म क्रिएटेड द मॉलोटोव. एक और ने कोशिश जरूर करी लेकिन केडियन बैठे थे उनके टीममेट के साथ बैकअप देने के लिए. हीरोइक 7-5 का स्कोर लाइन. बहुत ज्यादा जरूरी था ये राउंड निकालना उनके लिए, लेकिन यहाँ भी आप स्मोक. ओह, इज गोना पीक आउट. एक्चुअली गोना पीक आउट. दूसरा किल निकालने की कोशिश, लेकिन थोड़े से ज्यादा ईगर हो गए. Oh, Kios. He's seen the player, gets the two through the smoke. But oh, almost. Kios, he was about to be punished, Mamba. What a move. He's quickly switching positions. I'm not too sure इसका आइडिया लगा कि नहीं. जंगल जा चुका है खिलाड़ी. Kadian is right now blocked from 2 directions. आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं हट सकते. Finally we'll wait for the molly to clear, but अभी अपना sound दे चुके हैं. खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं ऐप से. He will find Kadian off guard. Isaac जरूर निकाल चुके हैं. ये जंगल का जो कंट्रोल मिल चुका है, सॉरी नेस्ट का जो कंट्रोल मिल चुका था, वहां से खिलाड़ी सीटी का कंट्रोल ले चुके हैं कियोस. Shush will be the last player and is left wondering कि कहां पे है खिलाड़ी. Shush 1 versus 3. मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी अटेम्प्ट होगा, लेकिन कियोस की पोजीशन में बेहतरीन पोजीशन, आराम से किल निकाल लेंगे. GamerLegion हर एक एरिया में आउट क्लास कर रहे हैं हीरोइक को. जो डेविड वर्सेस गोलाथ की स्टोरी थी, हीरोइक केम इन एज अ हॉट फेवरेट्स, लेकिन GamerLegion proving everyone wrong. Everyone. Yeah. एक और राउंड निकाला अपने आप के लिए. दाद देनी होगी आपको. जिस तरीके से कियोस ने क्रूशियल राउंड निकाले, बहुत ज्यादा जरूरी था उनके लिए. लेकिन इस बार इतना ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया उन्होंने. Score line नजदीक आ रहा है माम्बा. They would have liked the score line to be double digits. I mean अभी भी मौका है, but double digits मतलब 12 या 11 अगर हो जाता, then they would have been super happy. AWP अभी भी केरन के हाथ में रहेगा. Up close, but कुछ मौका नहीं मिलेगा. Kios is good with Shush. एक और खिलाड़ी रहने वाले स्टेयर से उतरेंगे. He tried his double, but the grenade finds one along with Tessus going down to Kios. आखिरी दो खिलाड़ी एक MP9 के साथ रहेंगे and Kadian with the op. Nothing. Ema picks him up and अभी Kadian वापस चले जाएंगे इस AWP को सेव करने के लिए. That's going to be another round for GamerLegion, but GamerLegion still you could see इतना टाइम ले रहे, not going super aggressive, जहाँ पे सीधा बॉम्ब प्लांट करके उसके बाद कुछ फाइट करने के लिए. बट ये स्टेयर से जो जंप आया था, it's too good. But Kios, क्या ही बेहतरीन राउंड अभी के लिए निकाल रहे हैं. पिछले राउंड में जो मूवमेंट दिखाया था 2 किल्स निकालने के बाद, इस बार 2 पिक्स निकाल के अपने टीममेट्स को एक ए साइड का पूरा कंट्रोल दिलाना. Everybody stepping up, Mamba, from GamerLegion.
As a need to. हर एक प्लेयर को यहाँ पे स्टेप अप करने की जरूरत है और वो कर रहे हैं. केडियन यहाँ पे स्पॉट जरूर हो जाएंगे. I don't think so ये ऑफ सेव कर पाएंगे because उनको पूरी तरीके से भगा के दौड़ा के मारा जाएगा अगर मौका मिले तो. लेकिन केडियन stays undefeated. किचन के अंदर बैठे थे एंड आराम से किल निकाला. लेकिन प्रेशर ऑन हेरोइक फैंस. GamerLegion जो किसी ने सोचा नहीं था वो करके दिखा रहे हैं हमें और करते हुए दिखाई दे रहे हैं. आखिरी राउंड पहले हाफ का ऑफ जरूर है लेकिन शैबी बाय बहुत खराब बाय सीटी साइड के लिए. It'll be a miracle if they end up winning this round. केरन को आगे जाने के लिए मौका देने. मॉली एंड देन स्मोक. मेन का कंट्रोल दिला देंगे. पैलेस की तरफ से एक स्लो क्रीप अप आ रहा है एंड इसको होल्ड करते हुए शुश. ईमा has a rifle but against the deagle कुछ भी हो सकता है. one tap. अगर थोड़ा और गैप रहता, वॉल अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाता उस कॉर्नर का, एक दूसरे को देख लेते. but Chaos is going to be the first point of contact. Initiate the headshot but only good for one. Carrion reposition कर चुके, इंतजार कर रहे for the Palace exit. but that smoke blocks. grenade आएगा थोड़ा और डैमेज करने के लिए. ईमा जरूर डैमेज खाएंगे बट इज रिकवरिंग वेपन्स, मेकिंग श्योर कि अगर कोई खिलाड़ी रोटेट करके आएंगे उनको ये फ्री वेपन्स ना मिले. 4v4 स्टिल. काफी स्मार्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया उन्होंने. अब चारों के चारों प्लेयर्स बी की तरफ ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे लेकिन 5-7 ये इतनी क्लोज रेंज पे डेडली वेपन साबित हो सकता है. सवाल ये क्या वो हेडशॉट कनेक्ट कर पाएंगे. पहला हेडशॉट यू कैन एक्चुअली टेक देम डाउन. मोलोटॉव की वजह से फोर्स आउट जरूर होंगे लेकिन पहला किल जरूर निकालेंगे. दूसरा निकालने की जरूरत नहीं निकाल पाएंगे. सुई तुरंत ट्रेड करेंगे. याबी स्टिल अलाइव. नीड्स टू गेट दैट किल एंड विल डू. लेकिन एक और ट्रेड निकालेंगे. 2 versus 2. हेरोइक कैन मेक दिस हैपन. केरियन उनको नहीं मालूम बी शॉट पे प्लेयर है लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेशन यहाँ पे. गन बैरल दिखाई दे जाएगा उनका. प्रॉब्लमैटिक, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक. 10-5 का स्कोर लाइन. GamerLegion doing the unthinkable. And GamerLegion क्या राउंड्स निकाल रहे हैं. गलतियां कर रहे हैं बट फिर भी उस राउंड के अंदर रिकवर करने का जो जज्बा है, टू गुड. I mean, केरन उनको पता था वो 2 एंगल को साथ में नहीं चेक करते जिस हिसाब से वो मूव कर रहे थे. सो ही डिसाइडेड कि साइड में जो प्लांट कर रहा है, प्लांटर को अगर किल करने का मौका मिला तो वो ही सही. विद द बैरल बीइंग सीन एंड ऑल्सो वहां पे दूसरे खिलाड़ी विंडो पे स्पॉट आउट हो गए. दैट वन स्प्रे डाउन इटसेल्फ बहुत ज्यादा डैमेज दोनों ने खाया. एक तो किल हो गए, दूसरे एक और से किल होते हुए नजर आए. एंड दैट इज गोइंग टू बी डबल डिजिट्स मामबाबी के लिए for GamerLegion, but they know it's still not done. अभी साइड स्विच होने वाला है. मतलब जो एडवांटेज उठाते हुए नजर आ रहे थे टी साइड का, अभी GamerLegion देना पड़ेगा हीरोइक को. and now they have to figure out a strategy to break हीरोइक. क्योंकि अभी तक तो पढ़ पा रहे थे कैसे खेल रहे, किस पोजीशंस पे रहने वाले हैं. and they were always bursting onto them and finding those kills. but क्या अब निकाल सकते हैं? ये जो खेल था केरियन का, ये इसके बाद जो इमोशंस दिखाई दिए थे वो देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था. आई वांट टू सी अ लॉट मोर ऑफ एग्रेसिव केरियन. लेकिन ये आखिरी शॉट वो खुद बिलीव नहीं कर पाए. कैमरा ढूंढ रहे थे वो, मिला जरूर. जो बोला ना वो बोल भी दिया. लेकिन GamerLegion आउट प्ले कर रहे, आउट क्लास कर रहे फिलहाल के लिए हेरोइक को. एंड ये चीज किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी. सैम बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था ये. GamerLegion, they don't start off hot, but जिस हिसाब से अभी खेल के दिखा रही है, आप देख सकते हो. इट्स द वेव गोइंग अराउंड.
my god. Light and the wave together. Unbelievable semi-finals यहाँ पे, and ये पहला semi-finals है. इसके बाद we still have another semi-final, जिसके लिए ऑडियंस ऑलरेडी जर्सी पहन के तैयार जरूर है. What we wait and watch. ये ट्रॉफी, ये चमचमाती ट्रॉफी किसके पास जाएगा? ये चमचमाती ट्रॉफी कल इस वक्त थोड़ा सा आइडिया जरूर आ गया होगा हमको कहां जाएगी ये ट्रॉफी, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर होने वाला हीरोइक के ऊपर, उनके फैंस के ऊपर, केडियन के ऊपर. आखिरी मौका उनका. Not having the best of days, but best of 3 है ये. 3 मौके. पहला राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला. अगर पिछला राउंड नहीं जीते मैं I can't even begin to imagine क्या होगा इनके साथ. लेकिन heroic, they need to make this work. बी साइड पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश होगी. बी पे आइजैक, आई डोंट नो अगर उन्होंने स्पॉट किया कि नहीं किया. एंगल भी काफी अच्छी तरीके से होल्ड करे, लेकिन एंटी फ्लैश खेलना पसंद करेंगे फिलहाल के लिए. आई एम क्या पहला किल निकाल पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल. लेकिन नहीं, बहुत ज्यादा शॉट्स मिस कर रहे. आई एम आइजैक शट डाउन करते हुए यहाँ पे. सुपर्ब राउंड. इनिशियल शॉट्स दोनों ने मिस किया. Both of them are moving left and right, but finally ईमा को 2 पिक्स मिला. उसके बाद आइजैक ने 1 पिक निकाला. ट्रेड जरूर होते हुए नजर आए, बट ईमा एंड आइजैक ब्रिलियंट क्रॉसफायर था. मतलब जिस हिसाब से वो एप्स के बाहर जंप करते हुए आ रहे थे, वहीं पे उन्होंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया खिलाड़ियों को. आपने देखा, एक बेंच की तरफ देख रहे थे, दूसरे शॉट की तरफ देख रहे थे, एंड दैट सेपरेशन गेव एडवांटेज फॉर गेमरलीजन. एडवांटेज मिल चुका है, वेपन अपग्रेड कर चुके हैं. दूसरी ओर यूटिल एंड वेपन अपग्रेड बेसिक नजर आ रहा है फ्रॉम हीरोइक एज वेल. एक और बार आइजैक, इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलते हुए. ये दिक्कत की बात है हीरोइक के लिए, बिकॉज फैंस गेमरलीजन बहुत ज्यादा है स्टेडियम के अंदर, और ये चीजें जब होती है, प्रेशर ऑलरेडी आपके ऊपर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बी पे एक्सप्लोर करने की कोशिश, बुरा जरूर लगेगा उनको. देखते अब क्या होता है. आइजैक पीछे हटते हुए, आई एम उनको पीछे से बैकअप दे रहे हैं, एंड हाथ में MP9 पूरी तरीके से फार्म करते हुए. चाटा, सीधा चाटा मारते हुए, बट इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. एक और प्लेयर बचे थे केडियन. एक और राउंड गेमरलीजन के लिए. 12-5. हीरोइक, उनके फैंस भी they don't know how to react right now. 7 राउंड का डिफरेंस. They went for a pistol upgrade in the previous round, तो इस बार कहीं ना कहीं they would have to save. एक हीरो AK जरूर नजर आ रहा है. Smoking the nest as of now, but वहां से छलांग मारते हुए खिलाड़ी ऑलरेडी अंडर को चेक करने के लिए बाहर निकल चुके हैं. But look at Tessis' push. The hero AK finds the first frag. Shui has been shut down. A की तरफ एक burst नजर आ रहा है. Can they do something here? Ticket boot की तरफ फंस चुके हैं खिलाड़ी. Push आ रहा है, 3-man push. He takes 2 of them. शुश को चांस ही नहीं मिला उस वेपन को रिकवर करने के लिए. प्लान जरूर कर देंगे, बट ही इज इमीडिएटली फॉलिंग प्रे टू अ टारगेट. आइजैक एक को जरूर मेन की तरफ निकाल लेंगे. पुश आएगा. इट इज गोइंग टू बी अ 2v2 सिचुएशन. आइजैक डील्स विद शुश अप क्लोज. ट्रिपल के पास आखिरी खिलाड़ी रहने वाले टेस्ट. ही हैज दैट हीरो AK. कैन ही मेक दिस क्लच हैपन? एक खिलाड़ी को देख चुके हैं. द स्मोक इज डिनाइंग एनी काइंड ऑफ विजन. डिफ्यूज करने के लिए ऑलरेडी बैठ चुका है. एक और पनिशेस टेस्टिस. दैट हीरो AK डज नॉट वर्क, एंड GamerLegion with the 13th on board. रियलिटी सेटिंग करते हुए यहाँ पे हीरोइक, चमत्कार की जरूरत उनको, सबसे बड़े चमत्कार की जरूरत उनको यहाँ पे.
लेकिन एक और किस तरीके से वो किल निकाला केओस को देखिए, चंद राउंड दूर मेजर फाइनल की। उनका ये जो सफर रहा है फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन हीरोइक वो नहीं हार मानने वाले। अभी भी 3 और राउंड है उनके पास, 3 और मौके टू द मेटल अपना स्लॉट बचाने के लिए। देखना ये बंदा है क्या स्टेप अप कर पाएंगे। केडी निकलौते प्लेयर जो प्रॉपर्ली स्टेप अप कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा होगा उनके ऊपर। GamerLegion की तरफ फर्स्ट हाफ में आइजैक वाज द ओनली वन हु इज लैगिंग बिहाइंड अ लिटिल बिट। Heroic की तरफ से it has always been Kaden who has been functioning really well as a leader, making sure he keeps his team, showing that he is doing, उनको भी step up करना पड़ेगा। But अभी के लिए this has been the first time in the second half जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ Kaden ही चमत्कार कर रहे हैं, बाकी सारे थोड़ा मुश्किल में नजर आ रहा है। It's unbelievable to see Staven with just 7 as of now। 7 किल पे अभी तक है Staven। टेसिस पनिशेस ईमा, बहुत क्रूशियल पिक था वो। स्टैवन अंडर से आने का इरादा बना रहे थे, कनेक्टर से पोजीशन दे चुके सुई। स्मोक क्लियर ऑफ हो जाएगा, दोबारा रीस्मोक करेंगे उसको। बहुत क्रूशियल राउंड रहने वाले। AWP के साथ आए थे एक और, ही सीज द प्लेयर बट अनएबल टू कनेक्ट द शॉट। 4v5 सिचुएशन रहने वाला है। GamerLegion आल्सो कैन नॉट लूज द मोमेंटम। क्रॉसओवर पे पकड़ा गया कियोस। 3v5 एक-एक करके प्लेयर्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट पिक। Isaac still trying to fight, and देखिए एक पिक की वजह से they're redirecting themselves. Heroic immediately changing gears, heading right towards A, and A की तरफ 2 खिलाड़ी रहने वाले हैं। एक और was already holding it out. Oh, timing. Connected check करके वो सीधा reposition किए Palace। बड़े एक और and Sui picks 1 each। Kaden Sui के ऊपर ट्रेड निकाल लेंगे। Back to a 2v2 situation. Finally एक और पिक्स अप याबी, आखिरी खिलाड़ी Kaden, barely surviving with 6। ग्रेनेड आया, somehow managed to run away। CT के लिए जरूर प्लांट किया उन्होंने, but it is going to be a very tough one। 2 पीक्स आएगा। oh wait, डबल पीक नहीं आया, but फिर भी आइजैक अकेले क्विक पीक and takes down the captain। GamerLegion put 14th on board। Karian ओपनिंग पिक दिलाए थे, 2 पिक्स थे उनके पास। 5v3 से 1v2, एंड वो 5v3 हीरोइक का था एडवांटेज। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा ये मायने रखता है कियोस के लिए, सारे के सारे प्लेयर्स के लिए। मौके ज्यादा नहीं मिलते लेकिन एक और वो शॉट ने मिस करने वाला। Kaden will get taken down एक और बार। मैन डिसएडवांटेज। GamerLegion इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखने वाले थोड़ी देर में। Can they be the finalists that they want to be? लेकिन ये देखिए यहाँ भी एक किल निकालेंगे, दूसरा भी निकालेंगे, तीसरा क्या निकाल पाएंगे? एक्सपोज हो चुके हैं वहां पे। जंगल कंट्रोल जरूर लिया, लेकिन तीसरा किल एक और बार। अपनी टीम की उम्मीदें यहाँ पे जिंदा रखते हुए एस की कगार पर आइजैक नहीं जाएंगे, डिसाइड कर लिया नहीं जाएंगे। बिग राउंड फ्रॉम याबी। अगर यहां से कमबैक होता है, अगर कोई भी पॉसिबिलिटी है तो उनको फ्लॉलेस काउंटर स्ट्राइक खेलना होगा। एक गलती अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे, एक गलती भी नहीं कर सकते। नॉट इवन विद यूटिल अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सिक्स्थ ऑन बोर्ड फॉर हीरोइक। देर आए दुरुस्त आए पता नहीं। One round at a time, one round at a time। इसके ऊपर फोकस करना होगा उनको, एक राउंड करके किल्स निकालने होंगे। लेकिन याबी ने इंडिविजुअल ब्रिलियंस से ये राउंड निकाला था, क्या वापस ये राउंड निकाल पाएंगे? बहुत ज्यादा राउंड्स की जरूरत। Now to win 10 rounds in a row, 10 rounds in a row।
उसके लिए फ्लॉलेस काउंटर स्ट्राइक खेला होगा। मिराज पे 10 राउंड निकालना टी साइड पे इतना आसान नहीं होने वाला है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। केरियन I'm pretty sure अपने टीममेट्स को बता रहे होंगे लेट्स कीप एट इट, मौका अभी भी है, उनके पास अभी पैसा रहने वाला है, उसका एडवांटेज उठाएंगे। देखिए कितने यूटिल्स है, बट ऑन दी अदर एंड डीगल, MP9 और एक M4 विद जस्ट वन स्मोक, वन फ्लैश, ग्रेनेड जो ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है। ईमा उसके ऊपर, याबी के ऊपर कैंपलाइज करेंगे। ही पनिशेस याबी फॉर द डिस्ट्रैक्शन ही कॉज्ड इन द प्रीवियस राउंड, बट अभी के लिए देखिए क्या पोजीशन पे सुई है। ही पिक्स अप 2 गोइंग फॉर द थर्ड, इट डज वर्क आउट। आइजैक का साथ मिलता हुआ, दे लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर 15th। सारे वेपन, सब कुछ था हीरोइक के पास, एंड ऑल ऑफ अ सडन इट्स ओनली अप टू केडियन। 1v3 पुल ऑफ करना पड़ेगा। C4 जरूर उनके पास रहने वाला है, बट इट डजंट हैव एनी प्रॉपर इन्फो कि कहां पे रिपोजिशन हो चुके हैं खिलाड़ी। बट लुक एट द बैक स्टैब आल्सो कमिंग इन, ये AWP भी नहीं से होगा, एंड GamerLegion एट 15। उनका दुख महसूस कर सकते हैं आप, स्क्रीन के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से सुई ने जितना स्मार्ट तरीके से खेला, वहां पे पता था मोलोटोव आने वाली है। लैडर के ऊपर चढ़ गए थे, सीढ़ी के ऊपर चढ़ गए थे, जैसे ही फटा उनके नीचे मोलोटोव ऊपर चले गए। पेशेंस के साथ खेले। केडियन अभी भी जी जान लगाने के लिए तैयार। सपोर्ट की जरूरत उनको अपनी टीम से, लेकिन क्या वो मिल पाएगा? लास्ट टाइम आउट जिस्ट जितना भी यहाँ पे अपनी टीम को हौसला दे सकते हैं with his wise words, दिए जरूर होंगे, but they have an impossible task in front of them. Ema with 22, Karian with 17, top fraggers of their teams. Not a lot of util, but weapon buy करने के लिए मौका जरूर मिल चुका है। एक और अगेन पुशिंग नेस्ट एंड टेकिंग अंडर कंट्रोल AWP के साथ मिड को जरूर देख रहे। रीपोजिशनिंग एट कनेक्टर, दूसरी ओर 2 खिलाड़ी बी की तरफ रहने वाला है, आइजैक एज वेल एज ईमा। एप्स को स्मोक ऑफ कर देंगे, जिसकी वजह से दे विल हैव कंट्रोल, नोबडी एबल टू पुश अप। हेरोइक हर्क्यूलिन एफर्ट चाहिए होगा, चमत्कार चाहिए होगा, चमत्कार से बढ़कर चाहिए होगा यहाँ पे, अगर ये गेम निकालना चाहते हैं यहाँ पे। तो खून पसीने की मेहनत लगेगी फिलहाल के लिए। कियोस इकलौते प्लेयर जो ए साइड पे बैठे, ग्रेनेड जाएगा, ज्यादा डैमेज नहीं करने वाला, लेकिन टेसिस एग्रेशन दिखा रहे बहुत ज्यादा यहाँ पे, शायद वो किल निकाल पाए। अगर बूस्ट सुन ले तो फिर हो सकता है, इंफॉर्मेशन नहीं उतनी ज्यादा उनके पास, लेकिन आइजैक रोटेशन काटने के लिए तैयार। स्टैन को दे विल टेक डाउन। इंशुश एक और प्लेयर भी यहाँ पे टेक डाउन हो जाएंगे। इकलौते प्लेयर जो ए साइड पे खड़े हैं रोटेशन काटने के लिए, उनका काम तभी होगा जब केडी यहाँ पे जिंदा रह पाएंगे। लेकिन टेस्ट इज ऑल अलोन इन 1 वर्सेस 4 एंड GamerLegion डू इट। हेरोइक मेजर के बाहर, GamerLegion मेजर के फाइनल्स में, अनप्रेसिडेंटेड सीन्स। किसी ने नहीं सोचा होगा, कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। The sacrifices, the hard work, all the blood, sweat and tears. केडियन देखिए खुद को तो कंट्रोल कर ही रहे, लेकिन अपनी टीममेट को भी दिलासा देते हो। This major indeed has been full of upsets. जिस टीम्स को लोगों ने सोचा नहीं था कि रहेंगे, आगे आएंगे तो भी चले जाएंगे, all those teams have been making noise. Stats, matches, सब कुछ हीरोइक को फेवर कर रहे थे, लेकिन IM की दाद देनी पड़ेगी। जिस तरीके से खेला उन्होंने, शानदार काउंटर स्ट्राइक का प्रदर्शन, GamerLegion आउटक्लास करते हुए हीरोइक को। और हमारे शब्द, कितने भी शब्द हम इस्तेमाल कर ले, लेकिन जो सीन, जो इमोशंस यहाँ पे हम बयां नहीं कर सकते, जो फीलिंग है
वो बयान नहीं कर सकते शब्दों में। ये मैं दर्शकों के लिए छोड़ूंगा देखने के लिए। Unbelievable scenes. He was enjoying support. GamerLegion enjoying the support. They are your first grand finalist of Blast Paris Major, the last major for CSGO. Stadium, you guys came into this major. चलिए, looking host की तरफ. incredible. Your form at other events has been fantastic as well. You guys have fought every single time, not just against your opponents, but against the crowd so many times as well. But here, losing to GamerLegion, especially after how you managed to win that first map, what's that feeling going through you right now? What's the emotions like, mate? Yeah, I think they played super well. You know, there's full kudos to them. There's no denying that they've had an unbelievable run. Maybe some can critique their way to getting here, had some kind of easy opponents, but today they took down one of the big dogs. Yeah. And nothing but respect for that. And you always do have massive respect for your opponents, mate. And everyone has massive respect for you, whether what's going on in the crowd or not. But I will say this for you. What was that speech like? We know you've got these amazing speeches. What do you say to the guys? Because I know you always believe you can pull it back. And that last map after the first half, you must have said something special. Yeah, I was hoping that we could make the comeback. You know, I was telling the boys that it's still possible. It was the same scoreline as the first half of Ancient. But yeah, too many mistakes, just not on point, and yeah, not much to say. Well, let me give you this then, mate. You have had like a movie-style journey in how your career has gone. You've become one of the best teams in the world. You have constantly been fighting for trophies, and you have performed incredibly well. So how would you like to end it out at the CSGO Major here? Floor is yours. Yeah, well, first and foremost, thank you everyone here in Paris for showing up. You know, for me, like I said in the speech, it started more than 10 years ago. Bringing my own computer to Sweden, driving with the bus, with the train, many stops to go to Jönköping. I can tell you the crowd and the atmosphere, it was a different one. Devil Walk throwing off his pants after winning the major. Time has changed. But what can I say? Counter-Strike has literally changed my life. I've not become the person I become without it, and I'm so happy to play with my boys. I know that they're all feeling really shit right now, and yeah. And I think, you know, I could go on for ages, but I want to say to you guys, thank you for showing up. Thank you for bringing the passion. I don't want to take too much time because right now someone else deserves the hype. But thank you so much, Paris, for everything. Thank you. Thank you very much, Paris. From one side to the other. Emma! God damn, you put up one hell of a performance, man. How does this feel? A tough, emotional game against one of the toughest opponents of your career. I don't know, it feels amazing to win. I have no words. I'm not the guy with the speeches, but I'm grateful that I'm playing here. Unless, I don't know, I couldn't imagine at one point that I would qualify to the fucking final. And that's it, right? You are now a major grand finalist. And people spoke about the journey GamerLegion had taken, the opponents you faced. But here against Heroic, you showed you can take down one of the best teams. What does that mean to you guys? It means the world to us. It means the world to us to qualify the final. Like I said, it's a dream come true. And then now we have to face Vitality in the final, or maybe Apeks, or maybe Apeks, yes. But if it's Vitality, it's gonna be a very nice experience because we're gonna play against the whole world country, basically. Oh yes, definitely. Now I want to ask you, 15-12, you guys are up. It looked like you're going to take it comfortably on Inferno. Start to get dicey. The clutch comes through, everything's nice. You get the map. But then you go into Mirage. What was the conversation like in the team? Because you guys came in with fire.
We just had the same talk that we do on every map, after every game we just did our own stuff, and then it worked again somehow. Somehow, well, it worked, and it's been fantastic so far. Imma, welcome to the grand final. Guys, give it up for Imma and GamerLegion! Through to the grand finals of the final ever CSGO major at the expense of Heroic. Man, who'd have thought? Who'd have thought GamerLegion had it in them? Map 2, it was close. And map 3, to me, convincing. That was an excellent T-side. The calling from Shuhei was phenomenal. Imma came in with the entries, and everybody contributed for GamerLegion. I don't want to see this team go anywhere. I want to see what they can bring going into the next day, because it's clear that the stage is not affecting them. If anything, it's helping them perform to a higher standard than they have ever done. This was the most perfect way you could ever imagine GamerLegion to win this game. They left no room for doubt whatsoever. They won Inferno in quite a convincing fashion. Yes, I know the scoreline was 16-13, but we spoke about it. Heroic won both pistols, converted both times. In the buy rounds, in the gun rounds, GamerLegion were by far the better team. On Mirage, there was no doubt whatsoever. Starn, we praised him for having a great tournament so far. He had a career stinker on the most defining map perhaps in his entire career. He couldn't get it done. You said it yourself, Imma could. 1.87 rating on Mirage against Heroic in a semi-final at a major in front of this crowd. That man right there, that's one for the future. Well, let's relive the hype one more time in this winning Mic'd Up moment. Drops. Yeah. One BM. BM. More. Come B. More. More coming B. Build bomb, I think. I'm bench. Yes, coming B. One, two. Last play. Holy cost. I'm in jungle. Guys, play this. Oh my god. Some incredibly loud screams there, and rightly deserved. You could see Kios, he knew it was going to happen. He knew that 1v4 was not going to be pulled off by Heroic. Literally throwing his arms up in celebration, and my god, they celebrate in style just like they did on that final map. Hey, don't celebrate too hard yet. There's still another game to go. Yeah. This has been a miracle run already for GamerLegion, but if they can do what they did to Heroic to either of the possible opponents in the grand finals, this run is still possible. They can actually capture a major trophy here. Shuhei's calling has been, in my eyes, the best of any IGL at the entire tournament. Cadian, to me, was the best IGL going into these playoffs. Shuhei one-upped him. That was the point. That was the point I wanted to make. They beat Monte in such a clear fashion yesterday that it had to instill some sort of fear inside Heroic. We kind of laughed it off, saying, yeah, that's Monte. Heroic is a different caliber of a team. And yes, I'd argue, you know, you play that game 10 times. I'd still argue Heroic are supposed to win 10 times. Yeah. But this was the 11th game for GamerLegion. They came out swinging. They played the picture-perfect Counter-Strike that they've probably only ever done in this very moment. This is the best GamerLegion have ever showcased themselves to be. And they beat Heroic in such a convincing style that even if you're Apeks, or Vitality for that matter, going into that final tomorrow, I cannot stand here saying GamerLegion doesn't have a chance. There's no way that I can say GamerLegion couldn't win this major with the performance and with the level they're showcasing on the server right now. Yeah, I think there's one guy, though, that we obviously have to look at. Oh, it's got to be Imma. We've got to look at some Imma highlights, because he was looking absolutely stellar throughout, I mean, the duration of this series, but particularly in that final map, that was where he was really standing out. I was saying, Freya, that in this series, Cadian, he's not the main character. Imma is him. This guy was the real deal. The entries he was finding towards middle, the way he was popping out of a ramp, the explosive play from Imma was a strategic luxury to the big brain of Shuhei. If you have a player like this, it makes life so miserable for your opponents. Heroic, they looked for responses, they looked for some of those answers, some of those re-aggresses, but Imma was always there to catch them. Every time they even wanted to set up some kind of re-aggressive play on the CT side, Imma was right there, crosshair in their faces. It's so scary when you're going up against Imma looking like this. And what is incredible is we never expected this form from Imma coming into this major. We're talking about a team that was 0-2 down at one point. Their major was practically over. The fact that they've managed to run it back, make it to grand finals, just
an absolutely incredible feat. GamerLegion have turned it around. The man on the screen right here has turned it around. You want to hear a scary stat from this matchup on Mirage? We talked about Stown, we talked about Yabi coming into this game. We highlighted them being potential superstars, top 20 players of the year without a doubt so far. Imma, in this game, he killed Yabi and Stown together 15 times. They only killed him 7 combined. Imma absolutely destroyed both Stown and Yabi. He single-handedly took them out of the game, and that was the difference. Firepower-wise, you know, in terms of individual skill level right here, Imma was by far the best player on the server. Not even both Stown and Yabi combined could put up numbers against this guy. That was outstanding, and I think I've seen a couple of people tweet it already. It's going to be very tough for GamerLegion to keep hands on this guy, because the way he's been performing so far on the stage, there must be so many teams right now eyeing an opportunity to get Imma inside their team, because he's fantastic. For the side of the Danes, though, man, we talked about the heartbreak that they ensued in Rio. This reaches a different level. This was a matchup that everybody was saying it was a shoo-in for them for the grand final. As you know, Anders and Moses rightly said, their name was painted all over this major trophy, and they stumble in the semifinals this time. It's such a heartbreaking loss for Cadian, but it also says a lot about how we have perceived him. The fact that it's been these grand finals, these semifinals, that's when those demons start to fester for Cadian's team, for Heroic. They start to choke on these big moments, and we do see it once again. We did paint the picture so well, Pimp, that this is a 1 in 11 chance type deal for GamerLegion to win, and that seemingly is when Heroic play their worst Counter-Strike. This map 3, that's not the Heroic that I'm expecting. The stat that you mentioned about Yabi, about Stown, it seems to be a systemic problem. Everybody seems to crumble in these big pressure moments, and it also says now Cadian's story is written. He is never going to be among that upper echelon. He's never going to enter the pantheon of great in-game leaders. The case is closed for me. He's not there with Zeus. He's not there with Glaive. He's not there with Kerrigan. The thing is, it hurts in the moment for Heroic right now. They're missing out on a great opportunity, but it also hurts when you look at their legacy. One of the few teams in the world that has inspired a new way of playing Counter-Strike is Heroic. We attach that to Astralis, we attach it to Heroic. Well, Heroic have nothing to show for it. They don't have a major trophy. They only have one tier 1 trophy. They've inspired an entire nation, an entire world in how you want to play Counter-Strike, how you want to be proactive, but they couldn't get it done themselves, so someone else will have to pick that up and do it for them. Yeah, of course, heartbreak for the side of Heroic, but ladies and gentlemen, if you thought it was getting loud in here, it is time to raise the goddamn roof. That is because the hometown heroes of Vitality gracing the stage for their first ever major semi-final. It's coming up versus Apeks after this.
The battle to be the Apeks Predator and make it all the way to the grand finals in Paris. Vitality versus Apeks, another underdog clawing themselves all the way to the semi-finals, but this time they'll have to battle against the crowd. They've been arriving by land, they've literally been arriving by boat, and they are hyped to be getting this arena show match underway. Matthew, you're joining us here for Vitality versus Apeks, a coveted semi-final, and the first time we find Vitality in this position in major history. That's a feat in itself. I know, and I think the excitement you have right now is shared by the majority. This is your major, and you have to deal with that. It is such a unique predicament to be in for Vitality to walk on that semi-final stage, have 10,000s of people just waiting for them to perform. Matthew, do you know another reason why Vitality might have the upper hand today? Hit me. Today is World B-Day. I kid you not. It's the B-Day. It's time. Buzz, buzz. Buzz, the buzz. bees to shine. Really exciting to play now, and yeah, I mean, we experienced that yesterday yeah, we feel good now, both of us feel really good, Dan and me. Yeah. Throughout the whole major, we've seen some of these top teams, they drop the ball against some of these underdogs. There's a lot of upsets the whole way through the major. We're looking at Apeks coming into this as a team that has probably been one of the best underdog teams so far, and that's testament to them getting to this point.
What is your mentality as a team in terms of approaching the underdogs? How do you prepare the mentality for this? Actually, we prepare like it's a normal game. We're not thinking about the underdogs. If they're in semi-final today, it means they're really good, and we don't gonna underestimate them. We're just gonna play our game, thinking of what we can do every round, and yeah, it's gonna be a normal game for us. Like we face FaZe or Navy or G2, it's gonna be the same. Now, looking at Apeks as a team that you've reviewed before this matchup, what do you think their biggest strength as a team is right now when you look at how they play Counter-Strike? I think the biggest strength is to play. Actually, they play good as a team, but also individually they're awesome. I think both of this combined that make Apeks right now, and I think individually and it's as a team. That's why they're here. They're not playing like underdogs, and just they're playing really good. Everyone are playing really good. Now, there's been a lot of talk. This is the last CSGO major, so a lot of talk of legacy and the last chance to win a major in Counter-Strike Global Offensive. A lot of teams and a lot of players of this game, a lot of the great players talk about the fact that they want to win the major, have that legacy. Does legacy play into your mind? Do you think about leaving a mark on this game as one of the game's greatest players? Actually, I'm not thinking about this is the last major of CSGO. I'm just thinking it's Paris. I want to enjoy. I want to just enjoy in front of the fan, and I'm not really wake up every morning and say in my mind, this is the last major, and I want to have the last trophy of this. No, I'm just playing my game and enjoy. You can hear every fan screaming, and I'm just want to enjoy in front of that. I'm not thinking about that now. He's not thinking about playing in front of his home crowd, but I don't know whether he's telling the full truth there, Matthew, because surely when you're walking out into this arena with the roars around you, you've got to be soaking up that atmosphere to bring the hype to the server. Listen, he says he just wants to enjoy it. And to a degree, I'll just put it out there. Here's my narrative. It has been one of the point of attack. If you wanted to tackle ZywOo to say that he doesn't have this extra hunger that a man like Simple has demonstrated, a man like Nico has demonstrated, that sometimes you need to get to that extra level. I would argue that today, shaping out the bracket is looking like, this is a good mindset for ZywOo to have. All you have to do if you're ZywOo is not let the context and the pressure get to you and enjoy yourself playing Counter-Strike. You're gonna be arguably back-to-back favorite in a semi-final and a would-be grand final where all you have to do is handle your nerves. And I think at that game, his mindset pays actually. I think when we also open up the legacy discussion, we have to mention that ZywOo hasn't obviously captured a major trophy yet. He does not have a major MVP, and that is something that is a blight on his resume, because despite the fact that he's captured 2 #1s in the world consecutively, 2 #2s as well, it says that a lot that he just hasn't done it on the biggest of stages. It's been other tournaments where he's usually punching in big, and so at this major, he has a chance to change the conversation and solidify his position in the GOAT conversation. He will be guaranteed top 2 by many if he wins here. If he doesn't, then the conversation's open. Where is he in that top 5? 2 to 5? Is he even on that 6th position because he doesn't even have a major trophy? He has to get it done here. So even though he doesn't care about the context, CSGO's history is ending, and he needs to make his mark on it here in Paris. And we care about that conversation. Yeah. Hell, everybody knows that the Simple v ZywOo is such a tremendously interesting and passionate debate. It polarizes people. I'm on Team Simple, I'm on Team ZywOo, and I disagree with you. And you know what? Screw you with your ID, you're an idiot. Hey, think about what ZywOo can accomplish in 2023 and the position that he is in right now. He could technically tie Simple. Yes. Not a major being won, and he could set himself up for a 3rd year as best player in the world. He would actually be on track to maintain that conversation, to maintain the actual comparison with the GOAT that is Simple currently. But the notion of GOAT is something that time can actually change. That is the whole concept behind it. You mentioned the word legacy, a name that we have to throw into the ring from the side of Vitality. Obviously has to be dupreeh, but also Zonic alongside him, right? We're talking about dupreeh as the only player that could be lifting 5 major trophies. Zonic in that conversation as well, and they have some of the most storied careers in the whole of CSGO. Yes, for dupreeh to get his 5th year, he would achieve a feat that nobody else has before him. However, for dupreeh in that conversation, it's tough to actually put him, if I'm being honest and pumping the brakes just a little bit, to say he's the GOAT rifler, because he was never the best player on any of his teams. But
we have seen an inspired dupreeh lately. What he was able to accomplish at IEM Rio shows that he's peaking at the right time. And that's another reason why people are getting excited about Vitality. It's not just the ZywOo show anymore. dupreeh is contributing. Spinx is doing his job. Majis, to me, has been the right-hand man for the longest of times. And Apeks has proven himself as a caller, too. There are multiple major winners besides ZywOo, dupreeh being one of them. But everybody else has proven dependable. And I love the tenacity of dupreeh. Like, just think about his story for half a second. He was part of the winningest team, the winningest core in the history of Counter-Strike. And then obviously he hit a brick wall. He hit a brick wall where he struggled both as a team and individually for the longest time, could not find his groove. He could have retired. Why would we even say anything about it? He could have just retired, but he's stuck, and now he's in this incredible position as we have the maps coming over and the first decisions being made in this semifinal. Apeks picking into Mirage. Where are you expecting Vitality to go to? Yes, the Vertigo pick. Yes. Get it. Okay. We've worked towards it. They worked on this T side just to be able to have that pick. Yes, the Vertigo pick from Vitality comes out, and let's see what the decider is. It is, in fact, Inferno. I think looking at this veto from the onset, I mean, I think this is incredibly Vitality favored. When I was in the elevator with Apeks just yesterday, he said he thinks they have the best T-side Vertigo in the world right now, and I would be hard-pressed to disagree with him. Speaking of T-sides, we've got to throw it back over to that quarterfinal versus Into the Breach, and we have to give it up for Majis because, man, he was just an absolute magician, particularly in that offensive half, and it has been great to see a resurgence from him matching because there was a time, just like dupreeh as well, that he was dipping down in his form. He's been dipping down, and I think compared to dupreeh, who for a while you could argue was or could use the fact that he was being a role player as a cover behind his performance, in the individual performance rather. He could have said, hey, you know what, I'm sacrificing myself for the team and an entry fragger. Magisk didn't have that luxury. Magisk were put in positions where he could shine, and he didn't for a while, and this was tough to witness. Now, I have to say, you mentioned the T side, it's true. He's been so incisive in mid-round situations, mid to late round situations where he get activated, and he has these moments of just pure lightning, where the crosser placement, he's no Robs, don't get me wrong, but he gets the job done in these moments, and he's been a pillar, a beacon of solidity for Vitality in this T side. Yeah, I think that when we look at just this Danish duo, including Magisk on top of it, he has been, to me, the most consistent person on Vitality, not named ZywOo. For the past year for them, there really was a lot of doubt in terms of who's going to be stepping up for them. It was supposed to be Spinx, but Magisk has put himself in the conversation consistently as just a perennial anchor of the year. He's always locking down those bomb sites, showing that even if Vitality, part of that mid-control, part of any of those fights on other sides of the map that are more important fall apart, he can still deliver a multi-frag in a key situation, and I'm sure he's going to be having to do a lot of that because Apeks, they've got good map control procedures. They're going to lose some space from time to time. They're going to rely on Magisk. Yeah, just to add a little bit of salt on that conversation, by the numbers, the CT side of Magisk have been quite complicated at this event. We're talking about a 0.8 rating on the CT side, and he has very high responsibility positions. We can jump into the Mirage idea, the Mirage concept. He's going to be playing the A side, and I'm sure that if I'm part of the Apeks coaching staff, analyst, IGL or whatever, this is a position that I am trying to abuse. I'm going to try to put on chaos on the map so that I can play my 1v1 or my 2v1 onto Magisk. And by the numbers again, it's been a little bit complicated here in Paris on the CT side. So good for him to be able to maintain a clear head on the T side. To round off the conversation about the roster of Vitality, obviously you threw Spinx's name into the ring. He was the person that we were looking for when he joined the squad, obviously poached from that Ent side to be the secondary star alongside ZywOo. It took a long time for that to happen. It's not consistent quite yet, but we did see in that game versus Into the Breach, Spinx really popping off on Vertigo to be sealing that for them. I think that it was a bit of a honeymoon at first when they picked up Spinx. Yeah. ESL Pro League, great debut, obviously capturing that trophy there. It felt like Vitality found the key to success. They finally found that last missing piece to their jigsaw puzzle, and it was all coming together to be this pretty picture. But then they started having just inconsistent results. And you didn't like it. I know you had a bone to pick with Spinx's for a while. He looked fraudulent. He was looking fraudulent for a while. He was kind of messing up when he was forced into bomb sites. He was having these moments where he would just push in man advantage situation, give up the man advantage. I started wondering, does Spinx understand what his role is on this team? Does he understand how to mitigate the losing conditions that he is supposed to not ever provide opponents? That was, to me, where I started to have my doubts with Spinx. But Legend Stage,
he was one of the top performers. Of course, he is going to be peaking here because it just feels like everybody from Vitality is coming together now. I don't see really a serious weak link anymore for this Vitality team. He's changed the conversation around the defense of Vitality. Quite honestly, that's just the situation we're in. With a Spinks that is performing the way he is now, our dialogue just has modified itself. For a while, you mentioned like the issues you had with Spinks. It seemed like you either find him in movement and semi-aggressive, or you'd see him be the victim of an execute. He didn't know how to handle executes properly and had like that defensive position that will allow you 1 kill, staying alive, playing clever. He would either be 3 kills because I am ahead of the execute, or I am basically a puppet. Please execute on me, take my life, Jesus. That's what he was for a while. And I feel like he's been, I don't know if he's been putting the work individually or if the team has come together to help him, but he's been finding this halfway position where he can have an impact. He can leave his mark on the round before the execute comes in. That's why the defense is much better. Let's flip this track on over to talk a little bit about Apeks, the team on the other side of the server who somehow, someway took down Liquid 2-0 yesterday. It was Liquid that certainly were falling flat, but it was an Apeks that were able to capitalize upon that, Maui, and some really great things coming out of the in-game leader to firepower them all the way to that victory. I think we can look at the other semifinal and draw a little bit of inspiration. The way that Shuhei has done such a great job of turning around the fortunes of GamerLegion and putting them into the grand finals. Kixan has been the best signing of the years. Those are Pimp's words, and I am echoing that sentiment. Kixan has been so exceptional for this team because not only has the calling improved drastically for Apeks, but he himself as an individual has been popping off. Have a 1.34 rating as basically a rookie. Well, he is a rookie on this kind of stage, and to be decimating Liquid, all these stars falling before him, the North Macedonian rifler, blooded by the tier 2 space on that Blue Jays roster, has shown that what he has been doing, what he has been grinding towards, it pays off even in the biggest moments. And I mean, let's talk about the impact he had on that overpass, which arguably propelled them to this incredible position they're in. The CT side, early on in the game. That's one of the metrics that I like to keep an eye on. Who was the player in said team set them on track? You can talk about Noak's clutch, and we will for sure. You can talk about how they were able to go through the finish line. But the reason why they were in that position in the first place is because of Kixan's multiple multi-kills on the CT side in the first 6 to 7 rounds. Adding both game sense, reading the position, and having that decisive impact whenever he needed to, in the bathroom position, hiding in the smoke on the B side when the execute comes in. I guarantee you most of these kills are going to happen below 10th round, below 11th round. That's the moment I'm talking about. Crossing the smoke as the execute comes in. He's got the read and he's got the multi-kill. He put his teammate on track when they could have had the fear of winning, which we usually refer to when you're about to do something great in your life or in your career. He was the one saying, listen, you know what, F this, this is how we're gonna do this, guys. Follow me, follow my lead, I'll show you the way. And I was in awe of his performance on Overpass. He was so headstrong in both maps of this series. It was absolutely incredible to see, particularly because back in the Legend stage, Maui, it was different players from the side of Apeks that were actually popping off, that were actually propelling them forward to the playoffs. Jacob and JL, those are the two guys that were really the big stars for them in my eyes. The aggressive duo between them, taking so much map control so consistently. To me, it looked like Kixan was using them and setting them up for the right kinds of situations, but that's why it's even more impressive, because those two guys didn't do that much work against Liquid. It's been a team effort from Apeks. That's why when Zywoo was questioned by Dinko, really, what do you like about them? He kind of was about to say the individuals, almost like a predisposed response, like he was just ready, but like then he was like, no, it's actually the team. Like he had a moment to second guess his thought right there, and he's like, no, they're playing great team CS because, like you said, Jacob, JL, great in the beginning, but now it's been more of the team effort. You mentioned the Naught clutch, which I think is the final nail in the coffin moment from that Liquid series. Let's run it one more time, because this was just absolutely insane. The fact that he was allowed to get away with this, and the way it just, I don't know, tilted Liquid off the face of it. And the context tells the glory of this moment. You can see at this point in time, Liquid had done such a tremendous job shutting Apeks out of the game. They basically figured out completely. It's a 1v3, and here the flick is great. And from that moment on, there's nothing in anymore. It's just cross replacement, and it's pure instinct kicking in. Again, I want to hammer this point home. At this point in the game,
Apeks had been figured out. You would look at the moment, 13-11, and I find myself thinking, it's over. It's over. Liquid, they have their number. There was no steam anymore in Apex's game. They weren't able to surprise Liquid in any way. What did they do after this clutch? Immediate B hit. And that's not a coincidence. That's because this clutch gave them that extra fuel in the engine to think, hell yeah, we're going to do this. Insta B hit right behind, and they win the 3v3. This clutch was a semi-final spot type of clutch. These are one of the moments you remember in your whole life. Well, let's move on to talk about one of the more veteran players on the side of Apex's lineup. It's Stiko with a few words courtesy of Dinko. Well, Stiko, we've seen in your career that you've had a lot of struggles at times, times without an organization, times in between, even with Apeks, where the team wasn't coming together, you didn't have a roster to go to events with. Now you're walking out on a stage for a major semi-final of the last ever CSGO major. Is the impact of that moment sunk in yet, or is it just kind of the momentum still going? I think the momentum is kind of still going. We're enjoying every moment here. That's the only way how we can surprise even more, because as soon as we start overthinking this and that we're in the semi-finals of the last major, we're going to crumble. So we're just trying to, ride the wave, as we say, and enjoying every moment and ending these CSGO careers of ours with a bang. Now, it's a massive moment for you in your life. Is there anyone here from your family or friends enjoying that moment with you? Yeah, obviously we got the whole Apeks family here, and a lot of our friends came, as well as parents. My girlfriend is here, so people stopped by, and I'm happy to share this emotion with them, and I'm glad that whole Apeks is behind our backs, and they're cheering in Apeks jerseys behind us. Now, there's no denying that you're going out into a hostile environment today. You're going up against the home team. Vitality have got some crazy fans out there making a lot of noise already. Is there a discussion before this game from your team of how you're going to approach the mentality to deal with some of that pressure? The main takeaway is to just enjoy it. We really want them to cheer no matter what is happening. We want to experience the roars in the arena, and we want to have a full house here. So whatever happens, happens, and we're just here to play some good Counter-Strike, and as a heavy underdog, they have everything to lose. This is their major to win, but we're here to put up a show and hopefully surprise a lot of people. Now, throughout this competition, we have seen you guys pull off incredible comebacks and overstep and overperform in some of these individual performances compared to the rest of some of your players' careers. What is your biggest strength as a team, in your opinion, coming into this playoffs? So the biggest strength, I would say, is our flexibility. Like, we're able to play Counter-Strike well in terms of any round, in terms of any roles. We are able to fill in for each other and help each other out. So this is something we've been focusing on prior to this major, because we've been struggling with that, and now it becomes really our strength, I would say. So this is something that we will rely on, maybe our winning condition as well. And as I said, like, never tilt, and always just enjoy the moment and cherish it. I love that we get to hear a few words from Stiko, but talk about, a tumultuous career. He's had ups and downs, lefts and rights, but he is not unfamiliar with this major stage. He definitely isn't. For the youngest of the fans watching Counter-Strike right now, Stiko had been at the very top of Counter-Strike in mousesports in that 2018-19 period, of course. And I think there is a theme that is going through this Apex's lineup. When you think about Yakem, when you think about Stiko, when you think about Nog, these are players who at some point were deemed insufficient. We'd say, listen, we've given you a shot. It's not working. You're just not cut for it. That's it. Thank you very much for being here. Please have your ticket, grab your coat, leave the club. You're not part of the top CS. This is what was told to these people. And they did not give up. Yakem had a while with that G2 core, G2 esports for a while. Then we had Nog and NIP being replaced by Device. Now Stiko as well, who's been trying. He was making YouTube tutorial for a while. That's where he was, trying to create and participate to the content of this game. And there is a lesson in it. If someone tells you can't do it, but you still fight through it, you might just find yourself in the semi-final of the major in Paris. And I for one, think it's inspiring, the fact that we have some of these profiles in the semi-final today. Yeah, it's been a just triumphant arc in terms of just what they've already achieved in terms of getting to this moment. I think that Stiko kind of talked about that a little bit, that, people don't really expect too much of them once they're here. But, I mean, I think that Jacob probably wants to do a little bit better because he's been in the semifinals before. He did it with Renegades in 2019 Berlin, and I think that Stiko also, he's probably feeling pretty good about this already. But the thing is that
I do think that Apeks believe. They just saw what happened to Heroic on this stage, and GamerLegion, they don't play the most different style from them. These tier 2 teams, I know you're worried. I know you're right. I don't like that sound, but I know you're right. It's just that these tier 2 teams, they have actually honed and they've refined so many of the nades, the strategies that the tier 1 teams have been throwing out there because they all are just grinding. They're playing so many more officials, and they're learning from experience much faster than the tier 1 teams who sometimes are waiting weeks, if not a month, between matches. I want to throw a slight curveball maybe to that point, because we had a beautiful quote from Jacob saying we prepared so hard for Liquid and we had every counter that was possible to have. That was certainly displayed on the server yesterday. We had a great breakdown from Mahone, literally reiterating the Ancient that we saw right at the beginning of the tournament, that Ancient they played yesterday. However, they have not had the same amount of time to prepare for Vitality. Do you see that being a different ball game for Apeks today? I think one side of the story is where you just hit it right there. It's a question of time and how much effort, resources you can put into this. But another topic, another angle that I want to attack to, we knew Liquid's situation in regards to Yikinder taking over the reins on a couple of maps very recently, and I see it as a limiting factor. I see it as when things go wrong, there's not going to be that many safety net that people are comfortable in because we're a bit more spontaneous and on the fly. I don't think this works out for Vitality. I think Vitality is a team that today can handle being pushed against the ropes way more than Liquid can. In fact, you look at their run, Vitality haven't dropped a single map here, but they have been pushed in every single game. Yes. Every team has been able to put up double-digit against Vitality. You can see it as a bad way. I see it as a resilient way. You are not putting Vitality out of their shoes today, which was the case for quite a while, to my greatest dismay. Yeah, and I think the prep that Jacob kind of mentioned in that quote also is just something that Apeks have really highlighted. That they haven't been shy about that in their vlogs. They keep showing Pauly, Cuban talking about all these tendencies of opponents, and I feel like in some ways anti-stratting can actually get you pretty far. I'm surprised it got Apeks this far. That's really far. But it's like, but the thing is that anti-stratting ZywOo is nearly impossible. You can't anti-strat greatness. You can't anti-strat a guy who is just going to nail you in the face, make the better decision in late round moments over and over and over again. And that's why going into this Vitality, they're still the heavy favorites. I want to believe in the Apeks run, but I believe in ZywOo even more. I think this is where, it sounds cliche to be putting the AWPers head-to-head as always, but this is going to be such a challenge for Nork. We talk about him, as being an incredibly clutch player. He displayed that just yesterday, but going up against ZywOo, this is no easy feat, particularly in Paris. I mean, the head-to-head is... it's nonsense. I don't care about that head-to-head. I have no interest in that head-to-head because I was going to eat him alive. The question is the output you can put on the server. And to that regard, I think Nok earned respect. He earned our respect here, the community's respect, by the amount of very impactful moment he's already put on the board with this Apeks lineup. We've mentioned the 1v3 against Liquid, which was obviously the most pinnacle moment you can find. But I would argue there were moments all across his major campaign where he had moments where he was seizing clutches and he was having that impact. So he has been an asset for Apeks. There is no doubt. But the man we have on our screen, it's a different kind of ballgame. Look at his warm-up skills. Look at this. Ooh. He's surfing. He's a man of culture. He's just chilling, man. One thing to note about Nok is just that he still plays the op like he did in NIP when people wanted so much more out of him. In terms of opening attempt rate, there isn't a single opper, except for Brokey, that took less opening attempts, at least from what I saw. That to me, is where really Vitality should be able to just feast, because we've already talked about all their personnel, all the ways that they take up space, and it's just that if you don't have an op that's going to try to stop those players, it's why I created a win condition for Liquid on overpass. Obviously, Nok upset that with that 1v3, but it wasn't with the op. I know. It wasn't with the op, it was with a crazy rifle round, and so if he just kind of goes back to that, and he just kind of has, in my eyes, a very average and even mediocre type game with his primary weapon, then I don't really see how Vitality should have as much trouble in this sort of matchup. I mean, you talk about it. I think he's more of a mid-round, late-round type sniper, right? Yeah. He's not the one that you were hoping for to just give you the 5v4 continuously time after time. Arguably, ZywOo is going to do that on the CT side. He's pretty much a guaranteed. If you cross him, you're dead. That's it. These are the rules. For Nog, it's more about the late round. I will say, though, to his advantage, I don't think that Vitality have the tightest chip in terms of executes. I see them execute. I don't think they have the most
perfect flashes and the most incredible pathways, when there's always a trade. I think there might be moments where there's an errant, there's a little bit of a mistake, there's a gap, there's something missing, and this is where Nok could actually strike if he wants to, because Vitality have plenty of qualities, not that bit of a metronome with the executes. Gentlemen, final thoughts before we do get this matchup underway. We have the map cemented. Has that changed your mind at all, or do you still feel like Vitality should be restoring order from what we saw in that first semi-final and making it through to the grand finals? I wish Apeks took the map veto differently, honestly. I wanted them to pick something like Anubis, and so, yeah, I am strongly favoring Vitality in this one. I went to bed from the Vitality boat. I was already on the Vitality side, and I didn't change this morning. I had my breakfast, and I'm all for Vitality. Well, we are so hyped to get this one underway, but not before we head to a short break. When we are back, it is time for this crowd to get loud and proud. Vitality and Apeks entering the arena for the semi-final. The pinnacle of competition. The gateway for legends.
its trophy, a maker of kings. Counter-Strike in my life for 15 years. I've been playing this game for 2/3 of my life. I grew up with Counter-Strike. I got into Counter-Strike because of my brother. My life is Counter-Strike. I live and breathe it. CS only made my life forever. I didn't really know what I wanted in my life. CSGO was that answer for me. It's what I've always done. It's my whole life. And I wouldn't have most of the things that happen in my life right now if I didn't have CSGO. Years of Counter-Strike majors, 10 years of legendary plays. Paris, the last chance, the last moment, the last time to crown a major winner in our beloved game. The emotions are high. This arena is absolutely packed out. And we are ready to see who the last team will be in the grand final. CND, what do you think of this? Speechless. I can't say anything. This is crazy, man. Wow. Well, guys, we have one very special guest for you. Yes. He is a French major champion and MVP winner from the same major, Cluj-Napoca. You know him as the Magician. He is a legend of the game. Please welcome on Kenny S. L'Accor Arena, merci d'accueillir une légende du Counter-Strike français. 5 fois dans le top 1 TV. 2 fois dans le top 6 mondial. MVP de Major. You like that, Kenny? Yeah. Hello, everyone. Je parle en français, mais pas de suite. So here I am on that stage. I took a decision a while ago, and I felt like the best way to do it was on that stage, on that city, in that country, with the people that follow me all the way since the beginning. CS has given me pretty much everything in life: experience, knowledge, sociability, maturity, pretty much everything. Yes. So I didn't make any speech because I know I will lose my words anyway. But to make it quick, and because so I took that place here to tell you that first of all I thank you for the bottom of my heart for all the love you're giving me.
And I also want to say that the way people, you guys look at me when you meet me, the way you speak to me is the biggest pride I have in my life. Because I don't even know if I deserve that, but here you are, being the people you are with me. And so thank you very much for that. To make it short, yeah, I'm retiring from competition. I loved every single moment. Legend of the game, Kenny. Kenny, you've been playing our game since you were 6 years old. You've experienced so much around the world. What has been your best memory from Counter-Strike? My best memory, as I said, it's the education that the game has given me. Winning a major, obviously. Not my best picture, not gonna lie, but and obviously many tournaments such as Montpellier, because once again, like being in France, I know I feel like I haven't really been close to my French audience, but actually I am. So I want to thank everyone, but I will switch to French now because je suis là. Désolé, j'étais obligé de le faire en anglais au début. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. Guys, let's give Kenny the ultimate send-off. Merci à tous. A big round of applause for the legendary Kenny S! Emotional. Hard moment for sure for Kenny to do, but in front of the home crowd, that is beautiful. But we do now need to decide who is going to be coming through as the next grand final team. Now, there's a lot of Vitality fans in here for sure, but Apeks have put up one hell of a fight. Yes. You ready for this? Yes, I am obviously ready for that. Guys, on va faire un truc un peu spécial. Tous les fans de Vitality, vous allez vous mettre debout et on va lancer en légende. Un qui ne saute pas n'est pas Vita dans toute l'arène. Vous êtes prêts? À 3, 1, 2, 3. Accor Arena, Counter-Strike fans around the world. Our next semi-final is Vitality taking on Apeks. And I know damn well you're gonna bring the home! This is Apeks. Jacob,
He grinded his way to this stage before. His third major semi-final appearance, 2015, 2019, and now 2023. You can't deny the impact he has had and the experience he brings. Now he has the chance to harness it all to make it to his first ever major grand final. Nork. Yesterday was magical for the Swedish AWPer. He shone against Liquid and devoured America's major hopes on the stage of dreams. He put the pressure on some of the best, but now it's time for the ultimate test. Kixan. Against Liquid, we saw the highest individual level of this in-game leader for the team. The preparation was on point and the execution was excellent. The dream continues even if the goalposts are changing. Each and every game is not the same. JL. The test keeps on coming and he's still standing. But he needs to bring the level he has shown before against one of the best in the world. The pressure is on and the confidence must show. Stiko. His best major performance ever, going further than all of his previous teams. He stands with that experience and he continues to fight for his dream here on the stage. Now is his time to shine. Let me hear you make some noise for Apeks! Vitality. Spinks. He's no stranger to the semi-finals of a major, but this one surely feels different. He's adapted and refined himself, and he's been given the extra bit of vitality that he now needs to shine with his French partners in crime. Zaiwu. The child of Counter-Strike's first major semi-final. Despite the accolades and praises he is given by fans around the world, this journey has been far from easy. Now it feels like it's all coming together for one of the greats. Full focus is needed to ensure he doesn't meet an ill fate. Apeks. Into the belly of the beast once more he will go. This is a man who knows how to put on one hell of a show. From star-level performances, mad fragging his way to the top of the charts, then transitioning to a leader and giving his career a restart. Dupree, to the stars and now to victory. He has done what most players can only dream of. From the first to the last, he's always giving it his all. The pressure is on, but he's felt this before. Being the most revered major champion is closer than ever before. Magisk, major championships and a major MVP. He knows what it takes. He has changed lanes, switched sides, and has come out buzzing for the last major in CSGO. History and legacy is on the mind, and this game will take him one step closer to the prize. V is for victory! V is for vitality!
Well, we certainly have a crowd favorite in this arena. When it comes to who will be able to get that last major final spot, it'll all be decided in this server. I got Cuban, I got Zonic with me. Zonic, it's been one hell of a journey recently for you guys. You seem to be peaking at exactly the right time. But many of the champions have fallen to underdogs. How do you prepare for that not to happen to you? I think Counter-Strike is going through a generation shift with a lot of new players coming in, and yeah, we talk with the players and we do everything. I mean, for me, it's when you're at this stage, there is everyone had it coming. I mean, they deserve everything coming for them. So props to Apeks, but hopefully here it stops. And how much of this is becoming a mental game as well? Because we've seen them when it comes to their game plan, they don't play the normal style of CS. Come again? How much of this is mental? I think Counter-Strike in general is more mental than ever. That's why we have the best sports psychologists on our team. So we've been spending 5 months talking about a scenario like this, and yeah, we are ready. I'm glad you're ready. You certainly need to be ready. Cuban, you have been coaching for such a long time. You've done well back on the old VP times, but it's been a while since 2017 we can see you be potentially in a major grand final. How badly do you want to be back there? Last final I was playing was against this guy on the other side and we lost. But I remember one more story from 2007, and we were playing SWC finals here in Paris. Back then when we both were players, and I won against him. So this is a time for me to win again in Paris. And when you've come into this game and you're preparing for the likes of Vitality, how much have you put in to change things up? How much have you switched up to just counter them? Or is it just still playing the same style we saw from Apeks? I think we don't need to change much. They have the coach who was 4-time major champion. 2 players who were 3- and 4-time major champion. They have 10,000 people behind them. What else can, they have everything, right? Crowd behind us. But for me personally, I have 2 of the most important people in my life, my wife and my daughter on the stage for the first time in the arena. My son is at home, and this is what gives me full power, and I think we are able to win this game, definitely. I love it. Playing our identity and sticking to our rules and principles. I love it. You guys shake hands, go and take your position. 2 legends of the game that have met in 2 many different ways. It's time for us to kick off this semi-final. The whole arena is packed out. Guys, are you ready? That's what I'm talking about. Are you with me? One final time today. Let me hear you. Bring the home! Black and yellow all over the arena. But if this major has proven anything, you can never count out the underdog. But for both the crowd and statistical favorite in Vitality, this is a historic occasion. Not only the deepest the org have ever made it in a major playoff, but a chance to be making it to the grand final as well, Machu. It's an unbelievable chance, an unbelievable opportunity that they are presented right now, Freya, and I'm sure every single one of these players is aware of the honor and the chance that they have currently. I was watching them getting settled. I was watching Apeks just taking a deep breath, relaxing. We all talk about the stories, we talk about the narratives, we talk about how Vitality is supposed to win this game. They're supposed to go in the grand final, they're supposed to make history, but they still have an incredible challenge ahead of them. And it would be so easy, it would be so human to allow yourself to fall into thinking this game is going to be gifted to you, and it won't be. If you enter with that mindset, you will be caught off guard. That is more or less, I think, the wake-up call that Vitality received when they played against Into the Breach in their own quarterfinals. The beginning was not easy for them. They did get a little bit of a shocker, a surprise in the form of Cypher in that one. That being said, on the Apeks side, there are a couple people that can make it difficult. It can make them sweat. And sometimes we have also seen that when you're the favorites, when you have all this pressure, all of this arena crowd cheering your name, rooting for you, that puts more pressure on these players. For CSGO players, sometimes feels like the home crowd is actually disadvantageous, because then you're actually trying to do a little bit more. You're trying to show that extra bit of flair, and that's when you get cocky. That's when you can sometimes get caught. This is still a huge underdog game for Apeks, but Vitality, they can let it slip. And this is one of the doors that has been left.
unopened, a stone unturned for Vitality. They haven't lost a single map yet in this entire major campaign. How do we know that they would react the right way, the proper way, the productive way, if suddenly Apeks were to steal away Mirage? We know it's a map where Vitality have shown weaknesses across a few weeks and months. It's definitely not a stronghold. Now, how do you react if you're these 5 players that we have on our screen and you live this stage 0-1 down? I think this is the play for Apeks. You are giving absolutely everything you have in the tank in this one map where you can just make them doubt, which they haven't so far. And Vitality have not been shy with just how much this would mean to them. They've been talking about the preparation time, the months upon months they have been putting into preparing for this event. We heard it from Zonic himself, preparing since January of this year. They've been putting in the legwork, so the pressure is certainly going to be on their shoulders to deliver here. There's no doubt about that, Freya. And for Apeks, it does feel like they're playing with house money. They have great preparation. We heard Cuban say that they really didn't change too much of what they were doing for Vitality. I say that's BS. I say that's completely BS because every single vlog I watch from Apeks shows all of the anti-stratting they put into every single team. And so I think he was sandbagging that interview just a little bit. And I think that Zonic, though, there's no coincidence, and it's not by chance that they call him the GOAT coach. He saw right through that. He was looking dead into Cuban's soul when he was saying those words, lying to his face. And so Zonic, he knows that this is still a game that is not going to be easy, and it's one that Vitality have came in with that prep. May I present a notion forth to the council here present? Shall we address Apeks as Dan Matt is clear and Apeks as Apeks? This is going to confuse the hell out of me if we talk about Apeks all the time. Apeks gaming, Apeks player, but about playing, it's time to game, I think. Well, we are ready to get this semi-final underway. Mirage, Vertigo, Inferno, if we do so need it. So let's raise the roof in this semi-final. I can't quite believe we're here. Semi-final. मशीन एंड स्पंज वो तो तैयार बैठे और हम भी तैयार बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो मैच होने वाला है सैम, जिस तरीके का माहौल है स्टेडियम के अंदर बयान नहीं कर सकते शब्दों के अंदर. बट nonetheless, ladies and gentlemen, welcome back to the second semi-final of the day. आखिरी सेमीफाइनल. पता चलेगा कौन सा दूसरा फाइनलिस्ट होने वाला है. Is it going to be Vitality? Is it going to be Apeks? स्टोरी लाइन की बात कर रहे थे, स्टेज पे बताया था, मैक्स ने बताया था, क्यूबन ने बताया, जोनिक ने बताया. दोनों कोचेस एक दूसरे के खिलाफ खेल चुके हैं एज प्लेयर्स 2007 में, एज कोचेस 2017 में, लेकिन अब फाइनली 2023 में पेरिस मेजर, आखिरी मेजर काउंटर स्ट्राइक का, उसकी सेमीफाइनल में एक और बार खेलने वाले हैं. कौन ऊपर आएगा देखना जरूर बनता है. Pistol round underway. Apeks on the T side, B approach करते हुए Vitality need to get their CT in control. बहुत तेजी से B Apps का कंट्रोल लिया गया था. There are going to be 2 players at B. बेंच की तरफ से ऑलरेडी एक आइडिया लग चुका है. स्मोक आएगा, they jump out of Apps. Damage जरूर कर चुके हैं, but बेंच के खिलाड़ी Zaiwu not really winning his position, gets 2, making it 3. He's already popping off. पहला राउंड है ये, 3 ऑलरेडी निकाल चुके हैं. He's looking for a 4th and a 5th, but that double stack. Styko with a 2 of his own, but उनके खिलाड़ी जो है, उनके टीममेट्स reposition कर चुके हैं. मार्केट से बाहर एक खिलाड़ी आ चुके हैं, but knock. What a start coming in here. All of a sudden 2v2 बन चुका है. Zaiwu even after a big advantage for his team. यहाँ पे Vitality with a recovery coming through. Plans जरूर नहीं किया. They're still individually. They're going for these duels. Dupree picks off knock. आखिरी खिलाड़ी slow and steady, but it's still going to be none other than Vitality with the first. Zaiwu जिस तरीके से पॉप ऑफ करे थे वहाँ पे, जिस तरीके से किल्स निकाले उन्होंने. पीक Zaiwu. पहला 1 टैप, ये दूसरा हेडशॉट और ये तीसरा क्लीन क्रिस्प लॉक. लेकिन ये देखिए कितनी काम तरीके से, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, आराम से किल्स निकालते जा रहे थे. और ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा था. Phenomenal stuff coming in from Vitality and from Zaiwu. अभी तक मेरे दिमाग में एक चीज है जो जोनिक ने बोला है. CS is seeing a generational shift. Because of that, कुछ भी हो सकता है. Even though Vitality has started off strong, Vitality have the experience under the coach of a major winner. Player भी है major winner के उनके टीम के अंदर. But Cuban himself said Paris में Zonic को उन्होंने take down किया था. It might be a long time ago, but Cuban and Zonic के बीच में वो एक rivalry रहेगा.
दुपरी को वहाँ पे जंप स्पॉट करते हुए मैं उनका फेस कैम देख रहा था. He just looked bored. He's like, I've won 4 majors, एक और सेमीफाइनल, एक और बार जीत रहे हैं. अगर हम मेजर जीतते हैं, I'll be the only player in the world to ever win 5 Counter-Strike majors, but कोई बात नहीं, चलिए एक और बार सही. Nonchalance, लेकिन ज़ायू इस बार रन भी सिक्का शॉट करने के सामने ये जरूर नहीं बनता. गोली चलाने की कोशिश जरूर, लेकिन वो हेडशॉट. ज़ायू with the 3 getting at the 4 as well. He does. और ऑडियंस देखे, दर्शक देखे कितने ज्यादा हाइप, कितने ज्यादा पम्प्ड अप. फुल सपोर्ट दे रहे हैं होम टीम को और उन काउंटर स्ट्राइक के प्रोडिगल सन को. They have everything. Vitality के पास सब कुछ है मामा. They have the support. They have the control. Veto के भी अगर बात करेंगे, majority of all the maps अभी जो पिक हुआ है, Mirage, Vertigo and Inferno, सब में उनके बेटर स्टैट्स है. एक ही मैप था मामा जो बेहतर नजर आ रहा था. It was ancient for Apeks, but that was banned. 71% win rate था Apeks का वहाँ पे, and they decide to ban. Vitality मौका नहीं देना चाहते, and Apeks go for a pick to start off on Mirage, but Vertigo insane control है. Again, talking about Mirage, जब तक हम ये technical pause से deal करेंगे, both of these teams here have not played in the recent matches. So they have to channel their previous victories, previous strategies जिस हिसाब से मैप को खेला गया था, and they have to add a lot more onto it and जीत के दिखाना पड़ेगा. Whether it's going to be Apeks या Vitality, इसका इंतजार जरूर रहेगा. But Zaiwu, if he takes this last major, जैसे आपने बताया था already, he is the prodigal son. Everybody's looking forward to him. What a culmination of the grand finals as well रहने वाला है. बिहाइंड प्लेयर कैम्स जो नजर आते पहले इतने ज्यादा नहीं दिखाई देते थे. एनी प्लेयर, एनी फैन, किसी को भी पूछ लीजिए आप, ये जो कैमरा एंगल्स है, मैं तारीफ करना चाहूंगा ब्लास्ट ये प्रोडक्शन क्रू की. ये बहुत इंटरेस्टिंग एंगल्स होते हैं, दिखाई देता है कि प्लेयर का पर्सपेक्टिव क्या था, और वही चीज हमें दिखाते हुए. लेकिन फिलहाल नॉक ग्रेनेड लाइन अप करके खड़े हैं दुप्री इंतजार में, लेकिन स्टाइको कोशिश करेंगे यहाँ पे. दुप्री देखिए किस तरीके से बेट एंड स्विच किया, पहला किल निकाला, जेल को टेक डाउन करेंगे. डैमेज बिल्कुल नहीं लिया उन्होंने, लेकिन स्टाइको डिस्ट्रैक्शन जैसे ए पे जरूर एक पिक निकाला था, बट इट डजंट मैटर. इट डिडंट चेंज एनीथिंग फ्रॉम वाइटैलिटी. ए पे जो खिलाड़ी है वो डटे रहेंगे. Zaiwu will still be holding mid. B की तरफ जो 2 खिलाड़ी थे, they'll still be there because it's still a 4v4 situation. Smoke disappear होते will be a push coming in from under. Kixon I think कहीं ना कहीं बहुत crucial रहने वाला है इस गेम में. Quickly talking about stats, Zaiwu single-handedly stats पे पूरी टीम को take down करती हुई नजर आएगी. Better in everything. Spengs, what a proper 2 खिलाड़ी को टेक डाउन करेंगे. नेस्ट के बाजू में एक खिलाड़ी रहने वाला है, बट देयर विल बी Zaiwu. Zaiwu is not ready, and Styko भी Apeks को गिरा देंगे, and all of a sudden this becomes a doable round. 2v2 आ चुका है. It is a super crucial round for Apeks. Wow, Sphinx through the smoke. Punish करेंगे यहाँ पे Mamba, and it looks like Vitality will recover the round, even though 2v2 तक आया था, but Styko barely with 15 जंगल में चेक करने के लिए आगे आ रहे थे, बट Vitality not even giving anything. डायरेक्ट चैलेंजेस नहीं आसानी से नजर आ रहे. They have to force the duels, and I think Vitality को ये बहुत खुश रहेंगे इसकी वजह से, जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं. टाइम डन, राउंड डन, Vitality ऑन बोर्ड विद अनदर. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन Vitality क्रूशियल पिक्स निकाल रहे हैं अपने आप के लिए. They look poised, फोकस्ड, बेहतरीन तरीके से. ये 2 किल बहुत ज्यादा क्रूशियल थे, स्पिंक्स ने बेहतरीन तरीके से निकाले, एंड तीसरा किल थ्रू द स्मोक. इमेजिन कर सकते हैं आप जेकब not very happy obviously, but Vitality के फैंस देखिए मेगाफोन लेके आए अंदर. Zaiwu has an AWP already. चौथा राउंड है ये. He tried to check mid, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला. रिपोजिशन करेंगे स्टेयर्स की तरफ आने के लिए. Styko on the other end looking forward to any kind of flanks.
उनके साथ जेल देते हुए they're looking forward to clearing the under. एक ही रहने वाला है Psycho. Let's see if we find some value. Oh, Ness. देख लेंगे Apeks जैसे क्रॉस कर रहे थे with that jump. This is going to be interesting, Mamba. ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, but nice grenade. रिएक्शन देके सोच रहे होंगे यहाँ पे Apeks ही बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, लेकिन that is not the truth. ज़ायवू जानते हैं अंडरपास में लोग मौजूद है वहाँ पे, एक एंगल होल्ड करने की जरूरत, एंड ये लीजिए पहला पिक निकलते हुआ. एक किल पे क्राउड कितना ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहा है, आप समझ सकते हैं. Psycho is still looking forward to the trade. पुशअप करना चाहते, रिपोजिशन कर चुके Apeks. दो लोग आ रहे हैं, एक पैलेस पे थे. They might just line up brilliant flash, but Apeks को डाउन नहीं कर पाएंगे. He goes with a spree of spray, knocks it down हो जाएंगे. Zaiwu follow up with kicks in, and यहाँ पे देखिए under palace खेल रहे थे, and Spinks closes another round here for Vitality. Vitality off to a flying start. कुछ भी जो Apeks सोच रही है, they're unable to do it. Apeks is taking on Apeks. ये जो Apeks की बात कर रहे हैं, they're talking about an older player who's a legend in the scene, जो केनियस के टीममेट तक रह चुके हैं. I mean, it was very emotional अभी केनियस को देखते भी. You were even relishing your memories, talking about him, people following him. Oh, CS is incredible. The undisputed king of esports. उसमें कोई सवाल नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं. That's not even a discussion at this point. But Nox, Spinks को smoke के through eliminate करेंगे, ये दिक्कत दे सकती है Vitality को. लेकिन Apeks का aggression, ये शायद उनके लिए दिक्कत भरी बात साबित हो सकती है. जी नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किक्स तुरंत ट्रेड निकालते हुए. Vitality 4-0 up. Zaiwu अभी भी जिंदा है ऑप के साथ. Magisk. इनको कई बार कास्टर्स, उनके लोकल प्लेयर्स मेगिस भी कहते हैं, बट मेजिस अभी भी डुप्री के साथ डायनामिक ड्यूओ बहुत समय से एक साथ खेलता आ रहा है. कॉम्स कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी इनको, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पे एक पिक का. Apeks के पास मैन एडवांटेज, भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. Just looking forward to Palace. फ्लैश आएगा, बट nothing to be worried about. वेट कर रहे हैं, चेक करेंगे, कोई स्विंग आउट नहीं किए मेन की तरफ से, बट मेन से थोड़ा बाहर निकल चुके हैं. स्पैम कर रहे हैं, looking forward to doing any kind of damage, but just waiting for the right opportunity. चेक करेंगे. Oh, quick flick on, नॉक पे एक पिक निकाल लेंगे. All of a sudden it's all up to Zaiwu. AWP रहेगा, timing was too good. Seiko को डाउन करेंगे. Oh, through a wall back, gets jail. C4 is down. He's still pushing, connector की तरफ challenge आएगा, but he was not quick enough to connect that shot. And तुरंत एक swing out आएगा. Apeks finally find the first, but आप देख सकते हैं audience itself having a fight in between. राउंड गया, but Vitality के जो fans है, they're like एक ही राउंड है, we'll take them down the next. वो शॉट इसी वजह से Zaiwu को इतना हाइप किया जाता है, इतना भरोसा जो जताया जाता है Zaiwu के स्किल्स के ऊपर. I still remember जब नए सीन पे ब्रेकआउट करके आए थे, मेरे एक दोस्त से कमेंटेटर, उन्होंने कहा था Zaiwu's a freak, जिस तरीके से खेलता है ये. लेकिन अब पीछे हटेंगे, उनके जो टीममेट्स से आगे मैप कंट्रोल लेने की कोशिश करें, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज किक्स को पड़ेगा उस नेट के साथ. जंप पीक्स फ्रॉम द गेट, वीकली कुछ स्पॉट आउट नहीं होगा. स्मोक जैसे डिसपियर हो रहा है, स्पिंग्स बैक्स ऑफ, सो नेस्ट के नीचे जो खिलाड़ी थे, ही विल नॉट फाइंड एनीथिंग. दूसरी ओर बुई की तरफ रिपोजिशन कर रहा है. टी ऐप के बाहर जरूर C4 है, अभी तक रिकवर करके एक रोटेशन आएगा, तभी जाके प्लान का डिसीजन बनेगा फ्रॉम Apeks. फॉर नाउ दे आर जस्ट होल्डिंग इट आउट. फर्स्ट पिक का इंतजार कर रहे हैं, एंड रीडिंग इट राइट. नॉक ऐप से बाहर पुश आने वाला था. Dupree feels there's something wrong. It was super close. वो फाइट नहीं आएगा, वो चैलेंज नहीं आएगा, एंड players are just holding. Nest की तरफ एक duel होगा, and Apeks with a FAMAS. He does take down, kicks in. एक और ट्रेड निकाल सकते, लेकिन तुरंत ट्रेड निकालेंगे. जेल को बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया. Magisk सर्वाइव जरूर कर रहा है अभी भी.
डुप्री के पास ग्रेनेड अवेलेबल है, लेकिन वो दूसरी साइड पे फिलहाल नीचे कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी। साइको तुरंत ट्रेड निकालेंगे 2 vs 2। डुप्री ऑन द बैक साइड, ही इज रनिंग इन। मेजर्स पूरी की पूरी कोशिश करते हैं यहाँ पे जिंदा रहने की, क्या वो जिंदा रह पाएंगे उतनी देर, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। फ्लैश बैंग जरूर डाला है उन्होंने। डुप्री नीड टू कम इन अर्ली, डुप्री नीड्स टू स्टे अलाइव एंड मेक दिस हैपन। लेकिन ये देखिए पहला किल जरूर निकाला, दूसरा प्लेयर ऑप के साथ है, उन्हें आइडिया जरूर है उस चीज का। शॉट मिस कराने की कोशिश, ग्रेनेड जैसी प्लांट होगा डालेंगे, काफी ज्यादा डैमेज पड़ने वाले इस ग्रेनेड से। जी हाँ, एक ही शॉट की जरूरत। क्या मार पाएंगे, क्या कनेक्ट कर पाएंगे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डुप्री जिंदगी भर का अनुभव ये एक प्ले में लगाते हुए बैक स्टैप किया, वेट किया, ग्रेनेड मारी जैसे ही C4 प्लांट हो रहा था, आधी HP कम करके उनको टेक डाउन किया। ऐसे ही मेजर विनर नहीं है। आई थिंक kudos to Majors as well, बहुत टाइम बाय किया उन्होंने। He threw down all the util he had, looked forward it, he tried the wall back. You can see Apeks इतना खुश है अपनी टीम से ये राउंड। Zaiwu as well. Dupree. I think सबका जो नजर है जी हाँ Zaiwu के ऊपर रहेगा, but Dupree he's going to do a lot of unthinkable stuff. Unthinkable for mere mortals like us, not for gods like him. जितना एक्सपीरियंस है उनके पास, हर एक चांस, हर एक पोजीशन का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे वो। एंड Zaiwu ये नहीं मिस करते ये शॉट्स को। Spinks in the meantime, देखना ये बनेगा क्या वो पिक निकाल पाएंगे। जेल स्मोक की धार से वो किल निकालते हुए बहुत क्रूशियल किल। पुश करके जैकिम ट्राई किया, but Dupree was better with M4 A1S. अंडर चेक करेंगे, जेल गेट्स अनदर, स्पिंक्स को डाउन कर चुके हैं। 2v3 सिचुएशन, जेल इज लो। जेल के साथ ड्यूल लेते हुए डुप्री बहुत ज्यादा डैमेज खुद खा के दिखा देंगे। एंड राइट नाउ दे आर रिकवरिंग द C4 एंड तुरंत यहाँ से आई थिंक बी की तरफ भाग सकते हैं, बट ऑलरेडी हैविंग ए कंट्रोल दे आर ब्रिंगिंग बैक द C4। सीटी कंट्रोल बहुत क्रूशियल रहने वाला है माम्बा। डुप्री को यहाँ पे ऑफ दे दी गई है, HP कम है उनकी, एक किल निकालने की जरूरत, बस सिर्फ और सिर्फ एक किल और वो निकालेंगे। एक और, वन मोर। Zaiwu क्या पूछ लेंगे यहाँ पे अपनी टीम के पास। बहुत कम HP, लेकिन Zaiwu बैकअप देने के लिए तैयार है, इंतजार करे, पीक करेगा स्टाइक को यहाँ पे। जी हाँ, स्टाइक को पीक करेंगे एंड Zaiwu will take him down। बिल्कुल भी गलती करने का मौका नहीं, लेकिन डुप्री वर्सेस GL, 20 HP वर्सेस 3 HP, लेकिन क्या ये निकाल पाएंगे? आई थिंक उन्होंने सुन लिया। जी हाँ, बिल्कुल सुन लिया था उनको ऊपर चढ़ते हुए, और राउंड निकाला जाएगा। नो ब्रेकिंग राउंड ऐसे और देखने के लिए मौका मिलेगा। दिस विल बी अ शो ऑफ अ लाइफ टाइम माम्बा। इन दोनों के बीच में ये जो मैच होने वाला है, लिटिल पिक्सल्स देखा, फायर किया, ब्रिलियंट चेक, जैसे ही शोल्डर देखा जेल, ही वेंट फॉर इट। बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला जेल ने इस राउंड पे। ब्रिलियंट क्लच फॉर हिज टीम, बहुत क्रूशियल था। आई मीन एपेक्स हर एक राउंड जहां पे भी उनको छोटी सी भी चांस मिल जाती है, दे हैव टू कीप पुशिंग द प्रेशर ऑन वाइटैलिटी, तभी जाके ऐसे राउंड्स कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे, वरना इट विल बी वाइटैलिटी ट्राइंग टू रन अवे। देखना ये होगा अब क्या करते हैं यहाँ पे। एडी आ जाएगा Zaiwu का। 15 किल्स ऑलरेडी लेके बैठे हैं, 179, 7 राउंड हुए, हर राउंड में 2 किल निकाल रहे, कम से कम 2 किल निकाल रहे वो। ऑप का पैसा होगा नहीं अनफॉर्चुनेटली उनके पास, ऑप के लिए इंतजार करना पड़ेगा अनलेस ऑफ कोर्स वो नॉक की गन उठा पाए। लेकिन मेजिस्क बहुत ज्यादा नजदीक, साइको क्या इंतजार करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे इस चीज का। फर्स्ट कॉन्टैक्ट एपेक्स खेलने वाले हैं, पेट एंड स्विच सेटअप, परफेक्ट सेटअप है ये, बट इज गोइंग टू वर्क। एंटी फ्लैश खेल रहे मेजिस्क, साइको बिल्कुल भी आवाज नहीं करे, पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन डिनाई करते हुए। Kicks in along the teammate towards mid. Dupree इकलौते प्लेयर जो बी होल्ड कर रहे हैं। अभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मीचेस धीरे धीरे करके वापस हटेंगे यहाँ पे।
लेकिन नॉक परफेक्ट पोजीशन में यहाँ पे किल निकालने के लिए, लेकिन सीटीज बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते इनको। वन मोर, मेजर्स गेट्स वन। ओह माय गुडनेस, दिस कुड बी डिजास्टरस एपेक्स के लिए जिस तरीके से अंदर आ रहे हैं। ओह ज़ाइवू गेट्स वन, नीड्स टू गेट वन मोर, लेकिन गोलियां खत्म हो जाएंगी। फ्लैश डालेंगे जरूर, लेकिन एक बुलेट के साथ क्या पीक करना चाहेंगे? जी नहीं, फ्लैश का इस्तेमाल करके ज़ाइवू एब्सोल्यूट मॉन्स्टर। डुप्री एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे प्लेयर को, लेकिन 5-7 है उनके हाथ में। क्या कमिट करेंगे ए पे? Does he have that information? Does he know where he is? JKM B साइड की तरफ जाते हुए डुप्री। उनको पता चल चुका है बी साइड की तरफ प्लांट है। जेकम धीरे धीरे करके बी शॉट पे जाएंगे जरूर, बट टाइमिंग जरूर हो सकती है उनके साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाइटैलिटी बहुत ज्यादा डैमेज देते हुए, सुपर क्लोज था मामला। आई मीन जेकम शॉट की तरफ जा रहे थे, अगर उन्होंने सोचा कि मैंने पहले ही वहां पे देख लिया, अभी आने वाले मार्केट की तरफ से खिलाड़ी, एंड ही वुडंट हैव टर्न्ड अराउंड। डुप्री पिस्टल से क्लच करके दिखा सकते थे, बट व्हाट अ फाइट। ज़ाइवू अनबिलीवेबल वॉल बैंग करके एक हेडशॉट निकालेंगे, उसके बाद जेकिम डबल डाउन। अगर ये नहीं होता एंड देन गेटिंग अ थर्ड फॉर हिमसेल्फ, मे बी एपेक्स वुड हैव लॉस्ट दैट राउंड। फुल सेव के साथ नजर आएंगे वाइटैलिटी, सो एपेक्स शुड हैव अनदर ऑन द बोर्ड। मिड कंट्रोल बहुत तेजी से लेंगे, उसी के साथ एप्स का कंट्रोल भी ले लेंगे, एंड पुशिंग बैक प्लेयर विद देयर मॉली। ग्रेनेड भी डाला जाएगा टू क्लियर द ट्रक। अंडरपास से आगे आ रहे हैं, मॉली ऑफ करके यहाँ पे नेस्ट की तरफ कोई प्लेयर को पुश कर सकता है, बट दिस बेंच पुश कमिंग थ्रू इज ब्रिलियंट। कोई एप्स के विंडो की तरफ अगर नजदीक आता है, इट्स गोइंग टू बी इजी पिकिंग्स मे बी। ज़ाइवू बेहतरीन एंगल पे खड़े हैं वहां पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किल नहीं निकाल पाएंगे। फर्स्ट कांटेक्ट का इंतजार था। काफी इंटरेस्टिंग एंगल्स होल्ड करिए वाइटैलिटी यहाँ पे। 3 राउंड जरूर निकाले, एक और राउंड यहाँ पे इनके पास गन्स नहीं होने वाली। स्टैक जरूर किया साइड के ऊपर, लेकिन स्पिंग्स को एक्सपेक्ट करेंगे जी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि किक्स इन मैक 10, लेकिन उनको किल निकालेंगे। एपेक्स वापस स्ट्रेट निकालते हुए एजिस नीड्स वन मोर। क्या वो कमिट करेंगे? जी हाँ, कमिट तो करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट किलिंग देम, ऑलमोस्ट टेकिंग देम डाउन। स्टाई को ओह माय गुडनेस, ट्रिगर डिसिप्लिन ये बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है उनके लिए। आई थॉट पहले देख चुके थे, बट ही डिड गुड ट्रिगर डिसिप्लिन कमिंग इन। वेपन ऑलरेडी रिकवर कर चुके खिलाड़ी, एक AK तो जरूर रहने वाले हैं। दिस ड्यूल 1v1 कमिंग थ्रू, इट्स एक्चुअली 2 AK जो रहने वाले हैं। प्लेयर्स गुड हेल्थ, 31 ऑन स्टाइको, ही नीड्स टू फाइंड अ वे टू क्लच, एंड जी हां हेडशॉट कनेक्ट करेंगे अपने पिस्टल से। ही रैन आउट ऑफ बुलेट्स, अभी सीधा कनेक्टर की तरफ भागना चाहते हैं, एंड ही गेट्स द सेकंड। नोबडी, कोई विश्वास नहीं कर पाएगा ऐसे राउंड के ऊपर। ये उनका राउंड था, 1 वर्सेस 3 निकाल के गए हैं। AK-47 वर्सेस ग्लॉक, क्लियरली ग्लॉक ज्यादा सुपीरियर। व्हाट अ राउंड, ऑलमोस्ट वाइटैलिटी छीन चुकी थी अपने सेव राउंड पे, इतना वैल्यू पुल ऑफ करने वाली थी, बट एटलीस्ट दे हैव डन सम डैमेज। रीबाइज जरूर सारे खिलाड़ी करेंगे। इट माइट बी अ राउंड दैट एपेक्स वन, बट थोड़ा कॉस्टली जरूर था। वाइटैलिटी टाइम आउट लेते हुए क्यूबन अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से इकट्ठा रख रहे हैं। क्या पेरिस का उनका जो रिकॉर्ड है वो मक्कम रहेगा? यहाँ पे कोशिश उसी की तरफ चल रही है, लेकिन वाइटैलिटी के फैंस जी जान लगा रहे सपोर्ट करने में अपनी टीम को। वाइटैलिटी के प्लेयर्स जी जान लगा रहे अपने फैंस को खुश करने के लिए। 5-4 का स्कोर लाइन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड। ज़ाइवू के पास वापस एक ऑप, 9 राउंड में 17 किल निकाल चुके हैं। एक और इनिशियल पिक मिल पाएगा उनको। ओह नो, ओह नो, फंस चुके ट्रिपल की तरफ मूव ऑफ करके बैक ऑफ कर लेंगे, बट जंगल की तरफ पुश आया। मिचेस के एक बेट एंड स्विच था, बट काम नहीं आया। नंबर का एडवांटेज उठाते हुए नजर आएंगे एपेक्स। 4v3, they can get this done। प्लान भी कर सकते हैं, इंतजार करेंगे।
But look at this smoke disappear and Dupree takes down the C4 planter. Jacob को भी डाउन करते हुए नजर आएंगे with Spinks' help coming through. 3 लोग मिलके the 4v3 situation को उन्होंने 3v1 बना दिया. And again Stiko, can he pull off a 1v3? इस बार weapons बेहतर उनके पास भी रहना. पिछले बार भी था. But connector की तरफ इंतजार कर रहे थे. Smoke disappear and Stiko also disappears. लास्ट टाइम क्लच किया था लेकिन इस बार क्लच नहीं कर पाएंगे और ये जिस तरीके से C4 प्लान कर दे Dupree ने होने नहीं दिया. Wait, did I hear that horn? I'm not too sure. Simple. ये देखिए. Simple realizing उनकी जो presence है तो वही काफी है. बहुत लोग इंतजार कर रहे थे सिंपल एंड नावी को देखने के लिए. Unfortunately इस बार नहीं रहेगा, but for now ये पहला फ्रैग निकाल दिया है. Apeks playing on a disadvantage as well as in Nico. They don't have the money. क्रिकेट सीधा जा सकता है, but the edge जो वो बूस्ट करके खड़े थे जिसकी वजह से जेल को एज दिखाई दिया. He takes down Apeks, equalizing the numbers. अभी तक कहीं भी एंट्री नहीं हुआ. It has just been initial battle. He's right. The crosshair is right on his head. But उनको इन्फो नहीं है तो वो ट्राई नहीं कर रहे अभी के लिए. This is patience दोनों साइड से जो नजर आ रहा है. Even though weapons नहीं है फिर भी ये जो प्ले बनाने का इंटेंशन है जहाँ पे वो एडवांटेज उठा सकते हैं, ओपोनेंट को सरप्राइज कर सकते हैं. द सरप्राइज एलिमेंट अभी भी लेके जाना चाहते हैं. बेंच की तरफ एक खिलाड़ी रहेगा. देयर इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट रश कमिंग थ्रू फ्रॉम एप्स. जंप ऑफ करेंगे बट ये खिलाड़ी एक को टेक डाउन करेंगे, मेकिंग अ सेकंड, माइट लुक फॉर अ थर्ड. एंड जी हां, द C4 इज डाउन अलोंग विद Zaivu's हेल्प. आखिरी खिलाड़ी किक्सन does not want to give the AK फेक के आगे आके ड्यूल लेंगे एंड ही विल गो डाउन. और बटा के तुरंत फेंक दी उन्होंने. ये छोटी चीजें बहुत बड़े रिजल्ट चेंज कर सकती है. बनाफ्लाई सारे प्लेयर्स के फैंस प्यार देते हुए उनको. मैं जरूर कहना चाहूंगा फ्रेंच फैंस ने मेरा दिल जीत लिया है, क्योंकि जब अपनी टीम को सपोर्ट करते मैच चालू होती है तब पूरा आशिक कर देती है सामने वाली टीम का, लेकिन जैसे ही मैच खत्म होती है तो प्यार भी उतना ही देती है. अरे ऐसी जगह है, दिल जीतने वाली जगह है. सो had to happen in the right place. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. दिल जीतने वाली जगह है, लेकिन फिलहाल के लिए Zaivu doesn't have an op. लास्ट राउंड में उनकी ऑफ फेंक दी गई थी, लेकिन Kixon going down to his own teammate, ये बहुत बुरा हुआ उनके साथ. And this grenade not doing any damage whatsoever. Zaivu काफी अच्छा एंगल होल्ड करे ये साइड पे, लेकिन पहला कांटेक्ट किसके साथ होने वाला है ये सबसे बड़ा सवाल. जेल स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते हुए धीरे धीरे, लेकिन डिफेंस में बिल्कुल भी कोई गैप्स नहीं. Oh no, Mages! He whiffs! Magic ने whiff किया. बहुत क्रूशल किल. ये पासा पलट सकता है. It could have been a roll up of a lot of kills. Spinks अभी भी कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं. 2v2 situation है. Stiko जो इनिशियल ड्यूल लिए थे मेन की तरफ, he's now low but timing, he picks up another. आखिरी खिलाड़ी जंगल पे रहने वाला है. Stiko holding position. Apeks clutch around. Stiko again, kudos to him. Unbelievable. जिस हिसाब से वो इस गेम में खेल रहे, स्टेप अप कर रहे अपने टीम के लिए, पुलिंग दोज राउंड्स बैक इन. और ग्रेनेड सीधा जाके खंबे पे लगा था वो. Stiko. Dupree 5-7 लेके बहुत नजदीक बैठे हैं. 5-7 बहुत ज्यादा पोटेंट गन है उस रेंज पे. मैं हमेशा डीगल की बात करता हूँ, डीगल की तारीफ करता हूँ, लेकिन $500 में ये जो गन मिलती है आपको, इसके साथ compete करना बहुत मुश्किल है. मुझे अभी भी याद है जब गेम नई आई थी, P250 इतनी ज्यादा वो पावर्ड हुआ करती थी.
As a matter of fact, P250 का भी वन शॉट हिट शॉट हुआ करता था, लेकिन M4A4 का नहीं, M4A1 का नहीं होता था. Smoked off connector, but it's just the fake. P के ऊपर एक हिट आने वाला है. साइड पे जरूर खिलाड़ी रहने वाला है. Dupree, he does get one, but bench की तरफ क्लियर किया जाएगा. JL with 2 of his own. And JK इंतजार कर रहे थे connector की तरफ. JL, he's not stopping. He wants more. He's hungry. Zaivu के पास ऑब रहने वाला है. And JK had already seen the barrel and उनको punish करके दोबारा AWP को गिरा दिया जाएगा. Apeks getting rounds, putting a competition up to Vitality, and उनके fans को थोड़ी देर के लिए अभी साइलेंस किया है नंबा. थोड़ी देर के लिए, लेकिन वाइटालिटी 7 राउंड निकाल चुके हैं, ये मत भूलिएगा. 7-6 स्कोर लाइन जरूर होगा एपेक्स के लिए, लेकिन वाइटालिटी आई स्टिल बिलीव इज इन ड्राइवर सीट. धीरे धीरे करके एपेक्स राउंड जरूर निकाल रहा है, लेकिन गेम निकालने के लिए और भी ज्यादा डोमिनेशन की जरूरत पड़ने वाली है उनको. एक आखिरी इको वाइटालिटी के लिए, किल नहीं निकाल पाए, लेकिन एपेक्स बहुत ज्यादा डैमेज लेते हुए. इको रहने वाला है यहाँ पे वाइटालिटी का. 2 और राउंड इस हाफ का. स्कोर्स भी इक्वलाइज हो सकता है अभी के लिए. ब्रिलियंट ग्रेनेड, बहुत डैमेज खाएंगे Zaivu. गुड डिसीजन, गुड प्ले, स्लो एंड स्टेडी. एपेक्स जरूर स्टार्टिंग में राउंड्स खोया था उन्होंने. नाउ दे आर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे खिलाड़ी रह सकता है. एंड डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा क्रिएट करते हुए नजर आ रही है एपेक्स. 3 लोग रहने वाले. He's only good for 1. Maybe weapon recover हो सकता है, but look at that fast execute. JL Apeks को डाउन करेंगे. दूसरे खिलाड़ी पिलर के अराउंड खेल रहे हैं अभी के लिए. Can he find another? Stee को यहाँ पे जरूर स्पिंक्स को डाउन करेंगे. AWP looking forward to a backstab, but weapon recover करने के बाद में Jisk puts down Stee को, looking for the knock, waits. उसके बाद swing करेंगे, gets him. Backstab पे ऊपर अकेले Zaivu picks up the player. JL बहुत लो ऑलरेडी थे, but this is a 1v2 situation. It can be clutchable. 18 HP पे knock. He has to isolate the duels. Plan जरूर हो चुका है, and he doesn't have the kit, so he has to go a little bit fast. Oh, Edge देख चुके थे. He should be able to take down the player, but वो छुप गए, crouch हो गए, and he's trying to push up, but knock, he's not going in for the duel. ये बहुत nerve-wracking है. Knock closes it off. Zaivu wanted a duel. Zaivu was looking forward to. Flash किया. He was looking forward to the other player, but दूसरे जो player थे didn't peek. जी हाँ, बिल्कुल पीक नहीं किया उन्होंने, लेकिन काफी क्रूशियल किल था वो. अगर निकाल पाते तो फिर शायद मे बी पॉसिबल था उनके लिए राउंड निकालना, लेकिन अब वाइटालिटी ने एक और टाइम आउट लिया है. जोनिक इतना ज्यादा अनुभव, खुद मेजर विनर रह चुके हैं. क्यूबिन ने बताया था, आई बिलीव 4 टाइम मेजर विनर खुद है. डुप्री 4 टाइम मेजर विनर है. मेजर्स के पास थोड़े बहुत मेजर्स है, थोड़े बहुत. इमेजिन ग्रेटनेस प्लेयर की 10 मेजर तो ऐसे लेके बैठी है टीम. इतना ज्यादा, मतलब वाइटालिटी. आई मीन हम पिछले गेम की बात कर रहे थे, हेरोइक वर द फेवरेट्स, बट GamerLegion पुट देम डाउन. वाइटालिटी राइट नाउ शोइंग ऑडियंस एरिना पे दिखा रही है why they are going to be the favorites. इतना सपोर्ट होम क्राउड की तरफ से, and so many majors. The potential is in the players. कोच के पास इतना एक्सपीरियंस. Rooting for Vitality with all they've got. आखिरी राउंड रहने वाला है इस हाफ का, बहुत क्रूशियल. एक टीम लीड ले सकती है, but who is that going to be? ग्रेनेड Zaivu को जरूर नेस्ट के अंदर डैमेज देगा, but the first frag, I think that can turn the tides. Zaivu अभी भी रुके हुए. He's not let the nest go. बिल्कुल नहीं जाने देंगे. Zaivu ऐसे प्लेयर है, 1 HP भी अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो फिर भी बहुत डेडली प्लेयर साबित हो सकते हैं वो सामने वाली टीम के लिए. लेकिन जो सपोर्ट की बात करें, जो एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, शानदार जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, कंपेयर नहीं कर सकते आप. कहीं भी नहीं कंपेयर कर सकते हैं. आई मीन ये अभी सेमीफाइनल से, अब अगर यहीं पे ऐसे देखने के लिए मौका मिल रहा है. लुक एट द क्रीप इन कमिंग इन फ्रॉम स्टीको. ही इज ऑलरेडी स्पॉटेड द बैरल. एक और खिलाड़ी को देखना चाहते हैं, बट दिस थोड़ा ज्यादा उन्होंने पीक किया, जिसके वजह से उनका पोजीशन पता चल गया. एंड इट इज जस्ट एडवांटेज. वाइटालिटी आसानी से प्लेयर्स को पिक ऑफ करती हुई नजर आ रही है. नॉक, ही डिड फाइंड समथिंग, बट फाइनली गेट्स punished with the same weapon he had. Vitality
वो जरूर लीड लेंगे इस पहले हाफ में। 8-7 का स्कोर लाइन, बट स्टिल सच अ क्लोज कंटेस्टेड बैटल पहली ही मैप में मांबा। What a challenge! यहाँ पे वाइटैलिटी दो, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर ग्रैंड फाइनल्स। बनने का इरादा है, सपोर्ट है, बट क्या बन पाएंगे? It'll only be known after they take down Apeks. Look at the crowd, man. I wish I could have been there. खुशी देखें आप प्लेयर्स के चेहरों पे, वो भी महसूस कर पा रहे एटमॉस्फेयर को। होम क्राउड के सामने हमेशा आपको इतना एंटरटेनमेंट, इतना इमोशन मिलता है। लेकिन जो पहला राउंड था, ज़ायवू को हमने देखा जिस तरीके से उन्होंने ये टैप्स निकाले थे, बेहतरीन टैप्स। स्टार्टिंग में वाइटैलिटी पूरी कंट्रोल में थी, हर एक डायरेक्शन पे जो भी पीक कर रही थी, दे वर रीडिंग जहां से वो एक्सपेक्ट कर सकते पीक्स, हर जगह पे पनिश करते हुए नजर आ रहे थे। एंड इट डिड टेक सम टाइम फॉर एपेक्स, एंड आफ्टर एपेक्स गॉट द फ्लो, गॉट द मोमेंटम, एंड आई थिंक यही राउंड था जहां पे ज़ायवू हैड द चांस। 2 प्लेयर्स को जरूर पिक ऑफ किया गया था, बट उसके बाद 2 और जो खिलाड़ी थे उनको पिक ऑफ नहीं कर पाया। कनेक्टर का शॉट जो है फेल हो गया, एंड दैट इज व्हेन एपेक्स स्टार्टेड क्रीपिंग इन। उनको पता चल गया कि किन किन को पनिश करना पड़ेगा। दिस प्ले वाज जस्ट ब्रिलियंट कमिंग इन फ्रॉम ज़ायवू एंड दुप्री। साथ में खेल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ज़ायवू की तरफ एक गैप था स्मोक का, उसका उपयोग किया, पुश किया, ज़ायवू को टेक डाउन किया। दुप्री वाज ऑलरेडी सुपर लो, उन्होंने पोजीशन बदला, बट जैसे वो साउंड सुनाई दिया, ही इमीडिएटली वेंट फॉर द ड्यूएल विदाउट गोइंग इन फॉर अ प्लांट। एंड एपेक्स उस राउंड को भी जीतते हुए नजर आया। आई थिंक एपेक्स जो ये स्मार्ट प्लेस करती हुई नजर आ रही थी, एंड स्पेशली स्टीको स्टेपिंग अप, वो भी पिस्टल पे जब उनके बुलेट्स खत्म हो चुके थे। इट्स जस्ट ब्रिलियंट टू सी द प्ले कमिंग इन फ्रॉम एपेक्स। बिल्कुल सही कहा। जब भी दोनों प्लेयर्स में आपने देखा, दोनों टीम सॉरी, जब भी प्लेयर्स को स्टेप अप करने की जरूरत पड़ी थी, उन्होंने स्टेप अप किया है, और उसका आउटकम आपको नजर आ रहा है स्कोर बोर्ड के ऊपर। लेकिन दोनों टीमें बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहती, एक छोटा सा भी मौका नहीं देना चाहती सामने वाली टीम को। और ये स्टेक्स होते हैं, ये लेवल होता है काउंटर स्ट्राइक का जब आप मेजर सेमीफाइनल में खेल रहे हो। देखना ये बनता है वाइटैलिटी अब सेकेंड हाफ में क्या गुल खिलाती है। साइड स्विच हो जाएंगे, बट फॉर एपेक्स अ कपल ऑफ फ्री फ्लैग्स जैसे स्मोक के थ्रू पुश कर रहे थे, ही प्रेडिक्टेड इट राइट, एंड अपनी टीम के लिए जैसे उन्होंने फ्रैग्स लिया, राउंड भी यहाँ पे मिलता हुआ चला जाएगा। 8-7 का स्कोर लाइन, ज़ायवू विद 18, स्टीको विद 15, जेल देखे 13, बट आई थिंक वन प्लेयर दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग टू सी अ लॉट फ्रॉम वाज किक्सन। बहुत सरप्राइज फैक्टर रहते हुए नजर आए थे पिछले गेम जब उन्होंने खेला था, और दैट इज नाउ ही स्टिल नॉट स्टार्टेड ऑफ दैट ग्रेट। 4 किल पे नजर आ रहे हैं, एंड उनके ऊपर नॉक है। प्लेयर ऑफ द वीक नॉक बनते हुए नजर आए आफ्टर येस्टरडेज परफॉर्मेंस, but today it's not yet started. Side switch होने के बाद I hope they have something different, but अभी के लिए तो Vitality will be happy. Challenge जरूर नजर आ रहा है, but Vitality have seemed to be cleaner in their approaches, in their executions, in the way they won rounds. Whereas Apeks का जो round victories था, it was chaotic. लेकिन इसी केओस में सारे के सारे प्लेयर थ्राइव करते हैं, उसमें कोई सवाल नहीं है। वाइटैलिटी ऑन द टेररिस्ट साइड एंड नो यूटिलिटी। ये मिस बाय है कि स्ट्रैटेजी इनकी नो स्मोक्स एट ऑल। आई थिंक क्रॉसओवर देख चुके हैं वो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो भी हो रहा है। कनेक्टर में रश मारने वाले, बट ओके मेजर सेमीफाइनल्स एंड टीम डिसाइड करती है 5 ब्लॉक टेबलर रशिंग प्रेस डब्ल्यू। I don't even know what to say at this point. I don't even know. जब अनएक्सपेक्टेड प्लेस हो रहा है, you have to do something unexpected. I think that's what is the motto right now. 4v1 situation kicks in. मैं बात कर रहा था, this player has to pop off.
maybe not clutch round, but even if he does damage here, at least unka confidence thoda boost up hoga. But Spinks, he's waiting up close. Already cross dekh chuke hain, pata hai player ko, and already एक और खिलाड़ी को बुला चुके थे stairs की तरफ. It would have been a high-low setup coming through, but Vitality get the pistol and keep the lead. मैं इतना ज़्यादा शॉक इसलिए हूँ बिकॉज मेजर चल रहा है. सैम आप समझिए इसकी गंभीरता को. कोई यूटिलिटी नहीं, कोई स्ट्रैट नहीं, जस्ट प्रेस W गो किल. और ये बहुत बड़ी मीम होती थी ज़ाइवू के लिए, सिंपल के लिए, जब भी खेलते थे प्राइम में. ज़ाइवू गो किल, सिंपल गो किल. और यही चीज़ यहाँ पर नजर आ रही थी. वाइटैलिटी ने अपनी टीममेट्स को बोला गो किल और पहला राउंड निकाल के आ गए. एक स्काउट का इन्वेस्टमेंट जरूर नजर आ रहा है, बट कैन दे फाइंड वैल्यू. कनेक्टर की तरफ पुश आया था, तुरंत स्मोक कर देंगे. ग्रेनेड आल्सो गोज इन. थोड़ा डैमेज एपेक्स जरूर ले लेंगे, बट दूसरी ओर शॉट को गार्ड करते हुए नजर आया था. जब पीक आया, दे डिड नॉट फाइंड एनी प्लेयर्स एट कनेक्टर. तुरंत रोटेशन करते हुए नजर आ रहा है. अभी तक कोई भी पिक्स नहीं मिला है, बट वाइटैलिटी स्टिल वांट टू हिट ए. ए की तरफ सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी रहने वाला है, स्टीको, एंड उनके साथ पीछे आ रहे हैं जरूर जेकिम. बट कैन दे डू एनीथिंग? देखना जरूर पड़ेगा. यूटिल अभी भी भरपूर है वाइटैलिटी के पास, ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं किया उन्होंने. They have grenades, they have flashes, they have smokes, they have mollies. And now the setup will come through. Lineups करेंगे, तुरंत टूट पड़ेंगे साइड के ऊपर. इसका अंदाजा जरूर लगेगा. स्टेयर्स के ऊपर एक खिलाड़ी रहने वाला है. इनिशियल पैलेस फाइट नहीं चाहते थे, बट स्टेयर स्मोक ऑफ किया जाएगा, कनेक्टर भी स्मोक ऑफ किया जाएगा. सीधा साइड के अंदर एंट्री, सीटी को भी. बट लुक एट दैट, फ्लैश टू द सीटी एंड सीधा आगे जाते हुए दुप्री पिक्स अप वन. ही इज लुकिंग फॉर अनदर, एंड जी हां, नॉक को भी गिरा देंगे. ही इज रनिंग लिटिल डब्ल्यू, एंड उनके पीछे देखिए ज़ाइवू. ज़ाइवू बोल रहे हैं, अब वाइटैलिटी पूरी बोल रही है, यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट गेट डाउन विद दिस. जल्दी खत्म करते, जल्दी सोएंगे, आराम से नींद आएगी रात को. That's all they want to do. कैपिटलाइज कर रहे हैं उनकी मोमेंटम पे, उनकी वेपनरी के एडवांटेज पे, और 10वां राउंड निकाल दो वाइटैलिटी अपने आप के लिए यहाँ पे. एपेक्स किस तरीके से जवाब देगी अगले राउंड में, ये देखना जरूर बनता है. They're sniffing on Jacob. पूरा उनकी सर्च पार्टी निकल चुकी थी, एंड जेकिम को जरूर किल करते हुए नजर आएंगे. एंड दैट इज गोइंग टू बी डबल डिजिट्स ऑन बोर्ड फॉर वाइटैलिटी. बट ये प्ले देखिए, फ्लैश, एंड उसके बाद ज़ाइवू खुद प्लान करके वो भी भागते हुए डुप्री के साथ बाहर आएंगे. लेट्स गो हेड ऑन. सबके साथ ड्यूल लेने के लिए तैयार हो चुके थे. एपेक्स माइट बी अ लिटिल अपसेट, बट अभी भी देखिए जो लीड है इतना बड़ा नहीं बना है. दे गो फॉर अ फुल सेव दिस टाइम. नो इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी सॉर्ट्स. हेवी बी स्टैक करते हुए नजर आ रहे हैं. एक ही खिलाड़ी ए की तरफ रहने वाला है, एंड ज़ाइवू स्नीक इन कर चुके हैं. ओह माय गॉड, इट वाज एपेक्स एंड मैजिस कनेक्टर की तरफ. ही पिक्स टीको ऑफ. ऐप से खिलाड़ी आ रहे हैं. ज़ाइवू विद वन. अभी भी ट्रक के पास खिलाड़ी है. ज़ाइवू इज नॉट इवन पेइंग अटेंशन. ओह नॉक, मैंने सोचा उन्होंने शॉट मिस किया. देयर कैन बी अ फ्लिक कमिंग थ्रू, बट इवेंचुअली क्लियर ऑफ कर लेंगे. ज़ाइवू को टेक डाउन कर चुके हैं. इट इज अ 2v4 सिचुएशन. वेपन एडवांटेज रहने वाला है अभी तक वाइटैलिटी के पास, बट एपेक्स, लेट्स सी, कोई अगर अनोखी चीज कर सकते हैं तो लेट देम डू इट. वाइटैलिटी एपेक्स को फिलहाल के लिए बुली कर रही है. ज़ाइवू ऑन 20 फ्रैग्स. आई एम श्योर बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन स्टैट्स. एक किक्स इन 4 किल निकाल के बैठे, सिर्फ और सिर्फ 4 किल. ही नीड्स टू शो अप, ही नीड्स टू वेक अप फ्रॉम हिज स्लंबर. बहुत ज्यादा प्रेशर होगा उनके ऊपर परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ये राउंड में क्या करते हैं? He could actually get that kill. And he will. I think इससे ज्यादा I don't think should be possible. Apeks के तरफ जा सकते हैं. There's a better weapon there. But Spinks उसको गार्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, thinking that there can be somebody coming to recover the weapon. वो भी एक्सटेंड नहीं कर रहे, but with the bomb ticking, blast होना चाहिए. And Spinks, he was expecting कोई ना कोई prop up करेगा. Kicks him down, nothing to be held on to.
सेफ था, जिसकी वजह से एपेक्स जरूर फुल बाय करती हुई अभी के लिए नजर आएगी, बट वाइटैलिटी राइट नाउ, जैसे आपने बोला, बहुत तेजी से खत्म करना चाहते हैं इस मैचअप को. They've already pushed themselves. 11 जरूर हो चुका है उनके बोर्ड पे. They just need 5 more rounds. ज़ाइबू देखिए तैयार थे क्विक स्विच करने के लिए, but again he was caught off guard. He was surprised. ऐसा होता है, ऐसे सरप्राइजेस लोग पुल ऑफ करते हैं. They sneakily walk up like a fox. किसी को अंदाजा नहीं लगता है, but अभी के लिए दूसरा राउंड शुरू हो चुका है. बहुत क्रूशियल राउंड रहने वाला है एपेक्स के लिए. जी हाँ, they pick up the first opening frag. अभी स्लो डाउन हो सकती है, but they're not. सीधा ज़ाइबू ने सोचा कि दूसरी ओर प्रेशर बनाते हैं, and he fails, he falls, and उसका एडवांटेज एपेक्स उठाते हुए नजर आएगी. वेपन रिकवर करना चाहते थे वाइटैलिटी के खिलाड़ी, एंड जी हाँ, रिकवर करके अभी डायरेक्शन बदला जा रहा है. यू सी हाउ क्रूशियल दिस इनिशियल फाइट्स आर. एंड इमीडिएटली माम्बा एपेक्स ने अपने तरफ ये राउंड खींचने का एक इरादा बना चुकी है. बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन नॉक होल्ड कर रहे बी पैलेस को. C4 अभी भी टी बेस के ऊपर. मेजिस्क C4 लाइनअप कर रहे लगा नहीं, स्मोक लाइनअप कर रहे हो. Imagine if you could just yeet the C4 across the map. सीधा जाके प्लांट हो जाता है. हाँ, of course. बम फेंकने तक बराबर था. I mean, if that happens, थोड़ा और ओवर एक्सटेंड करते हैं ना हम. हाँ, of course. लेकिन जेकब ये आराम से किल निकालेंगे. एपेक्स के लिए बेहतरीन नॉन ये साबित होते जा रहा है, बिकॉज जिस तरीके से किल्स निकाले उन्होंने, काम कर रहा है. मेजिस्क एंड स्पिंक्स दोनों भी शॉट पे क्रीप अप करने की कोशिश और भी जरूर हो जाएंगे. नॉक ने किल निकाला, दूसरा पे आराम से निकाल पाएंगे, लेकिन नहीं. स्पिंक्स भी काफी अच्छे शॉट्स मार रहे हैं. अगर आप देखें तो ही इज बीन फ्लाइंग बिलो द रेडार, बट ही इज पोस्टिंग बेटर नंबर्स देन ज़ाइबू राइट नाउ. फर्स्ट अपने सीडी साइड पे स्पिंक्स वाज जस्ट इनसेन. आई मीन बहुत बारी उन्होंने कहीं ना कहीं तुरंत ऑफ गार्ड पकड़ा है ओपोनेंट को जब वो टी साइड पे थे. दैट वाज एपेक्स. इस बार स्पिंक्स विल नॉट बी एबल टू फाइंड अ लॉट फॉर हिज टीम. एक और राउंड यहाँ पे जो मिल सकता था वाइटैलिटी को, मिलेगा नहीं. एपेक्स अपना 8वां राउंड जरूर लेती हुई नजर आएगी, बट द इनिशियल ड्यूल वाज समथिंग दैट मैटर्ड. एंड उसके बाद ज़ाइबू wanted to make some action towards B, वो भी पनिश हो जाएंगे. एंड आई थिंक तभी जाके पूरा जो स्ट्रैट था वाइटैलिटी का बिखर गया, एंड एपेक्स फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट. दे पोजीशन देमसेल्व्स इन अग्रेसिव एंगल्स, एंड सारे फाइट जीतते हुए नजर आए. विल स्टार्ट ऑफ विद अनदर राउंड. स्मोक ऑफ करेंगे, बट स्टिल द क्रॉसओवर इज गोइंग टू बी देयर टू अंडर. जेल की तरफ से नॉक, ब्रिलियंट पोजीशनिंग, स्मोक के ऊपर से यहाँ पे कनेक्टर में एक शॉट लेते हुए ज़ाइबू को डाउन कर चुके हैं. मिड के एग्रेशन को थोड़ा स्लो डाउन करेंगे, बट एपेक्स pushes up close, looking forward to अगर कोई खिलाड़ी बी शॉट की तरफ अगर नजर आता है, wants to take them down. लेकिन बोनस ऑफ डालेंगे जरूर, लेकिन इन टाइम स्मोक आएगा. जेएम को बैकअप देने के लिए तैयार होंगे. एपेक्स प्रेशर बनाते हुए धीरे धीरे करके. ज़ाइबू ही नीड्स टू स्टार्ट फ्रैगिंग, बिकॉज फर्स्ट हाफ में जिस तरीके की डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाया था, उसके बाद थोड़े से खामोश रहे. स्पिंक्स एक और बार 1 वर्सेस 3 में मुझे लगता है ये शायद कमिट करना चाहेंगे. 1 मिनट है. C4 उठा, अगर C4 उठा दे तो मेरे हिसाब से कमिट करना चाहिए उनको, एंड कर भी सकते क्योंकि उनके पास पैसा मौजूद है, एंड ये बहुत बड़ा मोमेंटम शिफ्ट दे सकता है. 2 फ्लैशेस भी उनके पास अवेलेबल है, लेकिन ये पिक निकालना बहुत मुश्किल होने वाला है. सवाल यह कि वो वॉक करेंगे कि नहीं करेंगे. नहीं, वॉक नहीं करना चाहते. इन्फॉर्मेशन अब फाइनली जाके वॉक करेंगे वो. 38 सेकंड्स ऑन द क्लॉक. दिक्कत ये उनकी जो पोजीशनिंग है, जिस तरह की पोजीशनिंग है, यहाँ पे एक पिक निकालने के बाद भी साइड क्लियर करने का समय नहीं होगा, वक्त नहीं होगा उनके पास. बहुत जल्दबाजी करनी होगी उनको. ये पिक सबसे क्रूशियल होने वाला है. अगर ये किल निकाल पाते हैं तो उनके ऊपर पिक जरूर निकालेंगे, लेकिन 19 सेकंड. या बी पे जाएंगे यहाँ से भाग के, या फिर ए पे जाएंगे. कोशिश ये बी पे भागना चाहते हैं, लेकिन शायद वो किल निकाल पाए. ऑफ है उनके सामने. जी हाँ, फर्क नहीं पड़ने वाला. नॉक उनको टेक डाउन करेंगे. सही माइंडसेट, लेकिन doesn't work. सामने ऑफ ही. Look at Vitality's support again. Apeks silencing them with their players is insane. Just ने एक पिक जरूर निकाला था, but the communication was just too good. बहुत reliant था,
बहुत ऑन पॉइंट था, क्विक ट्रेड्स आ रहे थे एपेक्स की तरफ से, एंड आई थिंक दिस इज वेयर द चेंज इज हैपनिंग. फाइनली ज़ोनिक यहाँ पे टाइम आउट कॉल करेंगे. ओह, इट वाज एक्चुअली एपेक्स इस टाइम आउट. क्यूबन की तरफ आएगा ये टाइम आउट. आई थिंक क्यूबन को एक आइडिया लग चुका है हाउ देवर टीम इज प्लेइंग ऑन द साइड ऑफ वाइटैलिटी, तो ये रिले करना चाहते हैं. एंड उसी के साथ जो अभी कंट्रोल में ले रही है एपेक्स, इसको ऑन गोइंग रखना चाहते हैं क्यूबन. Audience trying to rile Vitality up to get them back in gear. यही लैंड का मजा है. I think this is brilliant how the audience will also affect. ज़ोनिक तो ऐसा लग रहा था डांट रहे थे प्लेयर्स को. बहुत मस्ती कर ली आप लोगों ने, अब सीरियसली खेलने का वक्त है आपका. एक नॉक, ओह माय गुडनेस, नास्टी शॉट. लेकिन मेजिस जिस तरीके से पिक निकाले, डीगल्स जिस तरीके से वाइटैलिटी ने चलाई है इस पूरे मैच में, दाद देनी पड़ेगी. सबसे ज्यादा डैमेज शॉट करे, लेकिन ये हाँ एक और परफेक्ट फ्लैश ज़ाइवू का. स्पिंक्स स्टेप अप कर रहे हैं, और इसी चीज के बारे में कल पिम बात कर रहे थे एनालिस्ट डेस्क पे. इस स्पिंक्स जब आए थे टीम में, ज़ाइवू देखिए इज आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन जब बारी आती थी स्पिंक्स के पास, स्पिंक्स को अपने आप में भरोसा जताने की, ज़ाइवू से फ्लैश मांगने की, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे उनके पास मौका था, फ्लैश मांगा, फ्लैश आया और पिक निकाला उन्होंने. Brilliant play. And Spinks is not stopping. वो यहाँ पे खिलाड़ी को टेक डाउन करना चाहते हैं, इस AWP को हटाना चाहते हैं, but Knock is still taking down players. में जिसका आगे आना चाहते हैं. Brilliant flash coming in. कोई विजन नहीं रहने वाला है. He needs to go for his swing. बहुत कम HP में रहने वाला है. He switches his to the USP, but फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Magist takes him down. Vitality bring the round back. Opponent का टाइम आउट था, but Zonic ने जैसे आपने बोला बहुत मस्ती हो, मजाक हो गया. You need to get the round back, but nice replay. No vision but still picks it up. But ये Deagle बहुत भारी चला है. Has affected a lot for Apeks in this round. बेहतरीन तरीके से राउंड निकालते हुए वाइटैलिटी. मन कहता है कि इनको सिर्फ इको पे खिलाए, बिकॉज समहाउ दे चैनल द बेस्ट of the coordination, best of the skill, best of the communication. लेकिन Zonic बढ़ावा देते हुए अपनी टीम को, क्यूबन वापस बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड. उनको मालूम है ऑड्स उनके खिलाफ कितना ज्यादा प्रेशर होने वाला है, लेकिन एक सेकंड के लिए लगा शायद ही might just get left hanging. 12-9 स्कोर लाइन. Apeks ऐसा नहीं होने वाला उतना ज्यादा उनके पास, तो इको करना जरूरी समझते हैं. 12-9. जैसे वाइटैलिटी ने अपनी डीगल राउंड को निकाला था, अभी कहीं ना कहीं इरादा रहेगा एपेक्स को निकालने के लिए, बट दे आर लैगिंग बिहाइंड. 3 राउंड का डिफरेंस रहने वाले. इनिशियल कांटेक्ट पे कोई डैमेज नहीं पड़ा, थोड़ा डैमेज पड़ा, बट कोई पिक नहीं मिलेगा उनको. ब्रिलियंट सेट ऑफ स्मोक्स एंड फ्लैशेस. कोई विजन नहीं है. जंगल की तरफ स्पैम करेंगे एपेक्स. डजंट फाइंड एनी वैल्यू. बुलेट्स जस्ट जूमिंग अक्रॉस. किक्सन, बट किक्सन देखिए अभी भी 6 किल्स पे रहने वाला है. आगे आए, गेट्स पनिश्ड. किक्सन इज फाइंडिंग नथिंग. नॉक एटलीस्ट यहाँ पे स्पिंक्स को डाउन करेंगे. थोड़ा जो डैमेज डिश आउट किया था, टिकट की तरफ एक खिलाड़ी रहेंगे, बट ज़ाइवू ही इज लाइक इजी पिकिंग्स. दुप्री साथ देते हुए स्टेयर्स को क्लियर आउट करने के लिए जला रहे खिलाड़ी को. दुप्री विद अ सेकंड एंड एपेक्स विद अ क्लोजर. वाइटैलिटी विद 13. माम्बा मतलब ये कैसे ऐसे मोमेंटम शिफ्ट लेके आ रही है वाइटैलिटी. ये देखिए ऑडियंस ऐसा माहौल आपको यूजुअली देखने नहीं मिलता है. बहुत मुश्किल इस तरीके का सपोर्ट करना. लेकिन वाइटैलिटी अगर बात करें, मोमेंटम शिफ्ट, अनुभव, और ये जो जिस तरीके से खेल रहे, तुरंत बूस्ट किया 2 प्लेयर्स को ऊपर. फाइनली एपेक्स किल निकाल दो, लेकिन प्री ट्रेड नहीं होने वाली इतनी जल्दी. ट्रेड निकाला, लेकिन अब फाइनली जाकर ट्रेड होंगे. लेकिन मेजर्स उनके पीछे मौजूद थे. अब उनको आइडिया होगा, आवाज सुन चुकी है सामने कोई प्लेयर है. अगर ग्रेनेड अवेलेबल होती तो शायद और डैमेज दे पाते, लेकिन JL 53 HP सर्वाइव कर पाएंगे, देखना ये बनता है जरूर. लेकिन एपेक्स अब धीरे धीरे क्रीप अप करेंगे, लेकिन स्काई को पुश कर चुके हैं मेन के अंदर.
Apeks is in an incredible spot. 20 शॉट से आने के लिए बेंच पे जेएल बैठे हैं, लेकिन आवाज कर बैठेंगे। जी हाँ, आवाज कर बैठेंगे यहाँ पे। अगर एपेक्स स्पॉट होते तो फिर शायद जेएल के ऊपर किल निकल पाए, लेकिन जेएल आवाज कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली आवाज कर देंगे। He will get the first one. Can he find the second as well? ये सबसे बड़ा सवाल जी। फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एपेक्स का वो एंगल, परफेक्शन। साइको ऑन द बैक स्टैप, प्लांट ये ओपन किया गया है। एपेक्स अगर स्पॉट होते तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेजर्स के पास एचपी नहीं उतनी ज्यादा। साइको यहाँ निकाल पाएंगे? जी नहीं, फर्क नहीं पड़ता। एपेक्स उनको टेक डाउन करेंगे एंड टीम एपेक्स बहुत ज्यादा निराश, बहुत ज्यादा हताश। वो सीधा ड्यूएल इनिशिएट नहीं करना चाहते थे। एपेक्स को आपने देखा क्राउड करके उसके बाजू में बैठे थे। ही वांटेड द प्लेयर अगर बैकस्टैप कर रहे हैं आगे आने के लिए। अब देखिए इतने आगे आने के बाद फॉर अ सेकंड ही वाज लाइक ओ वेट, खिलाड़ी अभी भी यहाँ पे है। एंड एपेक्स वाज क्विक ऑन हिज ट्रिगर। टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे स्टीको को। Another timeout coming in from Apeks. Cuban कहीं ना कहीं अपनी टीम का जो प्ले है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। He has to get them back in together. Z वापस आ चुका है। पिछले बार it was Vaivu. अभी Z भी वापस आके it is going to be Zaivu. I hope दर्शक को समझ आएगा मुझे। Zaivu cannot connect that shot, लेकिन क्या दूसरा कनेक्ट करेंगे? जी हाँ, of course करेंगे। He's not going to miss those sitters. Fatality. Knock backstab पे थे, लेकिन जेएल उनके सामने खड़े थे। अभी भी 4 versus 4 situation। अब सवाल ही होने वाला क्या स्पिंग से? जी हाँ, आना। Maybe not. मैंने कहा आराम से निकालेंगे, but maybe I spoke too soon. फर्स्ट फ्रैग्स मामा हर वक्त टीम्स को स्लो डाउन करती है, बट देन व्हेन दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एन एंट्री, द सेकंड फ्रैग इज गोइंग टू बी सुपर क्रूशियल। जिस टीम को भी निकलता है दे काइंड ऑफ कीप कंट्रोल ऑफ इट। ज़ाइवू अभी भी होल्ड कर रहे कि कोई अगर पुश करेगा, बट अप क्लोज एंड पर्सनल तैयार रहेंगे। स्टीको डबल्स अप। ज़ाइवू जरूर टेक डाउन करेंगे, पनिश करेंगे उनको, बट अंडर पैलेस अभी भी इंतजार कर रहे हैं, स्पैम करने का ट्राई कर रहे हैं स्पिंक्स, बट इज नॉट फाइंडिंग एनी वैल्यू। मॉली आएगा फाइनली उनको क्लियर करने के लिए, बट Spinks does not exit at the same time to find knock. 3v2. Apeks might just be able to close it. Backstab के लिए already mid से push करते हुए नजर आ रहे हैं जेकिम। सोच रहे थे C4 लेके वापस जाए, but he was also worried कोई आगे पुश कर चुका होगा। शोल्डर दिख चुका था, इनिशियल ड्यूएल लेने के लिए तैयारी किया। ज़ाइवू को जरूर कॉल रिले कर चुके हैं। इट्स गोइंग टू बी 14-9। एक और पॉइंट वाइटैलिटी मैच पॉइंट मैप पॉइंट पे आ जाएगी। लुक एट दिस अंडर पैलेस, सिर्फ मॉली से क्लियर गया था, सोचा कि हो सकता है, बट इट डजंट हैपन। एपेक्स डज रीच डबल डिजिट्स। बहुत लंबा रास्ता तय करना है अभी। कहते हैं हम दिल्ली अभी भी दूर है, लेकिन साइको 2 इंपॉर्टेंट किल डीगल के साथ निकालते हुए जरूरी था, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। अब देखना ये बनता है कि वाइटैलिटी क्या जवाब देती है इसका, क्योंकि ओपनिंग पिक निकाली थी उन्होंने। एपेक्स के पास इतना अच्छा पैसा भी नहीं था, मैप पॉइंट पे लेके जा सकते थे, लेकिन जो गलतियां करी वो भारी पड़ेगी उनको। इंसेंडियरी डाल के, हाँ अग्रेसिव मिड कंट्रोल ले रहे, इंसेंडियरी डाल के बैक जो बॉक्स है उसको क्लियर किया। अब होल्ड करना चाहेंगे उनको सैम। ए मेन की तरफ एंट्री लेना चाहते हैं। स्मोक है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। C4 भी जरूर नजर आ रहा है। इट माइट बी अ सुपर फास्ट बर्स्ट कमिंग थ्रू। स्मोक जैसे क्लियर हुआ, नॉक मूव्स अवे टू चेक कनेक्टर। डुप्री वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, अपने टीममेट्स का लाइनअप के लिए इंतजार कर रहे हैं। पैलेस में भी एक स्मोक है जिसकी वजह से दे हैव हेल्ड इट ऑफ एज ऑफ नाउ। मैजिस्क कॉल दे चुके हैं कि स्मोक क्लियर हो चुका है। मिड का कंट्रोल अभी भी होल्ड कर दे, नो वरिंग अबाउट इट। नेस्ट को स्मोक करेंगे, एक फ्लैश आएगा, ट्राइज टू पुश अप। अभी भी मैजिस्क होल्ड करते हुए, इट वाज मैजिस्क, स्पिंक्स होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, बैकस्टैब अगर होता है। एंड फाइनली यू कैन सी मॉलीज फ्लैश, बट इट्स स्टिल ऑल वर्किंग आउट इन द फेवर ऑफ एपेक्स। जाके छुप गए, बट उनके ऊपर एक मॉली आएगा। डुप्री ट्राइंग टू क्लियर दैट एंगल आउट, एंड जी हाँ क्लियर करके दिखा देंगे। साइड का पूरा कंट्रोल
they cannot be confident on it. Connector का उनके पास ज़्यादा आइडिया नहीं है. Plant फिर भी execute करके दिखा देंगे, but look at this. This is going to be major coming in from Spinks. अगर एक भी खिलाड़ी को निकाल लेंगे, player देख चुके, he tries to spray down, बहुत कम HP पे रखेंगे JL को, but he somehow makes it through. But ये call relay हो चुका है. Spinks takes down Knock and ये flank जो आ रहा है late, इसको शट डाउन बिल्कुल नहीं करने का मौका मिल रहा है. Spinks takes 2 players down. Dupree already push करके टिकट की तरफ वेट कर रहे हैं. It's going to be very difficult to get this defuse through, but JL फिर भी यहाँ पे उनको किल करके दिखा देंगे. He's taking this defuse. Spinks आ रहे. Can he find it? जी हाँ, almost defuse होने वाला. सिर्फ 1 सेकेंड बचा हुआ था. And Spinks, as a matter of fact, they got it, I believe. They got the defuse. Did he? They did. 14-11. He got the defuse, yeah. Incredible stuff. Last moment. Last moment पे उन्होंने डिफ्यूज किया. तो किया था जरूर, लेकिन कुछ नहीं कर पाए यहाँ पे प्लेयर, अनफॉर्चुनेटली. 14-11. अब नॉट देखिए इतना ज्यादा एग्रेसिव खेल रहे हैं. आई थिंक आपका साउंड सुन चुके थे, लेकिन ये शॉट नहीं मिस कर सकती है. अगर इतना ज्यादा एग्रेशन दिखा रहे तो आपको वो शॉट कनेक्ट जरूर करना पड़ेगा. ज़ायू एक और बार एंट्री करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ज्यादा डेस्परेट आई बिलीव. दुप्री उनको बैकअप देने के लिए तैयार. Kixon is not having a good game यहाँ पे. माम्बा जितने बार भी वो कुछ भी ट्राई कर रहे हैं, he's failing on that. 8 किल पे, not looking like a great mirage for him. बहुत ज्यादा कमाल करके दिखा रहे पिछले गेम में. अभी के लिए they bring it down somehow to a 4v4, but जिस हिसाब से कंट्रोल है साइड का, it's going to be tough. Styko puts Zaiwu down, but अभी भी शॉट का कंट्रोल रख रहे हैं. बेंच का पोजीशन पता चल चुका है. JK brilliant wall bang, but अभी भी देखिए एंगल होल्ड करते हुए Spinks. Picks one, looking for the second, but JL with a good trade. Apeks आखिरी खिलाड़ी रहने वाले, एक को टेक डाउन करेंगे. Knock उनके नीचे रहने वाले. बैरल दिखा, but it does not work. Immediate swing coming in from Knock. Apeks still in the game. मैप पॉइंट नहीं बिल्कुल दे रही है वाइटैलिटी को. They're struggling to get that map point. यहाँ पे एक और टाइम आउट आते हुए Apeks टाइम आउट लेने वाली इस बार. Even though they won the round, Cuban has some kind words. या अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे, लेकिन वाइटैलिटी साइड कंट्रोल लेने के बावजूद वो राउंड नहीं निकाल पा रहे. वो एंट्री कर जरूर है, लेकिन is not able to deliver. बहुत ज्यादा दारोमदार है ज़ायू के ऊपर. Spinks डिलीवर कर रहे हैं, no doubt about that. लेकिन ये क्यूबन की डॉटर, जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, क्यूबन. Yeah. I believe मेरी उतनी उम्र होगी जब मैंने क्यूबन को देखना स्टार्ट किया था. I think whenever I hear a lot of things from you, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बोलता हूँ, माम्बा keep going. I want to hear more from you. आप एक है ना, आप थोड़ा बोल सकते हैं आपके पास एक ब्रह्मांड है CSGO का, जो बहुत कम ही लोगों को पता रहेगा. बट JK, oh he's popping off, he's going nasty. 3 लोगों को उन्होंने मिड पे गिराया. उसके बाद एक ट्रेड आया, बट I think this is a round. I'm okay to call it too early, but जिस हिसाब से ओपनिंग मिला है माम्बा is brilliant. Absolutely brilliant, no doubt about that. लेकिन vitality बैक फुट पे अभी सारी यूटिलिटी एक्सचेंज करते हुए गन्स एक्सचेंज करी है उन्होंने. लेकिन अब JL दूसरे प्लेयर को स्पॉट नहीं किया, लेकिन दुप्री को टेक डाउन करेंगे. एक और किल निकालने की जरूरत निकालेंगे. 56 सेकंड अब, लेकिन नहीं, 9 उनको शट डाउन करेंगे. Spinks हमेशा फ्रैग्स निकाल रहे हैं अपने आप के लिए, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि वो ऑप का सामना नहीं कर पा रहे हैं. राइटली सो, अगर सामने ऑप है तो आप कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते. Apeks he is giving it his all उस एरोन को. He wants to make it sound the loudest. देखिए वाइटैलिटी के पास फैंस जरूर है, बट डाई हार्ड एपेक्स फैंस जो स्टेडियम में नजर आ रहे हैं, जो अरीना में है, they want to make sure their echoes are heard. बहुत तेजी से एप्स की तरफ जाए, शोल्डर जरूर दिखा था. Spinks को टेक डाउन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं. barely surviving with 29. थोड़ा डैमेज अपने टीममेट को करते हुए नजर आएंगे यहाँ पे.
इसके वजह से Kixon and Jakim, they're going to be super low. जी हाँ, HP कम होगी लेकिन स्पिंक्स जिंदगी का one of the best performances दे रहे हैं यहाँ पे. Almost 30 फ्रैग्स निकाल चुके हैं, 29 फ्रैग्स पे बैठे हैं एंड पूरी की पूरी कोशिश यहाँ पे उनकी कि राउंड निकाले वाइटैलिटी के लिए. Jakim, Kixon दोनों पहले सर्वाइव करे 6 और 7 HP पे, लेकिन अभी भी जिंदा है. ये राउंड शायद हो सकता है वाइटैलिटी का एंड काफी क्रूशियल राउंड, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना पैसा होगा एपेक्स पे. अगर ये राउंड हारते तो मुझे लगता है वाइटैलिटी आराम से पूरा मैप क्लोज कर लेंगे, लेकिन नो, गोली चला दी प्रीमेच्योर तरीके से, लेकिन स्पिंक्स को मारेंगे वहां पे. दुप्री तुरंत ट्रेड निकालते हुए. दुप्री का के ऐसी परसेंटेज जरूर देखना चाहूंगा एंड में, बिकॉज जिस तरीके से ट्रेड्स निकाल रहे हैं काफी कंसिस्टेंट बेहतरीन तरीके से ट्रेड्स निकालते जा रहे हैं एंड ही वाज फ्लाइंग अंडर द रेडार. लेकिन साइवू वापस और ज्यादा डैमेज लेते हुए. साइड क्या एपेक्स ने देखिए रीटेक नहीं करना चाहते हो, उसका कारण है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है. बेहतरीन कॉल यहाँ पे, अगर इस रीटेक में कमिट करते तो ये मैप यहीं खत्म हो जाता. गुड डिसीजन मेकिंग एंड स्पेशली इनके दो जो प्लेयर्स Jakim एंड Kixon इतने लो बन गए इनिशियल ड्यूल में, बट नॉक ट्राइड हिज बेस्ट. उनको पता था कि एक खिलाड़ी रहने वाला है एंड दूसरी ओर शॉट से इतना ज्यादा शोर आ रहा था. ही न्यू ही आइदर हैड टू टेक एप्स और शॉट, बट शॉट की तरफ इतना शोर मच रहा था तो उन्होंने बोला आई थिंक इट शुड बी ओनली वन. जरूर एक निकाला, बट दैट ओपनिंग वाज नॉट इनफ. वाइटैलिटी सिक्योर मैप पॉइंट फॉर देमसेल्व्स. बहुत खुश है अभी फैंस, बट अभी तक खत्म नहीं हुआ है. एपेक्स बेटर देन एपेक्स. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आई एम गोना काउंट मोहम्मद कितने बोर्ड्स देखने के लिए मौका मिलेंगे. ये चौथा टाइम आउट यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए प्लेयर्स, फैंस, कोचेस सबकी लेगेसी है यहाँ पे. पुराने प्लेयर्स, नए प्लेयर्स, जनरेशनल शिफ्ट की बात करी जो जोनिक ने वो दिखाई जरूर दे रहा है हमें. स्पिंक्स, ज़ाइवू लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मेजस, दुप्री बैकअप देते हुए. बात करें एपेक्स की क्यूबन की जो एक्सपीरियंस हाथ है वो अपनी टीम को साथ में लेके चलेंगे. 15-13 का स्कोर और वाइटैलिटी नीड्स जस्ट वन मोर राउंड. एपेक्स कैन दे मेक दिस हैपन. पैलेस हेवी प्रेजेंस रहने वाला है. साइड पे स्टीको अंदर पैलेस खेलते हुए अभी के लिए. मेन की तरफ से एक ही खिलाड़ी आने वाले हैं. पैलेस से जो नीचे आ रहे थे उस कैरिंग द C4 नॉक्स आते हुए 1v1 ज़ाइवू के सामने चले गए. स्टीको थोड़ा और अग्रेशन दिखा दिया. साइड पे एक खिलाड़ी रहने वाला है, बट इट डज नॉट वर्क आउट. नॉक टेक्स हिम डाउन अलोंग साइड विद Jakim. आखिरी खिलाड़ी ज़ाइवू गेट शट डाउन. क्यूबन बहुत खुश है. There might be map at map point, but Apeks are not going to give them a chance to close this map. इतनी जल्दी नहीं होने वाला है. They're giving it their all. क्या ही प्ले था स्टीको का. एंड आई थिंक ये पहले नॉक का जो पीक आया इट वाज सुपर क्रूशियल. अगर नॉक नहीं पीक करते स्टीको वुड हैव बीन टेकन डाउन. स्टीको को वहां पे एक पिक लेने के लिए मौका मिला. These kind of plays being done, टीममेट्स का सपोर्ट मिलना बहुत क्रूशियल होता है ऐसे राउंड्स में, एंड दैट्स द रीजन एपेक्स आर एट 14 एंड नॉट लेटिंग वाइटैलिटी रन अवे. ज़ाइवू is so blind over there, लेकिन दुप्री फिर भी किल निकालेंगे. इतने फ्लैशेस फटे थे ज़ाइवू के मुंह के सामने. I would have probably needed a eye replacement after that. एक के बाद एक पट फ्लैशेस फटते जा रहे थे. जरूर निकालेंगे. Will get taken out as well. Apeks निकालेंगे. एक और ज़ाइवू, एक और किल. एक और किल. 6 and 1 versus 5. बहुत प्रेशर होगा. पूरे मैच में कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, लेकिन अगर यहाँ पे ये 1 versus 5 निकालते हैं अपने आप को इमोर्टलाइज कर लेंगे. किट अवेलेबल है उनके पास. C4 अभी तक प्लान नहीं हुआ क्योंकि C4 जी बेस पे. It's coming to a 1v2 रहेगा यहाँ पे. He makes magic work with the first one. Apeks छुपे हुए ट्रिपल के पीछे. He swings and gets it. Zonic screaming. पहले मैप में राज एपेक्स का पिक था, छीनते हुए नजर आए वाइटैलिटी. Yes, it was a close battle, but vitality secure.
ये बहुत crucial था माम. Apeks should have tried to get this because इस पे stats दोनों का almost नजदीक है, but the next map coming in Vertigo, Vitality are monsters in that. बहुत मुश्किल होने वाला है, and Apeks ने खेला भी नहीं है Vertigo in the recent times, whereas Vitality have had, and they've again had a great victory. क्यूबन को देख के मुझे काफी अच्छा लगा. किक्सन को दिलासा दे रहे थे, बोल रहे थे कोई बात नहीं. नर्व्स किक्सन को पकड़ रही है वहां पे. इतना आसान नहीं होता इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना जब आप इतने बड़े क्राउड के सामने खेल रहे होते हो, स्पेशली ऑन अ स्टेज एज बिग एज दिस. तो दिलासे की जरूरत. लेकिन मैं जरूर सुनना चाहता हूँ कि ज़ायो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे अपनी टीम के साथ. I hope वो जैसे कैमरास के साथ जा रहे, एक माइक स्टैंड में अगर लेके चले जाते, we could have heard something, but I think वही बात कर रहे होंगे कि मैच बहुत नज़दीक गया. There were situations where Zywu is also being put down, but Zywu बहुत ज़्यादा crucial बनते हुए नजर आए. Even Dupree was especially brilliant जब हमने first half की शुरुआत देखा था. Dupree was single-handedly keeping control of B. थोड़ा चिंतित जरूर है Apeks की खिलाड़ी. You can see that on their faces, but अभी भी it's best of 3. दूसरा मैप रहने वाला है. They look forward to energizing themselves, getting back into the game. इतना आसान नहीं रहने वाला है. Cuban डिस्कस करते हुए, सुनते हुए अभी के लिए, what difference they can make, क्योंकि Vertigo बहुत crucial रहने वाला है. जी हाँ, बहुत ज्यादा क्रूशल रहने वाला है यहाँ पे. लेकिन वाइटैलिटी 16-14 पहला मैप अपने फेवर में लेके जाते हुए स्पिंक्स की तारीफ करनी होगी. ज़ायू ने काफी अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं वो मिसिंग थे. स्पिंक्स कंसिस्टेंटली फ्लैग्स निकाल रहे थे, लेकिन डुप्री फ्लू अंडर द रेडार. अगर आपने नोटिस नहीं किया, डुप्री के पास भी काफी ज्यादा किल्स थे. यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने खेला शानदार था, बट वाइटैलिटी इंचिंग इट आउट. पूरी टीम वाइटैलिटी की तरफ से बहुत बेहतर खेल रही थी. दिस मैप कुड हैव पुश्ड ओवर टाइम मामा अगर किक्सन का भी साथ मिलता. आपने देखा किक्सन इज नॉट देयर. जी हाँ, आई थिंक किक्सन कुड हैव बीन द डिफरेंशिएटर, बिकॉज़ जिस तरीके के इंपॉर्टेंट किल्स वो नहीं निकाल पाए थे, उसकी वजह से बहुत नुकसान करना पड़ा टीम को. लेकिन What do you do if you're Kickson, right? प्रेशर इतना ज़्यादा होता है और आप हमेशा रिग्रेट करेंगे इस चीज़ को कि मेरी वजह से वो एक एक्स्ट्रा राउंड नहीं निकाल पाई टीम. बट नॉट का ये शॉट बेहतरीन था. आई थिंक सब प्लेयर्स ने स्टेप अप किया है. पूरी टीम स्टेप अप करती हुई नजर आई थी. थिंग्स विल हैपन. इट्स नर्व रैकिंग, जैसे आपने बोला. बहुत बड़ा स्टेज है. समटाइम्स इवन दो इट्स नॉट अ प्रेशराइज्ड सिचुएशन, जैसे जोनिक बता रहे थे, इट्स मेंटल गेम एज वेल. देखेंगे क्या वो रिकवर करते हुए नजर आएंगे. बट अभी के लिए जाएंगे, सुनेंगे हमारे एनालिस्ट क्या बोलेंगे इस मैप के बारे में. Has this been an emotional moment for you? Oh yeah, absolutely. I mean, so emotional that I kind of forget about it already. You know what I'm saying? It's like skydiving, pretty much. It's so huge in emotions that it's really hard to remember already. But I know that. That was the best way to do it. Have you skydove before, Kenny? I did. You did? And I forgot about it. Just instantly. Just forget about the trauma. No trauma in the side of the server for Vitality though, although it did get incredibly close. The fact that they do steal away Apeks' map pick off Mirage, it came down to some heavy details, but also Zywu starting off really, really hot, and then Spinks following later on in the game. Yeah, I'm just trying to get my pulsation down. Like, my heartbeat's probably above 150 now. I don't think that's healthy. Got a call mid down for the Vitality fans as well. Listen, tremendously important 30th round here for Vitality 16. We have to be honest, if it wasn't for some of the individual qualities, I think we saw the flaws on that Mirage map of Vitality. We talked about it on the desk. We said for Apeks, the team that is, this was a golden opportunity to put 1-0. Vitality made it through, mainly thanks to an incredible start from this man. Zywu, of course, on your screen. But we did have to absolutely suffer until the very end.
He definitely cooled off, actually, a little bit there. That was a bit surprising, but I don't know if you saw the shot. That's because he rushed us first. I don't know if you saw the shot, Kenny, where he shot through triple and killed a bomb planter or anything like that? Or No, unfortunately, I missed that one, but okay. I know for I was going to say, do you ever hit that one? But okay, looking at these shots, Kenny, are you hitting this today? How are you? Today? Yeah, are you hitting this today? Today I'm old. I just retired. Exactly. But no, nothing close to ZywOo, but that's the thing about the Vitality that is interesting is that they're probably one, if not the best team in the world on T side. Yeah. And when you have a star like that from ZywOo, it's always like pretty much like when you see ZywOo side on City side, you're like, that's bonus. That's pretty much bonus, you know, because you know that they're gonna do the job on T side. Even though that T side on Mirage right now like was a bit more shaky than usual, but like the City side was really up to ZywOo. He's an AWPer obviously, so he's really mobile on the map. So he's having a lot of impact, but having him starting like that is making a huge difference. And then Spinks really came out to play on that T side. I think you prefaced it, Kenny, perfectly. The fact that we've seen Vitality being the strongest team on the T sides. Apeks definitely made them work for those rounds, but some great individual moments from Spinks. Yeah, some of these multi-kills really helped Vitality go over the finish line. I also think Dupree is worth a couple of commendations as well. When you think about the T side and you talk about how they struggle, he had a few of these can-opening moments where if he doesn't get the entry, that's an issue. And could we just address why ZywOo is going in first in all of these executes? Like, it kind of got me upset just a little bit. We'd want ZywOo to play the end round, and it wasn't really the case, at least on these B hits. Are they just shooting themselves in the foot a little bit? I think Apeks just wants those flash assist stats because for some reason he's always in the last position, even though he's a born and bred entry fragger. Like, Kenny, why did Apeks switch from entry fragger to throwing flashes, man? Don't you want to? He's bragging a lot about it. Yeah, he's bragging about it. He's really proud of himself, and he's right to do, but really proud of himself. But the thing about ZywOo is that like he's so good with rifle as well, you know, that he's capable of like doing a double entry on B side or whatever side. So I think that knowing that strength of himself and the team knowing that strength of himself as well, they also use him for that, you know. So if there is a situation to unlock, it's not that surprising to see him going first at the end of the day, you know? Kenny, can I pick your brain about the man that we see on our screen right now, Apeks, a little bit? Obviously, you just gave him a little bit of a jab there, but the fact that you lifted a major trophy with him back in 2015 when he was in an entirely different role, how crazy is it to see kind of his growth? I mean, it's only like respect to him, you know, like, I mean, Manny played with him as well, and we could have seen back in the days already that he had that fiber of being an in-game leader. Obviously, he had like those like character issues that also are, it's also his strength, you know. It is what it is. But like, he's a hard worker. He has everything. He has anything he needs to be a great in-game leader. Took him time, took him experience, took him also like a really hard situation with G2 back in the days that he didn't necessarily deserve either. But like, as a man and a player that I followed in my entire career, it's been a pleasure to see him evolve as a player like that, you know. And that what makes a difference between him and a lot of players is that he managed to change himself as a player, you know, like, and evolve. I mean, we played with him. We know how he was. But maybe not everybody knows how he was. You know, he's a very emotional player. At the time when we were in Titan, did you think he was going to end up being the IGL of a team like that? Did we think about it at the time? Not in Titan, but beginning of G2, I think I figured it out. And even like, he always liked having responsibilities. He always grind the game a lot. And the biggest strength, and one of my biggest regrets as well, I don't have any regrets, but you know, like things that I'm like, maybe I should have done differently, is that Apeks makes his star player much better. If you take Apeks out of Vitality, ZywOo will, not sure about that, but ZywOo might be performing less. Very careful. Yeah, he might be performing less, you know? Just a smidgen worse. Just a little bit worse. Yeah. It could be worse, you know, but I've played with him, and I'm at best years with him because he brings the best out of your star player, you know? It's really hard to play with him sometimes. You argue with him, you fight with him, but he literally made me play my best at the time, and I think he's helping ZywOo a lot, you know? I think the emotional angle is a really applicable one, particularly in this map, because historically, Matthew, we've seen Vitality get to the precipice of a map victory, and then everything crumbles, everything collapses. It has been a totally different story coming into this particular major, because as you said, they haven't dropped a map, but hell, they have played some damn close ones. Yeah, and it's both refreshing and surprising.
to see Vitality actually stand up to their responsibility when round 30 comes around the corner, whereas usually, historically, they would kind of fumble the bag. You know, they would have all of these possibilities to close games, and then suddenly would get a little bit tight, and Apeks would get a little emotional, they would get a little bit fluffy. That wasn't the case here, and it hasn't been the case in Paris all the time. We've mentioned all of these results, 16-13, 13-12, 14 once again, and in an area where we can see the people here having a little bit of an all out with the lights, where the pressure is 100% on you. This would be a moment where you could crumble. When you've been up so easily against Apeks on your first map, and then you see them coming back on the scoreline, everything is coming together for you to crumble and absolutely make a mess out of it, but they didn't. Can we just appreciate these beautiful scenes going down in the arena? Kenny, for you, what does it mean to have the final CSGO major in Paris, in France, and to have this incredible crowd in attendance? Well, we have a few tournaments in France already that have been quite amazing. Like one of them, best probably, will remain ESL Pro League S9 in Montpellier. And France is tend to be like the kind of country where like, CSGO is not in the main game and stuff. But look at this. Even on Thursday, that was quite full, you know. So it just shows that we are, at the end of the day, we might be a country of Counter-Strike, you know. And that's beautiful to see. That's beautiful to see. Absolutely beautiful scenes. You can hear the roars of the crowd echoing in there too. Let's move on to talk about what is Vitality's map pick. That is going to be Vertigo, and I love that we get to see this picked out of Vitality, because this has been a map we know they've been honing in their craft on, and it's become kind of a stable ground for them as a group. You're absolutely right, and it's been the mark of any team that has won meaningful events to have at least 3 maps where they can challenge anybody. And for Vitality, that little package has Anubis, Nuke, and Vertigo. These are 3 maps where I'm ready to trust Vitality with my life. And now that they have survived this little scare of Mirage, they got the blood pumping just a little bit. To me, the series is over. To me, the series is done. I think Vitality did what they had to do, surviving in the first map. Now we're moving on to Vertigo. It's their own turf, and everybody's lining up. I think we're sending it. Yeah, I'll reiterate that Apeks told me that he believes that him and Vitality are the best T-side team in the world on Vertigo. That is due in part to the trio of players that they have taking that ramp control. You have Zywoo, you have Dupree, you have Apeks himself. All 3 of them are going to be working in tandem to make the other Apeks, the team Apeks, their life absolutely hell. And I think that B as well. Huh? Magis can be as well on the offense. I think Magi's impact on Vertigo a few days ago in quarterfinal has been understated, but it definitely made a big difference. Yeah, versus Into the Breach, it was crazy on that T side alone to see the impact that Magis was putting up. And it's also crazy that we're looking at Vitality now as a team that can potentially, Maniac, be firing on every single damn cylinder. It's been there, I want to say the last step. Maybe that's not exactly the right term to be coining here, but we've always thought there were some crazy qualities in Vitality. It's not from yesterday. Zywoo, Spinks, a good map of Magis here and there, but now it feels like everything is kind of coming together, and the probability of these elements actually activating are much higher. You're asking me, are we going to see a Magis on the B side on the offense? I'm saying yes, absolutely. It seems like it. He's had multiple examples. Dupree on the defense on B, one of the sites where he's going to be needed the most. He's had a beautiful first map, 1.43 rating as well. So all of these things are coming together. The stars are aligning. Shout to Astralis as well for Dupree and Magis, and he's coming home. Maui, it sounds unlikely that Apeks are going to be battling back into this one. Just stolen the UK line there. Thank you so much, Maniac. We're going to let that slip be saying it's coming home and Into the Breach have been taken out of this event. We got a UK player or UK coach on the other side of the server, rather. Is there any hope for Apeks coming into this one if you're hoping to see this go all the distance and go to a 3? Ray, I would give it like 90-10 in this one. We've been wrong before about underdog. What's the 10, Maui? The 10 is if Kixan can play to the level that he has so far. In the quarterfinals, Kixan was the reason that one of the biggest reasons they were able to win their quarterfinal matchup. On Mirage, he was nowhere to be found. It felt like he was flustered, couldn't find ideas, couldn't find his individual form. He needs to be contributing a little bit more. Even though he's an in-game leader, I need to see a little bit more from his fragging department. Kenny, I think it goes without saying, who are you picking in this one? Is it 2-0 for Vitality? Yeah, I think so, but despite what you just said about Kixan not having the same impact as usual, they still made 16-14, which is a really close game. That's true. Vertigo can be a random map at some point, not necessarily for Vitality, but you know, like it's kind of momentum. T-side doesn't really matter at some point. So I will mostly go like 70-30 for Vitality.
But I actually think that the momentum goes for Vitality, and obviously the crowd makes a difference. Like, I'm not gonna lie, the crowd buff is a thing. Yeah, the Golden Hornets have been shouting, screaming, roaring all the way home. I think that's going to continue in this second match. Yeah. 2-0. 2-0. 2-0. You heard it, unbiased from the three men right here. Let's get the second map underway. Let's throw on over to Vertigo. What a start from Vitality. एक मैप जरूर उन्होंने जीता है. Now it's time to get the second underway. जैसे Zest ने बताया, the Golden Hornets, they have been buzzing from map 1. इस मैप में भी रुकना नहीं चाहते हैं. जिस हिसाब से Zest ने ब्रेक डाउन किया with Kenny S, जरूर जो कम्युनिटी है थोड़ा दुख मना रही है, because the big man Kenny S रिटायर होते हुए नजर आ रहे हैं. But it is also going to be the last major of CSGO, and Vitality are right now outright favorites. Vertigo, पिछले हमने quarter finals में देखा था, they denied anything and everything and got the victory in their favor. इसीलिए analysts इस पे बोल रहे थे it's going to be super crucial. Mamba, what are your thoughts as we kick it underway? Well, you've heard it from the honest desk. Vitality all the way. Going to be a tough one for Apeks. Kenny ने बोला भी है, it's going to be all about momentum here on Vertigo. 70-30 जरूर दिया है because already Vitality have some momentum after getting first map. I think that Molotov didn't work. Yeah, failed. It doesn't matter at all because जिस तरीके से opening picks निकाली Vitality, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है. Zayu in the meantime आगे बढ़ते हुए. Jacob with the dualies, information delivered over the pass, waiting spot हो जाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे. G नहीं, Magisk will take him down. कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे. Kicks in the meantime. इकलौते player. उनको step up time for him to show up, लेकिन सब HP ज़्यादा कुछ मौका नहीं मिलने वाला उनको. Zayu खाता है उनका पहला round जाता Vitality की ओर. I think this is Magisk's map, Mamba. हमने जब Into the Breach के against भी ये Vitality खेलती हुई नजर आए थे. Cypher was a strong hold at B, but Magisk जिस हिसाब से B को open up कर रहे थे, understanding Cypher जहाँ पे खेल रहे थे, you can see it again. He opens it up for his team. B का control दिलाते हुए सीधा C4 को rotate करवाएंगे, plant भी हो जाएगा, and there was nothing that Apeks could do. Initially at least trades हो रहा था, they were keeping the numbers close. Second round शुरू हो चुका है. We can see 2 AKs out, and तुरंत push कर रहे हैं mid. This is going to be tough. Already damages हो रहा है. JL good for 1, but grenade यहाँ पे एक निकालेगा. But nonetheless, wait! Skyesports has a lot to say. Along with getting a second, numbers को कहीं ना कहीं control में लेके आना चाहते थे. Zayu is going to be the lonesome person here. Scout on knock. Deagle Jacob के पास. Plan जरूर कर चुके default पे. Smoke off करेंगे. He wants to isolate the deals, but दोनों साथ में आगे बढ़ रहे हैं. But Zayu somehow isolates it. 100 on both. Oh, knock! He connects a brilliant headshot with the Deagle. Apeks pull back the second round. I don't even know how this happens. Vitality. Absolute blunder उनके लिए मैं कहूँगा. Because they should have been able to keep the momentum up. ये चीज़ हमने last map में देखी थी. जब Vitality ने Deagle का शानदार इस्तेमाल किया था, लेकिन Styko with those insane shots and knock final blow land करते हुए. लेकिन देखिए Apeks वहाँ पे कितने ज़्यादा दुखी. और टीम Apeks काफी खुश. Yeah. देखिए सब लोग अभी तक जितना भी चर्चा कर रहे थे, everybody they have been rooting for Vitality, especially क्योंकि ये उनका map pick है. Already Mirage जीत चुके हैं. Mirage was a little bit worrisome for them. Their stats was all not that great. Apeks का भी इतना ज़्यादा बेहतर नहीं था. Apeks' best map was denied in the veto, and now Vitality have their map pool is super big. Vertigo super happy रहेंगे क्योंकि already एक बार खेल चुके जैसे मैंने बोला. Let's see if they'll be able to close it out. Weapons अभी Apeks के तरफ से भी नजर आ रहा है. There's going to be Galils and Apeks in the, AKs in the mix for Vitality. दोबारा B setup नजर आ रहा है. Going to put down smokes, flashes coming through. उसके बाद entry लेने के लिए, but Stiko again is going to be super. No, he was not major this time. इस बार उनको shut down किया जाएगा with just the Deagle.
जेल बहुत ज्यादा नजदीक, लेकिन जेकम दुप्री के ऊपर किल निकाल चुका। माय गुडनेस, एपेक्स शानदार शॉट सामने प्लेयर के ऊपर, 2 वर्सेस 3। वापस डीगल्स अपना कमाल दिखाते हुए, जाइवो अभी भी जिंदा है, स्पिंग्स भी अभी भी जिंदा है। इट्स अराउंड प्रैक्टिकली लॉक डाउन हो फॉर वाइटैलिटी। नॉक को ये 1 वर्सेस 2 निकालना होगा, उस स्पॉट जरूर हो जाएंगे। दोनों लाइन अप होते हुए नॉक gets that kill, gets those kills, and Apeks देखे थोड़ी देर ये चलते रहेगा, मुझे लगता है अपना माथा मार देंगे टेबल पे। होता है मामा, like sometimes it's just too much to take because बहुत छोटे-छोटे गलतियां आप कर देते हो। Again, नॉक ने इन्फो भी नहीं दिया था, इतने नजदीक आए थे, so it was still going to be a surprise. But Apeks, I think उनको कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग में आया कि there should have been someone. I should have waited for the check rather than going in for a swing and एक ही spray में आने के लिए. But Cuban things यहाँ पे Apeks को थोड़ा टोन डाउन करना पड़ेगा। ये राउंड जैसे जीत रहे, ये इंडिविजुअल प्रवेश की तरफ से जीत रहे, ना कि बेहतरीन स्ट्रैटेजी। I think that's what he wants to relay. But I think Zonic feels like Vitality have it, sipping on I don't know tea, coffee. But Zonic's living the best life right now. Yeah. Man is sipping on tea, coffee, whatever it is, right? जो चाय कॉफी पी रहे, इतने बड़े स्तर पे आखिरी मेजर काउंट है ग्लोबल ऑफेंसिव का। And man's chilling behind. Man's just chilling, bro. ये स्वागत चाहिए जिंदगी में, इसी स्वागत की जरूरत। फिलहाल के Apeks in the driver's seat, Vitality की बहुत तारीफ की जा रही थी। हमारे एनालिस्ट कह रहे थे कि they will trust Vitality with their lives on this map. लेकिन क्या Apeks उनको गलत साबित करेंगे, ये देखना जरूर बनता है। Positions known. सेव जरूर करती हुई नजर आ रही है with a couple of upgraded pistols. Nico Magis को पनिश करेंगे, मैं इनके ही बारे में बात कर रहा था। He is really good in B, but अभी के लिए because of an eco round ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही है Vitality. They've already lost 2 players. 5v2 situation push करने के लिए सोच रहे, लेकिन might be a free frag here, but उनके साथी भी आ चुके हैं कॉर्नर को, जाइवो को क्लियर करना चाहते हैं। जाइवो will all be cleared. जुप्री आखिरी खिलाड़ी रहने वाला है। I think उनका साउंड सुन चुके हैं, बहुत तेजी से भाग रहे। Stiko looking forward to that kill. जी हाँ, आवाज कर चुके थे वहां पे, एंड किक्सन अब मिस नहीं करने वाले, ये शॉट आराम से इन्हें करेंगे। Let's not forget, किक्सन पहला मैच भले ही खराब गया हो, लेकिन he is still at the biggest stage in Counter Strike. मेजर में सेमीफाइनल में बैठे वाइटैलिटी के खिलाफ, जो एक और टीम है हॉट फेवरेट मेजर जीतने के लिए अपने होम ग्राउंड के सामने। भरोसा जताना पड़ेगा अपने आप के अंदर। उनके कोच क्यूबन ने बताया था कोई बात नहीं, इट्स अ बिग स्टेज, लेकिन अब किक्सन के पास मौका है अपने आप को प्रूव करने का, डिलीवर करने का। वाइटैलिटी बाय जरूर करेगी, यूटिलिटी है उनके पास, लेकिन मोलोटोव की कमी मुझे लगता है। Heavy util रहने वाले Apeks के पास, so they can deny a lot, do a lot of damage. Kicksin कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है जिस हिसाब से वो आगे जा रहे हैं। नाइस पोजीशनिंग, नॉक, 2 खिलाड़ी को देख लेंगे, दोनों को पनिश। C4 गिरा रहा है, he goes in for the third, and उसके बाद अपनी टीममेट के ग्रेनेड की वजह से he falls on, but Apeks finds the timing, pushes side walk in, आगे आ जाएंगे, but JL will understand and punish him। जिसका आखिरी खिलाड़ी रहने वाला है, he brings it down to 1v2 situation। फ्लैश आया, no vision for him for now, but wait करेंगे, smoke off करेंगे। C4 जरूर रहने वाला है, he might just be able to find a plan, but look at the push coming in। उनको आइडिया भी नहीं है इसका, बैक दिख चुका है, he's coming in for a reach, and तब जाके JL उनको पनिश करते हुए नजर आएंगे। It got a tad bit closer to getting a clutch for Vitality, but Apeks, they keep the lead। मेजर्स जिस पोजीशन में थे वहां पे मुश्किल जरूर होने वाला था उनके लिए, लेकिन कोशिश अभी भी जारी। वाइटैलिटी वापस डीगल्स के ऊपर, डीगल्स के साथ कितने डेडली होते हैं हम जानते हैं। गोल्डन हॉर्नेट्स यहाँ पे कुछ डैमेज दे पाएंगे, क्या वो स्टिंग कर पाएंगे, चुप पाएंगे? It's going to be an eco for Vitality. Apeks अपने CT side पे already कमाल करती हुई नजर आ रही है। They're giving it their all. They know this is going to be a fight to survive, become the grand finalist. Okay, failed flash.
But still, Spinks Kixin के ऊपर एक पिक निकालेंगे और एक्सटेंड किया था, पनिश कर गए उनको. But nonetheless, JL controls it, brings it back to a 4v4. अभी कोई ओपनिंग जैसे फ्लैग नहीं निकला है. But look at this again. Position करते हुए JKM looking forward to the same position जहाँ पे उनके टीममेट पनिश हुए थे. जी हाँ, वो वापस पनिश होते हुए नजर आएंगे. दो खिलाड़ी को सेम पोजीशन पे खोया. This is an eco again, mind you. थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा. गलतियां कर रहे हैं Apeks. They're losing the players. It's a 3v2 situation. लिफ्ट की तरफ से आ रहा है. ज़ाइवू का पोजीशन देखा था, बट दैट फ्लैश इट बैक पुशेस हिम बैक. आखिरी खिलाड़ी स्टीको नीड्स टू पुल ऑफ 1v3 जो पिछले बार करके दिखाए थे. ज़ाइवू के ऊपर डैमेज जरूर किए. डिफॉल्ट जरूर प्लांट हो चुका है. He's trying to smoke one angle off and looking for a duel in the other. Finds the first, looking for another, and Spinks Gia 1v1 में लेके आ चुके हैं. It's all up to Zyvu right now. He's repositioning sidewalk की तरफ से. No idea for Stiko. स्मोक का एज चेक करे कि क्या ज़ाइवू को देख सकते हैं. पिछले बार वहीं पे देखा था. 16 HP and Zyvu's repositioning is good. Apeks lose against Nico. बहुत ही अच्छा राउंड यहाँ पे वाइटैलिटी निकालती हुई. आई थिंक दिस इज अ मिस्टेक जो Apeks ने किया है अभी. Absolutely a mistake, no doubt about that. लेकिन स्टीको की तारीफ करनी होगी आपको. ये काफी अच्छी तरीके से लेके आए थे. थोड़ा और चेक कर लेते शायद राउंड निकाल पाते. लेकिन मेजर्स देखिए, उन्हें पता है कितना क्रूशियल राउंड था ये. Apeks शायद सेमीफाइनल में ही रो दे. जितना पैशन उनके चेहरे पे नजर आ रहा है, जितना स्ट्रेस उनके चेहरे पे नजर आ रहा है. लेकिन वाइटैलिटी एक टाइम आउट लेते हुए यहाँ पे बाय राउंड में जरूरत है उनको, क्योंकि इको राउंड निकाल रही है टीम. लेकिन बाय राउंड में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है. But I want to see अगर ये Zonic ने कॉल किया था या प्लेयर्स ने कॉल करके बात कर रहे. Zonic is still sipping. Frustration in players. Apeks, ये उनका राउंड होना चाहिए था. That want to find a trade, अपने टीममेट का ट्रेड निकालने के लिए, even though it was late, but फिर भी वही पोजीशन में जाके फाइट करने के लिए, making those small mistakes. बस Seiko not letting Magus get any towards B. Magus की कहीं ना कहीं the danger man बनते हुए नजर आते हैं B की तरफ, and उनको डिनाई किया जाएगा, and that is where Vitality will be shut down. B की तरफ कोई भी सोच नहीं बनाएंगे. Maybe a late execution, but अभी के लिए थोड़ा टाइम वेस्ट करवाना पड़ेगा. थोड़ा जो नॉइज है क्रिएट करके प्लेयर्स को स्प्रेड आउट करवाना पड़ेगा. या रोटेशन मैनिपुलेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन मेजर्स के यहाँ पे टेक डाउन हो चुके. स्टीको barely surviving. स्पिंक्स बहुत नजदीक. ये मैच के अंदर भी स्पिंक्स और ज़ाइवू शुरुआत काफी अच्छी हुई. डुप्री इस बार स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन डुप्री धीरे धीरे क्रीप अप करेंगे एक ही तरफ. सामने होल्ड कर लेंगे नॉक, और उनके साथ उनके टीममेट खड़े किक्सन. ये दो प्लेयर्स, ये बेहतरीन तरीके से रोटेशन मैनिपुलेट किया जा रहा है. डुप्री देखिए शोइंग जस्ट इनफ प्रेजेंस कि वो इसके लिए करे, लेकिन अब आराम से बी की तरफ घुसेगी वाइटैलिटी. परफेक्ट टाइमिंग, एंड डुप्री ने भी वापस आने का निर्णय लिया क्योंकि उनको पता है मैन एडवांटेज नहीं है उनके पास और डुप्री की जरूरत पड़ने वाली है. आराम से फेक सेल किया, ये देखिए पूरी टीम इस साइड के ऊपर. स्टीको रहने वाला है, बट ही नोज ही कैन नॉट स्विंग विद 19. पहला पिक जरूर निकाला, बट क्या राउंड अपने टीममेट को दिला सकते हैं. इट्स गोइंग टू बी अ 5v4 रीटेक कमिंग इन. Apeks विल कमिट. एक ही किट रहने वाला है. दैट्स गोइंग टू बी ऑन किक्सन. ध्यान से खेलना पड़ेगा उनको. अभी भी डिफॉल्ट पे खिलाड़ी खेल रहे हैं. स्मोक के थ्रू एक खिलाड़ी पुश करके रेडी है. Apeks finds the first, is looking for the second. Gia straight out. फाइनल जेल ट्रेड करेंगे, बट डिफॉल्ट पे अभी भी खेलते हुए ज़ाइवू. ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर, बट ऑलरेडी डिसीजन बन चुका है Apeks का दैट दे आर गोइंग टू रिट्रीट. डिसीजन जरूर बन चुका है उनका कि वो रिट्रीट करने वाले हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी आपको डुप्री की. वहां पे किल्स भले नहीं निकाले उन्होंने, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट था इस राउंड में, उनके बिना ये राउंड नहीं निकल पाता. ये चीजें, छोटी छोटी चीजें नोटिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. डुप्री ने जो फेक सेल किया वहां पे, Apeks ने जो 2 किल्स निकाले, टू ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स इस पूरी टीम में, अपनी टीम को हार के चंगुल से छुड़ाते हुए. वो राउंड बहुत क्रूशियल राउंड था, एंड टू ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स स्टेप अप. क्यूबन को पता चल रहा है कि देखिए उनकी टीम के पास कंट्रोल है, बट इट्स जस्ट देयर फॉलिंग प्रे इनटू व्हाट वाइटैलिटी वांट टू डू. जैसे आपने बोला, वो फेक, वो मॉलीज जो है वो मजबूर किया और भी लोगों को रोटेट करवाने के लिए.
उन्होंने सोचा कि जैसे एंगल्स चेक किया जा रहा है, देयर विल बी अ क्विक फ्लैश रश कमिंग थ्रू टुवर्ड्स देम, एंड वो कहीं ना कहीं ट्रेड का इरादा बना रहे थे एक ही तरफ, एंड दे वेंट फॉर अ क्विक बी एग्जीक्यूट एंड दे हैड नो चांस इनटू इट अगेन, एंड स्पेशली एपेक्स का पोजीशन। वाइटैलिटी सिर्फ एक राउंड दूर रहने वाली है फ्रॉम इक्वलाइजिंग। स्मोक ऑफ कर देंगे इस स्कैफोल्डिंग को, आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं देना चाहते, बट दे आर लुकिंग फॉर एन एज विद दैट ऑप ऑन ज़ाइवू। Oh, barrel दिख जाएगा, Spinks will punish him. ये ओवर एक्सटेंशन था, जेल की तरफ से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश, लेकिन कोई ट्रेड पोटेंशियल नहीं, और ये छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी साबित हो सकती है आपकी टीम के लिए। मेजिस्क इकलौते प्लेयर बी के ऊपर फिलहाल एरिया होल्ड कर रहे हैं, बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वो वहां पे मरते तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ज़ाइवू भी रोटेट कर रहे हैं मेजिस्क के पास, देखिए अगर आपने नोटिस किया हो तो प्रॉपर बी हिट होने वाला है, बट उनको एक ओपनिंग की जरूरत है, उनको मैप कंट्रोल की जरूरत है। स्पिंक्स दूसरी तरफ से एंट्री फ्रैग करेंगे, यहाँ पे ज़ाइवू ऑफ लेके कोशिश करेंगे, किक्सर इज इन परफेक्ट स्पॉट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पिंक्स उतरते ही चाटा मारेंगे उनको। Magisk is a B-side monster, मैं यही बोलना चाहूंगा है। उनको थोड़ा शटडाउन जरूर कर रहे हैं, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। He will come back stronger round after round. He will take that beating and answer back even more brutal. Knock अकेले बचे, एक पिक जरूर निकाला है, he needs to find 3 more. मिड की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद कनेक्टर से आगे बढ़ने का एक इरादा बना रहे हैं, बट आई थिंक टाइम नहीं है, जस्ट बैक ऑफ। जी हाँ, वक्त नहीं है, और स्पिंक्स भरपूर तरीके से फायदा उठाते हुए उनको जो बैकअप मिला था, और द मोमेंट एक गोली चली सीधा लेफ्ट साइड स्विंग करके उन्होंने मारा, तो रन फ्लिक किया, और बेहतरीन मैकेनिकल स्किल का प्रदर्शन। स्पिंक्स जिस तरीके से खेल रहे सराहनीय है। निराशा देख सकते हैं आप इनके चेहरे पे, ये देखिए जैसे ही पता चला वहां पे प्लेयर है तुरंत घूमे। मेजिस्क absolutely cracked. 4-4 और बहुत तेजी से थोड़ा एक सरप्राइज क्रिएट करने के लिए, डजंट वर्क। एपेक्स का फ्लैश एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्टीको इज स्टिल अप क्लोज, बट आई डोंट थिंक कुछ मौका मिलेगा। बट दूसरी ओर डुप्री को देखिए, ही स्लोली क्रीपिंग अप फ्रॉम साइडवॉक, बी का एक पुश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जस्ट कैन एपेक्स सिंगल हैंडेडली ब्रेकिंग एपेक्स राइट नाउ। एक खिलाड़ी रहने वाले, उनके ऊपर ग्रेनेड आएगा, ही हैज वन AK, बट कुछ मौका नहीं मिलेगा नॉक को। Another round and this gives the lead for none other than Vitality. ये IPL का हॉर्न है वैसा लग रहा है मुझे। I was about to say the same thing, Mamba. मैं हंसी को कहीं ना कहीं रोक रहा, I was like, wait. इतना पूरे दिन से सुनता आ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, is this the same horn? Yeah. Is this the same horn? But you know what? It is the same horn. It is, but उसके साथ एक तड़का लगा है, their Spanish like cowboy face off वैसे वाला that you hear generally. And it's riling the audience up. Oh, absolutely, absolutely, no doubt about that. लेकिन ये देखिए, ग्रैंड फाइनल्स की फीलिंग आ रही है इस क्राउड को देख के। अब सोचिए कल क्या होगा अगर वाइटैलिटी यहाँ पे जीत के जाती है तो। Yes. A sea of yellow and black. I think जितना शोर मचेगा ना, I think after that the arena managers they would have like, audience please calm down, please calm down. I think रोक नहीं पाएंगे अगर वाइटैलिटी कल के दिन जीत के दिखा देगी। But again इंतजार रहेगा मामा। It'll be a sight to see. जी हाँ, इंतजार जरूर रहेगा, उसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन वाइटैलिटी उनको जरूरत है एक ओपनिंग पिक की, और वो ज़ाइवू निकाल के दे सकते हैं उनको अपनी औत के साथ। मेजर्स हमेशा डिफॉल्ट करते हैं, तब अकेले जाते हैं बी साइड की तरफ। निकाल पाएंगे वो? जी हाँ, पहला पिक आराम से निकालेंगे, लेकिन दूसरे प्लेयर को एक्सपेक्ट करेंगे। आई थिंक उन्होंने पैर जरूर देख लिए थे, स्मोक हो चुका है यहाँ पे, लेकिन मेजर्स विल गेट टेकन डाउन। थोड़ा सा ओवर एक्सटेंशन प्रॉब्लमैटिक था, ओपनिंग जरूर निकाली उन्होंने, लेकिन डुप्री नाउ इज वॉकिंग इन।
हॉप के स्कोप के अंदर चलते जा रहे हैं यहाँ पे और उसका भुगतान करना पड़ेगा उनको। Apeks मॉली के साथ एंट्री लेना चाहते हैं बट अप क्लोज एंड पर्सनल जेकेम उनको स्टेको स्पिंक्स को आखिरी खिलाड़ी ज़ाइवू he is looking for doing some magic. He has to go for a huge 1v4. एक ही सिर्फ निकालेंगे as Knock puts him down with the op. Apeks, even though Vitality are able to get back into the game, Apeks, they don't want to let them. ज़ाइवू बिल्कुल इमोशन नहीं दिखाते अपने चेहरे पे, अगर आपने नोटिस किया हो तो। राउंड जीते हार है उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ही इज लॉक्ड इन, एब्सोल्युटली लॉक्ड इन। लेकिन नॉक का ये पहला किल काफी क्रूशियल था, बट यही बात है मेजस एपेक्स इज जस्ट लूजिंग इट। इज लाइक क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, आई हैव नो आइडिया क्या करूं। एंड नजर आ रहा है वो आपको। दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दिस, एक प्रॉपर एक्सप्लोर करते हुए बी साइड के ऊपर वाइटैलिटी। Loving the play coming in from Team Vitality. एक दूसरे के ऊपर जो कवर बना के खेल रहे हैं, like the trades are just so good and instantaneous. लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, जेकब वहां पे ब्लॉक हो गए, वरना वो शायद C4 प्लान नहीं होता। मुझे नहीं लगता वहां पे बॉम्ब प्लान हो पाता। Yeah. डबल पीक, बेहतरीन डबल पीक था वो। एंड वाइटैलिटी वापस मोमेंटम अपने कंट्रोल में लाते हुए, गेम की पेस को कंट्रोल करते हुए, जिस तरीके से दे ब्रीच द डिफेंस ऑन बी, सीटी साइड को जिस तरीके से धकेला पीछे, ओपनिंग पिच निकाली, तारीफ करनी होगी इनकी। थोड़ा और अगर आगे आते, JKM would have picked up Dupree. Probably would have, yeah. शायद उनको मिल जाता, लेकिन फर्क नहीं पड़ता फिलहाल के लिए, because Vitality is in the lead. ज़ाइवू पिक निकालेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन क्या निकाल पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। बट मामा अभी के लिए मुझे जो लग रहा है ना, जिस हिसाब से Vitality ने सोचा था ये मैप उनके कंट्रोल में रहेगा, उसका एडवांटेज उठा पाएगी, they might have a huge difference. They're not having it. I think उसी के वजह से they are little frustrated. वो Apeks के चेहरे में नजर आ रहा है। Let's hope it doesn't go too much. क्योंकि सीटी साइड जिस तरीके से राउंड निकाल रही थी बीच में, उस तरीके से राउंड निकलने नहीं चाहिए थे उनके, लेकिन फिर भी निकाल पा रही है वो। दुप्री यहाँ पे मोलोटॉव डालेंगे जरूर, लेकिन मेजस ही इज गोइंग टू गेट टेकन डाउन। ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, बिकॉज़ आप फिनिश करने के लिए कोई मौजूद नहीं, लेकिन किक्स इन बहुत क्रूशियल फ्लैग निकालते हुए वहां पे। अभी भी मौका है सीटी साइड के पास ये राउंड निकालने का, लेकिन ज़ाइवू टेक 9 लेकर पीक करेंगे वहां पे, डबल पीक करते अपने टीममेट के साथ। बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग ज़ाइवू का, मैं कहूंगा। स्टीगो आफ्टर दो शॉट्स, जी हाँ, बहुत खुश तो रहना पड़ेगा। कॉज सम ट्रबल, वरीड वाइटैलिटी ओवर देयर, बट द ट्रू हॉर्नेट्स, द गोल्डन हॉर्नेट्स, छोटे-छोटे ब्लिप्स के साथ वेरी डेंजरस डू दे। दे डोंट, काफी क्यूट नजर आ रहे हैं, बट गेम के अंदर मतलब खतरनाक, खौफनाक। दूसरी बहुत क्रूशियल किल निकालते हैं वहां पे। अभी के लिए मैं बोल रहा था Magisk was just insane at B, Magisk is just insane at B, but जिस हिसाब से स्टीको खेलते हुए नजर आ रहे हैं, he is putting a challenge, really enjoying that, brilliant flash, swing आएगा, डैमेज बहुत ज्यादा करेंगे, अभी भी किल निकालने के लिए ट्राई करते हुए नजर आ रहे हैं, but Vitality immediately run back, they give it up, they're like ये चैलेंज नहीं नजर आ रहा है, बहुत यूटिल डंप आ रहा है, we are unable to hold near those players, and देखिए ए की तरफ भी अगर उनको बहुत तेजी से हिट करने का, एक्सप्लोड करने का इरादा था, with the molly they denied. वो खेल निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल पिक है। नॉक के ऊपर बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही थी। ये स्मोक बहुत मुश्किल होता है ये लाइनअप करना, जिस तरीके से उन्होंने वॉक जंप थ्रो किया है, आसान नहीं होता, लेकिन स्मोक जाएगा जरूर। और अब देखिए स्पिंक्स ब्रीचिंग ऑन टू द साइड, जेल क्या यहाँ पे बैकअप दे पाएंगे अपनी टीम में, ये सबसे बड़ा सवाल होना है। रोटेशन काटने के लिए यहाँ स्पिंक्स को फर्क नहीं पड़ता, वो किल निकालेंगे। मेजस बैठे हुए यहाँ पे, एक और निकालने के लिए रोटेशन कट ऑफ करते हुए। और यही बात मैं हमेशा कहता हूँ, रोटेशन मैनिपुलेट करना, रोटेशन कट ऑफ करना, ये
सबसे स्मार्ट चीज है, बिकॉज you're not directly fighting them. आप प्रेजेंस दिखा रहे, रोटेशन फोर्स कर रहे, मैप कंट्रोल लेके, and then you're getting free kills. आखिरी दो खिलाड़ी सेव करते हुए नजर आएंगे. They have nothing that they can do here. जिस हिसाब से वाइटैलिटी टेक ओवर करती हुई नजर आया है, they understood कि नॉर्मल जो अप्रोच है यूटिल का काउंटर करके फाइट लेना, एपेक्स आर गेटिंग बेटर ऑन इट. So Vitality go even further with their strategy. दो वेपन सेव करने का इरादा था, कुछ भी नहीं मिलेगा. Vitality keep their victory as well as destroy the opponent's economy and weapons. Ole! Ole! जो माहौल है यहाँ पे पेरिस में इस मेजर के लिए, आई थिंक इट्स वेरी फिटिंग फॉर द लास्ट काउंटर-स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव मेजर एवर. और भावुक करते हैं मुझे हमेशा, मैं सोच रहा हूँ इस चीज के बारे में, लेकिन जेल जिस भागते जा रहे हैं 5-7 लेके जायू आई एम श्योर डांट रहे होंगे अपने टीममेट्स को, बोलेंगे भाई साहब थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे प्लेयर किस तरीके से मुझे पुश कर रहे हैं. एपेक्स ऑलमोस्ट वहाँ पे रंगोली बनाते हुए, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा. किल निकाला है, स्टीव को कोच नहीं कर पाएंगे यहाँ पे. Yeah, from your hometown, Dupree, we got your back. I think पूरी stadium जो है, it's got not only Dupree's but Team Vitality's back. But yeah, जैसे आपने बोला, I was like, guys, and जिस हिसाब से Apeks ने यहाँ पे पुश किया, उन्होंने भी बोला कि हल्ला बोल, and टूट पड़ने का इरादा था. Oh, Apeks, you can see right now, full on emotion, high on emotion, super excited and happy for his team. जिस हिसाब से अभी कंट्रोल मिला है, लीड मिला है 4 राउंड का, and he'll keep pushing it for the team. Well. Vitality ड्राइवर सीट में बैठी है अभी फिलहाल. Apeks in the meantime, बहुत क्रूशल ऑन. जितने ज्यादा राउंड मिलेंगे वाइटैलिटी को, उतना ही ज्यादा प्रेशर बनाएंगे सिटी साइड पे, लेकिन आसान नहीं होने वाला सिटी साइड खेलना. आपको पता है किस तरीके से ये मैप खेला जाता है. नॉक पूरी की पूरी कोशिश करे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे. देखिए अभी भी मेजस भी साइड पे, शायद मेजस ऊपर स्पॉट कर पाएंगे प्लेयर को. यहाँ स्पॉट जरूर करेंगे. पहला किल निकालेंगे, दूसरा निकालने की जरूरत, वापस कमिट कर रहे हैं, दूसरा किल भी निकालेंगे. ये बहुत आसान राउंड होने वाला है वाइटैलिटी के लिए. डिफेंस ब्रीच कर चुके हैं और देखिए पूरी तरीके से मैप कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं. बेहतरीन प्रदर्शन मेजस के द्वारा यहाँ पे, लेकिन जेकब उनको फर्क नहीं पड़ेगा. पूरी साइड खाली, ये साइड, दिस शुड बी एन इजी राउंड फॉर वाइटैलिटी. सैम आ रहे बहुत तेजी से लिफ्ट से. Can they find anything? Dupree puts knockdown, प्लान करने के लिए जाएंगे. डिफॉल्ट ट्राई किया डिनाई करने के लिए किक्सन. Little bit out of a game for him here. But आखिरी खिलाड़ी 1v4 प्लांट हो चुका है, किट नहीं रहने वाला है. I think he might just try to punish the players who might overextend, but खुद ही overextend किए. Spinks उनको डाउन किया, and that is double digits for Team Vitality. A big advantage here, Mamba. जी हाँ, बहुत बड़ा एडवांटेज वहां पे, नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन पहला राउंड बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है वाइटैलिटी के लिए. मेरा ये मानना है कि पहला राउंड निकालेंगे, दे विल बी सेट, दे विल बी ऑन द रोड टू क्लोज दिस मैप आउट. लेकिन स्पिंक्स जिस तरीके से ये प्लेयर ने खेला है, बहुत ज्यादा तारीफ बनती है. लास्ट मैप में भी काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया था. यहाँ पे भी जब भी जरूरत पड़ी उनकी टीम को सपोर्ट किया है. सी को वो डीगल शॉट्स शानदार, बेहतरीन. लेकिन नॉक ने जो किल निकाला जायू के ऊपर. एपेक्स के रिएक्शंस आई थिंक आर द मोस्ट गोल्डन. या रॉ इमोशंस, मतलब जो भी वो फीलिंग आता है उस राउंड पे ही एक्सर्ट्स इट. ज्यादा सोचते रहिए, फिल्टर नहीं करते. एंड आई थिंक वो अकेले ऐसे खिलाड़ी नहीं है. एवरीबडी काइंड ऑफ
That emotion just flows through. Emotion always flows through, there's no doubt about that. लेकिन emotions को काबू में रखना पड़ेगा यहाँ पे इतने बड़े स्टेज पे जब आप खेल रहे होते, you can't let emotions get the better of you. You have to keep calm. और ये राउंड बहुत ज़्यादा क्रूशल था ज़ाइवू के लिए. Oh yeah. क्लिक करके सीधा Apeks. पता नहीं किस तरीके से उन्होंने वो राउंड निकाला था, क्योंकि दुप्री ने अकेले फेक किया था. मेजिस ने ये जो डबल किल निकाला था इसके बाद वाले राउंड में, सही एंड में निकाला था उन्होंने डबल किल, जो सबसे क्रूशल था. I think Vitality stepped up when they had to. Yeah. And Apeks के लिए दिक्कत की बात बनती जा रही है. The 6th round, ज़ाइवू 1v1 reposition करके जो पिक उठाए, तब से लेके अभी तक Vitality को रोकना बहुत मुश्किल बन गया था. This is what I was talking about. But just he's always able to get better of the players at B. Styko जरूर इनको एक challenge दिला रहे थे, but I feel like Majisk, he's still going to be crowned as the monster at B. 10-5 का स्कोर लाइन, 5 राउंड का डिफरेंस रहने वाला है, साइड्स बदलने वाले. टीम वाइटैलिटी played this game previously कल के दिन में. A strong hold for them. They're going to try and punish. Apeks, जो चाहिए था उनको मौका नहीं मिला, बट अभी भी मौका है. Zonic wishing his team the best. They're just one step closer ग्रैंड फाइनल्स की तरफ. वन स्टेप क्लोजर ट्रॉफी को उठाने के लिए CSGO का आखिरी मेजर अपने होम ग्राउंड पे. ये देखिए. Go for it, my man. Go for it, go for it, go for it. Hooray! I'm sure the man must feel like a king right now. जिस तरीके से वो चीयर कर रहे हैं अपनी टीम को, जिस तरीके से इकट्ठा कर रहे हैं अपनी टीम को, सारे के सारे फैंस बेहतरीन से बेहतरीन माहौल बना के रखे. लेकिन वाइटैलिटी के लिए सिटी साइड पे ये पहला राउंड बहुत ज्यादा क्रूशल होने वाला है. 1-0. Here we go, ladies and gentlemen. दूसरी सेमीफाइनल का दूसरा मैप, उसका दूसरा पिस्टल राउंड. वाइटैलिटी ऑन द सिटी साइड. क्या ओपनिंग पिक निकाल पाएगी? डुप्री एंकर करने वाले बी साइड को. ज़ाइवू पुश कर रही है पे, थोड़ा सा ऊपर इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश, लेकिन डुप्री सबसे पहला कांटेक्ट होने वाला है यहाँ पे. क्या वो किल निकाल पाएंगे? जी हाँ, गोलियां जरूर चली है, यूटिलिटी का इस्तेमाल, इंफॉर्मेशन रिले कर दी जाएगी. डुप्री को बस जिंदा रहने की जरूरत है यहाँ पे. उनके सामने स्मोक आएगा, पीछे से मेजेस का उनको बहुत ज्यादा बैकअप देने वाले, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नॉक एंड जेकम हिटिंग सम नास्टी शॉट्स. एंड अभी भी किक्सन स्मोक के अंदर बैठे. क्या वो किल निकाल पाएंगे? जी हाँ, किल निकालेंगे. बहुत क्रूशियल किल. एंड किक्सन नीड्स टू स्टेप अप. मैं कह रहा था टी साइड पे आपको पता है कितनी आसानी से टीम साइड का कंट्रोल ले सकती है. वाइटैलिटी के लिए दिक्कतें बढ़ती जाएंगी अगर वो पहले 2 बाय राउंड नहीं जीत पाएंगे तो. बट नॉनदलेस पहला राउंड जाते हुए एपेक्स की ओर, और एपेक्स को खास जरूरत है ये राउंड जीतने की. उनको पता है they might be a double digits, but इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. स्कोर लाइन they can still push it closer. 2 राउंड बैक टू बैक अगर जीत जाएंगे, वहीं पे 7-10 का स्कोर लाइन हो जाएगा. It will be just 3 more rounds that they have to pull in their favor. बाई का एडवांटेज रहने वाला है. वो इनिशियल डैमेज करने के लिए आगे आए थे डुप्री. पिछले बार डिफॉल्ट के ऊपर चैलेंज कर रहे थे, इस बार अग्रेसिव जाके स्टेयर से पहले ही चैलेंज करते हुए नजर आए. डज डू सम चिप डैमेज, बट ऑन द अदर एंड ग्रेनेड आएगा, थोड़ा मेजिस को डैमेज करता हुआ नजर आएगा. चिप डैमेज ऑन हिम एज वेल. अनदर वन इज टू फॉलो अप, बट उनको पुश बैक नहीं करेगा. यहाँ पुश बैक नहीं करेगा, लेकिन डीगल्स आपको पता है कितना ज्यादा डैमेज देती है. गोल्डन हॉर्न इट्स लास्ट टाइम भी हमको दिखा था डीगल से किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो. यहाँ पे देखिए जो सैंडबैग है उसके थ्रू देखने की कोशिश हो रही है बार बार. इंफॉर्मेशन वेट आउट करने की कोशिश है. ये लीजिए ज़ाइवू थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूर दिलाएंगे अपनी टीम को. खेलेंगे कहाँ से, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है उनका, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स है होल्ड करने के लिए. मॉलोटॉव जाएगी एक बी पे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली है लेकिन रोटेट नहीं करना चाहते हैं. स्पिंक्स आई बिलीव बी पे होल्ड करेंगे अकेले, लेकिन ज़ाइवू इज गोना गेट टेकन डाउन.
मेजिस्क क्या ट्रेड निकाल पाएंगे? जीएल बहुत बहुत गंदी पोजीशन में फिलहाल के लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिंक्स अब टेक डाउन करेंगे एंड मेजिस्क इज गोइंग फॉर प्रे एज वेल। तो एक और राउंड एपेक्स के लिए उनके फेवर में जाता हुआ। जेकेम को टफली मारी वहां पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेकेम विद 3 इन द राउंड, a big one again, and मामा देखिए यहाँ पे रीड कर रही है एटलीस्ट इन दिस इनिशियल राउंड की कहाँ से कैसे खेल सकते हैं वाइटैलिटी। एंड जैसे मैं बोल रहा था 2 राउंड स्कोर लाइन को कम करते हुए नजर आएंगे, 7-10 का स्कोर लाइन, 3 राउंड का डिफरेंस जरूर नजर आएगा। दिस वाज नॉट इवन अ चैलेंज फॉर एपेक्स एटलीस्ट इन दिस सेकंड राउंड ऑफ द सेकंड हाफ, बट दे कैन नॉट जस्ट बी ओके विद इट एंड ट्राई टू गो इजी, क्योंकि अभी भी डिसएडवांटेज पे रहने वाले हैं। फुल सेव कमिंग इन फ्रॉम वाइटैलिटी, वापस इनिशियल चैलेंज बी की तरफ। जेल ट्राइंग टू वॉल बैंग बट नो, टुपरी बैक ऑफ जरूर कर जाएंगे वहां से, बट लुकिंग एट ए दे आर सेटिंग अप काइंड ऑफ अ ट्रैप। 3 लोग रहने वाले हैं यहाँ पे, सिर्फ एक ही है बी की तरफ who's right now guarding towards CT। सोच रहे कि कहीं ना कहीं अगर कोई फ्लैंक करके आ जाता है मिड से पुश करके, कैन बी अ लिटिल बिट ट्रबलसम। इसकी वजह से डुबरी अभी भी होल्ड करते हुए नजर आया एंड ही आल्सो इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ चैलेंजिंग एनीवन। 18 HP पे 10-7 का स्कोर यहाँ पे अभी। किक्सन एक किल जरूर निकाला उन्होंने वहां पे, पैसा अपने लिए फार्म करेंगे एंड क्रूशियल किल्स थी यहाँ। एक और मैप पे ही इज नोवेयर टू बी फाउंड, लेकिन साइको को श्रेड कर दिया जाएगा डबल पीक करके 3 वर्सेस 4। लेकिन मुझे अभी भी लगता है ये एपेक्स राउंड हो सकता है बिकॉज वेपन डिसएडवांटेज बहुत भारी है वाइटैलिटी के ऊपर। साइको विल हैव टू बेट हिमसेल्फ, उनकी एचपी कम है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओह माय गुडनेस, जेएल माइट जस्ट गेट टेकन डाउन ओवर हियर। जी हां बिल्कुल, जेएल आराम से किल निकालेंगे जायवुड के ऊपर एंड दिस इज स्टिल वेरी डूएबल। लेकिन जेकेम काफी एग्रेसिव खेल रहे हैं, उनका ट्रेड निकालना बहुत मुश्किल होने वाला है इतने पतले एंगल से। जायवुड यहाँ पे मरते हैं तो फिर ट्रेड को निकाल पाएगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात। लेकिन जेकेम स्टेपिंग अप टू प्री इकलौता प्लेयर 1v2 मैक 10 है, P250 है, आसान नहीं होने वाला लेकिन कोशिश अभी भी शायद एग्जिट फ्लैग निकालने की कोशिश। जी हाँ एग्जिट फ्लैग निकालने की कोशिश, यहाँ पे स्मोक करेंगे। ओह नेवर माइंड, एपेक्स एक और राउंड निकालते लिए अपने आप में। 2 राउंड का डिफरेंस रहेगा यहाँ पे। विलियन प्लेस ट्राई जरूर किया यहाँ पे, इवन दो इट वाज अ सेव कमिंग थ्रू, पनिश किया गया, थोड़े वेपन्स को रिकवर किए गए, नॉट चेकिंग एवरी पोजीशन। जिस हिसाब से जायवू ने अपने आप को पोजीशन किया था स्मोक के अंदर, आई मीन अभी के लिए तो एपेक्स रीड कर पा रही है, स्मोक के एजेस पे खिलाड़ी खेल रहे वाइटैलिटी की तरफ से, उनको पनिश किया जा रहा है। बट एटलीस्ट दिस राउंड, मतलब इससे पिछले वाला राउंड डिड नॉट वर्क आउट, बट अभी ये वाला राउंड बहुत क्रूशियल रहेगा। डुप्री रीडिंग इट राइट, पुशेस अ लिटिल बिट अहेड एट मिड, 2 खिलाड़ी को डाउन करेंगे एंड तुरंत देखिए फोर्स किया जाएगा एपेक्स को टू फिगर आउट अ डिफरेंट अप्रोच, बट दे स्टिल वांट टू हिट बी। वेल इस बार वाइटैलिटी ने ओपनिंग पिक्स निकाल लिया, अब प्रेशर आता है एपेक्स के ऊपर बिकॉज किक्सन जेरल नॉक अगर ये राउंड निकालते हैं तो फिर वाइटैलिटी को मेंटली तोड़ देंगे एंड किक्सन नीड्स टू स्टेप अप इन दिस राउंड, एब्सोल्युटली नीड्स टू स्टेप अप। जेएल स्मोक हुआ उनके सामने, अब दिक्कत होगी उनको क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे फाइट कर पाएंगे। इन द मीन टाइम स्पिंग्स देखिए अभी भी एंगल होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे किल कर पाएंगे। मॉली आएगी जरूर लेकिन अपने आप को स्मोक कर देंगे एंड barely stays alive, but नहीं, जेएल उनको टेक डाउन करेंगे, काफी स्मार्ट। लेकिन अब रोटेशन देखिए, यहाँ पे किक्सन एक ही तरफ लर्क करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई एम नॉट श्योर अगर प्रेजेंस उन्होंने दिखाई है, लेकिन अब थोड़ी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश जरूर होगी। बिल्कुल भी आवाज नहीं करना चाहते ये बी पे, रोटेशन बेट करना चाहते हैं अपनी टीम के लिए, उनको एक पिक निकालना पड़ेगा लेकिन अब भाग के वापस जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता ये यूटिलिटी यूज करके। यहाँ पे जेएल चाटा मारेंगे लेकिन सामने वाले प्लेयर को, मे बी यही डिस्ट्रैक्शन की जरूरत थी उनको। एजेस को देख चुके अंदर पुश करने की कोशिश, एक और किल, नो एपेक्स उनको शट डाउन करेंगे, शॉट्स मिस नहीं करते। इकलौते प्लेयर किक्सन
1 versus 2, बहुत ज़्यादा pressure होने वाला है उनके ऊपर, लेकिन this is the moment where he can step up. Can he get one? He gets one. Needs to find the second as well. Apeks के पास इतनी ज़्यादा HP है नहीं, लेकिन almost being taken down over there. Mentally, अब Vitality के ऊपर सारा का सारा pressure होगा. Kixon ने ना ही सिर्फ fake किया, लेकिन आके 2 crucial kills निकाले. He is proving himself. I mean, this second map, he's giving it his all, and यहाँ पे अपनी टीम को एक और राउंड दिलाते हुए नजर आएंगे, keeping this streak of rounds जैसे ये side switch हुआ है. Look at how Team Vitality are shocked. They were not ready to lose that round. Number advantage stop, but फिर भी हार गए. Knock right now, still keeping this punishment ongoing. Vitality को कोई राउंड नहीं देना चाहते. Picks up the first frag. यहाँ से आगे जरूर बढ़ सकते हैं. ए पे सिर्फ एक ही खिलाड़ी रहने वाले हैं. बी की तरफ से अभी के लिए दुप्री थोड़ा आगे गए थे. To look forward to any kind of info or duel. Force करना चाहते थे battle, but nothing of those sorts happen. Bomb का exchange bomb से होता हुआ नजर आएगा. Nobody takes any kind of damage. Vitality 3 versus 5 round था, लेकिन Kixon coming in clutch. इतना ज़्यादा impactful play शायद उन्होंने इस पूरे मैच में नहीं किया है जितना ये राउंड में उन्होंने करके दिखाया, और बहुत खास ज़रूरत थी उनको ये करने की. शायद यही राउंड उनको ये कॉन्फिडेंस देगा. फिलहाल के लिए देखना ये बनता है Vitality क्या कर पाते. मेजर्स को टेक डाउन करके Kixon ने एक और बार एंट्री फ्रैग निकालते हुए जिनको दो बारी उन्होंने हेडशॉट मारा वहाँ पे. 2 बारी, लेकिन Dupree comes in clutch. Kixon के ऊपर डीगल से किल निकाला है. 2 versus 4, 2 versus 5 था, लेकिन अब 2 versus 4 है. क्या यहाँ पे राउंड निकाल पाएंगे? अभी भी इंतजार कर रहे हैं. नहीं, वो नहीं जाने देंगे स्पिंग्स को वहाँ पे. सैम, क्या कहना है आपका? That's a streak. Apeks एक सिंगल राउंड हारी नहीं है अभी तक साइड स्विच होने के बाद. आप देख सकते हो Vitality might have a horde of Hornets, but Apeks के पास जितने लोग भी है वो उतना ही शोर मचाते हुए Apeks को अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं, and it is working out. 10-10. AWP फाइनली Vitality की तरफ से बाहर आ चुका है. It is going to be a double op setup, especially इस बार ज़ाइवो के पास पिछले बार था, but इस बार एक double op setup लेके आए. Make it or break it round रहने वाला है ये. Yeah, make it or break it round रहने वाला है, no doubt about that. लेकिन ज़ाइवो missing that shot, point blank range. ये shot कभी usually आप नहीं देखते ज़ाइवो को ऐसे shot miss करते हुए, लेकिन Kixon op उठाएंगे. अब वापस गन चेंज कर ली उन्होंने. Problematic, very problematic. Vitality के लिए Kixon इंपॉर्टेंट किल्स निकाले अपनी टीम के लिए, लेकिन अब Apeks से ट्रेड हो जाएंगे. उन्होंने तारीफ करनी पड़ेगी आपको Kixon की. बहुत क्रूशियल किल निकाला था वहाँ पे. 1 सेकंड के लिए उम्मीद जगाई थी उन्होंने अपनी टीम के अंदर. Apeks 5 राउंड इन रो जीत चुकी है. 10-5 का स्कोर लाइन था, लेकिन शायद पहली बार Vitality एक राउंड जीतने वाली है सिटी साइड पे. Apeks reading those players like a book. 2 खिलाड़ी को डाउन करे. He's looking for a lot more. Majis भी उनके साथ दे रहे हैं. Majis picks another from sidewalk. आखिरी खिलाड़ी Stico. He has to pull off an unimaginable clutch. Already position पता चल चुका है. Backstab भी आ रहा है. He has no idea about the backstab. Push up कर रहे हैं. Scope in करके बैठे थे, but फिर भी Spinks को punish करके दिखा देंगे. They want to deny this op. Doesn't matter. Dupree or the backstab catches him. Op को recover कर लेंगे. Vitality finally get the first on the CT side. But this play, Apeks जिस हिसाब से खेले, जिस हिसाब से प्रिडिक्ट किया, उनको पता था सैंडबैग्स की तरफ खिलाड़ी है, देख चुके थे. चैलेंजिंग दैट ऑप. ऑप जरूर चैलेंज किया, लेकिन ज़ाइवो वो शॉट जो उन्होंने मिस किया था काफी भारी साबित हो सकता था उनकी टीम के लिए. डबल ऑप सेटअप था, अभी भी डबल ऑप सेटअप है. मे बी यही वो एक्स फैक्टर है जो उनकी टीम को जरूरत पड़ने वाली थी राउंड निकालने के लिए, क्योंकि 5 राउंड हारते एक साथ. अब फर्क नहीं पड़ता. Apeks 10-11 का स्कोर लाइन है Vitality के फेवर में. Apeks के ऊपर प्रेशर वापस एक और बार. Kixon had started showing up. अब इमेजिन करिए खाली एक प्लेयर जब एंट्री फ्रैग आपको निकाल के दे रहा है या फिर प्लेस बना के दे रहा है तो कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है आपकी टीम को. ये 2-0 भी हो सकता था. I guess we'll wait and see. Molotov यहाँ से नीचे से ऊपर मारी जा रही है, which
Honestly, find astonishing, लेकिन Apeks के ऊपर kill निकाला and Kixon has started entering frag once again. एक और pick निकालते हुए Kixon wakes up. Zaibu अभी भी जिंदा है, kills निकालेंगे, Mages उनको help करते हुए एक और kill. का तीसरा मिलेगा, जी नहीं, Knock will get taken down. Actually, as a matter of fact, मिलेगा Mages को kill. अब C को ignore the level, Spinks नहीं छोड़ने वाले उसको. Vitality की तरफ से जो यहाँ पे वापसी देखने के लिए मौका मिल रहा है after losing 5 rounds on a stretch on the CT end. Magisk with a 3 hunt कर रहे थे खिलाड़ियों को, आगे जाके खुद एक-एक करके फोर्स कर रहे थे ड्यूल्स को. Apeks right now super proud of his players. Vitality बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहती. Apeks पुश करते हुए अंदर अब तोड़ना. I think उन्होंने पैर देख लिया वहां पे. I do believe Dupree ने वो information निकाल ली है and ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है Dupree के लिए. He will get taken down. Oh my goodness. शानदार बूस्ट था वो. Pages बहुत ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर. Things back up देने के लिए वहां पे. Incendiary डाल के उनको फोर्स आउट करेंगे जरूर. Information मिलेगी स्टाइल को. Oh my goodness. बैकअप देखिए साइबू का. बेहतरीन तरीके से रोटेशन काटा है उन्होंने. मेजेस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. वो किल्स निकालते जा रहे हैं. प्रेशर को किस तरीके से एब्जॉर्ब करना है कोई मेजेस से सीखे. "24 kills on that madman." Knock 1v2 निकालना पड़ेगा. Not an impossible task, कर सकते हैं. C4 भी उनके पास रहने वाला है. Players are stuck on to B. Zaibu सोचे कि क्लोज अप सरप्राइज आ सकता है जिसकी वजह से he is holding the pistol as of now, but I think आसानी से नॉक प्लांट करके अभी आइसोलेट करने के लिए मौका मिलेगा. Vitality do not have the idea until the bomb gets planted. साइडवॉक की तरफ जा रहा है नॉक. यूटिल नथिंग. दूसरी ओर हेवी यूटिल, डबल फ्लैश, इंसेंडियरी है, एक स्मोक एंड एक बॉम्ब भी रहने वाला है. सो इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर नॉक. ही हैज टू चैलेंज द ड्यूल्स, नॉट लेट द यूटिल पॉप ऑफ. बट ऑलरेडी पोजीशन पता चल चुका है. उनके ऊपर एक इंसिडेंट आएगा, बट बूश उसको डिनाई किया था. बट एपेक्स इज क्विक ऑन हिज ट्रेड. व्हाट अ राउंड कमिंग इन फ्रॉम टीम वाइटैलिटी. जिस हिसाब से वापसी करती हुई नजर आ रही है गेम के अंदर, जिस हिसाब से छीन रही है एपेक्स का चांसेस, ये राउंड सिर्फ नहीं छीन रही है, एपेक्स का कॉन्फिडेंस तोड़ती हुई नजर आ रही है. बिल्कुल सही कहा आपने. एपेक्स का कॉन्फिडेंस तोड़ते हुए नजर आ रही है टीम, लेकिन क्या आप उनको रोक पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है. डुप्री हाथ में माउस पकड़ के बैठे थे वहां पे. और ज़ाइबू काफी खुश होंगे, फैंस भी काफी ज्यादा खुश. एपेक्स का चौथा और आखिरी टाइम आउट इस्तेमाल होते हुए यहाँ पे. लेकिन मेजिस की तारीफ करना चाहूंगा. 24 फ्रैग्स लेके बैठे वो, शोइंग अप व्हेन ही नीड्स टू. अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए ज़ाइबू कोशिश कर रहे, स्पिंग स्टेप अप कर रहे, डुप्री अपने अनुभव के साथ, एंड ऑफ कोर्स उनके इन गेम लीडर एपेक्स. वाइटैलिटी इज लुकिंग हॉट राइट नाउ. या गोल्डन हॉर्नेट्स एंड एपेक्स के फैंस दोनों खड़े हुए, दे आर नॉट इवन रेडी टू सिट डाउन फॉर दिस मैच. राउंड का डिफरेंस रहने वाला है 3. जीतने के लिए वाइटैलिटी को चाहिए 3. Spinks with the first kicks in with a trade, but Dupree is ready for his teammates trade. कंट्रोल में अभी तक रखी हुई नजर आ रही है वाइटैलिटी. रैम्प को भी पुश करते हुए नजर आए थे खिलाड़ी, बट जेकेम punishes, but ये ट्रेड कहां से आ रहे हैं? They were unable to stop these trades from happening. जेल फाइनली एक प्लेयर को आइसोलेट करेंगे, कनेक्टर से पुश ऑफ करेंगे. एपेक्स इज फोर्स्ड टू गो सीटी. प्लांट करने के लिए मौका मिल जाएगा इसके वजह से. इट्स बैक टू अ 2v2 सिचुएशन. लुक एट द अग्रेशन कमिंग इन फ्रॉम जेल. ही इज रेडी टू टेक इन एपेक्स. देख चुके थे पोजीशन, वॉल बैंक करके निकालेंगे. नाउ इट्स ऑल अप टू ज़ाइबू. अप क्लोज, कैन ही मेक इट हैपन विद द पिस्टल थ्रू द स्मोक? ही डज इट. 1v1 situation. C4 plant हो चुका है. He does not have the kit right now. He does have the AWP against an AWP. It's going to be knock to close it. Apeks secure the 11th.
Can you believe it? Can you believe it? मैं ये मानता हूँ वाइटैलिटी को एज अ टीम स्टेप अप करना होगा. इंडिविजुअल मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस होती है, मेजर्स जहां पे कैरी कर रहे हैं. अब बात करें स्पिंक्स के बारे में, वो क्रूशियल किल्स निकाल रहे हैं. डुप्री भी जब भी मौका मिल रहा है किल्स निकाल रहे हैं, लेकिन साइवू उनको किल्स निकालने पड़ेंगे बिकॉज उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है. बात करें एपेक्स के बारे में तो जितनी भी गलतियां करिए वाइटैलिटी पनिश कर रहे हैं उनको, उनके लिए जितने मौके मिल रहे हैं दोनों हाथ से पकड़ रहे, तो क्रेडिट देना जरूर पड़ेगा एपेक्स को इस चीज के लिए. यस, हर एक छोटी सी गलती को भी पनिश करते हुए नजर आ रहा है अभी के लिए एपेक्स. और उनका राउंड भी इट हैज नॉट बीन अ स्मूथ सेल टू देम. ध्यान से खेलना पड़ेगा. किक्सन ब्रिलियंट विद अगेन एन ओपनिंग फ्लैग, लुकिंग फॉर अ सेकंड. आई वुड ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, बट वो अकेले थे उस बिग बॉक्स के पीछे. देयर वाज नोबडी एल्स. द एंटायरिटी ऑफ एपेक्स हैव ऑलरेडी रीच्ड बी, गॉट द प्लान डाउन. 3v4 सिचुएशन. स्टीको पुशिंग अप. सोच चुकी है एपेक्स, द ओनली वे टू कीप गेटिंग राउंड्स इज हेड फॉर ऑल द फाइट्स दैट दे कैन. सैंडबैग से पीछे छुपे हुए खिलाड़ी वेपन को सेव करने के लिए, दैट्स गोइंग टू बी अनदर देन ज़ाइवू. पोजीशन पता चल चुका है. लुक एट दिस, जेल को कोई अंदाजा नहीं है. ही इज जस्ट क्रीपिंग अप एंड गोज डाउन टू स्पिंक्स. आई नो राउंड्स मिल रहा है बट ऐसे इकोनॉमी खो नहीं सकते. ये इकोनॉमी नहीं खो सकते, उनके पास पैसा नहीं अवेलेबल ज्यादा. एंड एक और राउंड यहाँ पे एपेक्स को मिलेगा. स्पिंक्स पूरी तरह से जिंदा रहने की कोशिश, एंड इट वर्क्स आउट फॉर हिम. वाइटैलिटी वर्सेस एपेक्स. क्या ये तीसरे मैप तक जाएगा? तीसरे मैप तक जाने की संभावना नजर जरूर आ रही है, लेकिन एपेक्स को फ्लॉलेस काउंटर स्ट्राइक खेलनी होगी. यहाँ पे वाइटैलिटी को पुली करना होगा, लेकिन अगर वाइटैलिटी ये मैप हारती है तो बहुत ज्यादा सवाल उठेंगे उनके ऊपर एनालिस्ट डेस्क पे, खास तौर पे इस वजह से बिकॉज हमारे एनालिस्ट कह रहे थे वुड बेट द लाइफ ऑन वाइटैलिटी ऑन दिस मैप. एंड यहाँ पे आप बात करें एपेक्स की, खिलवाड़ कर रही है उनके साथ. Full of util, having great weapons. AK भी है CT side पे, along with M4A1S. Dump of util, सीधा जेल पूरा डैमेज ले लेंगे. He is now going to be at half of his health. दोबारा सिमिलर स्ट्रैटेजी पुल ऑफ करने के लिए ट्राई कर रहे हैं. आई थिंक डुप्री स्पॉटेड. जी हाँ, he wanted to catch him off guard. बाई के अपने आप के लिए टाइम. finds the first opening flag. मिड की तरफ से पुश आया जरूर है, but Spinks along with Dupree playing together, they making magic happen. डिनाई करेंगे बी से पुश. मिड का कंट्रोल लेना पड़ेगा जिसकी तरफ मजिस्क जा चुके हैं. he will hold off connector. CT को होल्ड ऑफ करते हुए एपेक्स नजर आ रहे हैं. A 3v5 situation. Kixin still alive and kicking, looking forward to an opening at A. Apeks शोल्डर दिख चुका था. स्टीको ट्राइड फॉर अ ड्यूल बट मौका नहीं मिला. स्टीको को बैक ऑफ करना पड़ेगा. अभी उनको भी पता है कि कनेक्टर की तरफ से तकलीफ आ सकता है. What a round are we seeing? Apeks looking forward to equalizing the score, Mamba. या कोशिश जरूर होगी उनकी इक्वलाइज करने की, लेकिन जो दो मैन का डिसएडवांटेज है उनके पास, दो प्लेयर्स की कमी, वो जरूर महसूस होगी उनको. वाइटैलिटी पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करेगी एपेक्स को इस राउंड में. या 14वां राउंड होगा या 13वां राउंड होगा, ये पता चलेगा हमें बस 20 सेकंड के अंदर. लेकिन ज़ाइवू स्पॉट कर चुके हैं प्लेयर को, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है. फ्लैश, स्मोक, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे. लेकिन किक्सन 2 पिक्स निकाल. ज़ाइवू नहीं, मिसक्लिक. क्या भुगतान करेंगे इस चीज का? नहीं, बिल्कुल नहीं. लेकिन C4 प्लांट जरूर हो जाएगा यहाँ पे. प्लेयर को स्पॉट कर चुके, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. वो मिसक्लिक बहुत भारी साबित हो सकता था उनको. Kixin tried his best. 2 निकाल चुके थे. He tried to bring the advantage. How many of them are there in the stadium? 2 साथ में अभी. बेहतरीन तरीके से यहाँ पे राउंड निकाला. ये देखिए, जब उन्होंने माउस घुमाया तुरंत तो गलती से राइट क्लिक हो गया था और बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता उनको वहां पे उस चीज का. लेकिन वाइटैलिटी, दे स्टिल कम आउट ऑन टॉप ऑफ दिस वन. एपेक्स डैमेज काफी ज्यादा दिया था उन्होंने. ये मेक और ब्रेक राउंड है एपेक्स के लिए. अगर ये राउंड हारते हैं तो मुझे नहीं लगता उनके पास कोई पैसा होने वाला अगले राउंड के लिए. उनका सफर यहीं खत्म हो सकता है.
दो ट्रम्पेट्स तो जरूर देखने के लिए मौका मिला. How many more are there? मैं ये सोच रहा हूँ थोड़ा. But Vitality again 2 round difference catch up करने के लिए for Apeks, 2 round दूर जीतने के लिए finding the opening Stiko, but ये Zaiwu का op and then a swing but just actually fails and falls. 3v3. Apeks giving their best shot in all the duels. Swing check करने के लिए गए. He found nothing. Mid की तरफ से push कर रहे थे Stiko, but now is unable to connect. Zaiwu back. Heaven की तरफ से check करेंगे. Slight edge अगर कोई aggressive push कर रहा है क्योंकि Kixon has been enjoying those pushes. Oh, Shell punishing Dupree, but Zaiwu and Spinks quick. आखिरी खिलाड़ी knock 1v2 situation. RSI walks in. Oh, Spinks with a quick flick secures match map series point. Just one more. Mamba, just one more for Vitality. Apeks की जिंदगी, पूरी टीम की जिंदगी ये एक राउंड के ऊपर डिपेंड करती है. अगर एक राउंड Apeks हारती है, ऊपर से उनके पास पैसा नहीं उतना ज्यादा. वाइटैलिटी के फैंस देखिए कितने ज्यादा हाइप्ड अप है यहाँ पे. Zaiwu एग्रेसिव पीक करना चाहते थे लेकिन अब पीछे हटना पड़ेगा बिकॉज फ्लैश बैंग आया उनके ऊपर. मोमेंटम बिल्कुल नहीं देना चाहते थे, बिल्कुल जगह नहीं देना चाहते थे Apeks को. फुल ऑन कोशिश करी उन्होंने अनकंफर्टेबल महसूस कराने की Apeks को मैप कंट्रोल लेके, लेकिन नहीं, इतनी आसानी से नहीं. स्पिंक्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है अगर वो यहाँ पे टेक डाउन होते हैं तो, लेकिन एंगल होल्ड कर रहे हैं फिलहाल के लिए. देखना ये बंदे क्या ये किल निकाल पाएंगे. फ्लैश लाइनअप हो रहा है, जी हाँ, यूटिल लाइनअप हो रही है यहाँ पे. ये रन बूस्ट भी कर सकते हैं, बक्से के ऊपर भी बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन बक्से के ऊपर बूस्ट नहीं करने वाला. स्पिंक्स कुड गो फॉर स्प्रे डाउन यहाँ पे. फ्लैश आएगा नहीं, बट ओह माय गॉडनेस, स्पिंक्स 3K मेक इट अ 4K. नो, साइको जवाब देंगे उनको. साइको JL ये दो प्लेयर्स के ऊपर पूरा का पूरा दारो मदार यहाँ पे. Apeks को टूर्नामेंट के अंदर बना के लिए, लेकिन C को एक और किल निकालेंगे. 19 HP 1 वर्सेस C4 है उनके पास, लेकिन 50 सेकंड. Zaiwu अपनी ऑफ फेंक देंगे पीछे, बिल्कुल मौका नहीं देना चाहते उनको. इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है सामने वाले प्लेयर की HP बहुत ज्यादा कम है. काफी स्मार्ट प्ले, बिकॉज अगर यहाँ पे Zaiwu मरते हैं तो गन नहीं मिलेगी, गन नहीं मिलेगी Psycho, लेकिन ही स्टिल कीपिंग द होप्स एंड ड्रीम्स अलाइव. पिक करना चाहेंगे जरूर, लेकिन बिल्कुल HP नहीं उनके पास. एक करके एक और बार, जी नहीं. Vitality makes it to the grand finals. और ये देखिए खुशी देखिए Vitality टीम की, उनके फैंस की. कोशिश करी Psycho ने वहां पे, लेकिन Vitality came on top of this one. What a run for Apeks. They gave it their all. Just map में सब लोगों ने सोचा था it's Vitality, easy peasy for them. They gave them a run. It was show for a life, but Vitality अपने fans के सामने they had to stand tall. You can see Apeks इतना ज़्यादा खुश है अपने टीम के लिए. They've got the victory. Cuban जरूर अपने टीम को बताएंगे it was a great run. You challenged them. You made sure they had troubles secure करने के लिए. Zaiwu भी congratulate करेंगे अपने opponent को for putting up such a tough fight. Unbelievable show between these two giants, Mamba. Unbelievable. Audience push. Grand finals हमें मिल चुके हैं. It is going to be tomorrow. GamerLegion versus Team Vitality. दोनों के साइड French fans रहने वाले हैं, but it's going to be majority mostly towards Team Vitality. Tears of joy already coming in. You know what this means for all the fans. देख सकते हैं यहाँ पे, और ये मैजिकल मोमेंट का आनंद मैं व्यूअर्स को ऐसे उठाने देना चाहूंगा. I don't want to ruin this with our commentary. Well, Stiko, the journey ends here. I hope you can hear me okay, because this is wild. For you, a tough game, a close game on Mirage as well. You guys put up a good fight. And even on Vertigo, there was chances. You made it competitive. But what was that like to play and play against this crowd? It was amazing. It was amazing, and it's a pleasure to be here. What this crowd did was something incredible.
And it's been a while for you, but you've come back with Apeks. You've shown full strength. You've shown full commitment. This has looked damn good. We've got the whole team joining us for this one. What do you make of this, though? When we see you went 3-1 at the Challengers, 3-2 on Legends to get through to this, you take down Nip in the end and Liquid in very good fashion. Is this just the start of something for you guys? Hopefully. I mean, what we were doing is months of hard work, and the fact we made top 4 here is a reason that it was worth it. And we were doing something right, and we will keep doing so. And hard work certainly pays off. And for you guys, all coming from different areas, all coming from different backgrounds, right? And then making this team work. Is it like a dream? Is it like a fairy tale? Like kind of a bunch of misfits that came together and made it work? Absolutely. I mean, we would love to top it over with the final performance, but it was impossible today against Vitality and the whole arena here. It definitely was. Well, I think you should give your semi-finalists here of Apeks a big round of applause. They put up one hell of a fight. Everyone's cheering for you right now, Dan. Apeks, you've been on some of the biggest stages. You've been in these arenas. But how does this feel now? Home? It's incredible. It's incredible to be here. I'm really happy we delivered win final of the French major, and it means so much. I don't know how to describe it, but the feeling I have is the best in my life. Now, I want to talk about that mirage a little bit to start off with. It was looking like they might have been able to take the overtime, maybe able to take that from you. But how good did it feel? Did you feel at that point you're like, okay, we didn't break when it got close, so this is ours now? I think that we should have closed more rounds on our city side. We lost so many clutches overall, but we all do control the whole game once again, and that's what matters. I'm just proud of my boys. Everyone is stepping up when it matters, and that's so good. It is definitely so good, and it's looking so good. You've now booked yourself the grand final spot. It's looking like the fairy tale in Paris. How does it feel? Does it feel like that? Do you feel like you can go all the way now? Is this it? Well, it's been 8 years that I didn't play a major final, so it feels good, I'm not gonna lie. But doing it here and giving everything to win it here will be the best gift we could give to French people, so no worries, guys, we will give everything. You certainly did. I don't think I need to tell them, but I'll just remind them. Guys, Apeks and Vitality are in the grand final tomorrow! That is the story of Vitality here in Paris, and once again we've witnessed a great example on the stage. Kudos to Apeks, really pushed them to their limits. They had a very commendable and honorable effort into this semi-final, but Vitality remained in control. The words of Apeks resonate, echoes with the truth. It was a team effort. Everybody stepped up when they needed. We've had a bunch of clutches going left, right, and center, but we stayed the course. We remained calm. This is a new Vitality, one that is poised to hoist the trophy here in Paris. Poise is a great word to describe it, Maniac. The way that Vitality were able to close this one out really honestly felt like they were never in such true danger. Even though Apeks was giving them some good punches here and there, Vitality felt like they were the team that was entirely in control. Excellent T-side calling. I'm glad that Apeks was able to back up his words, and when he said to me that they are the best T-side team on Vertigo, 10 rounds right there, it was incredibly convincing stuff. Good calls from him, good individual performances. I wanted that Sphinx ace on that last round, though. I'll tell you that. I wanted that one real badly because it would have been a great way to cap off what was an excellent series from him after not really showing up in the quarterfinals. So it's been some ups, some downs, but Vitality, they stay true, and they still yet to drop him up. Yeah, which is absolutely incredible. We were just kind of racking our brains in the green room. The only other time we've seen a team go absolutely flawless, not dropping a single map at a major, was when Na'Vi lifted the trophy back in Stockholm. I'm not getting ahead of myself here, Matthew. GamerLegion definitely present a tough challenge going into that
back-to-back grand finals, but it's crazy to see the flawless fashion that Vitality have done it in so far. I know, and I hate this bullshit narrative about the opponents they've played against. You can only play who's in front of you. Exactly. How responsible are you if Apeks kicked the ass of Liquid on their way to this semifinal? How responsible are you if GamerLegion made minced meat of Heroic in their semifinal to be in the grand final? Vitality can only play who's in front of them. And what the calm they've displayed in some of these rounds, 27, 28, 29, this to me is why they are ready to win this moment, because they are not breaking under pressure. I just want to relive the magic one more time in this winning mic'd up moment. You want flash? One middle. Yeah, I'm leaving. Two lot middle. Head solo. Head bomb. Head bomb. One time HP middle. Flash mid. Let's try mid. Let's try mid. Yeah, NP as well. NP as well. He wouldn't close middle. He wouldn't close middle. Take care. Go back to you, Maida. Yeah, I have it. Ladder last. Just run. Run. This one. Wait. Big guys. He's low. Got it. Get back. Yeah, hopper. Go. Just pure elation coming out of Vitality in that one. Magisk managing to get the final kill on the round, and we speak about the prowess on the T side. Magisk was the guy to really be standing tall, yet again delivering on that T side of Vertigo. Once again, absolutely stunning from Magisk. He delivers a recital, an orchestra that he put together on that T side, and I think it's the best of both worlds. On one hand, you can argue that individually he's fully mastered this area of the map. The stairs B, he's got so many different smokes he's playing with. He knows the angles, he knows the timings. He's punished his opponent so many times, but also, and as Maui was pointing out, the execute and the quality of the executes when they decide to attack that B bomb side was just too hard to handle for Apeks as well. A little bit of a nudge in that clip we've just witnessed. A little bit of Danish towards the very end. I'm jumping between Magisk and Dupree. Like when the stakes are so high, just diverting back to the language. Yeah, we heard them saying, you know, they'd say, go Dane, you know, just full Dane. Like, if you need to communicate in that language, hell yeah, go forward. It worked out for them in that final round. And yeah, Vitality doing beautiful stuff to close out that map. I mean, this has punched their tickets into the grand finals. This has created such a crazy story for Dupree, for Magisk, for Zonic. We talk about the Danes, and we talk about now how Dupree is setting himself up for a potential 5th major trophy. Nobody else in the history has accomplished that. He will definitely already go down as one of the best riflers in history, but he has a chance to have the most stacked trophy cabinet when it comes to majors too. We see some pictures of what I believe is Zawu's family just there as well. The fact that on the flip side of this, we have Zawu not with a single major trophy within his cabinet now. It would just be pure poetry for him to be lifting the last one on home soil tomorrow. And what desolation it would be if he doesn't. That is the weight that is on these players' shoulders right here. I mean, of course, Magisk and Dupree have skin in the game, Spinks as well. That's very obvious. But if you're Apeks, if you're Zawu, you are very aware of the situation that you find yourself in. You have 10,000s of people in this arena screaming your name every time you get a frag. Everybody's expecting for you to perform. Everybody's expecting for you to do well. And I think they're handling this pretty well. And they've been adamant about it. They've been honest. They say it comes with some pressure. Yeah. It comes at a price. We're feeling on our shoulders a couple times. But what I have seen from Vitality just commands respect so far. What we heard from Apeks in the winner's interview as well. He said this is the best moment of his career. Man has won a major before, but playing in front of this crowd, making it to the grand final in Paris means way more to him. It's got to feel completely different. You see how fired up he's getting. He is one of the most emotive captains in the space. He's right up there with Cadian, but I'm sure that the fire that Paris is lighting underneath him is helping him burn even brighter. And think about just a bunch of missed, I don't want to say missed opportunities, that's the right term, wrong term, but the moments, the accidents that have happened to Vitality on LAN in 2023. There is that incredible comeback from Liquid in Katowice, where Vitality were poised to make semi-final. They completely crumbled. They let it go. There is this ENCE moment in Pro League where they're 14-14. Zawu has 10 kills in about 3 rounds, and then somehow they still find a way to lose. And I think this, you can feel that this has built a new level of resilience in them, because they're aware that they've messed up a couple of these moments, and it ain't gonna happen today, not here in Paris. Unfortunately for Apeks, this is the end of the road for them. But props to Tico, man, for giving us some really mature
neutral words, and he was still smiling despite that, right? He said it was a feat in itself to be making it to the semi-final, and as he branded it, an impossible task to be taking down Vitality in front of their home crowd. And we need to start paying attention to some of these teams that are not in the partner space. Teams like Apeks, teams like GamerLegion, they have really shown us that there is so much talent, so much teamwork, so much skill brewing over there. If you watch close enough, you'll see that these teams have nades that are more efficient than some of the Tier 1 teams. That's why, even though they might not have players of the same caliber, they're able to push these teams so hard. The way that they're able to anti-strap, the way that they're using the utility, everything is showing that there is a thriving scene in what we consider Tier 2, but I don't even really want to consider it Tier 2. I just want to consider it the partner teams and the unpartnered teams. Yeah. Those teams with the smaller budget, with less resources, are still putting up great fights. They're playing excellent and beautiful Counter-Strike, and it deserved the respect that it earned at this event. Yeah, I think we can see what a roster like that can accomplish when all of their efforts and all of their time is 100% focused into this one event. That is, and it's not even a hyperbole, their Super Bowl, quite literally the last CSGO major that they were a partner of. So you can understand the quality of Counter-Strike they put forth. I know what you mean, Maui. I agree with you with the whole partner conversation. Sometimes the question is one of consistency. Can you maintain that level? But that's a conversation for later time. I think for now what we should do is respect what Apeks has been able to put on display here in terms of the Counter-Strike, the emotions, the resilience they've put in, some of the new profiles we've gotten to know. Kixen is a name that we obviously have to put forth, and that was a very honorable try to put forth. And I want to flip it back over to the pre-game interview that we heard from Zonic, right? He was talking about this new generation of Counter-Strike talent brewing, and you have to respect that because Apeks, they did push and prod Vitality. Sure, as you aptly put it, Matthew, Vitality don't break, they just bend around that and manage to close out into. Yeah, I mean, listen, this is how a healthy game is supposed to be, that you have new players coming in, new talent, new faces, new profiles, new charisma, new characters. Kixen is one, of course Shui is another one that we are putting in under the spotlight more and more because they've seized that opportunity. They've had every single eyeballs of the CS community on them and they've made the most out of it. And I'm excited about it. I think this is healthy. Sure, you would like Namesake, you'd like G2, you like ENCE, you like Mouse, all of these names, but that's just one side of the story. The other is about deserving, earning that spot, earning that game. And some of the new names, they've done just that. Yeah, exactly. I mean, I don't think there's really much more to be said about that. It's just that the Tier 1, some of the teams that are partnered just weren't actually able to find that form here. Yeah. And on the other side of things, I mean, we're going to remember GamerLegion. We're going to remember JL, Kixan himself, the fact that he changed the entire outlook of this Apeks lineup, made them look like a completely different team. One that was losing in Tier 3 lands in North America. I'm talking Fragadelphia. They were coming in 4th place in. And then Kixan gets him to a major semifinals. Pimp said it. I'm going to reiterate it. Best signing of the year in Kixan because Apeks is now on the map. They are on everybody's radar. Matthew, I don't want to bait you into anything. I don't want to jinx you here. But do you believe in Vitality withstanding the pressure tomorrow? Because undoubtedly, I mean, for Zawi, for Apeks, now we've heard him say how important this is to him. Do you feel like this is their time? Do you feel like it's written in the stars? I have never doubted. You haven't. You'd put them in your pick'ems. It is their time. Yeah? I've said Vitality were going to do it in Paris, and I am very much confirmed into my feeling, my opinion. I think it's not coming home. It's coming to Paris. Yeah, no team in Tier 1 has actually won back-to-back S-tier events this year, but it does look like Vitality are on a warpath right now. That trail has been blazed already. It is right there before them. There's only a little bit more to go. GamerLegion have put up a great fight, but you'd be insane to say that GamerLegion are the favorites. It's obviously Vitality's tournament to win. It's also theirs to lose, too. Yeah, let's take a look at the schedule to see exactly what is on the cards heading into tomorrow, because, of course, oh no, this is today's results, sorry. And the biggest upset of the entire major, Heroic, out. Their name was plastered all over the trophy alongside Vitality's. That was the grand final we were expecting. Hell no. GamerLegion said, shut up. Once again, you just have to respect what GamerLegion did in that third map. It was insanely decisive, insanely unilateral. What the hell just happened on that? They just took a massive dump on any kind of scenario we thought we would have in the grand final. Sure, Heroic Vitality sounded great for all the movie makers and book writers out there, but this is not what we're going to get. In fact, we have this sort of clash of opposition between the most established names, the likes of Dupree, Magisk, Apeks, and then the new generation coming in GamerLegion, and that is in itself quite poetic.
prophetic that they will fight for the last trophy. Yeah, I'm so excited to see that go down tomorrow. Also excited to see our unicorn predictions coming at you thick and fast because, yeah, I went with the Danes, so did most of us, but apparently You're doing the good. Insanity has order. Yeah, you're acing that for you. Yeah, man. Only French I see Nations managed to get, yeah. Londer's got 4 points scoring as well. I've made very terrible decisions this whole playoffs. Well, you have one more decision left to make tomorrow. Oh, that's already made for you. My decision has been made ever Yeah. since we came into Paris. Well, you know, Chad had us play a little game, didn't he? On our first night that we were here, he asked us to put who we think was going to be winning the major and who was going to be the MVP of that. I'll reveal that tomorrow. Yeah, it's on Twitter, but we'll keep that card close to our chests, I think, because tomorrow, of course, we have the show match going down. That'll be starting at 3 p.m., which you guys have had your say in over at blast.tv. But then that coveted grand final later on today. And the final one, Matthew, can you believe 10 years of CSGO is all going to be coming to a culmination tomorrow? No, I cannot believe it, actually. I don't think my brain has quite comprehended the magnitude of what's about to happen tomorrow. I've been kind of stuck into the whirlwind of what happened this weekend, and I think we can empathize with the players. They're probably in a similar situation. You know, they're getting on the stage, they're getting all excited and hyped up, they play their game, but there is something bigger than all of us that's happening here. We're closing a chapter, an incredible chapter. Maui, I just want to give you an opportunity to say your farewells to CSGO because it's been absolutely magical having you up on the desk here for the final CSGO Major. And thank you so much for everything that you've given to this game. Anything you want to say to everyone at home? Just that I want to just take this time to thank everybody who's been watching. I know not everybody has been liking what I've been saying, but I'm just spitting it as it is, okay? I'm using a little bit of opinion. I'm just trying to bring out some emotion because I'm not trying to always just say everything's hunky-dory, everything's good. Sometimes emotion needs to be at play. Good art isn't always happy fun time. Sometimes there's sorrow, sometimes there's loss, but sometimes there is elation, and I'm trying to bring all of that out with this game. Spit in straight truths, Maui, and that's exactly why we love you. Thank you so much, gentlemen, for joining me for what was semi-final Saturday here at the Blast TV Paris Major. But more action on the cards if you're watching over on blast.tv as the overtime show is coming at you.